And I hope you guys can see my screen, right? Just a black screen you should be looking at. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Okay, great. So let's get started, guys. Let's get started with firewall, right? What exactly is a firewall? So no fancy definition, no bookish definition. You are required to have a firewall in your network. Just an overview of firewall, okay? Because you need to protect the perimeter, okay? Also, you need to protect your application. So there can be different stages or different locations in your network where you would want a firewall to be implemented, right? The very first is, let's take the bigger picture. This is the perimeter of your network. This is where the network starts, or your enterprise network starts, or the data center starts, or whatever, right? So you call them the perimeter firewalls, right? Here you would control who can access your network. These will have services like remote VPN and all, okay? The work from home doing people, they'll be connecting their remote access VPN or SSL VPNs to these firewalls. They'll be responsible for all the site to site VPN connectivity and all that, right? We'll be looking at these terms in detail, but yeah, this is one location where your firewall can be. The other location can be right in front of the applications. You call them internal firewalls or application firewalls, right? The basic network would look something like this, right? You'll have the inside. Any firewall would, basically divide your network into three different zones. Inside, outside, and DMZ, right? So depending upon which vendor it is, you will have naming convention of these sections of the network. DMZ is kind of a standard, okay? Like Palo Alto likes to call it the trust zone, right? Cisco would call it inside, Checkpoint would call it inside, right? And on outside, Palo Alto calls it untrust zone. So it's all one and the same thing, different names, but same meaning. Yeah. And there are standards, which means you can say a predefined, um, an unsaid rule, you can say. Yeah. You may want inside users to be able to go out to internet, right? But you should not be having anybody coming from outside to inside, right? Also, let's say in the DMZ is basically, if the term is new for you all, DMZ is holding all your servers, right? And services. Let's say I am hosting some web service. I will have users on internet. So that service has to be accessible, right? Which means the firewall needs to allow the users coming in for accessing these applications, right? The inside is your network, basically, where your employees would sit, or your internal users are sitting. This is always segregated from the internal servers. Why is that? Because servers are something which are supposed to be accessed from outside, right? Not the PCs, not the employees. They don't, their PCs, their machines, they don't have to be accessible from outside. Okay. So the rules go like this, that you're allowed to go from inside to outside, or trust to untrust. And from untrust to trust, you don't really allow, or you don't really make any policies, right? That's not a good practice. Yes, you will obviously have to make access from outside to DMZ, but again, you will never have DMZ talking to inside, right? It will never be there. Not a good practice. Why?
because if there are attackers on the outside, right, they may act up as users, get access to the DMZ, and from here they may try to exploit your internal network, right? So you would want that to be blocked. Yeah. So no DMZ accessing trust, but yes, your internal users should be able to access those websites, right? So all both ways, single ways communication, all can be controlled by the firewalls. Okay, no matter what place they are kept, be it at perimeter or be it at application, it typically divides your network into these three portions, right? And however is the requirement, we can create the policies. Whatever I just explained is more of a generic concept that this is how the firewalls will allow the traffic, right? What traffic will be allowed, what policies will be created to allow this, what will be the natting profiles, natting rule created, right? We will all look at that. Now, there is a very important concept that you need to understand in case of firewalls. Like you have worked on routers so far. Routers, how do they take decisions? Routers take decisions on the basis of routing table, right? You have similar entries. If a destination is matched in the route, it selects the outgoing interface, and the router would simply forget about the packet. That's more like packet forwarding or packet-based processing. Same goes with switches, right? They also do the same thing. They would do the layer 2 lookup, look at the MAC address, look at the destination MAC the packet is trying to go, and forward it on to the exit interface. But this is not the case in firewalls, right? Firewalls, they do remember and they make connection tables. For example, this is my internal user trying to go out through the firewall, right? Let's say these are the, my policy says that this is the trust user trying to go to the untrust environment, and the direction of communication is from trust to untrust. Now the communication is getting initiated from where? From the trusted side. So this is allowed, right? Let's say this is 10.001 trying to go to 100.001 on the internet, right? Now the communication, since the communication is initiated by the internal user, there will be response coming back. Yeah. Simple things. Response coming back from the untrusted side trying to go to the trust. So this particular packet, the response packet, is allowed. How is this allowed? By looking at the connection entries, because the firewall, it remembers the packets going through it, passing through it, right? It remembers that there is a request made from the trust zone going towards the untrust, right? Hence, the response to that request is allowed. But if there is a fresh request trying to come from untrust, right? Trying to come from untrust, and the destination is trust zone or anybody inside this trust zone, this will definitely be blocked by the same rule. Okay, you don't have to have extra rule for blocking this communication, right? Blocking this request coming from outside. You have a single policy which says that, okay, let me put it here, which says 10 network, right, is allowed to go to any destination, right? This is my rule number 1, for example. So the same rule will block it, okay? Will block the request, because these rules work in stateful manner, right? All of this concept is called stateful packet inspection, right? We went a little reverse. I explained the logic and then the heading, but that's how it is best understood. Stateful packet inspection.
right? This stateful behavior is kind of normal now in all of the firewalls, right? All of the firewalls would do this. Okay, any questions in this? Let me explain one more time before you guys start asking questions. Stateful packet inspection, the behavior allows the firewall to allow the communication coming from trust to untrust, that is using this rule, right? The response will be allowed, right? But not the request coming from untrust to trust, right? To have the request allowed, we will have to have a policy which will say something like this: anybody should be allowed to talk to 10.0.0/24. We would have to have this kind of a rule, right? And there is no good reason to have these rules, because you don't want anybody on internet to simply talk to your internal network, right? There's no point of firewall then. So you would never create this rule. All right, so this is stateful packet inspection, and this is common behavior of all of the firewalls. Okay, let me know if you have any questions. Sir, the first question is, in the first slide you said trust to DMZ is allowed by default. Means we can make the connection. Right. The first slide, and the second, I mean, it is not like it is allowed or disallowed. It is a general practice that this is how we design our policies, that you would want to allow trust to DMZ and then outside to DMZ and inside to outside. But inside means anyone can access the DMZ zone, right? But not from outside, untrust. No, DMZ is meant to be accessed from outside. DMZ is holding all the services that you are offering. Okay, so we need to make the policy, then it can happen, right? Yes. Okay, and the second and question we will get into like what are the default behavior of the firewall and all that. Okay. Right? Okay. I'm not telling you the defaults right now. I'm telling you a generic way that this is how you will build your security policies. Okay, sir. And sir, that's from the trust to untrust zone. Okay, if 10.0.0.1 is trying to access 100.0.1, connection will, first of all, the firewall will check the connection, means which port. That means I meant to say the stateful packet inspection will check, and it will make the connection entry in the table, right? Right. Okay, but once the response is coming, it won't check because the connection would be there, so no need to check. So it will bypass simply, right? Yes. But from the untrust zone, in if 100.0.0.1, how can that you said the 10.0.0 it will be applied for the same rule, so it will deny if anyone is for a firewall to allow a particular packet, there has to be either of the condition that should match, right? First is either there should be an entry in the connection table. Okay, if there is an entry in the connection table for that particular packet, yes, it is good to go to the destination. Second is there has to be a policy. If there is no existing connection, there has to be a matching policy. Okay, if connection is not there, the policy should be there, then we can bypass the traffic, right? Right. Okay, and in Palo Alto, sir, we call it means checkpoint we call it rules, and Palo Alto we call it policy, right? Hello. Give me a minute, Sam. Just give me a minute. There's some student calling who's not able to join. Okay, sir. Yeah, you could call it a policy or rule. Doesn't matter on what firewall vendor you're using. Okay, it doesn't matter. A policy, a rule. You could call it. I mean, if you go back to the example that what he was saying, let's say you're having a party, right? And you have 15 people inside that party. Those people, you have a list of people that can come into that party, right? Okay. And if somebody else went out, right? Then it says, oh, I'm gonna go out check something real quick. Then when that person comes back, you're gonna let him in, right? Yeah. Because he was there before. So the Palo Alto has a database that keeps all the connections.
Okay. You know what I mean? Think of it as your three-way traffic. You got a three TCP traffic. It keeps all that traffic. Any new traffic, like if the traffic is coming from inside, it's going outside, right? Mm-hmm. And it's gonna be allowed. You have a policy that allows that traffic. But if a fresh new connection try to come back, Okay. so but the Yeah, firewall is gonna say, hey, wait a minute, this is a new connections. I'm gonna drop that traffic. That's So what TCP three-way the handshake instructor said. also happens in that case, I think. Correct. Yes, it keeps Okay. it has this database that keeps Mhm. all the connections, the SYNAC, the ACK, the all that. Okay. Yeah. Okay. Hey, Thanks, Sam. mate. Hey, thanks. Was Thank that? you, I'm sir. not sure of the Got name. it, sir. Got it, sir. You got it? Okay. Yes, sir. Sir, one more question. I have, actually, how many connections they can store in his database in Palo Alto? That depends on the hardware model, right? That depends on which. There any maintain any session like that can store up to this like this? That's what I'm saying. Palo Alto starts with the basic model, that is the VM50, right? It's a virtual machine, and it goes up to I think 8500 model. So it all depends on the hardware specifications, right? How it's like if I ask you how much processing your laptop can do, right? So it depends on how much RAM and how much CPU that your machine has, right? Okay. Yeah. Okay. So that will be something that you can check in the data sheet of individual model. Okay. Okay. Mostly So right now just companies are basic, using uh, 20. just a basic concept, guys. Right? It's like when there is lockdown, right, and all of your family members they're inside the house, right, and somebody knocks at the door. You will be asking 10 questions to them, right? Why do you want to come in? And those are your security policies. So when there is no existing connection, right, you would want to have security policies on the firewall that will allow the connection. But if the connection is already out, right, you may simply check the connection table that do we have a request for this packet, right? So if there is an existing connection that exists for this communication, that bypasses the policy check, right? Okay, so that's the generic concept of statefulness. That's the stateful behavior, right? All of the security policies, they will be stateful in nature. All of the dynamic natting and all those, we will talk more about it when we do natting. All of them, they are bidirectional and stateful in nature. Right? Not bidirectional. Let's just stick to one term for now. That is stateful. Right? And somebody has turned the video on. We don't want to see faces, guys. Right? You can turn off the video. That I don't mind you turning on the video, but when any of you turn the video on, it gives me notifications here and disturbs. All right, so let's come back to Palo Alto. Let's talk about some Palo Alto basic stuff, right? As I mentioned, starts with VM50, right? Go ahead and check the data sheets on the Palo Alto website. And the data center version, I think it is the 8500 series, which is used in the data centers, which is like a multi-chassis device, right? The operating system here, which is running on Palo Alto, is known as PAN-OS, right? Palo Alto Network Operating System. The version we can look at, the latest I think they're running is 11. I'm not very sure on this, but the point is we will be doing things on 9 or 10. I'll check whichever version is there in the lab with us for most of the practicals. But for the HA, right, we will have to go back to version 8. I'll tell you the reasons when we do HA. Okay. So that's what we will do. And not much of a difference beyond 10, like 10 and beyond 10, there are some cloud features that have been added. So 9, you can say, is the latest if you exclude all the cloud features. Okay.
So 10 and beyond, they're all about features added like SD-WAN support and all that. Yeah. Okay. Some basics about Palo Alto firewall. Now let's place the same in the same network. This time it's a Palo Alto firewall. Okay. Now Palo Alto firewall is a zone-based firewall. Okay, it is zone-based. By default, you have two zones, that is trust, untrust, and then you can create a DMZ. There are some meanings of these zones. Meaning as in interzone. Interzone means between two different zones, right? The communication between two different zones is not allowed, which means by default, if you place the firewall in between and you expect it to work, the default way will be all of the communication will be stopped, right? Even if you're trying to go from trust to untrust or however, right? All the communication going from one zone to the other will be blocked. By default, the intra-zone communication will be allowed. For example, if you have another VLAN here, they both are in, right? They both are in trust zone. Let's say this is 10 network, 20 network, they both can communicate with each other without any restrictions, right? So this is the default behavior of the firewall. Intra-zone communication is allowed, inter-zone communication is blocked, right? And beyond this, on top of this, all of our security policies, all of our manual security policies will be created. Okay, any questions in here? Are we good? All good, sir. Okay, awesome. And when you, I So think I'll- same for DMZ as well. Means this yeah, is same for also DMZ as well. for trust to It's untrust, like trust any to other DMZ. zone. Okay. And you know, the names are more like they're picked up from the documentation of Palo Alto, right? All of the documentation that Palo Alto has created, they follow this naming convention. But when you create zones in production, you can give pretty much any name to these zones, any name which is meaningful, which goes with the naming convention in your network, right? You can put pretty much any name to these zones, right? And the rules will still exist. Interzone and intrazone communication. Intrazone is allowed, interzone is blocked by default. Cool. Yes, sir. Now let's look at the GUI of the firewall. Let's do some basic configuration. I'll talk about how do you assign IP addresses, how to get the firewall running and all. Okay, in the meantime, while the devices are starting up, let me just explain the topology. Here, we will be using this as the trust machine or the trust zone, right? This is, of course, the DMZ, and this is your outside or untrust, okay? This is taking IP address from DHCP. At times, you may face errors with this, but I'll tell you how to sort out those. And there is a dedicated management interface on all of the Palo Alto firewall models, right? Right from VM50 to all the way to the top end firewall. So a dedicated management interface is there. Okay, and that reminds me of a few more things that I should be telling you. While the device is starting up, any communication
Okay, listen to me very carefully. There can be two type of communication. The communication which is going through the firewall, which means you have some source IP communicating to some destination IP, and this destination IP is not residing on the firewall, right? It is some destination on the internet. So that is the communication which is going through the firewall. Okay. There can be a communication which is going to the firewall, right? Where the destination IP address is sitting on the firewall. It could be the interface IP address or a loopback IP address, right? Or the management IP. Let's say you are trying to do SSH on port 22, right? On Ethernet 1/1, or you're trying to ping the interface of the firewall. Not allowed, right? You cannot. And all of this is by default, by the way, right? By default, if you're trying to ping the firewall, let's say this is 10.001, you try to ping 10.1, it will not be pinging. Okay. So you mean to say that through the firewall, the traffic will pass through the firewall to Through the firewall again. By default, the two rules, interzone and intrazone, that will be applicable. Plus, on top of this, you will have your manual rules. Yeah. Okay. So if the security policies allow the communication, yes, that will be allowed. Otherwise, the intrazone and interzone defaults will be applicable. Apart from this, if the communication is intended to the firewall, you're trying to ping the interface, you're trying to do SSH, Telnet, HTTPS, or whatever, right? You will have to ICMP. make amendments. Yes, you'll have to make amendments to the configuration. By default, that will not be allowed. Yes, you can. Let me speak. You can ping the management interface, you can do SSH, you can do HTTPS on the management, but not on the data interfaces. Sir, can we ping that DMG server through that machine? Through which machine? That Windows machine. अरे जो मैं बता रहा हूँ ना, उस पे ध्यान दो, ठीक है? We will talk about DMG later on. बाद सब बताऊंगा मैं, ठीक है? Let's just focus on things which I am talking about. All right, so if you're trying to communicate with the firewall on the management, there are some default protocols through which you can communicate. ICMP is allowed, right? That uses ping. You have HTTPS that is allowed, and SSH is allowed. So which means we can tweak this, and we can also tweak that who can access the firewall on the management interface. Right? For example, we can dedicate a server. Let's say its IP address is .10. So we can put a configuration on the firewall that only and only 10.0010 can access the firewall on the management interface with these protocols. Right? So having said that, let's. So, but sir, this is for particular users that they can access, not for all. Yeah, like in all of your corporate networks, you will have dedicated management network, right? You'll have a subnet dedicated for management access only. Right, sir. So in those cases, you may want to put, maybe not host specific, but you may want to put a network at least. Let's say your management is 10.000/24. That's your management network. So on the firewall, you will put that network, that only this network can access the firewall on the management interface. Okay. Okay. Okay, sir. By default, sir, three things allowed: SSH and ping and to manage. Right? Yes, on the management. Yeah. Okay, and when you access the device, I'm not sure which version it is. Let's check that. When you will power it on, just give it some time on this prompt. Okay. Now I think we should be able to log in. The default is admin.
Yes, we are able to log in, but the firewall is quick to boot, and in no time you will see this prompt. But if you immediately try to log in through these credentials, you will not be able to log in. It will say wrong password and all that, right? That is because the firewall in the backend is still processing and getting the database ready for you to log in, right? So just be patient and give it 5 minutes to settle down, and then try to log in. You'll be able to log in. I'm checking the management interface. Okay, right now you see it is set to unknown. That is because by default also when the firewall is out of the box, it is set to have IP address via DHCP, okay, on the management. And here you can see there is no DHCP server for the management interface. So I will change the configuration to a static IP address, right? And let me show you how do we do that. Have you guys worked on Juniper devices? If yes, you will feel at home on Palo Alto firewalls, because the CLI is more like Juniper devices. And I get into the config mode. Anything related to the device, right? Be it the device name, management IP address, DNS, NTP information, right? Or any other system setting, you always go under device config. So set device config, system, before you give IP address, you need to change the type from DHCP to static. Okay, so first I change the system configuration type from DHCP to static, and then I issue the same command with IP address n.0.0.54, for example, or for the management I'll use 192.168.1.1. Mask /24, right? And are we good yet? Is the configuration saved? No. On the Palo Alto firewall, you have running config, right? You have candidate config, and you have stored config or saved config, right? So whatever changes we are making live, right, through the CLI or through the GUI, they are happening here in the candidate config, which means you see them happening, but they are not really applied to the running configuration, right? So we will always have to do commit, right? You will have to commit your changes always, right? This is specific to Palo Alto. Like in Cisco, you don't have a concept of candidate config. All the changes you do, they are directly impacting on the running config, right? So having the candidate config gives you an added advantage. What is the advantage? The leverage to make mistakes. Yeah, you can make mistakes. You still have time to realize that, okay, I've done a mistake. Let me revert back. Let me correct the configuration before I push the changes to the running configuration. Means before you commit. So when you commit, two things happen. Your candidate config gets copied to the system memory,
means it goes to the running configuration, and also it gets saved. Okay, so always whenever you are making changes, make sure that you commit the changes. Same like Juniper, no? Shokesh? Sorry. Same like Juniper system. Yeah, as I mentioned earlier, if you worked on Juniper, the CLI will be very familiar. Right, we check again, show interface management, and we now have the IP address, right? And by default, there's one more default that you should be aware of. For example, that I am on the firewall, right? And I am trying to reach some destination. Let's say I'm on the firewall and I do ping 8.8.8.8 in this situation, right? Will I be able to ping? The answer is no. And I will not be able to communicate with ping with this public IP address, right? Even though I have public connection, even though I have default route connected and everything in place, right? Because by default, when the firewall initiates communication, and not just for ping, be it any communication, the communication initiated by the firewall always gets initiated from the management interface. So if you simply ping 8.8.8, the source IP in the packet will be of the management, that is 192.168. .1, and the destination IP will be 8.8.8, right? And this will try to go out via management. So whenever you're doing, either do one thing, you change in the production, you can change the default, and you can make it behave like normal devices, right? But that is not recommended, because in the corporate, you will always have your management interface having a separate network, and that separate network will have its own security levels, and that will communicate with the Palo Alto servers for license and getting the updates. So that will not be a good idea to change that, right? So always when you do ping, add a source to that, right? Source whatever IP address is there on Ethernet 1/2, right? That's when it will be forced to go out via 1/2. Okay, I'll show you. I'll demonstrate all this. Okay, let's get into the PC. So I think we need to change the IP address. Sir. Yep, that's the first thing you'll have to do. Yes, sir. I have connected this hub for a reason, so that you don't get confused which one to connect with what, right? So Ethernet 0 and Ethernet 1. So simply replace Ethernet with local area connection. So Ethernet 0 is local area connection, and Ethernet 1 is local area connection 2. And Ethernet 2 is local area connection 5. Okay, so in the increasing order, simply read Ethernet as local area and go on the increasing order. So if I were to give IP address to Ethernet 0, I will go to local area connection. I will dedicate this for the management. One 192.168, 1.10. No DNS, no gateway needed, as we are directly connected. Right, and for now, I will disable the internet connection on the PC. We will try to, in the coming classes, we will try to reach the internet via the firewall, not directly. Okay, so I have disabled this. On the local area connection 2, that is Ethernet 1,
right? So let me just add little text 10.0.0.0/24. This is your trusted network. Okay. And this is for management. The firewall is .1 on both. Right, and the PC is .10 for both, like 10.10 for Ethernet 1, which is connecting, and 192.168 1.10, which connects to the management. All right. So once that is done, you can access the firewall through the browser. Okay, I think we are on version 9 or something. Definitely not 10. Okay, the message is you're using the default admin account, right? Consider changing the password before you deploy this in production, right? Obvious things. You would not want to have default password on your firewall. Okay, even better, we are running version 8. This is good for HA and other things as well, right? But coming in the coming classes, I'll try to show you version 10, right? Which is the latest. 10 and 11 is like more or less the same. So we'll go through the newer GUI. Trust me, just the changes in color, no changes in the placement of objects, right? And some additional cloud features. That's it. So for now, let's do things on this as well. As you can see, this is a virtual machine model, right? It's a Palo Alto VM, and the VM mode that it runs on is KVM. That is specific to EVE-NG, that is the hypervisor, which is facilitating the hardware to this virtual machine. The version, software version is 8, right? These are the other next generation features like application version, URL filtering version. All of this needs licensing, right? So I'll be telling you, we'll talk about this, but not practically. And these are the widgets, by the way. These are on the dashboard. These are default widgets. Talks about system logs, logged in administrator, and we can have more of the widgets. For example, you can have it for interfaces. These are the interfaces. If anything goes, the change in status will be reflected here, and very useful, the HA widget. Right? These are like the widgets that you see on your smartphones, right? They don't actually hold the data. You cannot really configure things here, but it is pulling information and displaying it here. Yeah. Any device changes, as I mentioned, in the CLI. And the CLI, guys, it is designed in such a way that if I were to tell you a command, I can look at the GUI and tell you the command. Okay. For example, I have to change the IP address. It will be under the device config, right? Set device config
management, right? Set device config system, right? Similar to it. When I have to change the IP address, the command will be set network and the interface, or set network and zone, right? So the CLI is more like aligned with the GUI, right? That's the best part. Yes. Yes. Now, before going forward, I have to ask one question which you have already just explained. So can you just show me this picture again? Sorry, which picture? Network diagram. Okay, this one. Yeah, this one. Why we disable this E2 port, and if we not disable it, what will happen? Or else, why we are using this here? Because we are using this external traffic. No, for that we have connected this. Yeah, Net. we are using this here just in case that you need internet connectivity from the device. I've Server. connected this for you. Not just for the server, for example, this server or this PC, if you require any software from internet, you can download that. You can simply enable this and download software from the internet, right? It is just to give you internet accessibility from the inside of the directly device. From Windows Server to outside. That's all. But then Right. why you just stop it? I mean, disable it. I disabled it because we are now about to learn that how would you create policies on the firewall that will allow the communication from the PC to internet. If you not disable this one, it will create problem. Yes, you will directly go through this path, right? If you have to reach a particular destination, there is a direct flight and then there is a layover. Which one you will choose? Okay. Right. And so actually, I thought that anyway, we have when you will, that's more of a layman way to explain. But technically, if you see, you will have to assign gateway on the PC, right? So the default gateway can be either this or this. That's what we have configured management gateway, no? Management is only for management. Management, but we have configured this Ethernet 1 gateway also. Already configured, no, in the Palo Alto this. Right. Ethernet 1 is connecting to Ethernet 1/1 here on the firewall. So yes, the firewall becomes the gateway. So you have to give the gateway information, right? So that will be also configured on the firewall, sir, right? Ethernet 1 means in the क्या confusion है? It's configured. It's configured. This is directly connected. This is directly connected. And if you want the firewall to forward your packets, you have to make sure that the packet from the PC reaches the firewall, right? Okay. What is the purpose of? Sham, it is configured. You say that already. No, has been configured. Hold on. Tell me, what is the purpose of this? It is the default gateway, right? Yes. To reach any destination, you go to the firewall. Traffic will go in this direction. Okay. Right. Hey, sir, my question was that you configured the gateway, but we haven't configured any interfaces on the firewall. That was my question. वो अभी करूँगा ना मैं. करेगा. Okay. So, is there any purpose to keep that that server? Means is there any the server is means in the coming picture? Yeah, this one, the Win server. I have not even turned it on. Okay. Don't be distracted. Okay, sir. Okay. Sukesh, I have a question. Like the Ethernet 0 and Ethernet 1, so both is assigned .10 or like. Sorry, come again. The Ethernet 0 and Ethernet 1 of this Windows server. So is it like .10 is assigned for both the interface or like? .10 is assigned for both. Yes. Only data interface, not management interface. Can you guys stop overthinking, right? Basic logic, right? Two interfaces will have different networks, right? Two interfaces of any layer 3 device will be part of different networks.
So Ethernet 0 is part of 192.168.1.0 network. That's .10 on Ethernet 0. And Ethernet 1 has 10.0010. Right? Yeah. तो इसमें तो फायरवॉल की कुछ बात भी नहीं है यार, क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग? This is basic stuff. Okay, forget it. Now let's try to configure the interfaces of the firewall. So under devices, it's just management interface. The data interfaces are under network. And even before configuring the interfaces have to be part of some zone. Okay. It is mandatory for the interface to be part of a particular zone. All right. So Ethernet 1/1. There are different type of interfaces. I'll talk about them one by one. Let me just configure it first. So the type right now is layer 3 because I'm going to assign an IP address to it, and IP address being a layer 3 entity, right? Hence the type layer 3. Virtual router. Okay. And the security zone. Let me just create a zone, then I explain about the virtual router as well. So I name it trust and simply okay, right? Which means now Ethernet 1/1 is part of the zone trust, right? And the IP address on this is 10.0.0.1/24. Yes, you can write like this in the GUI. All right. And about the virtual router, each interface have to be part of some virtual router in order to be able to do routing. Okay. The firewall basically has an option to create multiple routing domains. For example, in routers, we have VRF, right? Where you can create VRF instances and different interfaces can be part of different VRFs, right? So with the same logic, by default, there is this default virtual router, right? Named as default, but you can create more if needed. When would you need it? Right? You may think that why would I need multiple routing domains in firewall, right? That is if at all you have to create BGP peering with different AS numbers, right? For example, this is Google Cloud, this is Amazon, and the private clouds need the AS number to be a particular number on your firewall. So the requirement for Google Cloud is, let's say, 65,000, right? And for Amazon, it is, say, 64,000, right? So you cannot have two different AS numbers on the same router for BGP configuration, right? So that way you can have virtual router 1 and virtual router 2. This way you can have two BGP peerings on the same firewall. And very specific use cases, but yes, it is what it is. So for now, just understand that to do routing, the interface has to be part of the virtual routers. Obviously, you can configure OSPF, BGP, and all that, right? All the protocols are here. You can do static routing. You can do OSPF version 2, version 3, BGP, everything is there. About the interface types. TAP.
Tap interface is literally like a tap. Okay, you have the PC talking to the firewall or communicating through the firewall, right? And you as part of troubleshooting, you want to collect the data traveling from this interface to that interface, right? You want sampling. So you would simply connect a PC to this interface, make this as a tap interface. And this is literally like you open up the water tap every morning, right? The water flows through it. So simply a tap interface will give you all of the data, and you can collect it on the Wireshark, and you can do analysis and all that. Okay. So very specific use case. In production, do we use this? Answer is no. Right? Because firewall is a device with limited number of interfaces, and you wouldn't, the chances are very high that you will not have an interface which is empty and you can simply connect a laptop to it, right? You will always have to work it through the switches and through span ports. If you guys know spanning, remote span or local span, you can refer it, right? It's like mirroring the port. Anything that is inbound to this has to be shared on the other port, right? And the PC connects to the switch port, and that collects in the Wireshark, and you can analyze. So it is basically for troubleshooting. HA port is for HA. I'll talk about it later on. Yeah. Virtual wire is literally like a soft wire. Again, a firewall connecting two interfaces, and if they are a virtual wire will be something which connects them, bypassing everything, and the firewall will be bypassed, and it will be like a simple wire in between, right? No policies, nothing. When would you want to do this? When you want to configure the firewall, you're putting it new in the network, you would simply rack it up and then connect the management, connect all the cables, and you put them in the virtual wire. By default, out of the box, the firewall is in this virtual wire mode, right? You can do things like either you don't connect any data interface, or you connect them, configure the virtual wire, and when all of the remaining configuration is done, you remove the virtual wire and put the actual configuration, which will be the layer 3 config. Okay. So it is again a very specific use case. In production, do you really use this? Again, the answer is yes or no, both, depending upon how do you want to implement your firewall. You want to configure everything first and then rack it, or you want to rack it first and then remotely access it. It all depends on the different scenarios. Again, the other mode is a layer 2 interface. Layer 2 interface means it's still layer 2. It's still as good as a cable, but you can still have policies in place. Now it's not a wire that is connecting internally. You will have, you can still have layer 2 communication through it, and some limited firewall features can be used here. Do we use this in production? No, right? Because you can use only limited features of the firewall when it is running in layer 2 mode, right? Layer 2 is like buying a super bike and not going on weekend rides. Yeah. You are underutilizing the firewall if you're running this in layer 2 mode. Yeah. So most of the time, right? Like all of the time, not even most, all of the times the interfaces used will be either layer 3 or they will be HA. All right, having said that, let's configure the other interface, or even before doing that, let me show you something. We have to make the changes. Do you see the link state? It's still grayed out, which means the link is not up. You see, it is not configured and down. And that is because we have not committed the changes. Sir,
Can we create sub interfaces for these? Yes, we can. So while configuring the interface, you selected default there. So we could also configure virtual router from there as well, right? Yes, but the virtual router it's already there named as default. You may want to rename this. You can do, yeah. Normally in production, people don't do it unless you need multiple routing domains. Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share, and subscribe for more future updates. Okay. Sir, there is zone and security zone. So what is the difference? Zone and security zone. Like in under. You just see zone. Where is security zone? No, you choose in Ethernet 1. Sorry. Under yeah, inside. Yeah, Yeah, trust it's one and the security. same thing. It's one and the same thing. Zone or security zone, it's the Okay. same. Okay. Right. So for now, we have created one zone, that is trust, and we have made Ethernet 1/1 part of it. No, Okay, there and is we showing have- security zone and there was left side showing it's only zone. So that's income. Okay. Okay, sir. Good. समझ गया ना? समझा कि नहीं भाई? हाँ सर, क्लियर हो गया. हाँ, ठीक है. Okay. Now let's verify things which we have been talking about. And I try to ping 192.168.1.1, which is the management interface of the firewall. Will I be able to ping this? No. This is the management. I think yes, sir. Oh, Yes. yes. Yes, you can ping. Yeah. Right? We should be able to, because this is the management interface, and by default, communication going to the management interface is allowed, right? Where do you have that configuration? Over here under devices. So 3 Go fields to- are allowed, right, sir? Guys, open up for questions only when I allow you, okay? Otherwise, we will break the flow and it will more of it will be like my interview, okay? You'll be asking random questions, I'll keep on answering, and I may miss out certain topics, yeah? So just keep a pen paper with you. If you have doubt, just write it, and when we open up for questions, that time you can ask, yeah? Let's go in a planned way. All right. No hard feelings to anybody, not running away from questions, but let's do it systematically. All right. So here is the configuration. Under devices, you go to setup, and under setup, you have management. And this is where the configuration is. These are the allowed protocols. Right? If I select telnet, telnet will also be allowed on the management. And this is where we can add permitted IP addresses. Right now, there is nothing, right? So that means everybody who has access to 192.168.1.1 or anybody who can reach to 1.1 will be allowed to communicate with the firewall. If I were to limit that, let's say I type in 192.168.1.10, that is what our IP address is. And anywhere in the GUI, one more thing, let me tell you, anywhere in the GUI, when you mention the IP address without defining the mask, like here I did 1.10, I did not mention the mask. So by default, the firewall treats it as /32. Okay, so keep that in mind. And are we making any mistake? Looks like here it wants mask. No, still you see the OK button is not highlighted. At times it does that. Okay, just ignore. And
1.10 is just our gateway, the directly connected PC only. Now I will have to change this. Make sure I commit to apply the changes. Now, what did we do? We are allowing only and only 1.10 to communicate with the firewall management IP. Why does it show 1. Okay. Service enabled. Okay, permitted IP address is good. 1.10. Now let's say if I change the IP address. Right, let's say I make it 11. And I try to ping the firewall. Will I be able to ping? No, no. Anybody who wants to say yes? Because I fixed /32. Right, because we have restricted the communication. The firewall is expecting communication only from 1.10. Right, now this is for only the management IP address. This is for the communication which is going on the management interface. Let's change this back to 10 so that we can do further things. Now the firewall has one more IP address, that is 10.0.0.1. If I try to ping that, will I be able to ping? Nope. No, Why is that? by Because by default. default, it blocks that traffic. Yeah, it blocks that traffic because we are trying to communicate to the firewall on the data interface. Right, but isn't this not cool when you have to do some troubleshooting and when you're implementing the firewall and you want to ensure if the firewall as a gateway is reachable or not reachable, right? So at least ping should be allowed, right? Don't you guys think so? No, well, I don't. For security reason, we don't allow ping on the firewall. I think in my environment, so we can't ping the. Okay, but if let's you want say to. you have a bunch of workloads connected to the firewall, and the firewall is the default gateway, and they complain about, we are not able to communicate. So you're not able to test whether the gateway is reachable or no. So how do you check that? Right? Maybe a trace route. I don't know. Yeah. So when you're blocking ICMP, trace route would also not work, right? Oh, okay. So in such cases, you may be forced, maybe not by choice, but by scenarios, you may have to allow ICMP on data interfaces of the firewall. You may not allow ping through the firewall, but you may allow ping to the firewall, right? So two different things. That can be done here under networks. We are still not making policies, guys. We are still talking to the firewall only, right? So under interfaces, there is an option here, go to advanced, and you have management profile, right? This management profile talks about what all protocols or what all communication can happen to the data interfaces, right? Either you can go here in the drop down and create a new management profile, or it's all the way down here in interface management. And by default, when you run it for the first time, it will appear something like this, right? So you go under network profile, and it is interface management that we can add. So let's add an interface management profile. Let's just allow ping on this. I select ping, and I can select a permitted IP address. For example, 192.168.1. Sorry, we're using the data interface, right? The 10.0.0. Right, 10/32. So this is the only PC I want to allow. Right, not commit yet.
you go to interface and make sure the profile is added on the interface. Go to the drop down and select your profile we just created. Do OK and do commit. Right, so we're good to test again. I try to ping it again. Will I be able to ping? Yes. You should. You should be able to, right? And we are Yep. able to ping now. So we are still not allowing ping to go through the firewall and get, bombarding the entire network. We are just allowing to communicate with the firewall. So that's one cool way to allow ICMP. And what else I have to show you? Yeah, one more thing. The firewall communicating with others. And let's go to the firewall console. Ping 192.168.1.10. That is our management PC, right? Should I be able to ping? Yes. Yes. Yes, right. We are in the management network. Oh, okay. The syntax here. Okay. The host. So we are able to. That's cool. But if I try to ping 10.0.0.10, sorry, we need to add host again. Will I be able to ping? Yes, because No, I don't think so because you only permitted that 10 on that interface. Yeah, but we are talking Yep. to the same IP which we permitted, yes, we permitted this. right? Oh, okay. And Yeah. this is directly connected. We should be able to reach, right? We can. Yes. Sure. Yes. Yeah. Okay. Surprise. Both sides. We are not able to communicate, right? Because now the firewall is initiating the communication. Oh, right. Because we are now sitting on firewall. This is a firewall portal. Right. So we are now trying to ping from the firewall to the PC, right? And we are not able to communicate. Yes. I see what you're saying. Yeah. That's But pretty good. Earlier we Yeah. have tried from Yeah. PC to firewall. Hold on, guys. Hold on. But I am able to communicate this way. The PC can talk to the firewall, but the firewall is not able to talk to the PC. Why is that? Because, as I mentioned earlier, whenever the firewall is communicating, it tries to communicate with its best port, that is the management port. Right? Yes. So if you want to actually talk through Ethernet 1/1, you will have to define the source. So it will be something like this. Right? And now the firewall will try to communicate via Ethernet 1/1. So the firewall can communicate. Obviously, we were testing with the wrong command. We can change this behavior, by the way. We can change this behavior here under devices. Again, because this is system specific thing. We come under management. Hold on. Services. Yeah. Under services, you have option of service route configuration. By default, it is set to use management interface for all. Right? Any service the firewall is trying to communicate on, it should be using management interface. We can customize this, of course, right? And these are the different services that the firewall can communicate on. So on this,
You can select your desired service and you can change it from default to whatever interface you want to choose. For example, DNS, right? At times the management network does not have internet connectivity. So the firewall will keep sending DNS queries out through the management and they will keep on failing. So you would select this simply and you change the interface. So when we configure 1/2, here it will be available. Okay. For now, let's just for the sake of it, you can select this interface and the source IP address will be displayed and it will look something like this. So this is again, you may or may not require this in your production network. It all depends how it is set up and on the requirement. So this is the option. This is where you will find it. Cool. Any questions now? That's pretty neat. The option is good. If you want, we can do it. Sorry, come again, please. This option is nice. Yeah, it is a very useful option, but use this very carefully. So in Especially production also it will be used, right? Right, in production also it is used. So I have seen their TACAS also there. So suppose if you want to communicate with TACAS server. Right. If the TACAC server is not sitting in the management network, yes, then you will have to change that. Yes. For example, it's sitting in some DMZ VLAN, right? Right. Then you'll have to, you're forced to change it. Handy option, nice option. Right, and again, if you have to add the sub interface, simply select the interface and click here in the bottom left corner, add sub interface, give it a number, right? And of course, you cannot be a different type. Whatever is there on this will be selected. IPv4 and all that, it's a normal thing now. Yeah, you can configure it the same way you configured Ethernet 1/1. So suppose, sir, if there is another system, we will connect with that firewall. Will he be able to ping Another system where? On some other interface? On some other interface, let's say this DMZ trying to talk to 1/3. Is that what you're saying? No. Like some 1/2 interface or 1/5 interface. Any other? Let's consider this is the other. Let's consider this is the other system, right? Okay. Connection 1/3. This is what you're saying, right? So if 1/3 has the interface management profile connected with it and it has that network allowed to communicate with it, yes, it will be able to communicate. Else, it won't be able to. No, from the firewall and to that system. Yeah, again, from the firewall also, if you choose the source properly, it will go out through this source. Else, it will keep using management unless you have modified the service routes. Okay. Okay, somebody has put up a question, sir. Is there CCNA knowledge required to do firewall course? CCNA knowledge nowadays is required to make Maggie also. Okay, it's that basic. So even if you are not into networking, even if you are not into networking, you should be aware of basic things of networking. It helps you achieve your tasks. I mean, I see developers struggling with IP address and net mask, right? Gateways and all those things. So if they know those, the job will be easier for them, right? So yeah, it is kind of important things to know. रहने दो, सबको सब जानने मत दो.
Okay. सर एक क्वेश्चन था Yes. थोड़ा मतलब आगे का है जैसे मतलब सपोज फायरवॉल में 3 विलियंस क्रिएट किए हैं, पर इंटरफेस में एक विलियन क्रिएट किया है और एक विलियन मतलब एक इंटरफेस डाउन हो गया तो वो विलियन का ट्रैफिक सेकेंडरी पे शिफ्ट होगा या कैसा मतलब सेकेंडरी फायरवॉल पे शिफ्ट शिफ्ट होगा होगा या ना, मतलब बस उतना एक failover विलियन होगा पे ना, शिफ्ट होगा obviously. If the active firewall cannot process the traffic, the secondary will take over. This is for only one VLAN या all VLANs या all the device traffic is shifted on a secondary firewall For all the VLANs. for all the VLANs and every traffic is shifted on secondary firewall, right sir? Yes. Yes. Not single VLAN. Yes. Can you shift the traffic in single VLAN on a secondary? Is this possible? Yes, we can do that. There are two ways you can do HA, active, and active standby. Okay. Right? So half of the VLANs can be active on one firewall, the other half of the VLANs can be active on the other firewall. And both firewalls will be active and backup of each other. Okay. Means this is required. Both are the firewall active. Those only we can like that backup for each other, like that vice versa. Yes. But that is not a recommended way to do HA, right? In productions, we don't really follow that. It's always active standby. Why, sir? Why behind the reason? Any? That is the vendor recommendation, and it is easier and more stable. It is In easier active to standby. troubleshoot, and it is easier to implement, easier to manage, right? Easier to make changes on it. So that's why. Okay, sir. Thank you. Because this question is asked by interview, that's why. I think this is a tricky question only. Yeah, they just try to judge your understanding. How well do you understand a particular topic? Yes, sir. That's why I'm also asking the question in You one got your question. answer, right? Did you understand? Or you will understand more when we do HA. Fine. Yeah, now I am Sukesh, please, can you ask Riven to mute, please? Is filling up some. He is the one who's talking, and somebody is sitting right beside to him, it seems. Yeah, okay. Anyway, the question is done, so yeah. Guys, try to sit a little isolated, right? It is good for everybody. I don't mind, but when you guys will watch the recordings, you'll be like, kya disturbance hai, right? You will be the one watching the recordings. I'm okay with everything, right? And let's be mindful about others. Yeah. Okay. Any more questions, guys? Sir, which lab you have just run it? Can we also do it? Yeah, you can also do it. I don't think you guys have the credentials yet to do the portal, but the name is just Palo Alto. It's lab 1 or lab 2? And the name just is Palo Alto. Okay, Name of the lab is Palo Alto. No 1, 2 or anything. Okay, sir. Hi, sir. Sukesh, I just have one question. Actually, I'm pretty much fresh to this firewall. So usually this firewall, it's done on GUI only, sir? Yes, because these, unless you have to do bulk configuration, GUI is the preferred way. Oh, okay, fine. Right? Let's So say this is how it looks, right? Like normally. Yeah, this is how it looks. Yes, even the panorama would look same. Oh, okay, sir. Thank you. That is. In the next session, we will talk about panorama, and we will do further things. And we'll talk about security policies and all that. Sure, sir. Thanks. So there's one question. Yeah. So only we can able to ping management IP only, right? Yes.
If it is the other IP is Ethernet 10/1, it is gateway IP means we can't able to pay. If it is a gateway IP. No. I think you missed it. You go to this device gateway. We gave the gateway IP because it was giving some error, right? It was not letting us. It wanted us to fill the blank. Okay, that's why we gave it. But the actual configuration is here. That's where we permitted 1.10. Okay. Okay. Yeah. Okay, I think we'll stop here, guys. Too many small concepts we have covered, I believe. And ahead of this, we will do Panorama. I mean, I'll explain Panorama, why is this needed, and what is the little difference in the GUI that you will see. Right? And after that, we will talk about creating security policies. We'll get Ethernet 1/2 running, and we will see how do we get this guy talk to internet via the firewall. When are you going to post this video? When am I going to what? Okay, post the video. This should be on the portal by tomorrow. Thank you. Hey, Kenny, how are you? Fine, how are you? Yeah, I'm fine. Kenny is back. Yes, Kenny is back from after checkpoint. Now Kenny is back. Yeah, I'm back. Hasta la vista. Sir, I have one small question. Palo Alto is good, yeah, checkpoint is which is a more scope? That's a tricky question. Both of the firewalls, they're like rivals, India, Pakistan type. Okay. So they both are good. They both have their share of market captured, right? When you're working for clients in Middle East and all, and that's all checkpoint, right? When you talk about US, Europe, and that area, that's all Palo Alto. And in India? In India, it's Cyber Roam. Fortinet. FortiGate, Cyber Roam, yeah, those things. Okay. Because FortiGate is a good firewall. It's one of the best software clubbed with one of the worst hardware. Okay, sir. Okay. Thank you. So Sukesh, like we'll be receiving the web details, website details along with credential to get that video, or how will this Yes, receive within this week, you'll be getting all of the information on your email. You'll get the access to the lab. You'll get access to the video portal where you can watch the videos after the class is done. So in this week, you should be getting it, and provided obviously when you have done your payments and all. Yes, yeah, got it. I have received the lab access. Yeah, so the sooner you pay, the earlier you get these things. Yeah, I have joined the combo firewall for this. Right. So, like, sir, how to prepare the notes for reference? Watch the video again, and note down the key points, like all the defaults that we talked about today. Right, you can note down those defaults like interzone, intrazone, the default communication on management, default communication on the data interfaces, how to change those defaults, right? Notes of all that. सर आप कुछ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बना देंगे? क्या? इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चन लास्ट में देना है? एक वर्ड जो मेरे मुंह से निकला है is an answer to interview questions, right? It is going to be a how do I put this? Power packed session, right? Where we will not be wasting time on any of the
other things, and everything that I speak is important, kind of a thing. Right, because the topics that we will cover, they all are very crucial topic when it comes to working on daily basis, right? To accomplish those business as usual tasks, and also the interviews. Right after you are done with 2-3 labs, you'll be very confident. Okay. I have seen people adding the firewall to their resume even before they finish the course. Right? So let 3-4 classes pass, and once we are done with security policies, then natting, and when we start with user ID and those stuff, that's when you will love it to the most, and you will start adding it to your resume. Provided you do practicals. Okay? And sir, Practicals this is are one question, sir. Hello, sir. practicals are VPN is very asking. important. Yeah, what was that? Yeah, sir. In VPN is asking a lot of the times in interviews, sir. VPN and netting. Don't worry. You will love it so much that you would want to pay extra for VPN lectures. Although you don't have to, but out of love, you would want to pay extra for those VPN lectures. We will cover them in such a simple and explanatory way. Means for VPN I required more like that, more pay. No. I'm just kidding. मतलब कहने का मतलब ये है कि VPN हम इतना अच्छे से कवर करेंगे कि तुम और पैसा बोलोगे कि और ले लो सर, बहुत अच्छा सिखाया टाइप. एक्चुअली Okay. चेक पॉइंट का क्लास नहीं किया ना, तो वो भी वैसे ही हुआ था. So don't worry about anything, right? There are people who have done checkpoint and F5, and now they are sitting for Palo Alto, right? So don't worry, we will cover everything. So today's आज के लिए ओवर है ना? हाँ, आज के लिए ओवर है. Let's keep it short. Let's start the fresh topic. मुझे लगता है सर चेक पॉइंट में भी नेटिंग वगैरह पढ़ाया होगा ना सर, उनके लिए डबल बोनस, डबल होगा ये. हाँ, उनके लिए रिवीजन है. तो जब आप भी चेक पॉइंट पढ़ोगे तो आपको भी अपना टाइम भी आएगा, है ना? राइट. ओके सर, थैंक यू. Yeah. Okay, Pradeep says VPN. Sir, when is the next class? Next class is next Saturday. I mean, coming Saturday. सेम टाइम ना सुकेश? Yeah, same time. अभी भी आयरलैंड में? हाँ, अभी भी आयरलैंड में. अभी मैं नेक्स्ट 1 साल आयरलैंड में ही हूँ. एक साल एंजॉय यार. सर कौन से प्रोजेक्ट पे हो? मैं मास्टर्स करने आया हूँ. मैं जॉब वॉब छोड़ के थोड़ा चिल करने आया हूँ. दोबारा कॉलेज लाइफ जीने आया हूँ मैं. सही है सर, बहुत सही. Actually, I'm trying to move away from networks. I'm trying to get into cyber security. So वही उसी के लिए मास्टर्स करने आया हूँ. थोड़े डिग्री हो जाएगी, सर्टिफिकेशन हो जाएंगे, I may get a job. Right? पढ़ाना मत छोड़ना सर बस. सर और एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. मेरा जैसे राउटिंग स्विचिंग हुआ है और ये फायरवॉल भी हुआ है, मतलब ये ऐसे वगैरह ये भी करूँगा अभी. तो अभी नेक्स्ट मतलब कौन सा अच्छा है सर टेक्नोलॉजी? मैं सुना है ऑटोमेशन वगैरह अच्छा है. हाँ, नेटवर्क ऑटोमेशन अच्छा है, साइबर सिक्योरिटी अच्छा है, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड आर्किटेक्ट अच्छा है. हाँ, क्लाउड का भी मैंने किया है, AWS आर्किटेक्ट करके अभी. हाँ, तो पढ़ते रहो. जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो सब पढ़ते रहो. जितना कॉलेज में मस्ती किया है उतना अभी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. मस्ती निकालना पड़ेगा अभी सर. मैंने भी बहुत एंजॉय किया है कॉलेज में. तुम लोगों ने भी किया है. कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो बाहर काम नहीं आती. वो कुछ भी नहीं सर, एक सर्टिफिकेशन है बस. सर्टिफिकेशंस करो. सर्टिफिकेशंस नहीं करने हैं तो एटलीस्ट उनकी पढ़ाई करो, राइट? और जब कंपनी पे करती है तो सर्टिफिकेशन मार लो ज़्यादा. हाँ सर, मतलब राउटिंग स्विचिंग अभी मतलब ट्रेडिशन हो गया है सर, मतलब ट्रेडिशनल हो गया है. मतलब AWS वगैरह अच्छा है ना सर?
राउटिंग स्विचिंग सब नॉर्मल हो गया है अभी, वो मैगी बनाने जैसा है, सबको आता है। अभी तो सर मल्टी टैलेंटेड मांग रहे हैं। हाँ, कैपजेमिनी में मेरा इंटरव्यू है नेक्स्ट वीक सर मेरा। अभी रजनीकांत चाहिए इनको सब जगह। हाँ सही है। वहाँ पे वीएम का भी चाहिए, पालो अल्टो भी चाहिए, सर्वर भी मैनेज करने वाला चाहिए, नेटवर्क भी देखना है। तो ये थोड़ा सा मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, कुछ क्या है थोड़ा बहुत पता है तो भी चलेगा। अभी जैसे फायरवॉल हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, ये अच्छे से कर लोगे तो ठीक है। फिर सर्वर और लिनक्स वगैरह थोड़ा बहुत पता है, काम करने लायक, वर्किंग नॉलेज बोलते हैं जिसको, वर्किंग नॉलेज अगर है तो उतना काफी है। फिर वो इंटरव्यू नहीं लेते हैं लिनक्स पे, बस पूछ लेते हैं कि भाई एक आधा कमांड बता दो, ठीक है, हो जाता है फिर। बट सर आजकल है ना इंटरव्यूज में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है ना फिल्टर आउट करने का। बंद थियरी तो कोई भी पढ़ के आ जाता है, अभी आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, मेरे जैसा आदमी पोर्टल खोल के बैठता है इंटरव्यू देते टाइम, राइट? तो सिनेरियो देंगे तो एटलीस्ट दिमाग चलेगा, लॉजिक अंडरस्टैंडिंग बाहर आएगी, इसलिए सिनेरियो बेस्ड पूछते हैं। सर पालो अल्टो का SD-WAN का डिमांड कैसे है? सॉरी, पालो अल्टो का SD-WAN है ना? हाँ हाँ, उसका डिमांडिंग कैसा है? मतलब जो सिस्को का भी चल रहा है बहुत सारा, तो इसका कुछ है क्या देखो, डिमांड? SD-WAN जो है अब अपने आप में एक अलग दुनिया है वो, राइट? SD-WAN इज फॉर पीपल हु वर इनटू सर्विस प्रोवाइडर डोमेन, ठीक है? जो लोग हमेशा से एंटरप्राइज डोमेन में रहे हैं, ऑपरेशंस में रहे हैं, एंटरप्राइज ऑपरेशन में, डेटा सेंटर साइड पे, तो उनके लिए SD-WAN जो है एकदम ऐसा फील्ड चेंज करने जैसा है, ठीक है? तुमको BGP, MPLS और यही सब पे काम रहेगा फिर, और प्लस SD-WAN, राइट? वो चीजें सर्विस प्रोवाइडर में जो बंदा काम करता है उसके लिए SD-WAN परफेक्ट है, अभी उसको सीखना चाहिए। मेरे को क्लाउड और क्लाउड आर्किटेक्चर ये सब सीखना चाहिए। ओके, मेरे को अभी जॉब लगा इधर, मतलब राउटिंग स्विचिंग और SD-WAN के ऊपर मुंबई में। ओके, हाँ तो अच्छा है, फिर काम करते करते सीख जाओगे। I've never worked on SD-WAN. सर ये पालो अल्टो में जो SD-WAN है और जो नॉर्मल SD-WAN है उसमें अंतर है क्या सर? SD-WAN है, तो Palo Alto is just adding capability of being used with SD-WAN. ये सर Fortinet में भी SD-WAN एक फीचर आया है वो। हाँ, वो सब कंपैटिबिलिटी बना रहे हैं। SD-WAN कैसा जेनरिक सा है एंड they want those capabilities in their devices, so इसलिए सब ऐड कर रहे हैं अभी। उस फीचर में एक्चुअल में वो लोड बैलेंसिंग का फीचर दिया हुआ है। लिंक लोड बैलेंसिंग और वो सब। हाँ राइट राइट सर। ऑटोमेशन ज्यादा है सर SD-WAN में, जो IPsec टनल वगैरह फॉर्म होते हैं ना ब्रांच टू ब्रांच, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं। तो इसमें जो ऑर्केस्ट्रेशन अभी सब जगह आ गया है ना। हाँ वही उसी चीज का पैसा है बस अब। तो इस वाले जो पालो अल्टो का सर ये SD-WAN ये भी लिंक लोड बैलेंसिंग जैसे ही वर्क करता है क्या? हाँ, SD-WAN का मेन फंडा ही वही है कि यू कैन हैव मल्टीपल लिंक्स और सब एक दूसरे के बैकअप काम करेंगे, एक साथ भी यूज होंगे। Okay, so getting to know the market leader. So we are going to talk about FortiGate firewall. Now FortiGate is the product and Fortinet is the company. All right. So just like you have Cisco as a company and ASA is its product, right? So just like that, FortiGate is a product and Fortinet is the company. A lot of students, at times they do ask me, that is it Fortinet or is it FortiGate? So I told them, see, it's a product. Fortinet is basically the company. All right. Okay. Now, when it comes to the FortiGate, you can all see right in the screen that it says getting to know the market leader. तो ये market leader क्यों है? Why are we saying this कि ये market leader है? I mean, just because मैंने बोल दिया तो ये market leader हो गया. Just because I'm saying this is market leader, so is it a market leader? पता नहीं. Let's see. Let's try to figure out why is it so.
Okay, and we'll all talk about the facts and figures. Okay, koi, nothing, just promises or something like that. Very much plain old simple facts, figures, and then we'll work on why we need to know FortiGate and why we need to learn FortiGate right now. Because if anybody who wants to, take that jump in his career or in his or her career. Now, before I go ahead and, start talking about this FortiGate firewall, let's do one thing. Let's, make this an interactive session, and let's try, this is just for all those person who are either new to the networking field, or there are people who are basically new to the firewall or basically new to the security team. Okay, all right, so let's keep this a little bit of interactive. All of you guys, just let me know in the chat window, what do you think is the difference between a firewall and a router? According to you, what is the difference between a firewall and a router? Chat window, YouTube पे डालो, Zoom पे डालो. All of you guys, what is the difference between a router and a firewall? Okay, yes. Okay, so a lot of people are saying router's job is to route the data. Okay, so in a way, yes. What else does the router do? Anything else that the router can do apart from routing the traffic? Anything else that the router can do? Raj says no difference, both act the same. Okay, firewall is a security device, router is a connection. Okay, Venkat says can block the traffic. Abhinav, firewall maintains session table and routing table. Okay, all right. Venkat says with the ACI as well. All right, okay. So yes, in a way you are correct. Now see, what happens is when we are talking about a router, right, and whenever we are talking about something which is called as a firewall, okay, obviously when it comes to a router, the main job is to ensure that you are able to route the traffic. Okay, so I mean, if there is any traffic, let's say for example, okay, let's do one thing. Let's do this. What is the first thing that the router will do when it reaches? So let's say for example, this is a PC. Okay, now this PC is trying to get to another PC which is over here. Let's say this is Google. Okay, now PC1 is trying to connect to google.com. As soon as this traffic, or as soon as this packet reaches the router, what is the first thing that the router will do? First thing that the router would do over here. Okay, check the destination. Okay, it is going to check the routing table. Okay, all right, so let's चलो confuse करता हूँ. Destination check करेगा कि routing table पहले check करेगा? What do you think? What is the first thing that the router would do? Will it check the destination, or is it going to check the the routing table? Okay, all right. Destination prefix. Okay, good. Dynamic routing. Okay, dynamic routing again. It's after it checks the router. It checks the routing path. Okay, first of all, obviously it's going to look into the destination prefix. Okay, and oopsie, it's going to look into the destination prefix, and once it knows that, okay, if the destination is part of the local segment or not, if it is part of a different segment, it is going to look for the routes. Okay, so it is going to do something which is called as the route lookup. What is the next thing that the router would do? Route lookup is done. Okay, I know what route I need to take. What else? Right, Akshay. Okay, right. See, so once the route lookup is done, there is also one thing which is called as the ACL, right? I need to figure out that whether whatever the traffic is, okay, is it allowed or not? Because if it is not allowed, I'm basically going to drop that packet. Okay, so ACL is also a major part when it comes to a router. I mean, if it has been implemented. Okay, so if, let's say for example, let's say I have something which is called as 0.0.0.0.0.0.0, and I say 192.168.10.1, which is my gateway. This is the destination. Okay, and I say IP route. What does this command is telling you? This command is basically telling you that if there is whatever the destination is, any destination, just forward that traffic to the gateway. And my gateway is 192.168.10.1. Okay, and this is also an ACL in place, which basically says whatever the traffic is, it is allowed. Now, tell me one thing. Let's say I'm trying to access google.com, right? Now, if I'm accessing google.com, what is the first packet that goes? It's a TCP SYN packet, right?
Correct or not? Yes or no? Is it the TCP SYN packet or is it something else? Yes. Right. So it's a TCP SYN packet. So what should I expect from the google.com or from the server? What should I expect? What should be the next packet? Okay. So Joy says SYNAC. Abhinav says SYN reply. Abhinav would be, this would be basically SYNAC. SYN plus ACK. In a way, reply also you can say, but then the more technical terminology that to be used would be a SYN ACK. Okay. SYN is basically its own synchronization packet, and ACK is basically the acknowledgement number that is being used to tell this tell the PC that I have also acknowledged your SYN packet. Okay. Now tell me one thing. If this SYN plus ACK comes to the router is going to do what? It's going to drop the packet. Why? Because ACL is just from inside to outside. Okay. The ACL that I have in place is only for inside to outside. To ensure that I also receive the traffic, I need to again create an ACL, which is from outside to inside, right? So I should have two ACLs, right? Am I not? Yes, no, maybe. नहीं समझ में आ रहा है, confusion है कुछ. Correct. Okay. All right. So what I know over here is that if I'm working with the router, I need to have two ACL. Okay. Why? Because one would be to ensure that the traffic is basically going from inside to outside, and one from outside to the inside. Okay. All right. Do you know what this concept is called? This is basically, see, what is this in and out and out to in? What am I trying to do over here? What I'm trying to do over here is basically, this is a state of who? The packet, right? Now router does not have any intelligence that it could save this information, the state of the packet, so that it can understand what I need to do. But when it comes to a firewall, okay, apart from having a routing table, which it obviously have, okay, apart from your route table, they also have something which is called as the, tell me, क्या होता है, क्या बोलते हैं? स्टेट टेबल, स्टेटफुल टेबल बोल सकता हूँ. ओके, स्टेटफुल टेबल बोल लो, स्टेट टेबल बोल लो, सेशन टेबल बोल लो, ठीक है, ये एक ही बात है. शेक्सपियर ने भी बोला नाम में क्या रखा है. बट माय पॉइंट ओवर इज कि firewall basically also have one thing which is called as the stateful firewall. It basically has something which is called as a stateful table or a session table. Now what this means to us, what it means to us as an engineer or a firewall administrator. Okay, see, what this basically means for us is quite simple. See, whenever there is, let's say this is a PC over here, again same setup. Okay, this is Google. Now as soon as I send this traffic, I have a SYN packet going in. Okay, now what the firewall will do is, see, rather than having an ACL, firewall have something which is called as a policy, right? Policy is also a way, in a way it's an ACL, which basically tells that what kind of traffic is either allowed or what kind of traffic is denied, right? Now over here also I say source can be any, destination can be any. Just an example, service, can please never do this in your environment, service any. Okay, and I say allow. So this policy will do what? This policy will ensure that whatever the traffic which is coming from my inside to the outside is allowed. Am I right or not? Yes or no? Confusion to nahi hai? Good. Now I'm keeping it very simple. All right, so people who are basically starting off in the security department or in this field who wants to basically learn this firewall, we'll keep this simple. Okay, see, so we have this policy, right? Now this policy is allowing everything from inside to outside. Okay, great. Now tell me one thing, once the traffic comes back, so SYN ACK bhi to aayega, hai na? I will also get a SYN ACK, right? Because Google will also give me a reply back, so I'll get a SYN ACK. Now
what this firewall will do is it also has something which is called as the session table, right? State table, stateful table, whatever you want to call this. But we have something which is called as a session table. Now, what does this session table has? See, session table basically has information about, first is the source IP. Okay. Then you have something which is called as the destination IP. Okay. Chalo batao. Tell me, kya kya hoga aur? Anybody who has experience or anybody who has worked on it, who might have seen it. Okay, Venkat says source port. Good. I have source port. What else? Rajneesh also source port. Abhinav says DP. DP का क्या मतलब होता है Abhinav? Display picture. DP. चलो, destination port. Okay, Rajni, destination port. Abhinav, destination port. Okay, what else? और क्या होता है? What else do we have? Kunal says session time. Let's say time. What else? Amit says source MAC, destination MAC. Okay. We have something which is called as the session ID. Okay, so what happens is I have source IP, destination IP, source port, destination port, the time, basically the time at which the traffic came to me, and the session ID. So session ID is basically an alphanumeric value generated by the firewall by itself for its own identification. Now what it does is, let's say for example, IP address is 10.1.1.1. Destination IP is 164.100.1.1. Okay, source port is, let's say, 51,265. Destination port, batao ji, google.com hai, what should be the destination port? 443. Good. Chalo, Ajoy is very active. Good. Okay, so destination port 443. Time. So time basically depends on wherever your FortiGate firewall is, or basically whatever firewall that you have. Time depends on where is your firewall location, geographical location, and whatever time that it has received that packet. So abhi, what time it is? It's 7:20. Okay, so 7:20 p.m. All right. Then we have some session IDs. So let's say alpha #17BH5. Let's just say a number. Okay, now see what happens is that once I have all this information, okay, so let me just remove a couple of things so that it becomes a little bit cleaner. Okay, see now what happens over here is that when I have all this information, what will happen is jab traffic bahar jata hai, whenever the traffic is going out with the SYN packet, right, I have saved all this information. Okay, I've also saved something which is called as the TCP state. Okay, this is also one thing which is being saved. So it says SYN packet. Okay, so I know that this SYN packet is going out. I know the source IP, destination IP, source port, destination port, time, session ID, all those things. I have this information. Now what happens is when I get a SYN back, when I get a reply back as a SYN ACK, right? SYN plus ACK. What happens is, first of all, firewall, rather than looking into the routing table, rather than looking into the firewall policy, do you know what it does the first time? It is going to look into the session table. First thing it does, it's going to look into the session table. It doesn't look for the route, doesn't look for the firewall policy. It first checks the session table just to confirm whether the traffic which I have just received, this SYN plus ACK, is it a part of a packet which was initiated internally, or is it a new packet? Okay. So it's going to look into the packet, it's going to look into the session table. It finds out that, okay, I have source IP this, destination IP this, source port this, destination port this, and SYN ACK would basically have destination port as 443. And the source port as 443 and destination port as 51265, because it's a reply, right? So this will be the source port, this will be the destination port. Right? So now by looking into this information, okay, not just this port information or the rest of the information as well, looking at that, the firewall knows that, okay, it's not a new packet, it's an old packet which was originated from the inside. Okay, now since it's a packet which was originated from the inside,
I do not need any other firewall policy or an ACL to be applied on this. I will use the same firewall policy and allow the traffic. Okay, so I'll be using just one policy and I'll be allowing the traffic. This is called as stateful sessions. Okay, stateful technology, you can also say. So this is how basically a firewall ensures that just by using one firewall policy, you are allowing the traffic which is going from inside to outside, and if the traffic from the outside is also coming for the same session, okay, it is going to allow that traffic as well. You do not need to have two policies or two ACLs for the same traffic, which we had to do in a router. Okay, this is the major difference between a router and a firewall. Now, why am I telling you all this? See, the reason is very simple enough that whenever you so let's say for example, a lot of my students, what they do is, जो 2 साल के experience है या जिनको 3 या 4 साल का experience है, they are looking to go into this field of security. They want to look work on the firewalls, and when they sit in an interview, and interviewer also know कि भाई ठीक है, this guy is actually coming from a networking background, so he hasn't worked on the any firewalls, but then he does have firewall knowledge. चलो जी, बताओ, what is session table, what is sessionless connection, what is a stateful connection, ये क्या चीज़ है, what exactly are these things. ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो तुमको वो आगे इंटरव्यू में बैठने ही नहीं देगा, राइट? बड़ी सिंपल सी बात है. एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई how much experience do you have in your networking field, you say, sir, I have let's say 3 years of experience. Okay, he says, okay, all right, fine, go ahead and tell me what is a TCP 3-way handshake. अब अगर तुमसे TCP 3-way handshake नहीं बताया गया तो तुमसे क्या आगे इंटरव्यू में कुछ बात करेगा? नहीं करेगा, right? This is exactly what happens when you are working on a firewall as well. Okay, if you do not know what is a stateful table or what is a stateless connection, what is a stateful connection, state table क्या होती है, session table कैसे क्या बनती है, firewall कैसे information check करता है, कैसे firewall policies apply होती हैं, अगर ये नहीं पता होगा, if you do not know this, all right, the interviewer will basically understand that he does not know much and this guy is not the right candidate for the job. Okay, so even if you go for 5 interviews, 10 interviews, end of the day क्या बोलोगे? यार नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू बहुत टफ है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट यू डू नॉट हैव द राइट नॉलेज. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज गिविंग यू द राइट इंफॉर्मेशन, द राइट नॉलेज, practical knowledge which would help you basically gain confidence and apply that knowledge in your interview to get that job, to get that promotion that you want. Okay, all right, so ठीक है, so this is firewall versus router. Just a quick discussion what it was. Okay, every firewall is a router, but not every router is a firewall. In one line इसको summarize कर देते हैं कि हर एक firewall router की तरह तो काम करता ही है, but हर एक router जो है वो firewall की तरह काम नहीं कर सकता. All right, okay, so let's move ahead. Okay, now why do we need FortiGate? क्यों चाहिए भाई? Why all the fuss? Why all this thing? See, easy to implement and understand. One of the best features of your FortiGate firewall is that it is very easy to implement. Okay, I'll tell you why exactly this is, because we have one more session tomorrow. Okay, so it is very easy to implement as compared to different vendors. They have a very complex setups, but then with FortiGate it is very easy to set up. Okay, easy to understand. I'll let you know that tomorrow as well. हम लोग कल थोड़ा सा टेक्निकल और बात करेंगे. Stepping stone into security domain, absolutely right. Stepping stone for your security domain. Anybody who wants to get a career in this field, I would definitely go ahead and say that, rather than, see, I do not say कि भाई do not go for Checkpoint or do not go for Palo Alto. Absolutely go for them as well. But then if you compare them, all right, FortiGate is much easier to understand. It's much easier to grasp and work on as compared to the other vendors. Once you understand this thing, your next step could be Checkpoint or Palo Alto or whatever you want to. Okay, but I would say if you want to get into this field, this is the stepping stone. Okay, security concepts made simple. Yes, that is why I'm here. This is my job to make sure that the concepts is very much simple for you guys. Okay, even if you're a layman who does not have any knowledge,
just basic networking, that is more than sufficient. But yes, at least basic networking pata honi chahiye. Okay, Soho to enterprise, this is basically a small office to home office, basically small setup of 4 to 5 people or 10 people to basically 1,000 of people, 1,000 of users or 10,000 users or even more than that. We have something which is called as Gartner report. Ye kya hai? Okay, ye report card nahi, which we used to get in school, and we had to get this signed. More or less, it tells you about all the security vendors that you have. Okay, whatever security vendors that you have. Okay, it grades them, it ranks them according to the market standard, according to what is required in the market, and how are they performing in the market. Okay, so this is what the Gartner report is. It is an organization, it is an entity, okay, which basically ranks the security vendors: Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, SonicWall, CyberArm, Cisco, you name it, F5, load balancer, whatever it is. So all these vendors are being rated. Okay, all right, now let's do. Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share, and subscribe for more future updates. One thing, let's go ahead and show you. This is what is called as the Gartner report. Okay, so like kaam karte hain. I'll go ahead and show this on the actual browser. Okay, what you can do is do this today. Open up your browser, go ahead, search for fortinet.com. Okay, this is the first page that you will get, and the first page is the leader in the 2021 Gartner Magic Quadrant. So the Gartner report is basically released every year, okay, by the time of October, November, and they rank all the kind of firewall vendors and all the security vendors that they have. Okay, so look over here. This is the Gartner report. Okay, now this is the 2021. Let me show you if I can. Yes, are you able to see this, all of you? Yes, no, maybe. Okay, all right, good. See, now over here, what we are trying to talk is that, see, this is called as the Gartner report. Okay, now Gartner report has something which is called as the ability to execute, and then you have something which is called as the completeness of vision, right? All of you are able to see the screen. No problem with the scene. Yes, chat पे लिख दो, आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, good. Okay, all right, proper, good. See, when I say ability to execute, what it basically means is that whatever company that you are, whatever company that we have over here on the market, how quickly they are able to take decisions. Okay, okay, completeness of vision. So vision is basically their target plan. Okay, maybe for the next 10 years or 20 years. Okay, 10 to 20 years. All right, now what happens is that the decisions, how quickly they take the decisions and what is their plan. Okay, so this segment is basically people who are these are called niche players. Niche players basically means that they do not have a great vision for the next 20 years or maybe 30 years. Okay, but they know what is required right now. Okay, and they're able to do that as well. So whatever is required right now in the market, they are able to provide that. Okay, good, bad, doesn't matter, but they're able to provide that. Okay, this is one. Second is called as the visionaries. Now visionaries basically means that they do have a great plan for the next coming 20 to 30 years. Okay, but their ability to execute is not that effective. Okay, so they are good what they need to do in the next 10, 20 years, 30 years, great, but they're not able to execute it fast enough to get to that particular plan that they have. So Versa Networks, Barracuda, these kind of vendors are come under the category of visionaries. All right, so this is second. Now we have some third, which is called as the challengers. Challengers are people who have great executionary powers. Great executionary powers. They might not have plans for 20 years or 30 years, but whatever is required right now in the market, they are able to perform that. They are able to execute. They are able to provide that information, or they are able to provide that services or features right now. Cisco, one of the peoples, one of the challengers. Okay, Juniper, one of the challengers. It's basically sliding. I don't know if you look into the
last 3 years or 4 years of Gartner report, you will see that the Juniper was basically one time it was a leader, but now it is slipping down to the challenger section. Huawei, Microsoft, Alibaba, these are all challengers, great executionary powers. They're able to execute whatever is required right now. Then you have something which is called as the fourth one, which is the leader section. Now leader section basically means great vision, great executionary powers. Okay, so they exactly know what they need to do in the next 20 years and 30 years, and their executionary powers is also impeccable. So they are able to execute whatever is required right now, plus what is required in the next coming 10 years, coming 20 years. Over here we have Palo Alto, one number, then we have Fortinet, second number, and then Checkpoint as, I don't know, again, they are sliding from the last couple of years, they are sliding down, not sure why. But anyways, Palo Alto is at the top, a little beneath Fortinet, and then we have Checkpoint. Okay, so see, when it comes to the leader quadrant, how many people you see over here? You have 3 people, right? So the advice that I always say, or I always give, is that whoever is in the leader quadrant, learn them. Because if you learn them, you are going to be in the market, you are going to be in demand in the market, because obviously Palo Alto is required, Fortinet is required, Checkpoint is required. Okay, now Fortinet basically makes sure that your concepts is easy to understand. So if in case you want to move on to the next firewall, you can definitely go with the Palo Alto. If you understand Fortinet clear enough, you would be able to understand Palo Alto much more easier. If you directly go to that, I'm not saying you will not be able to understand, obviously, but then it's like taking the CCNP directly. Okay, it's going to be a little bit tough, but then you will be able to eventually get that. But if you take the CCN and then CCNP, it will be easier for you because you already know the concepts, right? That is what it is. Okay, so let me go ahead and quickly show you a couple of Fortinet products that we have. Okay, so what you can do is we'll go into the network security, next generation firewall. Okay, just to give you an idea of what exactly Fortinet is, what is FortiGate, how the products look like. Okay, see, models and specifications, we'll click on this. Okay, now 1800. So 1800 is like is a high-end FortiGate firewall. 2600, 4200, these are all higher end. 1000 series or 4000 series or 5000 series are basically a high-end FortiGate firewalls. Okay, let's just take one of them. Okay, okay, so this is Fortinet FortiGate 4201F model. Okay, this is a very higher end, not very, but higher end FortiGate firewall. Okay, now see over here, you can very well see that the you have a console, you have a USB, you have 2 management interfaces. Okay, now these 2 management interfaces is basically if you want to connect, or if you want to directly connect to the management of the FortiGate firewall, you can use the RJ45 cable to do that. Okay, then you have something which is called as the HA cable. You have HA1, HA2, then you have AUX1 and AUX2. AUX1 is also called as auxiliary. Auxiliary is just like an alternate of your console. If in case console goes bad, if the console is not available, you can use the auxiliary. It's more or less the same. Okay, Achha, have you guys noticed one thing? Don't you feel this port's a little bit different? They do not look like a RJ45 connector, right? What is this? Anybody? Any guesses? What do you think this is? Ajoy is always, the first one to, type in. Good. Richa is always the second one, and then we have Rajneesh, Pranay. Okay, great. So these are all called as SFP ports. What is SFP? What is SFP? Gordon says fiber. Good. What is SFP? Can anybody give me a full form of SFP? Come on, Ajoy. Can you? What is the full form of SFP? Anybody in the YouTube, guys? Ashwath, what is SFP? Smriti, what is an SFP port? What is the full form of an SFP port? Any ideas? Nahi hai? No problem. Okay. All right. See, SFP is called as small form factor portable. Okay, small form factor portable. That is
No, it is not switch fabric port, Smriti. It's small form factor. Okay. Pluggable is also that is P is for pluggable. Okay. Okay, so these are basically, so what happens is RJ45 or Ethernet cabling goes till for 1 gig. Okay, but SFPs or fiber starts from 1 gig, they go till 10 gig, they go over and above till 40 gig. Okay, you can do that. So that is what these ports are. We'll talk about this in great details. So you can see till 16 you have these ports, then you have 17 and 18, which is, see again, do you see this QSFP? This is what I'm talking about. These are 10 gigs and 40 gigs. Okay, higher end where you can basically have one cable which can be used for 40 gig of data coming in and out. That is what it is. Okay, this is called as 4200 series FortiGate firewall. Chalo, let's do one thing. Let's get inside this FortiGate firewall and see what do we have inside this whole covering. Okay, so let's get in. Okay, all right. So now over here we'll see information, or we'll basically look into the hardware chips that we have. Okay, now let's have a look over here. Do you see this Fortinet? It says the chip that you have, the CPU chip. What is this called as? 40 SPU. Now 40 SPU is basically, these are called hardware chips. Okay, these are called as 40 ASICs. Okay, what is 40 ASIC? 40 ASIC are basically hardware chips which is installed apart from your CPU and your memory. Why do we need that? See, what happens is Fortinet came with this idea that if we have dedicated chips, okay, which would be able to handle the traffic, then my CPU and memory will be free to take up the new sessions which is coming in. Okay, so what the CPU and memory, what it does in the FortiGate firewall is that whatever kind of traffic comes in, first of all, the first packet always goes to the CPU. That is how it is designed. The first packet always goes to the CPU. CPU then decides whether do I have to send this traffic to whatever hardware chip that I have, or do I have to process it again. Okay, see, do you see this NP7 right top corner, 4x into 4x NP7? What do you know what this is? See, NP7 is the full form is basically called as network processor. Now network processor, as the name goes, or as the name suggests, all the traffic which is more or less dedicated to a network layer of the OSI module. Okay, now can anybody give me an example? Any protocol or any traffic which is dedicated to network layer only? चैट पे लिखो. Okay. So Rajni says IP, Sanchit says ICMP, Kunal ICMP, Sanchit OSPF. Good example. Okay. Abhinav says, sir, repeat the question. Okay. Abhinav, the question is that at network layer, can you name any protocol which is used only on network layer, nowhere else? Pratik says IP, Shruti IP. Okay. What? Anything else apart from IP? Okay. Guys, you're तुम लोग भूल रहे हो यार, VPN का भी तो कुछ होता है. VPN के पैकेट्स भी तो होते हैं. NAT भी होता है, right? But NAT is again, it's not a protocol, right? IPsec. Okay. So again, my point over here is that all the traffic which is dedicated to the network layer, okay, OSPF, BGP, IPsec VPN, ICMP, okay, these things are basically handled by your network processors. Okay. Then we have something which is called as the CP. CP is called as content processor. Okay. See, we'll talk about something which is called as content inspection, security inspection tomorrow. Okay. We'll talk about UTM, we'll talk about antivirus, we'll talk about IPS, application control. Okay, these are all things are called a security inspection. Just to give you a layman example, all of you guys have a laptop, right? Yes, no? All of you guys have a laptop. All of you have a antivirus on your machine, right? सबके पास antivirus है, चाहे वो Google, चाहे वो Windows Defender ही हो, but सबके पास antivirus है. Windows Defender update भी होता है. Why does it update itself? To ensure that whatever viruses are on the internet, your
system is basically safe from them. That is why you update your antivirus, right? So that is also happened on the firewall as well. कोई भी firewall उठाओ, it also has antivirus, it also has IPS, it also has web content filtering. Okay, what all these things are? This is all security concerns, security features. Okay, so anything which is dealing with the security inspection, security features of the traffic, that is being handled by a hardware chip which is called as CP, content processor. So let me unpause this. I hope this should tell that as well. Okay. Does it show about the CP? Yes, that is what I'm talking about. CP. So 8x CP. So 8x CP is basically it's saying it has 8 hardware chips of CP. Now what is CP? 9? 9 is the level. So basically it starts off from CP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So if you have a smaller hardware, you will have a smaller CP. If you have a bigger hardware, you will have a bigger hardware CP. Okay, so bigger hardwares have a CP9, smaller hardwares may have 3 CP3 or CP5, but it also tells you how many CP, how many content processor it has. So you have 8 hardware chips which is being called as content processors. They are called as content processors 9, which is the latest one. Okay, so all kind of inspection, all kind of security inspection which happens, content processor looks into that. ठीक है, अभी इतना क्लियर है? नेटवर्क प्रोसेसर का कोई बोलेगा तो तुम उसको बता पाओगे नहीं कि नेटवर्क प्रोसेसर क्या चीज है? अगर कोई पूछेगा कंटेंट प्रोसेसर क्या है तो बता पाओगे कि नहीं? हाँ या ना? Yes or no? Would you be able to tell what is an MP or what is an CP? इतना बता लोगे? At least कुछ नहीं तो one liner में? Yes, good. Okay. All right, so let me go ahead and exit this. Okay, see, so these are the firewalls. All right, so 7000 series, again, this is a huge firewall. This is for ISP level, you know, Airtel, Jio, or whatever it is, whatever company that you are working with. Okay, if you want to look into this, what you can do is you can go over here, you can select chassis, then you have the ultra high end, then you have the high end. So see, as of now it is chassis. So what series you are getting? It's FortiGate 7000 series, FortiGate 5000 series. So I have this. Okay, in my environment I work on the 5000 series model. Okay, now I basically make sure that I you know, handle traffic coming from Jammu Kashmir till Kanyakumari. So all kind of traffic is, I have around 80 firewalls and all the other kind of devices as well. They are all in a centralized infrastructure, and there are a couple of devices which is in a decentralized infrastructure. So I take care of all those guys. My point over here is that you should know the concepts in a way so that even if the network is huge, you should not be able to you should not panic, and you should not be able to you know, get into a place where you do not know what you need to do. Okay, so FortiGate basically gives you that space where you will be able to understand. See, what the good thing is that once you understand the operating system of your FortiGate firewall, doesn't matter what FortiGate model that you're using. Smaller FortiGate firewall, no problem. Higher FortiGate model, no problem. Why? Because you know the operating system. See, I'll tell you what. All of you guys have Windows 10 in your operating system. ठीक है? सबके लैपटॉप में Windows 10 है कि नहीं? हाँ या ना? Okay. Now tell me one thing. क्या फर्क पड़ता है कि HP का लैपटॉप हो कि Lenovo का लैपटॉप हो, डेल का हो या सोनी का हो? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कि नहीं? जब ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो तुम्हें हार्डवेयर से फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, this is what I want to tell you over here. The way we are going to teach you this will basically help you to understand the operating system and its features. उसके बाद doesn't matter you are working on the 5000 series या तुम entry level के 60E पे काम कर रहे हो, doesn't matter. Okay, so you would be able to cover up all this from the top chassis till entry level to the virtual machines. Okay, we are going to tell you the virtual machines as well. So anyway, it will A to Z, it will be covered for you guys. Okay, so go over here, check out the different kinds of model that you have, how much of the threat protection, the NSSL inspection, all these things, you know, what are these things. Achha, do one thing, go through them and tell me if you're able to understand these terminologies or not. If you're not able to understand this terminology, we'll talk about this again, maybe tomorrow. Okay, but I want you guys to question. Okay, all right. Now, next is, okay, understood, fine, I went through the course, no problem at all. What about the job?
Chalo. So let's do one thing. Let's go into the Naukri.com portal. Now Naukri is again, it's an Indian portal for all the kind of jobs that you have. Okay. Now, if anybody of you are basically outside the country, whatever job portals that you guys have, you can go and search over there as well. What do you need to search? Simple. Go ahead and type FortiGate. Okay. So as of now, it says that over here we have around 6,367 jobs for FortiGate. Okay. We have Hexaware, we have Indico, NetAccess, Microland, Rubik Infotech. That's a good company to work. FutureNet, NMS, Orange Business Services. That's also a good company to work with. Okay. Tech Mahindra, Ultron. Ultron is very good if you are basically want to get into the tech field, or if you want to go into hardcore, technology and networking and security. Ultron is also a good place to work with. Okay, my point over here is you have all the kind of job portals which are able to give you that experience, which are able to basically love to work with you if in case you are in that company. Okay, so Ashwat says he is already working at Orange. Great. Okay, all right. So my point over here is that there are jobs you just need to ensure that if you have 3 years of experience or 4 years of experience, there are so many companies out there who would love to hire you if you know the concepts fully. Okay, all right. Now what I wanted to tell you about this over here is that fine, that okay, we have all these things, fine, I got this. Now what next? What is the course all about? What information is covered? What all features is covered? So let me go ahead and show you. Okay, so this is the course. Now over here, the FortiOS 7.0 is basically the latest one. Okay, now part 1 is called as the FortiGate security. This is very much in sync with the official curriculum of the FortiGate firewall. Now why do I have this? See, the reason is very simple, that over here I want you guys to go through the official curriculum. The reason is that if you know and go through the official curriculum, even if you want, let's say for example, maybe in December or maybe in January, okay, not December, maybe in January or Feb, you want to go for a certification, you want to get into the FortiGate certification, okay, you can go for that. बस जितना पढ़ाया है वो सारा का सारा अच्छे से पढ़ लो इन एंड आउट, ठीक है, and you would be able to get your certification for FortiGate. Okay, ये इतना 100% है, but 100% पढ़ाना कोर्स तो है ही है, बट तुम्हें अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा. Okay, I know how the the certification is. I have recently cracked the latest one as well. थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, so the questions are simple, but they are just going round and around. So you have to read the questions couple of times to understand what exactly the the question is saying, and then give the answer. But you do not need to learn anything else apart from what is mentioned over here. Okay. Mohsen, I will be able to give you this doc, no problem at all. Okay, this is basically this is your course. Okay, so you will be able to go through this. So we'll start off with the introduction of the FortiGate firewall, CLI, how do we work with the CLI, what is the configuration backups, administrator accounts, bilkul starting se bilkul basic se. Then we have something which is called as the security fabric. What is a security fabric? We'll talk about this all. Okay, then we have the firewall policies, we have NAT, then we have the firewall authentication, log, certificate operations, web filtering. Again, now this is all security inspection, security features, application control. Okay, so we'll start off, we'll go one by one. These are the 12 topics when it comes to the security part. Then you have something which is called as the infrastructure, which is part 2. Infrastructure is this basically deals with a lot of implementation. How do you implement, how do you install a firewall in the network? Okay, so what kind of routing will it be? What kind of SD-WAN config? So okay, SD-WAN I have added the SD-WAN. Okay, the reason is that SD-WAN is very much required nowadays. Everybody is looking for SD-WAN, so that is why I added this on as well. Okay, all right. Then we have VDOM, transparent mode, IPsec configuration, SSO. This is all about how do you apply this in a network. Okay, all right. This would be your course. We will go one by one, step by step. Okay, let me go ahead and show you your lab.
सर मुझे एक क्वेश्चन था। कुणाल बस 2 मिनट दे दो फिर हाँ डिस्कस ठीक करते हैं. ठीक है ठीक है. Right. So guys, this will be your topology that we are going to work with. Okay. I'm not sure if you're able to understand this, but then this is basically one side is called as the meta.com, the other side is called as the facebook.com. You will have your HA over here, the high availability, then you have a high availability over here as well. You are also implementing the SD-WAN. You have a MPLS network over here. Okay. You will be going and configuring different kind of NAT environments. You will be switching over the HAs from one location to the other location and making sure that your connection does not break at all. If you're able to work this through, then you would be able to understand and you would be able to know what you need to do to get your FortiGate firewall to work the way you want. How do you troubleshoot this? What kind of troubleshooting logic you want to apply? Okay, all these things would be able to you would be able to understand and figure out and give your best when it comes to the FortiGate firewall. It's quite easy to work with this and quite easy to troubleshoot on this, because its command is easy, and it's the interpretation what it comes, whatever debugging you start, the debugging information that you get, it is very simple to understand. Okay, so if you are able to go through this topology, by the end of the course, you would be able to handle your FortiGate firewall. If it is implemented in your environment, you would be able to handle it very efficiently. Okay, all right. So this would be the lab that we are going to work with. Now tomorrow, what we have in store for you guys is that we are going to start off like maybe you can say that this would be the first class. We are going to talk about the UTM. What is a UTM? What exactly the firewall implementation is? How do you implement this? How do you start the firewall? What kind of configuration you want to go for? Okay, so we'll talk about all those things tomorrow. Okay, all right, go ahead, ask me questions. मुझे पूछना था, जैसे मुझे फायरवॉल पे एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्चुअली मैंने जो वर्क किया है वो मैं अभी जस्ट फिलहाल वर्क कर रहा हूँ माइक्रोटिक राउटर पे. ठीक है. ओके, तो फिर मुझे इसका कुछ मतलब ये हो पाएगा, जैसे फायदा हो पाएगा? बिल्कुल. अगर यहाँ पे अगेन जो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया है, ये इसलिए बताया है सो दैट अगर किसी ने सिर्फ राउटर्स के ऊपर भी काम किया है और उसके बाद अगर वो फायरवॉल के ऊपर काम करना शुरू करता है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद दैट. द रीजन इज दैट इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, पहली चीज, और जितने भी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं वो फायरवॉल के साथ ही कवर अप हो जाते हैं. तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी तुम उस चीज को जो है अच्छे से कवर अप कर. जब CCNA ने पढ़ा था तो क्या पता था? कुछ नहीं पता था. बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता चले और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, दैट इफ यू वांट टू गेट इन द सिक्योरिटी फील्ड, अगर तुम्हें सिक्योरिटी में कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फायरवॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद दैट. क्योंकि मैंने सर अभी जस्ट 10-15 दिन पहले से मैंने जो नोवा सॉल्यूशंस जो है ना, सिकंदर शेख हैदराबाद के, वहां से मेरा भी CCNP मैंने चालू किया हुआ है. ओके, चलो गुड है, अच्छा है. CCNA एंड CCNP इज एक्चुअली वेरी गुड अगर ऐसा कर रहे हो, क्योंकि CCNP एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा बेस तैयार कर लेता है, राइट. अच्छी नेटवर्किंग की नॉलेज अगर होती है तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी बिल्डिंग का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है तो तुम्हारी बिल्डिंग भी अच्छी रहेगी, राइट. तो अगर CCNP तक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. Okay, all right. Any more question? Mohsin, yes, go ahead. Yeah. Hello, Rakshit. Yes, Richa. Hi. Good evening. Good evening. Yeah. So, my question is similar to so even I do not have any experience in this, networking or Fortinet, what we are going to right now. But I'm working in a support domain, like as a technical associate for CGI, working as a systems engineer. So I just know the few basic things what we deal in every day, our day-to-day life. That's the only thing I know. So, but recently as I planned that I will do this FortiGate course. I initiated the basics of networking through Udemy. So yeah, that's what my question is if you could suggest something what all I should read before this, and just to cope up with what we are gonna do the next thing.
So that will Okay. be very helpful. And yeah, I'm like, after today's session, I understood few things, but few things were like just I was not able to catch up. So Bouncer मार गया था. yeah, exactly. So Right. the if you could, suggest I something, आप understand. बता सकते हैं अगर कुछ तो, So जो कि Richa, मेरे लिए what I would helpful. suggest is basically that again, basic networking तो चाहिए ही चाहिए, right? Because अगर let's say for example tomorrow I say कि भाई this is how you configure an IP address and you do not know what is an IP address, then Right, obviously there will right. be a challenge, right? Yeah, So yeah. I would say go ahead with CCNA first, okay? Or at Mhm. least side by side start your CCNA so that you understand the concepts of networking, how the traffic or how the data from one device to the other device travels, what is ARP, what is IP addresses, okay, what is DHCP, Okay. what is ISP, which is the internet service provider, okay, Mhm. what is subnetting, okay, what is Okay. routing, what is dynamic routing, okay, what is Mhm. high availability, okay. Okay. This Yeah. is basics. If you know this, firewall would be easier to understand, okay. But my recommendation is that if you're already enrolled in this, I would suggest you to at least go through your CCNA side by side so that it becomes easy for you to understand. Otherwise it would be difficult for you. Okay, so I mean, like, do you suggest to do some courses for CNA, or it's just CCNA, that yes. I can go through the Udemy courses what we have for Udemy, this? Udemy is like a refresher note. Okay, Okay. they do provide information, but then they do not provide information in depth, right? Mm-hmm. So I would probably suggest ki bhai, get in the course of CCNA, okay, Mm-hmm. because everything has to be in detail. Because a lot of things in the firewall, once we dig deep, maybe after maybe 5 or 10 classes, Mm-hmm. it would start becoming difficult for you, okay, because there are Okay. a lot of concepts which is already taught in the basic networking and CCNA, and Mm-hmm. not all of things you would be able to cover up with Udemy, okay. Okay. So Okay. you have to do one thing, that you have to basically buy a lot of Udemy courses, maybe 5, 7, maybe 10, okay, and then you would be able to get all those information. But rather than doing Actually, I that, have that, corporate access for Acha, Udemy. you have that So corporate access, great. yeah. Okay, So I. so I know that my colleagues are basically working with certain companies, and they also have that. No problem. If you want to go that road, you can do that. But again, I would suggest that take note of all those topics and options that I have said, right? And make sure that Mm-hmm. you have the Udemy courses for that. Go through them so it becomes easier for you. Okay. And once you are enrolled in the course, just make sure you ask me questions whenever it is required. Do not say कि भाई अभी start हुआ है, I'll ask in late. I'll ask when the class is done. Stop me there Mm-hmm. and there. Ask me the question. If it feels like to me that this is a basic question or is a networking question, I'll tell you by Mm-hmm. go ahead and read this out. Once you're done with that, we'll explain that. Okay. But Okay. again, higher recommendation: get your basic networking completed first. Okay. It becomes easier for you. Otherwise, it will be difficult, a little bit difficult for you. Okay. All right. All right. No. Yeah. Sure. I will just look into that. If I could do it before. Yeah. I mean, like, if I could do that. And one more thing, like tomorrow, what time we are having this session? Is Tomorrow it it's the same time, 7 o'clock. all right? Yeah. All right, Rakshit. That was my question, and thank you so Thank you. much for answering No it. problem. Hi, sir. Mohsin here. Yeah, Mohsin, tell me. Yes, so I have done CCNA security in 2016. Currently, I'm working as an op lead, and I'm also working on a Fortinet 60E, 100E, and 200E. Okay. But recently, I have changed the job environment. So my question is, do I need to pursue the course because I'm interested in security field, but my current job is quite related to the wireless. Okay. Wireless. See, again, Mohsin, my suggestion is not for what you're doing right now. My suggestion is what do you want to do in the next couple of years, maybe 5 years or so. Okay, because that would basically determine your whole career. If you want to get into security, I would see security as of now, it's a good place to go. It has a lot of benefits. If you go into this field, that would be easier for you to understand as well, and get a good pay job as well. Okay, but again, if it is right now not your field, if it is just Wi-Fi, you have to first of all decide, do you really want to go into the field of security, or you want to get into the field of wireless? Okay, if you are interested in the security field, I would definitely say go ahead and enroll yourself in this course. That would be helpful for you.
because end of the day, you have to basically understand what you have to do in the next 5 years, what you have to do in the next 7 years. Okay, whatever your salary is, let's say for example, I have 5 lakhs per annum. Do I have to make this 5 lakhs 10 lakhs in the next 3 years? Then what steps do I need to take? If I have to make that 10 lakhs 20 lakhs in the next 5 years, what do I need to do? Okay, with security, I know this 5 lakhs can be converted into 15 lakhs within 1 year or 2 year, but again, it takes a lot of effort, it takes a lot of courses and efforts and certifications, but that is very much possible. If you want to get into this package of 15 or 20 or even more, you have to go through security courses, multiple vendors, multiple firewalls, and multiple technologies you have to work with. If you know all those things, it would be easier for you. Yes, actually, basically, I didn't want to rely on one technology or one product. Absolutely. That's why I was pursuing for Arba, because currently I also have Arba wireless and switches. So Absolutely. I have both the things. So having wireless knowledge is good, but that would not be your frontline technology to work with. Firewall would be a better option to go for. Wireless is just like an additional advantage, or just like a cherry on the cake. Yeah. Okay. All right, guys, I'm getting short of time. So Harpreet says, what will the class time daily? The time would be basically 8 o'clock. Okay, the daily classes, but tomorrow we are going to do another session at 7 o'clock. So I would like all of you guys, take all your questions, be ready, and by tomorrow I'll probably start the session by 7:45, and then 15 minutes आराम से discussion करेंगे. ठीक है? चलो. Okay. Now today what I'm going to do is, I was wondering to let you go through some of the concepts and definitions, but I thought, chalo, let's do one thing. Since most of you guys yesterday I kind of liked, because a lot of you were quite interactive and I like that. I thought, chalo, let's do one thing. एक छोटा सा सेशन लेंगे, लैब के ऊपर प्रैक्टिकल्स थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा बहुत कमांड्स के ऊपर काम करेंगे, एंड एटलीस्ट इफ नथिंग 1 घंटे के बाद कुछ तो कुछ सीख के जाओगे, राइट? सो लेट्स डू दैट. We'll have a session so that after this 1 hour of session you would be able to know at least something from the FortiGate firewall, right? Okay, so let's do one thing. I'll go ahead and show you the lab that you guys would be getting once you get enrolled. Okay, so what would be the lab? All right, so this would be the page, and this would possibly be the URL that you might get, okay, which is racks.networkings.com. okay, you do not need to have your own VMware setup, or you do not need to have your own laptop which has maybe 16 GB of RAM or maybe 4 or 8 cores. You do not need, it's just a plain simple laptop would do. You just need to go to this particular URL, and that's it. Go ahead, you'll get the credentials to log in. All right, once you do that, sign in, and you will be able to see a couple of labs over here. Okay, now over here, if you look over on this third one, which is called as the FGT full lab. Okay, so FGT full lab is basically the lab which I have created for all of you guys. So with this lab, you would be able to cover all the topics in the same topology, and will also understand how to handle network with multiple security implementations. All right, this will give you an idea of how practical scenarios, practical situations you have to handle. How do you whatever changes you make, what kind of issues it could create in the network in the same design that you have. So let's do one thing. Let's open this up. How do you do that? Just check this up, click on open. Okay, all right, so I'll zoom out. Okay, all right, so guys, this is the lab that you will be getting. Okay, so if you look on the left side, you have a company who's go by the name of tesla.com. okay, and then on the right side you have a company which goes by the name of amazon.com, right? Two of the big companies out there in the world right now. So consider a situation or a scenario where there is a collaboration between these two companies, okay, and they would like to share their network, they would like to share their resources, and they have a very complex environment for which they have some SD-WAN implementations, they have a high availability also going, they have an MPLS network, they have an internet cloud as well, they have their internal LAN segments plus some DMZ servers as well. So it's a proper full-fledged network individually for these two companies. Now they would like to get this thing in in collaboration, they would like to share resources of each other. You as a firewall administrator, how would you go about and do this? That's the whole job. So your talent, your skills,
will basically come into hand with this firewalls that you see. So these firewalls, let me show you. So this is FortiGate North, then you have FortiGate South, okay, then you have FortiGate East, and then FortiGate West. So there are 4 firewalls over here, okay. We are going to basically work on each of these network devices that you see, okay. Guys, can you hear me? Any problem with the voice? No, Rakshit, it's all No? good. Good. Okay. All right, Saeed, I think you might have to check your side. Maybe there's some problem on your side. Okay, good. Okay, so now what we are going to do is I'm going to tell you that how you go about, first of all, powering up all these devices. Okay. All right. So you go ahead, right click and click on start. Okay. So this way, one of the device will start booting up. Okay. There is another way, which is you see these square small, you click on the more actions and then you have start all nodes. You can do that as well. So this would basically power on all the devices in your lab. Okay. Now what we are going to do is, so see, it's a heavy lab. All right. So I would like to request you all, if you guys, whenever you get this access, right, give it about 15 to 20 seconds. Why? Because every firewall, every network device, every switch, okay, every Windows machine that you have, all of them would be booting up. Okay. So give them 20 to 20 seconds. That is more than enough. Once it is powered on, you can see this play icon, a little small play icon over here, right? What you need to do is click on this. So it will open up a new tab and it will give you the CLI access of that particular firewall. Or if in case you want to click on the switch, this will basically give you access to the switch. If you want to click on the local client, this will basically give you access to your Windows machine. Okay. So my point is you just need to click on it and you'll get the access. New tab and then you'll get the access. All right. So what we have done right now, we have go ahead, clicked on the FortiGate North. Okay. And this is the window. So I'll just hit enter. Yes. See, so I have FortiGate North login. Okay. Now, once you get to this particular page, okay, you will be going and, making sure you can log in, right? Now, first thing, if you have a brand new FortiGate firewall in your network, okay, and the client says, hey, you know what, just go ahead, connect your console, configure your FortiGate firewall and, install this on the network. So first thing is you have to basically log into the device. How do you do that? So the default administrative username and password is called as admin. Okay. And password is blank. You do not need to enter anything. Okay. So that is the password. All right. So once you log in, okay. So I have already logged in many times. So it is not asking me to, change the password. But once you would be able to log in, it will ask you to prompt. Okay. Let me show you, why not? Let's do this. So wipe is an option. I'll tell you what it is after some time, because I don't want to, burden you a lot of information. So I'll just click on one of the options, which is wipe, which is basically, think of it like a factory format. Just like you do this with the Windows machine, you format the machine and then again install the operating system so that it is a clean boot, just like that. Wipe is also doing the same stuff. Okay, so I'll click on this. I'll power on this device once more. Okay, in the meantime, it comes up. Let me close these out. Okay. Okay, click on it, open up a new tab automatically, and then see, this is how it will start up once you log in. And if you power on the device, this is how it will come up. All right, it will basically tell you that system is starting, formatting the partition. All right, and whatever the serial number which is being selected, it's going to tell you that serial number. Okay, now that all depends. Since I am basically working on a VM, right? Look closely. It says FG, then it says VM. Do you know why this is? FG basically are the initials for FortiGate, and VM is basically the initials for your virtual machine. Okay, that is why it says FGVM. Whenever you see these 4 letters, you can always get to know that, okay, whatever whatever the operating system that I am working on, it is actually a virtual machine. Okay, because if it is not a virtual machine, it will not show you this VM, it will show you something else.
Okay, it might show you the hardware, whatever hardware that you have. So remember yesterday we were talking about 4200F, 1800F. So it will say FG and then 1800 or FG or 4200. So whatever is the hardware model, it is going to tell you that. Okay, all right. So now again, it is basically telling you that whatever is the serial number, system is starting. Let's just give it about 30 seconds more or less, and then it should ideally come in. Okay, great. So it says login. So as I said, right, what is a by default username? Can anybody tell me now? Admin. Admin. What is the default password? Blank. Blank, right? So I do not have to put anything. I just need to enter. Hit enter. See what it says. You are forced to change your password. Please input a new password. Okay. So what I'll do is I'll go ahead and enter a password. Now, remember, I'm going to enter the password, which is the highly secured password in the world, which is called as password. Just kidding. So basically I'm putting in password because, oops, sorry. It is going to prompt me for a password, and then I'll go ahead and, enter password, which is some confirmation. That is it. Okay. So it says welcome. And now I have access to the FortiGate firewall. Now relate this with Cisco. So all of you guys all of you worked with CCNA or have gone through the CCNA course, maybe here or somewhere else, but have you all of you guys gone through the CCNA? Do you remember something? User privilege mode, global configuration mode. Do you remember that? Yes. Whenever we used to get into the console, we also always get to say, okay, this is interface configuration mode. Oh, this is global configuration mode, right? So we do not have something like that in the firewall, but I'm going to relate to that so that it becomes easy for you to understand. So see, this page is basically you can call this as a user privilege mode. Okay, so you would be able to give basic commands, basic show commands that you can be go for configure, just to look into the configuration that you have. Okay, show commands are pretty straightforward. Okay, but let's say for example you want to configure an interface. So how do you do that? See, if I want to see the interfaces, the command says show system, because I'm actually looking at it configuration, which is a system configuration. So show what? System what? Interfaces. Okay, and if I hit enter, it is basically going to show me whatever interfaces that I have over here. Okay, all right. So see, now if I'll just a little bit scroll up, it says config system interface. Now see, this is the command. Okay, do not bother if it doesn't make sense to you right now, it's fine. But basically this command is able to tell you that these are the interfaces that I have. So I have port 1, I have port 2, port 3, port 4, then we have something which is called as SSL root. We'll talk about this. And then we have something which is called as a FortiLink. Okay, so consider this, you have 4 ports as of now with this virtual machine. Okay, all right. Now see, one says VDOM. We are going to talk about this, do not worry. Then it says mode DHCP. So it's quite simple, that basically it is saying that port 1 is acting as a DHCP. Now, not DHCP server, it is acting as a DHCP client. It is basically trying to find a DHCP server, trying to get an IP address. Okay, so the mode DHCP basically means I'm trying to fetch an IP address. Now look over here. In port 2, you do not see this mode option. Okay, in port 3, you do not see any mode option. What it means from the Fortinet perspective, this means it is a static entry. I have to manually get into the port 2 and then enter an IP address over here. Okay, but if it has mode DHCP, this basically means I do not have to enter an IP address. It should take the IP address from a DHCP server. Okay, so how do I see all the interfaces? Show system interface. Okay, now if I want to configure an interface, the show command also tell me what should be the right syntax for me to configure an interface. So do you see this? It says config system interface. This is the syntax. If I have to configure something, this is the syntax that I have to enter. This is the syntax that I have to enter if I am configuring port 1. This is the syntax I have to use if I'm configuring port 2. Okay, so global user privilege mode,
show commands. Okay, there are a lot of more commands, diagnostic commands and all that. We'll talk about that. But as of now, think of this as a user privilege mode where you are able to, put in some user commands and put in some more commands that is basically used to understand what kind of configuration that you are holding on this particular firewall. Okay, then you have something which is called as interface configuration mode, right? From the Cisco perspective. Now over here, what you do is, if I want to configure interface, what do? I say config, okay, because I want to configure something, right? So I'll say config. Now the FortiGate says, okay, if you want to configure something, what is it that you want to configure? So I say, I need to change some system level settings. Okay, what information do we want to change in the system? I say interfaces. So, okay, this is the full command, enter. Now I am in what mode? From the Cisco terminology, this is called as interface configuration mode. Okay, now do not get confused that these are also something which works on FortiGate, user privilege mode and global configuration mode or interface. This is just to relate, okay, so that you understand that if you want to change anything, where you want to go. Okay, so now I am in config system interface. What does this command do? It will basically help me to configure interfaces of the FortiGate firewall. So let's say, for example, let's see. So I'm in FortiGate South, right? Now FortiGate South has a port connected to FortiGate North on port 2, right? And then I have a port 1 which is connected to the ISP. Okay. Now, do you remember this? Port 1 was DHCP, right? So I should be able to get some IP address. Am I right? So what I'm going to do is, let me come back. Okay. I'll introduce you to one more command which says, now, do you remember the last command, show system interface, right? What does it do? It basically shows me the correct syntax value plus whatever IP address. If it is configured, it is going to tell me that, right? But as of now, it is a brand new device. It does not have any configuration. So that is why it is not showing me any IP address. Now, there is one more command which is called as the get system interface. Let me show you. Get system interface. Okay. Now there is a slight difference between the show system interface and the get system interface. Okay, now what is that? See, show system interface basically helps you to understand the syntax and information which is being stored in the configuration. Okay, get system interface basically tells you that whatever configuration that is there, what is the result of it. Okay, so get command basically tells you about the result, the output, and show command tells you whatever the configuration that you have. Is it clear, all of you? Yes, no? Show command will tell you whatever the configuration is. Get command is going to tell you what is the output of the configuration. All of you, yes, no? Yes. Okay, good. Yes. So get system interface. I'll execute this command now. See how the result is a little bit different from what we are getting previously. See, now it says port 1 DHCP, but see, you are getting the IP address. Okay, because in the show command, it is only going to show you information or the configuration which is manually, configured over here. Okay, but the DHCP is an automatic thing. So as a result, I have to see the IP address. So if I have to see the IP address from the DHCP, get system interface is a good command to use. Okay, a lot of people, a lot of engineers who basically work, see what happens is, I'll tell you a classic example. So one of my students is working in one company, I'll not name that, but in that particular company, he only has access to the CLI. He does not have access to the GUI of the FortiGate firewall. All right, now he had certain interfaces which was configured for DHCP. Now he was having a very hard time to understand that, okay, what do I need to do to get this information? All right, so he called me up, and it was still very early for him. So I told him, okay, so just go ahead and execute this command, you will be able to get the IP address. So he did that and he was able to get the information. So my point is that whatever we are going to teach over here will basically help you on your practical implementation with whatever job profile that you are going to work on. Okay, or maybe whatever job profile that you want to work on. Okay, so get system interface basically tells you about the information or the output of the configuration. So we know that, okay, 10.0.2.16
is the IP address on port 1. But do you see any other information? See, port 2, 0, port 3, 0, port 4, 0, right? Why? Because this is manual information, all right? It is not yet configured. So get is all about output, show is all about whatever the configuration is. Okay, all right. Now I'll go ahead and tell you one more command which is used in the kind of user privilege mode, or this mode that we are on. Okay, very much important and very much required for you to understand if you are working on a FortiGate firewall. Okay, so get, okay, get, you know, right, whenever you see this get information, you know that okay, whatever the display will be, it will be output. Okay, so get system status. Get system status basically tells you about the current you know, the current setup, the current status of your FortiGate firewall. So I'll hit enter. Okay, now see, you're getting a lot of information over here. Now I'll just quickly let you know whatever information which is easier for you to understand and grasp. Okay, see, this is the command get system interface, sorry, get system status. See, the next line says version. What do you mean by that? Version basically tells you about whatever is the current operating system of your FortiGate firewall. See, remember, last time I told you, maybe yes, yesterday we were talking about that it is like understanding or learning Windows 10. If you know Windows 10, then doesn't matter if you are working on Lenovo or you're working on an HP or you're working on a Dell, doesn't matter, right? So over here, FortiGate is running a non-operating system. Now operating system, basically over here, you can say version. So what version it is? It says the version is FortiGate VM64, which is basically the VM. It is telling you that this is a VM. And then it says it is running on something which is called as v7.0.0. Now I'll tell you what the 0.0 is later. But as of now, just consider this, that it is an operating system which is called as v7. And that is the operating system I'm working on. Anybody can tell me what is this GA? Anybody, any idea? Wild guesses, even that will also work. Anybody who knows what is GA? No? Okay. See, GA is called as general availability. Okay. Now general availability basically means, now this is not just for FortiGate. It basically applies for all the vendors out there, all the firewall vendors, Cisco, Palo, Checkpoint, CyberRoam, SonicWall, whatever it is. GA basically is general availability. That means there is an operating system. This operating system is a general availability operating system. That means that it is being given out by the vendor to be used by all the models that can be used. So let's say, for example, see, the clients can be anywhere around the world, right? They log into the portal, they download the image, and they'll go ahead and upgrade the FortiGate firewall. But they have to be very, very, very careful that whenever they are downloading the image, it has to be a GA, general availability. Okay. It's considered as you get Windows, then you get Windows beta, right? There are certain users, there are certain individuals who get beta operating system so that they can test out. Okay, but that is not available for everybody. For everybody, there is a general availability operating system. Same goes over here as well. See, the next is called as the virus database. Then you have extended database. Now these database obviously are, if you look closely, these are, look at the value, look at the time frame. It's 2018. One is called as, one is on 2015. Do you know why this is? See, as of now, we just booted up the FortiGate firewall. That is one. Second, this is an evaluation license. So it will not give you the updated or the existing signature database because the firewall is still not licensed. Okay. Once the device gets licensed, it will start taking up the latest updates. Okay. See, next, look over here. I'll highlight this up. Serial number. Very much important. Whenever you are trying to work with the TAC, whenever you are trying to, so let's say, for example, you have a environment where you have multiple firewalls. Okay. You have to ensure that before you make any changes to the firewall, you should be aware that which firewall are you on. Okay. So the serial number, always make sure that you understand, okay, I'm on this particular firewall. Okay. Then this,
license status. It basically tells you that this particular operating system, is it valid or not? Because if it is expired, you would not be able to get access to the CLI or the GUI. Okay, so you have access till December 8. What happens after that? Any idea? Nothing. You remember what we did? You go ahead, right click, click on wipe, and that is it. Again, you have factory formatted the system, and then you'll again have 15 days more. Okay, now do not worry that what will happen to the configuration or whatever changes we have made. What will happen to that? We are going to save those configuration changes, factory format, and then upload the same configuration changes, right? So you do not have to waste your time changing the information again and again. You would be able to do it. Okay, all right, so let's go back. So now this over here says about the resources that is allowed to you. Now see, we are working with evaluation license, right? So you are going to get 1 CPU and around 2 GB of RAM. That is the limit. Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share, and subscribe for more future updates. For you. Now, ideally, the VMs that you have can go around 64 GB of RAM, even more than that. There's a huge range, just like we saw yesterday for the hardware devices. Same has the same concept applies to the VM as well. But then since we are in the evaluation license, this is the limit. Okay, it doesn't matter to us because anyway we are able to work on it, so it doesn't matter. Log hard disk. Log hard disk is basically that it just like your Windows operating system has a hard disk of 500 gigs, maybe 1 TB or 2 TB. Just like that, you have a hard disk for FortiGate firewall as well. Okay, this could be 1 TB, 5 TB, 10 TB, depending on whatever the hardware model you have. And if you have a virtual machine, then basically it depends on you. How much space that you want to give, it is up to you. Okay, then you have the host name. Now see, host name says FortiGate VM 64 KVM. This is the default. You can always change this. We are going to tell you that. Then you have something which is called as the operating mode, which is called as NAT. Okay, now again, this will all be covered, that what is a NAT mode, what is a transparent mode, okay, how is it different, and what is the HA mode. So look over here, you have a current HA mode, then it says standalone. So standalone basically means that as of now, I haven't configured the high availability, right? So it's a standalone device. Now all this information is available on the get system status. So you know that what is the time, what is the operating system, what is the operation mode, is it NAT mode or transparent mode, what is the HA mode, is it a standalone mode, or is it a active or active passive. All these information you will be able to get from this one command. Okay, and just to give you a hint, this question comes in your exam as well. If anybody wants to get the NEC4 certification, this kind of information are asked in the examination. Not directly that what is the command that you will be using. Basically, they will be giving you a scenario that Tom is the firewall administrator and he is new to the company. He would like to get information about the firewall and he only have access to these 4 commands. Which command he will be using to get this information? And then you will get multiple information, and then you have to select the one which is the right. So you are going to select which one? Get system status. Okay, all right. Is it clear? समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? Yes. Okay, all right. Now system time again is basically to tell you that whatever, so see, this could be different, whatever your location is, according to whatever the firewall's location is, you would be getting the different time. This is, you can change them as well, so every information can be changed. Okay, all right. Now see, what we discussed right now was mostly about interfaces, was mostly about how to get the information from basic commands, show commands. Okay, now do you remember that in Cisco we have a command which is basically called as show, right? So you have show running configuration. So we also say the same thing, but then rather than saying show running configuration, we say show full configuration. Okay, this is also more or less the same thing, and you would be able to get all the information or all the configuration that is there on your FortiGate firewall, all the default configuration plus whatever changes you have made. Okay, all right. Now let's go ahead and configure an interface. Let's thoda sa
you know, discussions खत्म करते हैं, थोड़ा सा configuration के ऊपर काम करते हैं. All right. So let's do one thing. We'll take up the FortiGate North firewall. Okay. We already have a local client connected to the सर switch. हेलो, Yes, Mahdi. मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. मैं बांग्लादेश से बोल रही हूँ. हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा होगा. मेरी एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं एंड बहुतों को हिंदी नहीं भी आती है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मिक्स कर लेता हूँ. मैं फुल्ली हिंदी समझ सकती हूँ बट इंग्लिश नहीं आती. हाँ या ओके ठीक है, चलो मैं एक काम करूंगा, मैं जो भी इंग्लिश में बोलूंगा मैं उसको हिंदी में एक बार रिपीट कर दूंगा. ठीक है. ओके सर. ऑलराइट, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज ऑफ नाउ इज, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक FortiGate नॉर्थ करके ये जो हमारा फायरवॉल है, ठीक है, हमने इस फायरवॉल को क्लिक किया है. हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस को. पोर्ट 3 देख रहा है ना, पोर्ट 3, हम इस पोर्ट 3 को कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके बाद कनेक्ट करके ये चेक करेंगे कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी मिलती है कि नहीं. ठीक है. सो गाइस व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर पोर्ट 3, ओके, with an IP address, and that IP address should be able to reach from the local client that we have, and we should be able to get the GUI page of the firewall. Okay, so let's click on this. Let's go over here. So let's log in. Admin, password. Okay, all right. Now remember what is okay. Who is going to tell me what was the command I used to get into the interfaces? क्या कमांड यूज करी थी मैंने, किसी को याद है? यस, config system interface. Config system interface, very good. I like you guys यार, तुम लोग बहुत बढ़िया हो. Very good. Config system interface, edit port number. Which port? Port 3. Port 3, good. Okay, so now we are under interface configuration and we are configuring port 3. Okay, now what I have to do is I have to make sure that whatever IP address I'm giving to the local client, I should have the same IP address on port 3, right? Basic networking. Two network devices can only communicate with each other if they are on the same segment. Okay, दो network device तभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं जब उनके बीच में किसी न तरह की कनेक्टिविटी हो, अगर सेम सेगमेंट में है तो. ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम सेम IP एड्रेस सेगमेंट में एक IP देंगे. Okay, so how do I give an IP address? You say set. Okay. Set mode static first. If we need static IP. Very good. Then enter. Then set IP. So I say IP. Set IP, sir. Set IP. Okay. Set IP. Then IP. ठीक है, तो एक IP देते हैं, let's say 116.32.1. ठीक है, so this is the IP address. Now what happens is in Cisco, you normally what you do is you give the subnet mask. Subnet mask कैसे देते हैं? 255.255.255.0 है कि नहीं? फायरवॉल में क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो जो मैंने अभी दिखाया, बट इसकी जगह /24. Yes, then enter. राइट, तो ये हमने एंटर कर दिया. एंटर करने के बाद इसने ये IP उठा ली. See if it does not take the IP, it will give you an error. ठीक है, but if the syntax is fine, it will give you no errors. Okay, ठीक है. So what we have done right now, अभी हम लोग ने एक IP address दिया है. Okay. Okay. Now there is another command, एक और command चलानी होती है. Yes, allow access. Set allow access. Allow access. ये क्यों चलानी होती है? Sir, for permission, करना है नहीं करना है, HTTPS को allow करने के लिए, sir. Everything allow. तो ये अलाउ एक्सेस जो है ये हम लोग इसलिए बेसिकली करते हैं दैट हमें अगर इस इंटरफेस को पिंग करना पड़ जाए, अगर उस इंटरफेस को SSH करना पड़ जाए, अगर उस इंटरफेस का HTTPS मुझे लेना पड़ जाए, तो मेरे पास वो सर्विस इनेबल होनी चाहिए ना. अगर वो सर्विस इनेबल नहीं है तो फिर मैं कैसे लूंगा एक्सेस? तो मुझे मिलेगा नहीं, है कि नहीं? है ना. सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज by using the command of set allow access. मुन्ना म्यूट कर लो अपने को. Set allow access, what you are doing is we are allowing the FortiGate to basically entertain any request for SSH, maybe HTTPS, maybe telnet, maybe ping, whatever it is. So I say कि भाई set allow access and I say ping, I say SSH, I say HTTP, okay, HTTPS. This for now this is more than sufficient. So I say enter. Okay. Now I can use a command which is called as show. इससे क्या होगा,
शो कमांड से बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इस इंटरफेस में अभी तक क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करी है। ठीक है, अगर कुछ मिस आउट होगा तो हमें पता चल जाएगा। देखो हमें क्या बता रहा है, देखो ये सिंटैक्स बता रहा है ना, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 3, फिर उसके बाद वीडम छोड़ दो अभी, फिर देखो ये आईपी हम लोगों ने डाली, आईपी का उसने 7 मास बता दिया कि भाई आईपी ये है, 7 मास ये है। फिर इसने बताया कि भाई तुम्हारे पास पिंग है, एचटीटीपी है, एसएसएच है और एचटीटीपी का एक्सेस है। फिजिकल मशीन फिजिकल टाइप है, एलियस लैन है। एलियस लैन का मतलब होता है कि क्या नाम दिया है तुमने इस इंटरफेस को। एसएनएमपी इंडेक्स फिलहाल के लिए इग्नोर करो। ओके, सो दिस मच इंफॉर्मेशन आई नो दैट आई एम एबल टू गेट फ्रॉम द इंटरफेस शो कमांड। नाउ अच्छा, एक वन थिंग मोर, सी you have one command which says end. Listen very carefully. End is going to save the configuration instantly. Okay, it is not that you have to put in copy, write configuration, startup configuration, no, nothing like that. As soon as you put the enter and you hit enter, okay, sorry, as soon as you put end command and hit enter, it is going to save that configuration instantly. Okay, no pushing the configuration, waiting for the configuration to be uploaded, something like blah blah blah. No. Enter the command, hit enter, configuration is saved. So you have to be very careful. If let's say for example I made some mistake, okay, and I want to get out of the interface but I do not want to save the configuration, what will I do? I'll say abort. So abort basically does not save the configuration and you will be able to come out. Okay, देखना है सबको, एक सेकंड देखो। सो शो कमांड से हमने ये देख लिया कि ये इंफॉर्मेशन हमने अभी डाली है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखता हूं abort। ठीक है, बाहर आ गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हुई कि नहीं हुई, तो मैंने लिखा शो सिस्टम इंटरफेस। अच्छा, एक चीज और लिख रहा हूं, पोर्ट 3। ठीक है, सो अब क्या होगा, मुझे ये सारे पोर्ट्स नहीं दिखाएगा, सिर्फ पोर्ट 3 दिखाएगा। समझ में आ रहा है सबको? Are you guys able to understand this? Yes sir, yes sir. ठीक है, so I say port 3. Okay, now see it is able to show me this information because ये already मैंने सेव करके रखी हुई थी। so मुझे तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखानी चाहिए जो मैंने नहीं सेव करी होगी। एक सेकंड, शो सिस्टम इंटरफेस। सो देखो पोर्ट 4 में कुछ नहीं है, ठीक है ना, मैं पोर्ट 4 यूज करता हूँ, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 4 सेट आईपी लेट्स से 1.1.1. Okay, so now I have made two changes, IP address and allow access. Okay, now what I'm going to do is abort. I'm coming, I came out. Okay, now if I say show system interface and port 4, देखो changes नहीं हुए saved, right? So if, and this happens guys, whenever you feel like you made some mistake and you do not want to save those, just use the command abort. Okay, now I would basically change. Okay, so I'll say config system interface, edit port 4, set IP, and I say 192.168.15.1/24, set allow access and services, show command, enter. See, as soon as I hit enter with the end command, I came out. Okay, but see what is the difference? The difference is now this information is saved in the interface. So show system interface. Okay, so show system interface port 4. Is it clear, all of you guys? End command will save the configuration. Abort command is going to ignore the configuration. Okay, clear enough? Okay, now what we are going to do is, so we have configured the IP address of show system interface port 3. Let me show you guys. Okay, so we have 172.16.32.1. all of you, itna clear hai? Okay, now let's click on the local client. Okay, now guys, yahan ka jo password hai, this is called as test123. okay, so once you have the access to the lab, this is the password that you have to put in. Okay, okay, so this is the configuration, this is the Windows machine. Okay, let's open up the command prompt. Okay, I've already configured the IP address, I think, over here. Let me just see.
Sorry. All right. So see, what is the IP address we have? 172.16.32.10, and then the gateway is 172.16.32.1. Okay. So what we are basically doing over here is that we are going to ping this. Okay. Now, what do you think? Ping hoga nahi hoga? Would I be able to ping this IP address or not? Done. Do you know why I'm able to ping? Because I have enabled the ping services. Okay. Now let's do one thing. Let's try and get the GUI access of our firewall. No, Arpit, we are able to get the access because we have enabled the the ping services. Okay. So what is the IP address of my firewall? 172.16.32.1. Okay. So enter. So हम लोग को पेज आ गया. Okay. So the same username and password that we used, okay, to get the CL access, the same username and password we are going to use to get the GUI access. So we say admin and password, click on login. Hardik, you can unmute yourself if you want to. Okay, so I'll tell you what this is later. So see, this is how the GUI would look for your FortiGate firewall. Okay, so you'll get a lot of information about the system, that system information, the serial number, the firmware, okay, then license status, the VM resources that is being used. Okay, now if you look into the administrator section, you see that admin, this guy has already logged in, so this is me. Then you have something which is called a security fabric. We are going to talk about this. Then you have FortiGate cloud. It's a lot of information. You see the CPU information. This is basically the dashboard. So you are able to just check the existing status. It is just like you have a task manager, right? Where you see the CPU utilization, the memory utilization, just like that. You see the CPU utilization. Now this, you can basically look for the drop down. You have 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 12 hours, 24 hours. Okay. This is exactly how it is in a actual physical FortiGate firewall as well. Okay. This is the information that you get. And according to the client's requirement, you can make this change. You want to monitor this for each minute, or you want to monitor this for 1 hour or 12 hours or whatever the case may be. Same goes with the memory as well. See, if I do this for 1 hour, okay, do you see this? Nothing before 540. Very obviously, right? I powered it on by that time, so the memory utilization then went up. Okay, then there are certain sessions as well. So if I again go for 1 hour, see, in the same time frame. So this is also, you would be able to understand that how much traffic, or when was the peak, when was the spike, or when the traffic is shooting up. You would be able to get this information from the dashboard. Okay. Okay. Now, okay. Now see, do you remember that the interfaces that we did? So you click on the network tab. Okay. Now under the network, you have something which is called as the interfaces. Click on over here. You would be able to see the information which we saw in the CLI as well. Okay. Now see, you have port 1 configured. Now Airtel, Geo, and LAN, this is there's a batch going. So for them, I have created the alias. Now alias is basically the name that you give to the interface, but you would be able to get the information over here. You see the IP address, the net mask, then we have port 2, which is the Geo port. Okay, basically I've made Geo port 2 as an ISP. So there you have 192.168. Then you have the LAN port, which you have 172.16. So basically over here, I would be able to see all the ports that I have. Now I was basically, training the people on the SD-WAN. So you are seeing the SD-WAN as well over here. Okay. All right. So basically the interface section is the place that where you would be able to look into all the interfaces. If in case you want to make any changes, you can absolutely do it. Select the interface, click on edit. Okay. Now over here, you can make this change. If you want to make a different information, let's say, for example, this is Tesla, right? So Tesla LAN. Okay. Then whatever the IP address that you want, manual or DHCP, then all the kind of administrative access, the HTTP, HTTP, ping, SNMP, SSH, all that stuff.
Then I'll tell you what is VDOM settings and all that. If in case you want to enable a DHCP server, you can. There are multiple options of device detection. Now, what is device detection? In a way, it is going to fetch information about whatever the traffic is coming in, what device it is coming from. Okay, so let's say, for example, over here, this port 3 is connected to these many operating systems. Let's say one is a Linux machine, one is a Windows machine, and one is a Mac machine. Okay, this is going to basically identify that the traffic which is coming, is it coming from a Mac machine, Linux machine, or a Windows machine? Okay, and it would be able to identify, and then in the log section, you would be able to see those information. Okay, so this information you can change whenever you want from the interface section. Okay. All right, now what I'm going to do next is basically the policies. So if you want to allow any traffic from your LAN, which is port 3, to maybe on the internet, which is SD-WAN, so you have to create a policy for that. So see, I already have a policy. Okay, and look over here, there are a couple of information that you can basically look, allow, deny, the source, the destination. Okay, now look in the outgoing interface, I'm using the SD-WAN. Okay, so I'm basically using 2 ports, which is Airtel and Jio. All right, so again, this is for a different session altogether. When we are going through the firewall policy session, or maybe the SD-WAN session, then I'll be able to explain you in deep that why is it so, and how do you configure this, how do you troubleshoot this. But overall, you get an idea that, okay, if you want to configure the firewall policy, you go into the policy objects, click on the firewall policy, and then you can go ahead and even create a new firewall policy. Okay, so you can change all the information over here. And if you want to look into the interfaces, you go into the network, click on the interfaces, and then you can see all the interfaces that you have, whatever is configured. Okay, all right, so guys, as promised yesterday, I'm going to stop right now. Okay, now let's take a open discussion. Whatever your questions are, we'll discuss on that, and we are going to start off the session from tomorrow 8 o'clock. All right, so by 8 p.m. tomorrow, we are going to start the session with FortiGate Firewall. Go ahead, you can go ahead and ask the questions. Yes. Which is from 8 to till when? It will be more or less about 9:30. 9:30. Okay, and one more thing, the commands that you showed, do we need to note it down, or will be getting the documents which will have all the details mentioned? So what I do normally is that my personal experience is that whenever I have given documentation, people normally becomes a little bit lazy that, okay, I already have the commands, I already have the information in the document. So what I have started doing is I give the information, but then I give that documentation in the last. Till you are with me on the class, you have to make notes just like you do it in the schools and the colleges. Make notes, because once you are making notes, you will remember those information. Okay, so this is the this is the process that I follow. Don't worry, you will get the documentation. It is not that you will not get the documentation. You are going to get that, but maybe when we have completed around 70% of the course, and I personally know that, okay, you are well aware of all the options, the configurations, the commands, and all that stuff, then I'll give you that. So it will be like a revision document for you. Okay. Okay. Sir? Okay. Yes. Sir, this is Munna. Actually, sir, I have one question. सर जैसे कि पालो अल्टो में होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्या होता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई चीज हम चेंजिंग करते तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, आफ्टर दैट जाता है, तो क्या ऐसा आपने फोर्टिनेट में नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली एक ही कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बोला ना कि ये सिंपलेस्ट है थोड़ी सी, सो इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन है और वही जो भी चेंजेस होंगे उसी में होंगे। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मान लो, ठीक है, एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो भी चेंजेस तुम करोगे वो तुरंत के तुरंत चेंजेस उसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है। अगर डिवाइस रीबूट होता है या उसको तुम फिर से बूट करते हो तो भी वो सेम कॉन्फ़िगरेशन ही उठाएगा, एक ही कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसी में सारे चेंजेस होते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास एक आईएसपी है, मान लो जियो का आईएसपी है, ठीक है, एंड मान लो जियो के नेटवर्क में कुछ इशू आ गया तो तुम्हारा तो नेटवर्क बैठ जाएगा कंपनी का, है ना। तो तुमने क्या किया कि तुमने एक और आईएसपी ले लिया। अब अभी से पहले तक क्या होता था, मैनुअल चेंजेस करने पड़ते थे, बट एसडी वैन के साथ जो है काफी चेंजेस आने लग गए, अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मान लो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आती भी है जियो के,
तो वो ऑटोमेटिकली फायरवॉल जो है, जो भी तुमने सेटअप किया है कि भाई अगर ऐसा हो जाए या ये कनेक्टिविटी लूज हो जाए तो इसको चेंज कर दो, स्विच ओवर कर दो। हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें, HA का? सर एच हाँ, है ना, वो उसमें सब क्या होता है होता है, कि एक डिवाइस अगर डाउन हो जाए, हम्म, हाँ अगर एक डिवाइस डाउन हो जाए तो ट्रैफिक दूसरे डिवाइस से निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम ही है, बस ये है कि वो डिवाइस की जगह ISP है। सर एक चीज पूछना है मुझे कि एसडीएन वो तो नहीं है कि मल्टीपल मेरे फायरवॉल लगे हुए कंपनी के अंदर हाँ अलग अलग लोकेशंस पे, और मैं मैनुअली यहाँ से एक फायरवॉल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन पुश करता हूँ और पे सब पे जाकर वो नहीं पुश नहीं हो नहीं जाती नहीं है, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं मैनेजर है? होता है, वो मैनेजर होता है, वो अलग चीज है। ठीक है सर। ओके, हेलो एक मुझे हेलो क्वेश्चन लेने दो फ्रॉम गाइज हु आर बेसिकली ऑन यूट्यूब। सो नर्लन सुन हैज अ रहे क्वेश्चन। हो मेरे को? मेहदी मुझे बस 1 मिनट दो। सो नर्लन हैज अ क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू चेक द पॉलिसी via CLI? So Nalan, it's quite simple. Basically, you get into the CLI mode first. Okay, let's log in. Admin password. Oops, I think I made a mistake. Hold on. Admin password. Okay. So if you, in case you want to, find out the firewall policy, you say show firewall policy. Okay. So see, I have one firewall policy as of now, and it is basically showing me all the information, that what is the source, the destination, and everything. Okay. हाँ मादी, टेल मी। मैं बोलना चाहती हूँ कौन सा डेज क्लास होती है? Monday to Friday. थैंक यू। Hello. Yes, Rajneesh. Sir, I want to know why we use WAF and why basically this is deployed on DMZ zone. Okay. See, WAF जो होता है इसका फुल फॉर्म बेसिकली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, राइट? सो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो होता है वो डेडिकेटेडली वेब, बेसिकली जो OSI लेयर 7 होती है ना, एप्लीकेशन लेयर, उस पे ज्यादा No, फोकस। but we have same feature in the web filtering in the firewall also, right? हाँ बिल्कुल। अगेन जो FortiGate फायरवॉल है वो एक UTM है, मतलब कि 4-5 फंक्शंस डिवाइसेस के ये अपने में अकेले कर लेता है। बट इसमें एक चीज देखो क्या होता है कि दिस वेब फिल्टरिंग ऑप्शन दैट यू हैव, राइट, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वेब फिल्टरिंग URLs. Okay, but if you look into the web application, it goes way beyond, way deep into the application level stuff, the web host. I understand. Like I'm handling a Cisco iron port proxy, so over there also I'm controlling application based. So is it the same thing happening in the WAF? It's the same thing, but then with a lot of more level features and control. functions. You do that same stuff, but then see, it is just like having an IPS on your FortiGate firewall, and then you have a dedicated IPS. So which device would have much more functions? It's the dedicated IPS, right? So same concept applies over here as well, that you have a UTM and then you have a WAF. So WAF basically has much more features and functionalities for stopping the attacks on the application level, but you will not be able to get the same same features on a UTM. You might get basics, but not all. Okay, got it. Thanks. All right. सर अगर मेरे पास फायरवॉल फिजिकली नहीं है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, मेरे लोकेशन पे है और मैं HO से हेड ऑफिस से मैंने कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो मुझे पुट्टी के थ्रू करना पड़ेगा क्या? ये आपने कंसोल जो लिया है वो कमांड की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? इसी तरीके से ही तुम्हें एक्सेस मिलेगा लैब में, मतलब तुम्हें बस मेरे बेसिकली पास ब्राउजर होगा तुम्हारे पास। सर फायरवॉल मतलब मेरे पास सामने रखा हुआ है बट कॉन्फ़िगर नहीं है और मेरे पास कंसोल केबल भी नहीं है, तो उस केस में मैं कैसे कर पाऊंगा? मैनेजमेंट कौन सा पोर्ट इंटरफेस, में केबल है? मैनेजमेंट इंटरफेस में लैन केबल लगा के मैनेजमेंट इंटरफेस में जाओगे, RJ45 की केबल लोगे, ठीक है, उसका एक केबल अपने मशीन लैपटॉप में लगाओगे, दूसरी तरफ मैनेजमेंट इंटरफेस पे लगाओगे, ठीक है। मैनेजमेंट इंटरफेस में जो FortiGate फायरवॉल होती है, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है, वैसे ही मैनेजमेंट इंटरफेस में डिफॉल्ट IP पड़ी होती है पहले से, व्हिच इज 192.168.1.1। यस, ठीक है ना, तो ये ओके। Prashant, this is the last session on the YouTube. Now from tomorrow we are basically starting off the classes, which will only be on the Zoom sessions. Okay. Naveen says FortiGate duration. So guys, this is on a daily basis, around 1 hour, maybe 1.5 hours. So
maybe you can think of what is today is 23. So take December, whole of the December, you would be able to get this course completed. And again, it all depends on the number of students that I have and how much interactive they are. If there are a lot of interaction in the class, which I normally love, the class would basically extend, because I would love to answer your doubts, your questions, and जितने questions पूछोगे उतना मैं जवाब दूंगा, जितने कम question पूछोगे उतनी जल्दी कोर्स खत्म होगा. Now it is up to you. But हाँ, in general एक महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ता लगता है. सर कुछ आप SD-WAN के बारे में भी हम लोगों को बताएंगे बेसिकली? बिल्कुल बताएंगे. SD-WAN मैंने इसमें डाला हुआ है कोर्स में, बिकॉज आजकल सब लोग मांगते हैं. एंड अगर फुल फ्लेजेड नहीं तो एटलीस्ट SD-WAN के बारे में अगर किसी ने कुछ भी तुमसे पूछ लिया तो उसके बारे में बात तो करना आना चाहिए. सो वो मैंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें. ओके सर, एक्चुअली वी डोंट हैव SD-WAN आइडियाज एंड हाँ, डोंट वरी, मैं बताऊंगा सारा सब कुछ. इन SE4 के इंटरव्यू में क्या SD-WAन के बारे में पुट कर सकते हैं क्वेश्चन इंटरव्यूअर? अगर इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है. इनफैक्ट अगर तुमने जैसे डाला हुआ है अपने रिज्यूमे में कि भाई मुझे फायरवॉल आती है, तो पूछेंगे एक बार जरूर, डू यू नो एनीथिंग अबाउट SD-WAN? अगर तुम नो बोल देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगेन, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर 10 people who are going for the interview and you are saying no, and then there is another person who is saying yes I know SD-WAN. तो obviously you know तुम्हें पता है कि कौन किसको प्रेफरेंस मिलेगी. So this is why मैंने SD-WAN को इसमें इंक्लूड किया हुआ, so that if in case there is any questions, which normally 70-80% there are, so you would be able to you know give an answer कि भाई ठीक है, yes I have worked on SD-WAN, I know how it works, I know how to troubleshoot all these things. Okay sir, thank you. Sophos Firewall. Why we use Sophos Firewall? Generally हम Sophos Firewall जैसे दूसरे vendors भी है आउट मार्केट में, वैसे ही Sophos Firewall भी है one of the choice, one of the best choice I could say. So if we अगर हम उसके features देखें तो generally हम वो network protection के लिए ही generally हम use में लेंगे, right? Where it use the latest advanced technology for ransomware और advanced threat detection के लिए. So कोई भी enterprise है वर्ल्ड वाइड, उसको कोई सिक्योर करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में, then Sophos is the best option we can get. So अगर उसमें कुछ भी, अगर हमें नेटवर्क का एक्सेस है, उसका कंट्रोल है, एंड पॉइंट्स है, वेब ट्रैफिक है, ईमेल ट्रैफिक है, अगर उसका वेब ट्रैफिक, ईमेल सॉल्यूशंस चाहिए, then definitely Sophos best है against the all type of attacks and malware, spywares, intrusion, unwanted applications like spam, and a policy based पूरा काम करता है. So we can meet our requirement as per the business needs. जो business की जो needs है, ठीक है, Sophos Firewalls को fully compatible में है. So before we go ahead with the Sophos, let me just try with you Sophos website. Sophos website पे हमें सब details मिल जाएगी, the products they are providing. Generally Sophos Firewall पे हम अभी के लिए focus करेंगे completely. नेक्स्ट जब हम Sophos के सारे सिनेरियोज, टोपोलॉजीज एक्सप्लोर कर लेंगे, जो भी इनके फीचर्स है Sophos Firewall के एक्सप्लोर करने के बाद हम डिफरेंट ऑब्वियसली दूसरे प्रोडक्ट्स में भी जाएंगे लेटर ऑन, बट अभी के लिए कंप्लीटली हम Sophos Firewall पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. Okay, so here this is how it looks like. It gives overview. यहाँ पे आपको पूरा Sophos XG का overview वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, along with the online demo भी है, प्लस आपको आप उसमें फ्री अगर यूज करना है तो वो फ्री वाला भी हम डेफिनेटली आज ही इंस्टॉल करेंगे अगर पॉसिबल है तो एंड ऑफ द सेशन. तो फ्री वाला फायरवॉल भी हम इंस्टॉलेशन करके देखेंगे कि कैसे वो काम करेगा आगे फ्यूचर में. ओके, प्राइसिंग अगर चाहिए तो हम मिल सकते हैं. तो अभी के लिए जो Sophos Firewall है वो एक्सट्रीम प्रोटेक्शन यूज करता है. तो उनका जो आर्किटेक्चर है अभी लेटेस्ट अपडेट हो चुका है, जिससे हम एडवांस जो थ्रेड है प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दी SaaS एंड SD-WANs एंड क्लाउड एप्लीकेशन ट्रैफिक के लिए. सो बहुत सारे फीचर्स यूज करता है, जैसे कि अभी का जो लेटेस्ट है TLS 1.3 डिस्क्रिप्शन. सो ये ऑफ कोर्स वो यूज करता है. डीप पैकेट इंस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन एक्सेलरेशन दैट इज थ्रू SD-WAN एंड SaaS as a service. So डेफिनेटली इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे एक एक करके,
जो भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं फायरवॉल पे। अगर मैं स्लाइड्स पे अगर जाऊँ, राइट, इफ यू गो देयर, डिफरेंट सिनेरियोज हम कर सकते हैं। पर बिफोर वी स्टार्ट दिस कोर्स, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है अभी के लिए। जस्ट जनरली हमें बेसिक नेटवर्किंग और सबनेट राउटिंग, वीलैन, डीएचसीपी, टीएलएस बेसिक नॉलेज हमें सिर्फ होना चाहिए, या फिर हमें कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई नेटवर्क डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, या फिर कोई भी नॉलेज जो फंडामेंटल नॉलेज फॉर एनक्रिप्शन एंड हैशिंग एल्गोरिथम्स एंड सर्टिफिकेट। इतना प्रीरिक्विजिट कह सकते हैं, इतना हो गया तो सोफोस फायरवॉल इजी हमें समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव बैक टू दी वेबसाइट। सो Sophos Firewall बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है along with the features which are provided here. We will go through one by one each. तो हम ये जो बैच स्टार्ट करेंगे उसमें हम कोर्स में जनरली हम अपना जो एजेंडा है कोर्स का मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ओके, सो आवर कोर्स एजेंडा वुड बी लाइक सोफोस का पूरा ओवरव्यू, जो जैसे कि अभी मैंने आपको वेबसाइट में बताया था जैसे कैसे उनके फीचर्स हैं, और हम उसमें अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में या फिर कोई नया नेटवर्क डिप्लॉय करना है कैसे हम मीट कर सकते हैं along with the overview। उसके बाद हम गेटिंग स्टार्ट विद सोफोस फायरवॉल, यानी हम सोफोस फायरवॉल जो है उसको कैसे कौन से प्लेटफॉर्म है जैसे कि उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं टू मीट द बिजनेस नीड। उसके भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं और सारा कुछ मॉड्यूल में ही कवर अप है। तो हम सोफोस कैसे स्टार्ट करेंगे उस मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल में हम उसको कवर अप कर लेंगे। अभी एक एंड ऑफ द सेशन भी हम एक VMware में भी जाके हम अभी इंस्टॉलेशन भी कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो जो थर्ड है मॉड्यूल यहाँ पे we will cover up all the network protection related configuration जो भी है यहाँ पे। Then we will cover up fourth module that is site to site connections। अगर ये it's not about day one, but अगर यहाँ पे भी अगर हम अगर बीच में हमें queries है definitely हम solve out करेंगे। अगर कुछ उसको आगे जाके भी हमें टाइम लग रहा है, नो वरीज, हम आगे मॉड्यूल को शिफ्ट कर देंगे डे 2 में फॉर एग्जांपल, एंड सो ऑन लाइक दिस वे। सो आफ्टर साइट टू साइट कनेक्शन मॉड्यूल वी विल गो थ्रू द ऑथेंटिकेशन सोफोस फायरवॉल में कैसे हम एनेबल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेम वे वेब प्रोटेक्शन और एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे एनेबल और कर सकते हैं टू मीट द बिजनेस नीड आफ्टर द ऑथेंटिकेशन। सेम वे विद द ईमेल प्रोटेक्शन। We will also cover remote access like SSL, IPsec in module 9, and after that we will cover up जो module 10 है हमारा, वो हम वायरलेस प्रोटेक्शन में जाएंगे। जैसे कि वायरलेस प्रोटेक्शन में तो जनरली सोफोस के ही प्रोडक्ट्स में AP आता है, हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सारा कुछ वो कवर अप होगा मॉड्यूल नंबर 10 में। देन मॉड्यूल नंबर 11 में जब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेंगे आफ्टर ईच मॉड्यूल्स, तो उसका लॉग एंड रिपोर्टिंग कैसे काम करता है सोफोस फायरवॉल से डेफिनेटली हम 11 मॉड्यूल से पूरा कवर अप करेंगे। देन लास्ट वी विल आल्सो लुक इनटू द सेंट्रल मैनेजर दैट इज सोफोस सेंट्रल। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट तो सिक्योरिटी टाइट अप करने के लिए। सो यहाँ पे जनरली इनका जो अपना जो सोफोस का मोटो है सिंक्रोनाइज्ड सिक्योरिटी। सो आफ्टर फ्रॉम 1 to 12 वंस वी कवर अप ऑल द मॉड्यूल्स, सारे सिंक्रोनाइज्ड सिक्योरिटी का जो मॉड्यूल है वो कवर अप हो जाए कर लेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो ओके, अगर हम वेबसाइट में जाए, ओके, हमने ऑलरेडी एक ओवरव्यू तो ले ही लिया था परफॉर्मेंस का। ये यहाँ पे ऑलरेडी सोफोस के हमारे थोड़े मॉड्यूल्स का बताए, बट इफ डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे कंपेयर मॉड्यूल्स कर सकते हैं अपने बिजनेस नीड के हिसाब से। सो अगर हम फीचर्स में भी जाएं तो सोफोस वो सारे फीचर्स अवेलेबल करता है जो अभी मार्केट में जितने भी अदर दूसरी जो फायरवॉल्स है लाइक FortiGate है, पालो अल्टो है,
ठीक है। बहुत सारी अदर फायरवॉल्स भी हैं जो फीचर्स अवेलेबल करती है। सोफोस भी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे आपको। तो जो पूरा जो सोफोस का फीचर्स है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, लाइक हाउ वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम इफ यू आर एक्सपोज टू हाई आइडेंटिटी रिस्क। अगर कोई अब हमारे ऑलरेडी नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज चल रही है और उसको प्रोटेक्ट करना है, तो हम सोफोस फायरवॉल डिप्लॉय करके उसको जैसे स्कैन करके हम उसको सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम वे सोफोस जो अननोन थ्रेड्स भी होता है वो भी उसका वन ऑफ द फीचर्स है जो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी से यूज करता है। सो जनरली हम क्या करेंगे, सोफोस फायरवॉल में हम सारी स्कैनिंग एनेबल करेंगे, लाइक HTTPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, ये सारी एनेबल करके हम वी विल वेरीफाई हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। कोई भी थ्रेट हो या फिर कोई भी हिडन एक्सपोजर हो भी कोई भी सिस्टम में, तो कैसे काम करता है, हम डेफिनेटली ये वाला फीचर भी देखेंगे। आइसोलेट इन्फेक्टेड सिस्टम भी का वन ऑफ द फीचर्स है सोफोस में। तो जनरली कोई भी अगर कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है उसको कैसे वो आइसोलेट करता है उसको भी हम देखेंगे मॉड्यूल्स में। सेम वे अगर हम जाए, सो व्हाई सोफोस फायरवॉल, सोफोस हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड वेरी गुड डॉक्यूमेंट हियर। तो जो विजिबिलिटी और प्रोटेक्शन है, ठीक है, हाँ, कैसे हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके कनेक्टिविटी करके उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वैसे सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग, सो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और उसका रिपोर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स। विजिबिलिटी प्रोटेक्शन जो है उसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन हो जाएगा। जनरली जो उसका जो फीचर है एक्सट्रीम डीप पैकेट इंसेप्शन, वो हम देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। इट यूज ऑल दिस फीचर्स लाइक IPS TLS इंस्पेक्शन यूज करता है, सारे इंस्पेक्शन करेगा। देन इट विल यूज द IPS टेक्नोलॉजी एज वेल एज द जीरो थ्रेट प्रोटेक्शन, प्रॉक्सी बेस्ड ड्यूअल इंजन स्कैनिंग करेंगे, एंड पेरीमीटर फॉर डिफेंस और कंट्री बेस्ड स्पूफिंग। सो ये सारे फीचर्स हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, कैसे ये वर्क करता है। अगेन हाउ इट एनक्रिप्ट द ट्रैफिक विद एक्सट्रीम प्रोटेक्शन, TLS कैसे यूज, TLS 3 वर्जन अभी जो लेटेस्ट है वो कैसे यूज होता है। तो हम ये सारे प्रोटोकॉल्स कैसे वो फायरवॉल सपोर्ट करता है वो हम चेक करेंगे अपने नेटवर्क टोपोलॉजी में। सेम वे विद जीरो डे एंड PL प्रोटेक्शन, इसमें जो थोड़े से जो फीचर्स है जैसे कि सैंडस्टॉर्म भी है। तो सैंडस्टॉर्म टेक्नोलॉजीज में हम मॉड्यूल में कवर अप करेंगे, लैब में हम देखेंगे इफ वी कैन आई कैन प्रोवाइड यू दैट, क्योंकि सैंडस्टॉर्म में हमें लाइसेंस की जरूरत होगी अगर हम लैब एनवायरनमेंट में चेक कर रहे हैं। Okay, so it is also use SandStorm technology, zero-day protection, encryption, traffic, packet inception. Next है web protection भी है, like it scan all HTTPS traffic, unpotential apps, सारे कैसे ये Sophos firewall कैसे scan करेगा firewall से सारे systems में, अगर वहाँ पे कोई systems है कोई organization में, कैसे उसको scan करेगा web protection में, वो हम देखेंगे। Then we will check synchronous security, how synchronous security हम enable कर सकते हैं। जनरली इसमें हमें अगर हम मॉड्यूल्स में भी ये सब कवर अप करेंगे, जनरली क्या होता है कि इसमें सोफोस के ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए टू मीट ऑल दिस रिक्वायरमेंट, वो भी हम देखेंगे अपने लैब के एनवायरनमेंट्स में। तो सिंक्रोनस सिक्योरिटी कैसे काम करता है स्पेशली, और एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन के साथ जो भी फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि सिक्योरिटी हार्टबीट। तो सिक्योरिटी हार्टबीट्स कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे। जनरली ये डिवाइस का जो हेल्थ स्टेटस है वो आपको फायरवॉल में देगा, वो मैं आपको सुन बस अभी वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा कैसे इनसाइट है इसका। सो एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, ये सब कोर्स यूजर आइडेंटिटी कैसे ऑथेंटिकेशन हेल्प करता है टू एनालाइज कैसे कौन सा यूजर कितना रिस्की जैसे कि वेब ब्राउजिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरा इंसाइट देता है। तो हम उसमें कौन से फीचर्स एनेबल कर सकते हैं टू ओवरकम द सीरियस थ्रेट। ओके, सेम वे विद द एप्लीकेशन कंट्रोल, जैसे हम वेब कंट्रोल में वेब कंट्रोल है वैसे एप्लीकेशन कंट्रोल है।
तो उसमें भी हम सिंक्रोनेट सिक्योरिटी जो फीचर है वो हम यूज करेंगे। जनरली जब भी ये टोपोलॉजी हमारे पास अगर रेडी है, तो अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई यूजर है जिसने अनवांटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो सिंक्रोनेट सिक्योरिटी आपको उस एप्लीकेशन का डिटेल फायरवॉल को सेंट्रल से भेजेगा और आप उस हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बारे में हम डेफिनेटली डीप में जाने वाले हैं, कैसे ये एक्चुअली काम करता है और सारे फीचर्स हम ये एनेबल करके ये चेक कर सकते हैं हम। ओके, वेब कंट्रोल में भी हम देखेंगे कि कैसे हम वेब ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोफोस फायरवॉल। उसमें जनरली हम यूज करेंगे, हम लैब एनवायरनमेंट में देख लेंगे कि हम कैसे पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं यूजर और या फिर यूजर के ग्रुप पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल QoS या फिर बैंडविड्थ। तो ये सारे फीचर्स हम देखेंगे मॉड्यूल में एज वेल एज अपने नेटवर्क टोपोलॉजी में अपने कोर्स पे। ओके, so these are the features which provided by the web controls. Generally, the education's web's feature is more important. We will also look into that, how we can meet the requirement for the educations and rest of the organizations. Content control से भी हम जैसे कि कोई keyword related है, डाउनलोड इवेंट कंटेंट है, उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। कंटेंट कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं, उसका वो फीचर भी यूज कर सकते हैं फायरवॉल में अलोंग विद द वेब कंट्रोल। सो ये सारे फीचर्स कैसे, ये जो हमारे जो फीचर्स के पॉइंट्स है हम कैसे मीट करेंगे फायरवॉल से, ये हम देखेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल भी हम देखेंगे। लाइक अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है जो आपको इन केस आपको पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करनी है, बट फायरवॉल के सोफोस के जो पीछे जो समझ लो हमारे प्रीमाइसेस पे ही वेब सर्वर है, अगर उनको बाहर से होस्ट करना है पोर्ट 443 फॉर एग्जांपल, कैसे हम उसको हैक और अटैक से बचा सकते हैं, तो हम वो देखेंगे यहाँ पे विद द वेब। जनरली ये वेब है, तो जनरली कैसे ये काम करता है ये हम भी देखेंगे वेब। लास्टली ईमेल, अगर कोई भी अगर हम सोफोस से कोई ईमेल का ट्रैफिक जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो विद द हेल्प ऑफ द MTM मोड जो हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल में भी, कैसे स्पैम को हम रोक सकते हैं, फिशिंग को रोक सकते हैं, या फिर कोई भी डेटा है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हम ईमेल डेटा से हम इसको मीट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे डिटेल में। सो यहाँ पे आप विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी कैसे कौन कौन से फीचर्स है फायरवॉल में जो कंपेयर टू अदर वेंडर्स हम मीट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एडवांस फीचर्स है जो हमें इनसाइट देगा। अगर कुछ भी टाइप का अटैक है या फिर मेलवेयर अटैक है, तो डेफिनेटली नेटवर्क को ये बेस्ट सिक्योरिटी देगा। सेम वे विद दी नेटवर्किंग एक्सेस, हम इसमें जो फीचर्स हैं, जैसे अभी मोस्ट पॉपुलर है SD-WAN, तो हम SD-WAन सोफोस से कैसे हम अपने जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर ऑलरेडी सोफोस फायरवॉल है तो SD-WAN का हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली साइट टू साइट, जनरली साइट टू साइट में हम IPsec या फिर SSL टनल जो है वो हम देखेंगे। इवन सोफोस का एक रेड डिवाइस है, तो रिमोट इथरनेट डिवाइस जो साइट टू साइट करने के लिए कैसे यूज होता है सोफोस फायर में, वो भी हम देखेंगे। देन वी हैव रिमोट एक्सेस, कैसे सोफोस कनेक्ट जो फ्री है VPN, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं सिमिलर टू SSL VPN। तो हम उसको कैसे मैक विंडोज में कैसे इंस्टॉल करके, अगर यूजर को कोई बाहर रिसोर्स एक्सेस करवाना है, बाहर से कोई सर्वर है हमारे पास और वो बाहर से वो वर्क फ्रॉम होम है, then we can use remote Sophos connect. Similarly, there is another feature available, that is SD-RED. SD-RED generally जैसे for example हमारे पास 2 Sophos firewall है, तो of course हम SD-RED कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जनरली ये भी साइट टू साइट यानी हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को ही कनेक्ट करने के लिए जनरली यूज होता है, ब्रांच ऑफिस एंड द इंडस्ट्रियल
and it provide zero touch development. हमें कुछ touch plug and play ही है, तो सिर्फ हमें configuration download और upload करनी, and it will be work. तो उसके जो features है, हम क्या क्या उसमें वो कर सकते हैं, वो यहाँ पे available है. वो definitely हम firewall से भी देखेंगे अपने network topology later on. Then if we go ahead with the wireless controller, so Sophos के जो APs होते हैं जनरली वो कैसे मैनेज करने Sophos Firewall से, वो हम देखेंगे. जनरली Sophos से ही सारा कुछ हो जाएगा, बट Sophos Firewall जो प्लग एंड प्ले डिप्लॉयमेंट है वही हमें Sophos के AP जो है उसी से ही मिलेगा. So we will have a look into the APX as well from the website only. ZTNA, that is Zero Trust Network Access, वो भी one of the another features introduced by Sophos XG Firewall. ये भी हम use कैसे है, इसका भी हम आगे देखेंगे. Sophos ZTNA ट्राई करेंगे हम अपने लैब में, ये ZTNA जो फीचर है कैसे हम यूज कर सकते हैं. कोर नेटवर्किंग, हम कोर नेटवर्किंग भी Sophos Firewall में कर सकते हैं. लाइक कोई भी नेट ऑब्जेक्ट है या फिर OSP FES या फिर कोई स्टैटिक राउटिंग है, BGP RIP सब सपोर्ट, जो भी अगर कोई बिजनेस कनेक्टिविटी है तो सारी कोर नेटवर्किंग के भी फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे. सेगमेंटेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद VLANs, सो वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो जोन बेस्ड रहेगा, सो इट सपोर्ट फुल VLAN, ऑल्सो दी जोन लाइक DMZ और वाईफाई VPN. सो उसको हम सेगमेंट कर सकते हैं, जितने भी हमारे जो नेटवर्क है उसको सिंप्लीफाइड यहाँ पे कर सकते हैं सेगमेंटेशन. So these are the features from the networking access. After that, Sophos management and reporting है, जहाँ पे हमें सब कुछ हमें कॉन्फ़िगर कर दिया है, प्रॉपरली सिक्योर है. अगर उसको मैनेज करना है तो हम Sophos सेंट्रल से मैनेज कर सकते हैं. तो ये वाले जो फीचर्स हैं जैसे रिपोर्टिंग है वो हम कर सकते हैं. इट के जनरली रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के लिए या फिर टू मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट, या फिर कौन से थ्रेड्स हैं, कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो सबसे ज़्यादा ब्राउज कर रहे हैं या फिर थ्रेट है नेटवर्क के लिए, सारा इनसाइट आपको यहाँ से मिल जाएगा. ये सारी फीचर्स हम वन बाय वन इसको हम डेफिनेटली देखेंगे. सेंट्रलाइज फर्मवेयर से कैसे हम फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं Sophos सेंट्रल से, एज वेल एज विद द रिपोर्टिंग पार्ट. सो जो डैशबोर्ड है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे. हम क्या करेंगे, Sophos XG Firewall से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस जो जितने भी रिपोर्ट्स है हम फायरवॉल से कैसे हम क्लाउड में सेव कर सके, वो सारे फीचर्स देखेंगे. फ्री रिपोर्टिंग है, जैसे अगर आपके पास परचेज किया हुआ है तो उसमें तो फ्री रहेगा, बट अगर हम सेंट्रल से मैनेज कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको उसमें लिमिटेशंस हैं 7 days की. तो उसके बारे में भी हम वन बाय वन कोर्स में हम डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे कैसे हम ये सब चेक कर सकते हैं. So these are the features available on Sophos XG Firewall, which help us अपने जो businesses हैं उसमें small scale अगर businesses है कैसे हम जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करके इसको सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पे, और बिजनेस रिक्वायरमेंट कैसे हम फायरवॉल से मीट कर सकते हैं. सारे फीचर्स है अवेलेबल जो हम मैक्स यूज कर सकते हैं टू गिव द बेस्ट प्रोटेक्शन इन द वर्ल्ड. ओके, so we will have a great look through the modules as well as with the labs. Okay, अगर हम modules पे जाएं, right, let me go there. So अभी SG series है, SG से generally this is the new feature, the next generation series. So now it is XGS. So इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कैसे वो डिफरेंस क्या है XG और XGS में, वो डिफरेंस देख लेंगे. जैसे कि उसमें पावर्ड बाय एक्सट्रीम है, जैसे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हाई परफॉर्मेंस है, मल्टी कोर है, डीप पैकेट इंसेप्शन है, देन जो भी बेनिफिट है एक्सट्रीम फ्लो प्रोसेसर का वो हम देखेंगे.
सिमिलरली जो एक्स सीरीज है कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे उसकी विजिबिलिटी है, परफॉर्मेंस उसका कैसे है, स्मॉल ब्रांच टू जो भी बड़े बिजनेसेस हैं कैसे हम उसको मीट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से जो अलग प्रोडक्ट्स है सोफोस के जो XGS के साथ इंटीग्रेट होकर आपको बेस्ट सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी दे सकते हैं, जैसे कि SD रेड या फिर वायरलेस से कोई कनेक्टेड है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे थ्रू दिस मॉड्यूल्स। सो दिस आर दी XGS अप्लायंसेस, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में भी देंगे, एज वेल एज इसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं डेफिनेटली हम उस मॉड्यूल में भी कवर अप करेंगे। मॉड्यूल में सब कुछ कवर अप है, तो हम उसको भी एक एक करके गो थ्रू करेंगे। सो SMB एंड बिजनेस ऑफिस लाइक कोई स्मॉल ऑफिस है जहाँ पे आपके 5-10 यूजर्स है, 1 यूजर है या फिर 2 से ज़्यादा यूजर्स हैं, बट मिनिमम 10 यूजर्स है, तो आप ये वाले मॉडल्स प्रीफर कर सकते हैं। देन इफ़ यू हैव मोर देन 100 to 500 यूजर्स, हम 1200 2300 ये मॉडल्स भी ले सकते हैं। So you configure plug and play है, so it will not take much time to deploy. Only once we follow the documentation, it will work. उसके बाद हम धीरे धीरे जो भी बिजनेस नीड है एक एक करके हम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली यस। तो ये वाले जितने भी मॉड्यूल्स थे इसके हम एक एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसमें भी हम डिटेल में मॉड्यूल में कवर अप करेंगे, कैसे मीडियम साइज बिजनेस है या फिर लार्ज बिजनेस साइज है, उसका अगर स्केलिंग होता है तो हम उसको कैसे मीटअप कर सकते हैं, वो भी हम मॉड्यूल में कवर अप करेंगे। बट फॉर द स्मॉल बिजनेस ऑल्सो वी विल लुक द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड हाउ वी कैन मीट। अगर वहाँ पे भी स्केबिलिटी आगे जाके बढ़ती है तो डेफिनेटली इसमें भी हम कर सकते हैं, और कौन से डिवाइसेस पे कर सकते हैं वो भी हम मॉड्यूल में कवर अप करेंगे। सेम वे जैसे मैंने बताया था SD WAN द रेड डिवाइसेस, राइट। तो अभी के लिए 2 मॉडल है 20 और 60, तो अगर उसको कंपेयर करना है तो भी हम कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल में हमको मिल जाएगा। सेम वे सोफोस के फायरवॉल डिप्लॉय करना है, देन दीज आर द करंट मॉडल्स अवेलेबल जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्लग एंड प्ले है, हमको सिर्फ लेट्स से फॉर एग्जांपल स्विच पे कनेक्ट करना है, देन रेस्ट विल टेकन केयर बाय द फायरवॉल। अगर उसमें कोई एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है डेफिनेटली वी कैन डू फ्रॉम XG फायरवॉल। तो यहाँ पे भी आपको रेड डिवाइस की सारी डिटेल मिल जाएगी। जनरली रेड डिवाइस हम अगर कोई हेड ऑफिस है हमारा और ब्रांच ऑफिस है और एक ब्रांच ऑफिस ओपन करना है जहाँ पे 2 यूजर या 3 यूजर है, तो वहाँ पे हम रेड डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर वहाँ पे यूजर वहाँ पे कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं और बहुत कम यूजर्स हैं तो हम रेड डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सिमिलरली उसमें जो फीचर्स हैं जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो फीचर्स में कनेक्टिविटी, SD रेड, तो हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो सारे फीचर्स हम देखेंगे बाद में, दोनों हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए XG से। सो इट इज एज इट इज ए प्लग एंड प्ले डेवलपमेंट ही, कुछ भी हमें वहाँ पे नहीं करना है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक डिवाइस हम डाल रहे हैं तो सिर्फ हमें प्लग इन करना है, उसके बारे में हम मॉड्यूल में ही डिस्कस करते हैं आगे। तो आप ये वेबसाइट में आपको पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा कि हम क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं। द प्रोडक्ट हाइलाइट्स विल बी अवेलेबल हियर। ओके, वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट लेटर ऑन, क्योंकि हम जनरली सोफोस फायरवॉल पे भी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। फिर जैसे ही सोफोस फायरवॉल हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसके बाद हम डेफिनेटली अगर कोई वायरलेस एक्सेस पॉइंट है या फिर एंड पॉइंट्स है या जीरो सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी करनी है तो डेफिनेटली वन बाय वन हम वो भी करेंगे। ओके, सो ये भी सोफोस के APIs हैं यहाँ पे, तो सोफोस के API के सारे डिटेल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। इसके बारे में हम इन डेप्थ जाएंगे मॉड्यूल में, वायरलेस प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था मॉड्यूल पे, वायरलेस प्रोटेक्शन में हम जाएंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ओके,
So these are the models details, you can go through that. Definitely हम अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रेज हो रहेंगे, डेफिनेटली हम मॉड्यूल अभी एंड ऑफ द डे और डेफिनेटली जो मॉड्यूल्स हम एक जब कवर करेंगे, सारे मॉड्यूल्स का जितने भी क्वेरीज हैं हम एक एक करके रिजोल्व करेंगे. देयर इज नो इश्यू. सो उसका जो प्रोडक्ट सोफोस के जो एपीज है, उसका प्रोडक्ट का जो हाईलाइट है हमें यहाँ से ही मिल जाएगा. सो इट इज क्वाइट इजी, दे हैव प्रोवाइडेड वेरी गुड इन्फॉर्मेशन हियर how we can deploy Sophos ecosystem here actually. Okay. So Sophos का जो ecosystem है, अगर हमें उसके बारे में अगर डिटेल में जाना है तो हम यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, एज वेल एज हम जो मॉड्यूल्स है उसके बारे में भी हम ये सारी जितने भी अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही कवर अप हो जाएगा. सो कैसे रेड है, रिमोट साइट है, वाईफाई है, एंड प्रोटेक्शंस है, यूजर्स पीसीज है, क्लाउड एप्लीकेशंस है, सब कुछ कैसे सेंट्रली मैनेज करना है, कैसे थ्रेड को रिस्पॉन्स करना है, रिपोर्टिंग कैसे करना है, ठीक है, सारा कुछ हम मॉड्यूल में ही कवर अप होने वाला है यहाँ पर. तो हम उसके डिटेल्स में भी जाएंगे अलोंग विद कैसे हम अपने सोफोस फायरवॉल से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी टीम को जो टीम है उनका जो है वर्कलोड है कैसे हम उसको कम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइज्ड सिक्योरिटी एंड सोफोस सेंट्रल विद सोफोस एक्सजी फायरवॉल. सो यहाँ पे हमें कैसे जो भी अपने अगर कोई नया प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल तो कैसे वो डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स मिल सकती हैं जो सोफोस के इकोसिस्टम में आ जाएगी फॉर द बेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स. ओके, सो हियर रेड के बारे में है, सोफोस एपी के बारे में भी दिखा हुआ है कैसे हम उसको प्रोविजन कर सकते हैं. Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share, and subscribe for more future updates. From with the help of the Sophos Central and Sophos Firewall, कैसे हम VPN कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपना नेटवर्क है वो वायरलेस बना सकते हैं, जस्ट प्लग एंड प्ले ही है. तो अगर कोई ऐसा भी सिनेरियो है जहाँ पे वाईफाई से ही लैपटॉप्स ही हैं, 10-15 यूजर्स हैं और उनको हमको सोफोस से प्रोटेक्शन करना है, तो डेफिनेटली हम वो भी कर सकते हैं. ऑफ कोर्स क्लाउड में भी हम सिक्योर कर सकते हैं. अगर कोई हमारा क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, ठीक है, तो हम वहाँ पे सोफोस फायरवॉल डिप्लॉय करके हम उसको ट्रैफिक हम सोफोस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो वी कैन इंटीग्रेट सोफोस फायरवॉल एंड द VDI. सो सपोर्ट जो भी सपोर्ट कर रहा है, तो एज्योर है, AWS न्यूटेनिक्स सब सपोर्ट करता है, तो हम उसके जितने भी अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्वर है, पीसी से कोई एप्लीकेशन है, हम उसको अगर प्रोटेक्ट करना है कर सकते हैं. यस, इसके बारे में भी हम जाएंगे, बट अभी के लिए हम सोफोस फायरवॉल के पे ही कंसंट्रेट करेंगे. एक्सटेंड योर प्रोटेक्शन के बारे में हमें डिटेल मिल जाएगी, कैसे इंटरसेप्ट यानी जो एंड पॉइंट है सोफोस का वो कैसे काम करता है विद सोफोस एक्सजी फायरवॉल और उसका जो इकोसिस्टम है उससे. तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट रखेंगे. जैसे कि सोफोस के सारे मॉड्यूल खत्म हो जा रहे हैं, तो उसके बाद हम डेफिनेटली सोफोस हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं इंटरसेप्ट एक्स से, और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सिंक्रोनाइज्ड सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको बताया था वो कैसे वर्क करता है, वो हम सारे मॉड्यूल कवर अप करने के बाद चेक कर लेंगे. सेम वे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. पब्लिक विजिबिलिटी कैसे हम डाल सकते हैं वो भी देखेंगे. कैसे हम अपनी जो टीम है उसको कैसे स्केल अप कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे सोफोस एक्सजी फायरवॉल के बाद. कैसे रिपोर्टिंग करना है वो भी हम देखेंगे. ये पार्ट 12th मॉड्यूल में ही कवर अप हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे. ओके, सो आप फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे. लाइक जस्ट क्लिक देयर. तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इसके बारे में हम जाएंगे बाद में. लेट्स हैव अ लुक टू दी सोफोस फायरवॉल.
तो अभी के लिए मैंने आपके लिए एक सोफोस फायरवॉल मेरे पास है, मैं उसका गो थ्रू करवा देता हूँ GUI बिफोर वी मूव विद द मॉड्यूल्स। ओके, अभी के लिए मैंने क्या किया है, आप अभी अगर अपने पास दूसरा स्क्रीन है, देन यू कैन गो टू लाइसेंसिंग एन अकाउंट। और यहाँ पे आप अपनी एक आईडी क्रिएट कर लीजिए, डेट विल लीड यू टू वन पेज। वो भी मैं आपको कल ट्रेनिंग में ही सब कुछ बता दूंगा, बट अभी आप करना चाहते थे एक आईडी बना लीजिए, जैसे कि मैंने एक बनाई है, वो वही यूज कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, वंस यू यहाँ पे जब आप क्रिएट करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस का डालने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, like this way. Let me just show it you up. It will not take much time. ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, मैं लॉगआउट कर देता हूँ ऐसा हो तो। सॉरी गाइस, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। Let me try again. ओके, तो मैंने अभी के लिए क्या किया है, मेरे पास VM है जिसमें मैंने OVF फाइल इंस्टॉल किया है। तो मैंने वो कहाँ से डाउनलोड किया, आपको जैसे आप लॉगिन हो जाओ, आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया है, देन यू हैव टू गो टू माय सोफोस, जस्ट क्लिक देयर। उसमें आप नेटवर्क प्रोटेक्शन में हम जाएंगे, and we will click on download installer, or you can click it from here. ओके, यहाँ पे आपको जो सोफोस की फायरवॉल है उसका आपको OS मिल जाएगा यहाँ से। अभी ये जो फायरवॉल है आपको 30 डेज के लिए फ्री में मिलेगा, यानी आप उसके सारे फीचर्स जो है वो नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो हम सेम चीज़ अपने लैब में हम देखेंगे कैसे एक्चुअली सोफोस फायरवॉल हम डिप्लॉय कर सकते हैं, और जितनी भी बिजनेस नीड है हम कैसे मीट करेंगे, वन बाय वन वो अपने देखेंगे। तो जैसे कि iOS है, कोई हार्डवेयर पे डालना है तो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। अभी के लिए मैंने वर्चुअल VMware में भी डाल सकते हैं, सपोज द Hyper-V। यहाँ पे आपको सारी फाइल्स मिल जाएगी, जो भी आपका एनवायरनमेंट है उस हिसाब से। तो इफ़ यू हैव इंटेल हार्डवेयर और सिट्रिक, या फिर आपके पास KVM, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल GNS3 है, या फिर Hyper-V, आप उस हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। अभी के लिए टेम्पररी मैंने VM यूज़ किया है। तो VM में डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। वंस दिस फाइल इज डाउनलोडेड, आपको उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपको जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ओके, आपको अनजिप करने के बाद उसको अनजिप करना है, फिर उसमें आपको सारी फाइल्स आ जाएगी वहाँ से। फिर आपके जैसे VM है, VM से आपको वो जो OVF फाइल है वो आपको इंस्टॉल करना है और उसको रन करना है। अभी के लिए तो मैं आपको रेडीमेड जो मैंने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे वही आपको बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मैं आपको कैसे इंस्टॉल करना है, अगर किसी को भी कुछ इश्यू आ रहा है डेफिनेटली मैं उसको पूरा गाइड करूँगा कैसे VM पे करना है। अगर अनफॉर्चुनेटली क्या किसी का इंस्टॉल नहीं हो रहा है फायरवॉल,
तो डेफिनेटली वाया रिमोट या कुछ भी सेशन लेके मैं उनको पूरा गाइड कर दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। तो अभी के लिए जैसे कि मैंने अपने वीएम, मेरे पीसी पे वीएम है जहाँ पे मैंने सोफोस XG फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है। सो आपको ये पूरा जीओ है जहाँ से हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरली इसको कंट्रोल सेंट्रल भी कहते हैं। तो सोफोस फायरवॉल का अगर जो भी अगर मॉडल है तो आपको इधर दिख जाएगा। अभी तक ये सॉफ्टवेयर जो वीएम है उसके मैंने यहाँ पे मॉडल नहीं दिखाएगा, इट विल बी सॉफ्टवेयर बेस। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद आपको जो उसका फॉर्मवेयर करंट है वो मिलेगा और उसका अप्लायंस की। तो आपको ये पूरा हम डेफिनेटली 1 by 1 इसको गो थ्रू करेंगे। लाइक आपको ये पूरा इंसाइट देगा सोफोस XG फायरवॉल का स्टेटस जो भी है। सो यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम मिल जाएगा। सिस्टम का स्टेटस जो है यहाँ पे आपको ट्रैफिक इनसाइट, जो आपका लैन का जो ट्रैफिक है, लैन बैंड से जो भी ट्रैफिक जा रहा है आपका, जो भी इंटरफेस से जा रहा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन यूजर और आइडेंटिटी, अगर आपका कोई ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी सब कुछ एनेबल है, प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर है, देन डेफिनेटली हमें सारी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से मिल जाएगी। अभी हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे इसके बारे में भी। लेट्स से फॉर एग्जांपल सिस्टम। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन परफॉर्मेंस हियर, मीन्स अभी के लिए आपको सब जो सिस्टम यानी जो फायरवॉल का जो स्टेटस है आपको मिल जाएगा। जैसे कि उसका भी लोड कैसे बैलेंस करें, सारी सर्विसेज रन हो रही है। अगर VPN चल रहा है राइट, तो VPN का स्टेटस बताएगा। अभी के लिए कोई VPN कॉन्फ़िगर है तो आपको वो सब इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जितने भी गेटवे है उसका ज़रा जो स्टेटस है, इंटरफेस का जो स्टेटस है वो आपको इधर मिल जाएगा। इसके डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएंगे। CPU मेमोरी डिटेल्स चाहिए तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये तो सिर्फ ओवरव्यू है। अगर हमको बहुत ही डीप में जाना है डेफिनेटली हम उसको रिपोर्ट्स, जो ये वाला सेशन है, हम वहाँ पे जाके देखेंगे। इसको भी हम एक एक करके नेविगेट कर लेते हैं आज, सो दैट जब भी हम लैब पे लैब कर रहे हैं देन यू शुड नो एट विच पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे मेमोरी और आपको ये सब मिल जाएगा। प्लस आपको ये जो टूल्स है, आपको अगर कुछ डायग्नोस करना है, सिस्टम ग्राफ है, जैसे कि कितने यूजर्स हैं, कितने इंटरफेस पे कितनी बैंडविड्थ जा रही है, एंड वो बस जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे मैं आपको वो भी नेविगेट करता हूँ। तो कैसे उसको देखना है हम यहाँ से कर सकते हैं। लॉग व्यूअर है, लॉग्स देख सकते हैं यहाँ पे। रिमोट सपोर्ट है, अगर हमें कोई सोफोस से रिमोट सपोर्ट चाहिए तब हम ये यूज़ करेंगे। पैकेट कैप्चर है, अगर हमें कोई पैकेट चेक करना है तो हम ये देखेंगे। कंसोल, वी कैन गेट द कंसोल ऑफ द फायरवॉल। फिर जो नेटवर्क की यूटिलिटी है, पिंग, ट्रेस रूट, NS लुकअप, राउट लुकअप, ये अगर कुछ ट्रबल शूट करने हमें चाहिए तो हम ये यूज़ कर सकते हैं फायरवॉल से। नेटवर्क में आपको नेटवर्किंग मिल जाएगा, लाइक इंटरफेस। लेट मी जस्ट लॉग इन देयर। ओके ओके, वो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ओके ओके, वील हैव वो सिस्टम ग्राफ में से हमें उसको फिल्टर आउट करना है तो वो आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, हार्ट बीट जैसे मैंने आपको बोला सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी चाहिए तब ये हार्ट बीट फीचर काम में आता है। इन दिस केस एक्चुअली वी रिक्वायर सोफोस के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें एंड यूजर्स पे चाहिए, और सोफोस सेंट्रल इससे सोफोस फायरवॉल से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। उसके बाद ही ये फीचर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में मॉड्यूल में ऑलरेडी कवर अप है। अगर अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको इसको टोपोलॉजी में भी दिखा दूंगा। सेम वे विद एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, तो अगर कुछ एडवांस थ्रेट डिटेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन तो वो आपको यहाँ पे शो अप करेगा, इनसाइट ही देगा। कितने रेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेड रिमोट कितने कनेक्टेड है वो आपको दिखाएगा। कितने, अगर एक डाउन है तो यहाँ पे, अगर 2 है तो एक डाउन है तो 1 दिखाएगा। यहाँ पे अलर्ट्स दिखाएगा, जैसे कि कुछ भी आपने सर्विसेज एनेबल करी है और जो नहीं होनी चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड्स, या फिर फर्मवेयर अपडेट है या फिर कुछ भी, तो वो अलर्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा। कनेक्शन एंड इंटरफेस, तो यहाँ पे जितने भी आपके गेटवेज है, इंटरफेस है, ये आपको यहाँ पे भी उसका जो करंट स्टेटस है, जैसे कि अनप्लग्ड है, डिसेबल है फॉर एग्जांपल, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा।
लास्टली द TLS एंड SSL इंस्पेक्शन के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में भी हम देखेंगे ये जो जितने भी टूल्स है हम कहाँ पे यूज करेंगे और कहाँ पे ये काम आ सकते हैं जनरली, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये तो कंट्रोल सेंटर में इनसाइड सिस्टम का था, तो यहाँ तक हमने जैसे कि ओवरव्यू लिख लिया। लेट दिस गेट लोडेड अप। ओके, हाई अवेलेबिलिटी जैसे HA है, आपको HA जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 50 यूजर्स हैं और एक फायरवॉल डिप्लॉय किया था सबसे पहले, जो अभी यूजर्स थोड़े उसका जो ट्रैफिक है, इंटरनेट का ट्रैफिक, उसको लोड बैलेंस करना है। तो अगर हम यूजर्स को जैसे कंप्लेन आ सकती है जैसे कि स्लो चल रहा है, तो इन दैट केस हम हाई अवेलेबिलिटी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट। या फिर अगर ऐसे नहीं लोड आ रहे, अगर कोई फायरवॉल है डाउन है, राइट, कोई फेल ओवर करना है, एक्टिव पैसिव एक्टिव, इन दैट सिनेरियो वी विल यूज हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी बारे में भी मॉड्यूल में कवर अप है, हम इसके बारे में भी जाएंगे, कैसे हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं, क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, और अगर कुछ इशू आ रहे तो उसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी के लिए सोफोस मैनेजर जो है तो हम ऐड कर सकते हैं, नॉट फॉर दी सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट कुछ भी अगर फाइल हमें मैनेज करनी है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है, तो हम सोफोस मैनेजर हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको फायरवॉल का स्टेटस बताएगा कितने टाइम से फायरवॉल अप है। सेम वे अगर ये हो गया सिस्टम का, सो वी विल गो थ्रू इन मच मोर डिटेल अबाउट दिस थिंग्स, कैसे हम इसको इंस्टॉल तो है ही, फॉर एग्जांपल इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, और आगे जाके हम इसको अगर कुछ इशू आ रहा है तो ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ट्रैफिक इनसाइट में आपको सारी जो एप्लीकेशन जो लैंड साइड से जो आपका ब्राउजर का ट्रैफिक, एप्लीकेशन का ट्रैफिक जा रहा है, वो आपको ये वाले पूरे सेशन में दिखाएगा। लाइक वेब एक्टिविटीज दिखाएगा, ओके, शॉर्ट में दिखाएगा आपको। क्लाउड एप्लीकेशन अगर यूज की है ऑफिस 365 फॉर एग्जांपल, तो आपको सारी क्लाउड एप्लीकेशंस यहाँ पे डिटेल में बताएगा। अगर कोई एप्लीकेशन अलाउड है, ठीक है, तो उसका जो हाईएस्ट जैसे कि स्ट्रीमिंग मीडिया फॉर एग्जांपल है, तो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे वो बताएगा। अगर हमने IPS पॉलिसीज लगाई है और उसने कुछ डिटेक्ट किया है, तो उसका शॉर्ट समरी आप यहाँ पे देख सकते हो। डिटेल में जाने के लिए हम डेफिनेटली रिपोर्ट्स और लॉग्स देखेंगे आगे जाके। सेम वे कोई अलाउड कैटेगरीज है, ठीक है, उसका जो इनसाइट है हम यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए था ऑफ कोर्स, और ये वेब के लिए। सेम वे अगर कोई एप्लीकेशन हमने ब्लॉक किए, लेट्स से फॉर एग्जांपल एनी चैट एप्लीकेशंस और एंड सो ऑन, तो यहाँ पे वो ब्लॉक एप्लीकेशन आपको ग्राफ बता देगा। यूजर इनसाइट एंड यूजर डिवाइस एंड इनसाइट, तो इसमें मैंने जैसा बताया था, जो सिक्योरिटी हार्टबीट फीचर है, सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन कंट्रोल है, और जीरो प्रोटेक्शन ATP। जनरली इसमें सोफोस फायरवॉल यानी जो सोफोस का इकोसिस्टम कंप्लीट होना चाहिए टू मीट ऑल दिस रिक्वायरमेंट। तो ये क्या करेगा, सिक्योरिटी हार्टबीट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोफोस फायरवॉल है, सोफोस सेंट्रल है, सोफोस सेंट्रल भी हम देखेंगे उसका GUI कैसा है नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो सोफोस सेंट्रल और एंड पॉइंट्स, ये तीनों मिलके हम ये फीचर्स यूज कर सकते हैं। उसमें जो सिक्योरिटी हार्टबीट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम है जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक है, वो उसको कैसे आइसोलेट करता है, कैसे उसको इन्फेक्ट करने में बताता है, उसका जो रिस्क फैक्टर है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेम वे एप्लीकेशन, सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन, अगर आपके पास एंड पॉइंट्स डिप्लॉय किए, जैसे मैंने आपको बताया था सोफोस एंड पॉइंट्स और सोफोस सेंट्रल और फायरवॉल, अगर कोई यूजर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोई ऐसी रन हो रही या फिर इंस्टॉल कर दे रहा है, या फिर ऐसी एप्लीकेशन है जो फायरवॉल के पास उसकी डेटाबेस में नहीं है, तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वो जो एप्लीकेशन पर्टिकुलर रन हो रही है यूजर के PC में, और उसको हम फिर आगे जाके कैटेगराइज कर सकें। इसके बारे में ऑफ कोर्स इस मॉड्यूल में कैसे है वो हम देखेंगे। इवन ये वाला जो कंट्रोल सेंटर है, डेफिनेटली हम जो लेफ्ट साइड है जितने भी टैब्स हम डेफिनेटली एक एक करके देखेंगे।
जीरो डे प्रोटेक्शन फीचर है जो मैंने आपको बताया था, वो भी हम देखेंगे कैसे जनरली लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई exe फाइल है जो हमने अलाउड, वो अलाउड है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जनरली यूज करेगा सेंसटर्म टेक्नोलॉजीज। तो उस फाइल का जो भी स्कैन रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बारे में डेफिनेटली हम जाएंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे जो फाइल की डिटेल्स है वो आती है, कैसे हमें अलाउड करना है या फिर नहीं अलाउड करना है। तो जनरली जैसे फाइल में है, या फिर हम अलाउ कर सकते हैं या फिर हम डिनाई कर सकते हैं, तो हम उसको फिर वो एक्शन ले सकते हैं। सेम वे विद एटीपी एंड यूटीकी यानी यूजर थ्रेड कोटा, यानी मैंने जैसे बताया था कौन सा यूजर सबसे हाई रिस्क पे, वो सारे ये जो फीचर्स एनेबल करने के लिए हमें सोफोस एंडपॉइंट और सोफोस फायरवॉल इज ऑफ कोर्स सोफोस से इंटीग्रेट होना चाहिए विद एक्सजी, तो टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। सेम वे अगर हम HTTPS स्कैनिंग कर रहे हैं थ्रू फायरवॉल, देन वी विल गेट ऑल द इनसाइड ट्रैफिक फ्रॉम हियर एंड वी कैन उसको हम डीप डाइव कर सकते हैं, डीप कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी ट्रबल शूट इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे आपको ये जो सेशन है, आपको यहाँ पे आपको कितने वेब यानी वेब एप्लीकेशन प्रोटेक्शन है ये आपको मिल जाएंगे। जैसे कि कितने वेब सर्वर्स अगर आपने साइबररूम के सोफोस के जो पीछे हैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे इसको डिटेल्स बताएगी। सेम वे कितने यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन एनेबल है और हमारे पास यूजर्स हैं, तो यूजर्स आपको कितने एक्टिव है वो दिखाएंगे, कितने नेटवर्क है आपको उसका मिल जाएगा, और क्या स्कैन हो रहा है उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। सेम वे कितना अनयूज है, डिसेबल है या फिर कुछ भी चेंजेस हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू। फिर ये छोटा सा रिपोर्ट सेशन भी यहाँ पे है जो आपको यस्टरडेज की रिपोर्ट्स जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, लाइक रिस्की एप्लीकेशन सीन, ऑब्जेक्टेबल वेबसाइट सीन, जो हमने पॉलिसीज लगाई उस हिसाब से, इंट्रूजन अटैक। और यहाँ पे फाइनली आपको मैसेज मिलेंगे लाइक अगर कोई फर्मवेयर आया है फॉर एग्जांपल, या फिर आपने कोई ऐसी सेटिंग्स एनेबल कर रखी है जो सिक्योरिटी के हिसाब से फिजिबल नहीं है, देन वी कैन गेट दोस अलर्ट एंड we can sort it out those things. Okay, so let's start from networking here. Sorry, network. So configure में हम अगर जाएंगे कॉन्फ़िगर में, तो हम यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जनरली पोर्ट ए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम नया सोफोस फायरवॉल लेते हैं तो जनरली उसका IP 172.16.16.16 होता है। यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया था, आप भी चेंज कर सकते हैं, नो इशू। बट जैसे ही अगर हम अनबॉक्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर उसको एक्सेस करना है उसका GUI, तो आपको सिंपली क्या करना है, सोफोस का जो फायरवॉल है उसको पोर्ट ए से कनेक्ट करके आपको कोई भी लैपटॉप है उसमें कनेक्ट करके उसको आपको इसमें DHCP ऑलरेडी रन हो रहा होगा। अगर आपका IP ना मिले, देन मैन्युअली 172.16.16.17 फॉर एग्जांपल विद /24 सबनेट के मास्क के साथ कॉन्फ़िगर करके गेटवे 16.16.16.16 यानी 172.16.16.16 गेटवे कॉन्फ़िगर करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम जब अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगर करेंगे तब हम यही चीज़ करने वाले हैं, कैसे हम एक्सेस लेंगे पहले फायरवॉल का, और कैसे हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे फिर हम जोन्स कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम यूजर्स क्रिएट करेंगे लोकली, या फिर अगर कोई दूसरा AD सर्वर है फॉर एग्जांपल, कैसे यूजर्स को इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम ऑथेंटिकेशन एनेबल करेंगे, कैसे हम वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसीज, एप्लीकेशन पॉलिसीज ऑफ कोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एज वेल एज विद IPS पॉलिसीज। अगर कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग है या फिर ये वेब प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको बताया वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो भी हम आगे जाके देखेंगे रूल्स पे। देन वी विल आल्सो चेक हाउ टू कॉन्फ़िगर ईमेल प्रोटेक्शन, वो भी हम आते हैं अभी उसमें, ईमेल प्रोटेक्शन पे भी। वायरलेस, यस ऑफ कोर्स, वायरलेस जो यहाँ पे भी दिया हुआ है फॉर वो तो सिर्फ सोफोस API के लिए, कोई थर्ड पार्टी तो यूज नहीं होगा, तो हम वो फीचर्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क पे है, कॉन्फ़िगर नेटवर्क पे, तो ये हम इंटरफेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जोन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि C अगर हमें DMZ जोन करना है तो हम उसको DMZ सिलेक्ट करके IP दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम जो मॉड्यूल्स में है ये सब कुछ कवर अप हो जाएगा, ये जोन्स क्या हैं डिटेल में हम जाएंगे।
वैन लिंक मैनेजर, ओके। अगर हमारे पास मल्टीपल ISPs है देन कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, DNS ऑफ कोर्स, कैसे हम DNS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सोफोस फायरवॉल में along with DHCP ऑन द इंटरफेस। तो आप अपना इंटरफेस सिलेक्ट करके DHCP भी एनेबल कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। along with IP6 एडवर्टाइजमेंट, सेलुलर वैन हम देखेंगे, IP टनल कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हम देखेंगे, नेबरिंग आर्क कैसे जनरेट होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में मॉड्यूल में कवर अप करेंगे विद डायनेमिक DNS। ये भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे अगर बाहर से हमें फायरवॉल को एक्सेस करना है विद दी होस्ट नेम, ओके। नाउ लेट्स गो टू द current activities after the networking. Let's move from top to bottom here. तो करंट एक्टिविटीज में आपको ये वाली टिप्स मिल जाएगी, लाइव यूजर, लाइव कनेक्शंस, कनेक्शन विद IP6, IPsec कनेक्शंस एंड रिमोट यूजर। लाइव कनेक्शंस में जो लाइव यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो भी यूजर ऑथेंटिकेट होते हैं सारे यूजर्स आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट मिल जाएगी, यानी वो कैसे यूज, कौन से मेथड से जो भी है आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी कि कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड से वो लॉगिन हुए हैं। लाइव कनेक्शंस जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, यूजर नेम है, सोर्स IP से जो भी कनेक्शंस लाइव है, जैसे कि फायरवॉल वैसे भी सेशन मेंटेन करता है, तो सारे कुछ हम यहाँ से ही देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे लाइव कनेक्शंस मेंटेन करता है। along with ये IPv4 सेम वे विद IPv6 हम देखेंगे। अब IPv6 कोई एनवायरनमेंट में एनेबल है तो IPsec कनेक्शंस हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने कोई हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस कनेक्ट की हुई, या फिर कोई ऐसी साइट है जहाँ पे थर्ड वेंडर भी कॉन्फ़िगर कनेक्टेड है, तो हमें उसकी सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी। रिमोट यूजर्स में आपको सारी डिटेल्स, जैसे यूजर्स SSL VPN से कनेक्टेड है, या फिर कोई यूजर्स SSL VPN या फिर IPsec VPN ऑफ कोर्स कनेक्टेड है, या फिर सोफोस कनेक्ट हुआ है रिमोटली, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको करंट एक्टिविटीज में यहाँ पे मिलेगी। आफ्टर कंट्रोल सेंटर रिपोर्ट्स से क्लिक करने से पहले मैं डायग्नोस में जाता हूँ यहाँ पे। तो डायग्नोस में आपको थोड़े नेटवर्किंग ट्रबल, अगर आपका कुछ ट्रबल शूट करना है उस तब ये हम यूज़ करेंगे, लैब में भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे जाके ये हम कैसे इसको मोस्ट इसका यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि पिंग to check whether the host is reachable or not via interface, अगर जहाँ से कनेक्टेड है। ट्रेस राउट देखेंगे, ट्रेस राउट कैसे होता है फायरवॉल से, ओके। NS लुकअप करेंगे हम, NS लुकअप करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे ये जितने भी टूल्स हैं कौन से सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे और उसका आउटपुट लेंगे, ठीक है। राउट लुकअप भी लेंगे ऑफ कोर्स। और लास्ट में जो कंसोलिडेटेड ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट है CRT, जनरली अगर ये फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिसी क्रिएट की है बट इट इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड, तो उसी तब हम ये फायरवॉल के लॉग्स जनरेट करके हम सपोर्ट को देंगे आगे जाके, वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं ये चीज़ें। सिस्टम ग्राफ क्लिक करने से पहले मैं URL लुकअप पे क्लिक करता हूँ। तो डायग्नोस में URL लुकअप में आपको लेट्स से एग्जांपल मैंने facebook.com लिखा है, आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे उसकी कैटेगरी मिल जाएगी। तो कोई भी ऐसे अनकैटेगराइज है तो आप उसको फिर कैटेगराइज भी कर सकते हो, अगर वो कैटेगराइज नहीं है फॉर एग्जांपल तो आपको उसका स्टेटस मिल जाएगा। Let me try sophos.com, what it says. Okay, software. Okay. Okay, I think Sophos का नाम Facebook चेंज हो गया है, सोशल नेटवर्किंग इट केम अप, ओके। सो ऐसे आप लुकअप कर सकते हो। पैकेट कैप्चर भी हम कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सोफोस एज ए प्रॉक्सी यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने सोफोस का IP रखा हुआ है, ये इसका डिफॉल्ट पोर्ट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कहाँ पे इसका सेटिंग्स सोफोस फायरवॉल। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अभी के लिए सोफोस एज ए प्रॉक्सी सर्वर यूज किया है। तो अगर मैं देखूं लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर,
ये कर लेते हैं। ओके, अच्छा ये कैप्टिव पोर्टल पेज आ गया ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि मैंने अभी एनेबल किया था, तो इसको मेरे को पहले मैं अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ। हेलो, ओके। अभी के लिए मैं ये ट्राई नहीं कर सकता शायद जूम की वजह से। लेट्स सी, मैं आपको ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा। डायग्नोस में जाते वापस पैकेट कैप्चर, तो हम लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक आईपी डाला हुआ है। आप भी ये वाला अभी चेक कर सकते हो अगर आपके पास होस्ट फायरवॉल है। तो ये जो कमांड है होस्ट और ये आईपी, ये आप अपने ब्राउजर में एक्सेस करो तो आपको बताएगा कि अभी के लिए इसका ट्रैफिक कौन से रूल से जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे लैब में कि कौन से रूल से, अगर हमें देखना है, अगर हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, देखना है कौन से रूल से ट्रैफिक जा रहा है, तो हम उसको यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं। कनेक्शन लिस्ट में हम जितने भी कनेक्शंस है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेटफुल फायरवॉल है, तो आपको सारे कनेक्शंस आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे कि हम कैसे इसको यूज में ला सकते हैं टू ट्रबल शूट द इश्यू। ओके, सोफोस का एक्सेस सपोर्ट है, इसके बारे में भी अभी के लिए तो हम स्किप कर रहे हैं। जीरो डे प्रोटेक्शन मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे कि कोई EXE फाइल आ रही है तो उसका जो पूरा फाइल का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये भी हम एनेबल करके देखेंगे जीरो डे प्रोटेक्शन। ओके, रिपोर्ट्स। ओके, रिपोर्ट्स में भी हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। सो आपको पूरा इंसाइट मिल जाएगा ट्रैफिक का यहाँ पे। तो इस कैसे इसको फिल्टर आउट करना है टू गेट द एक्यूरेट रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट आई है, कैसे उसको जनरेट करना है रिपोर्ट्स, हम उस हिसाब से जनरेट करेंगे। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन डन। हम उसमें एप्लीकेशन और वेब ट्रैफिक जनरेट करेंगे, थोड़ा मैलिशियस ट्रैफिक भी जनरेट करेंगे, एंड देन वी विल हैव अ लुक हियर हाउ इट जनरेट द रिपोर्ट्स एंड ब्लॉक द सेम। जैसे अपना नेटवर्क है कैसे प्रोटेक्ट करता है वो आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे। एप्लीकेशन और वेब लैन के जितने भी यूजर्स हैं, जो भी एप्लीकेशन और वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उसके सारे जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कौन सी टॉप एप्लीकेशंस यूज की है, कौन सी हाई रिस्क एप्लीकेशंस यूज की है। ओके, एंड ऑल विल हैव वन, एक एक करके सब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अगर इंट्रूजन सिस्टम मींस IPS पॉलिसीज लगाई है, डेफिनेटली हमें जितने भी टाइप्स ऑफ अटैक्स है वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पे। तो हम इसको अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट कर लेंगे हियर और जनरेट करेंगे। तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं ये वाले फॉर्मेट्स में, PDF, HTML, CVS, बुकमार्क भी कर सकते हैं। बुकमार्क शेड्यूल के बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे आगे जाके, कैसे हम रिपोर्ट्स को शेड्यूल कर सकते हैं और मेल पे डेली रिपोर्ट्स फॉर एग्जांपल ला सकते हैं। VPN है, जैसे कि कौन से कितने यूजर्स SSL से कनेक्ट हुए, कितने VPN सेशंस बने, क्लाइंट लिस्ट कितने हैं, वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएगा डिटेल लाइक PPT। ओके, सेम वे विद ईमेल, यानी कितने मेल सेंडर रिसिपिएंट्स जितने भी मेलिशियस है, ठीक है, कि स्पैमिंग है, वो सब हम यहाँ से मिल जाएगा। प्लस हम इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं सेंडर रिसिपिएंट्स से और इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। कंप्लेंट्स हम जनरेट कर सकते हैं और कस्टम रिपोर्ट्स भी हम इसके बारे में भी हम देखेंगे एक एक करके। रिपोर्ट्स जनरली जब हमारा हम यूजर्स पे 2 PC पे टेस्ट करेंगे, उसमें डिफरेंट थोड़ा सा ट्रैफिक जनरेट करेंगे एंड विल जनरेट दिस रिपोर्ट्स हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। अगर यहाँ पे नो रिपोर्ट्स आ रहा है, ठीक है, हम डेफिनेटली उसको देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये रिपोर्ट है यहाँ पे। करंट एक्टिविटीज में
सॉरी डायग्नोस में जाएंगे, उसमें सिस्टम ग्राफ पे जाएंगे, जो मैंने एक लास्ट इसमें छोड़ दिया था, ये वाले सेशन मॉनिटरिंग और एनालिसिस में। इसमें आपको जो सिस्टम का हेल्थ स्टेटस है वो पूरा मिल जाएगा। आप इसको अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। अभी डिफॉल्ट देख लेते हैं, जैसे लाइव ग्राफ है, जैसे सीपीयू का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मेमोरी, डिस्क, यूजर्स कितने, वैन लोड कितना, इंटरफेस में इंफॉर्मेशन, ये आपको यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में दिखेगा लाइक दिस। इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे। ये चीज़ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायग्नोस्ट एंड मॉनिटरिंग सब कुछ करने के लिए। ओके, इंटरफेस और ये सब सेम वे यहाँ पे हम जो रिपोर्ट्स है वो हम जनरेट कर सकते हैं आवरली बेस, 48 आवर, वीकली, मंथली, ईयरली। ओके, फिर हम रूल्स पे आते हैं थोड़ी देर के बाद, कि पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोटेक्ट पे हम जाते हैं। प्रोटेक्ट में इंट्रूजन प्रिविजन है, तो दो सेटिंग्स हम अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपको जो हमने दो सेटिंग अप्लाई की है उसका ओवरव्यू देगा। अगर कोई अटैक हो रहा है, तो अगर सिंक अटैक हमने जो दो सेटिंग अप्लाई की है उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको जो ट्रैफिक ड्रॉप है वो आपको यहाँ पे इनसाइड देगा। कॉन्फ़िगर आप यहाँ से कर सकते हो, तो स्पूफ प्रिवेंशन भी कर सकते हैं हम। अगर मैक बेस जो ट्रस्टेड मैक है उनको इंटरनेट देना है, ठीक है, तो हम वो एनेबल कर सकते हैं। और स्पूफ प्रोटेक्शन जो फीचर है फायरवॉल का वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हैव टू मेक श्योर दैट सारे मैक एडेड है, अदरवाइज इंटरनेट नहीं चलेगा उस यूजर के लिए। ओके, रोज सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि सिंक फ्लड है तो पैकेट पर सोर्स कितना वो जनरेट कर रहा है, डिफॉल्ट सेटिंग्स है फायरवॉल की। हम अपने सिस्टम में कितना ट्रैफिक जनरेट होता है बाहर से और आउटसाइड से, अकॉर्डिंगली जो पैकेट पर मिनट जो जनरेट होते हैं जो लेजिटिमेट है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेम वे विद दी यूडीपी फ्लड, टीसीपी फ्लड, टीसीपी ट्रैफिक कि कितने पैकेट जनरेट हो रहे हैं, उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ होगा तो वो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि कोई रिक्वेस्ट आ रही, सिंक आ रही, तो उसको अगर उससे ज़्यादा हमने सेट किया हुआ है, उससे जो सेट किया उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ड्रॉप होके यहाँ पे हमें दिखाएगा। इसकी डिटेल्स भी हमें मिलेगी, इसके बारे में हम ट्राई करेंगे कि अगर लाइव एनवायरनमेंट में अगर कुछ हो सकता है तो हम देखेंगे डेफिनेटली। अगर कुछ बाईपास करना है तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, अगर कुछ पोर्ट बाईपास करना है अपार्ट फ्रॉम दिस। आईपीएस पॉलिसीज ऑन सोफोस फायरवॉल, यहाँ पे डिफॉल्ट आईपीएस पॉलिसीज यहाँ पे है ही, तो हम उस डिफॉल्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लैन टू वैन डीएमजी है, डीएमजी टू वैन है, ठीक है, हम ये पॉलिसीज लगा सकते हैं। तो जो अगर पॉलिसी का जो इंसाइट है वो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। मॉड्यूल्स में तो ऑलरेडी हम एक एक करके देखेंगे कैसे ये काम करते हैं, पर दिस आर द रिकमेंडेड। तो हम ये पॉलिसीज भी लगा सकते हैं, खुद की भी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर टेस्ट किया है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ कौन सी कैटेगरी से है, ठीक है, सबनिटी कौन सी है, इस हिसाब से फिल्टर करके खुद की पॉलिसी बना के हम एक्शन ले सकते हैं, जो भी एक्शन लेना है। सो आईपीएस पॉलिसी के बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे, कैसे हम डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, कैसे हम कस्टम यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई अपना थर्ड पार्टी आईपीएस सिग्नेचर्स है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं फायरवॉल में, ऑफ कोर्स। सो वी विल डू दैट एज वेल, हाउ वी कैन इंपोर्ट दोस हियर। वेब पॉलिसीज और एप्लीकेशन पॉलिसीज, यानी एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसीज और वेब फिल्टर पॉलिसीज है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सोफोस में बाय डिफॉल्ट इतनी तो आपको बाय डिफॉल्ट ही आएगी। आप बाय जैसे कि सीधा ही आप फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब कैटेगरीज ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपको कुछ और ब्लॉक करना है, ठीक है, तो आप उसमें रूल अबाउ में जाके आप उस हिसाब से ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पे सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, हम वो भी देखेंगे डेटाबेसिस का। तो ये डिफॉल्ट पॉलिसीज है, आप अपनी खुद की कस्टम पॉलिसीज भी बना सकते हो। पॉलिसीज के लिए ये पैम्पलेट है, नाम देना है, ठीक है, फिर ऐड रूल पे जो भी कैटेगरीज आपको डिनाई करनी है डिनाई कर सकते हो, अलाउ करनी तो अलाउ भी कर सकते हो एग्जिस्टिंग पे।
इसके बारे में भी हम डिफरेंट एक सिनेरियोस देखेंगे, स्पेशली वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर के बारे में, कौन कौन सी बिजनेस नीड्स हम रिक्वायरमेंट हम मीट कर सकते हैं जनरली टू ब्लॉक ऑन अनवांटेड एक्टिविटीज। सो सेम वे ऐड भी कर सकते हैं, मैंने बोला। पॉलिसी पे अगर कोई कोटा है तो उसका हम स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। यूजर एक्टिविटीज है, हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ओके, कैटेगरीज ऑलरेडी है यहाँ पे, डिफॉल्ट पॉलिसीज है, डिफॉल्ट कैटेगरीज है, सोफोस फायरवॉल प्रोवाइड करता है आपको। सेम वे आपको जितनी भी बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक एडवर्टाइजमेंट, जितनी वर्ल्ड के एडवर्टाइजमेंट की अगर उसमें कुछ आ रहा है तो इसमें फॉलो होगी। अगर हमने ये ब्लॉक किया हुआ है वेब फिल्टर पॉलिसी में, तो जितनी भी वेबसाइट है, जितनी भी वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, वो सब ब्लॉक हो जाएगा। पर ये ऑफ कोर्स उसके लिए प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जैसे कि कुछ ट्रैफिक इंटरसेप्ट होता है तो उसको हमें HTTP स्कैनिंग से भी एनेबल करना पड़ता है, इवन दो आफ्टर अप्लाइंग दी पॉलिसीज। तो दैट इज द बेस्ट सिक्योरिटी द कॉन्फ़िगरेशन दैट विल, हम उसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे, बिकॉज कोई भी लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर होगी तो वी विल बी सेफ एंड सिक्योर। अगर कुछ URL ग्रुप बनाना है तो हम यहाँ पे वो बना सकते हैं। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे ये चीज़ कहाँ पे यूज हो सकती है। एक्सेप्शन जो है वो कहाँ पे यूज हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे, कि हमें कुछ अगर बाईपास करना है स्कैनिंग में तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स है, वेब फिल्टर यानी ब्राउजर बेस्ड कोई भी ट्रैफिक हमें उसको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। तो जनरली वो स्कैन करेगा पूरा ट्रैफिक वाया ड्यूल इंजन। आप ड्यूल इंजन से भी कर सकते हो, सिंगल इंजन से भी कर सकते हो। ड्यूल इंजन, सिंगल इंजन जनरली सोफोस अपना खुद का एंटीवायरस सिस्टम है, एज वेल एज एक अवीरा का भी है जो इंटीग्रेटेड है, उसकी सेटिंग्स भी है, मैं आपको बताऊंगा। सेम वे आप इसको जो स्कैनिंग मोड है उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो कोई अगर मालवेयर यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है तो। ओके, फाइल साइज अगर कुछ ज्यादा हो रही तो उसके ऊपर भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। PDUs हैं, ठीक है, अनवांटेड जो जनरली जैसे कि ऐसी कोई वेबसाइट यूजर ने एक्सेस कर ली जिसमें माइनिंग्स हो रही है, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी की, तो जैसे PDU फाइल्स है, ओके, स्पाईवेयर, सब कुछ यहाँ से वो डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देगा। इसके बारे में मैं सारी सेटिंग्स हम एनेबल कर करके चेक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। अगर कोई वो ऑथराइज्ड है तो हम उसको PDU है उसको भी हम ऐड करेंगे, यानी पोटेंशियल अनवांटेड एप्लीकेशन, वो भी हम देखेंगे। अगर पोटेंशियल अनवांटेड एप्लीकेशन को अलाउड करना है तो हम उसको यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं अगर ये एनेबल है तो। ओके, इसके बारे में देखेंगे, नो वरीज। कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन मिस आउट कर रहे तो उसके ऊपर भी काम करेंगे लैब में। HTTP स्कैनिंग जो सर्टिफिकेट है वी विल, हम इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनरली टू इंटरसेप्ट द HTTPS ट्रैफिक, ज़्यादातर अपनी जो भी वेबसाइट है HTTPS पे, तो उसको पूरा स्कैन डिक्रिप्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे विद दी सोफोस सर्टिफिकेट, वो हम देखेंगे। ओके, कुछ भी पॉलिसी ओवरराइड करना है, अगर ये जनरली तो ऑथेंटिकेशन अगर एनेबल है यूजर्स के ऊपर और यूजर्स को बाईपास करना है तब हम ये वाला फीचर यूज करेंगे। इसके बारे में भी ऑथेंटिकेशन के बाद जो मॉड्यूल है उसके बाद हम ये लैब में देख लेंगे। सेम गोज विद एप्लीकेशन, सो दिस आर द डिफॉल्ट एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी, जैसे कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और ये एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपको कुछ और ब्लॉक करना है तो आप कैटेगरी वाइज ब्लॉक कर सकते हो या फिर रिस्क वाइज भी ब्लॉक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज सेम कैटेगरीज और या फिर टेक्नोलॉजी भी उसको सिलेक्ट करके हम लास्ट में उसको सिलेक्ट करके एक्शन ले सकते हैं, अलाउ करना है या फिर नहीं करना है। तो ये है एप्लीकेशन पॉलिसी। इसके बारे में भी हम थोड़े सिनेरियोस क्रिएट करेंगे कैसे अलाउड और ब्लॉक करना है। सेम वे गोज विद दी सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कोई यूजर्स ने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की है जो कैटेगराइज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिस्ट है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कैटेगराइज नहीं है, तो हम उसको सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन, यानी जैसे मैंने आपको बताया सोफोस सेंट्रल होना चाहिए, सोफोस फायरवॉल एंड पॉइंट्स, जैसे वो डिटेक्ट करेगा यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी
और आपको उस हिसाब से उसको कैटेगराइज करना है। हम देखेंगे कोई एप्लीकेशन ऐसे बहुत सारी है, उसको एंड पॉइंट्स डाल के हम देखेंगे यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। सेम वे विद द क्लाउड एप्लीकेशन, जैसे सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन काम करते हैं वैसे ही क्लाउड आपका यहाँ पे काम करेगा। अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 यूज सर्विसेज यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स बताएगा। एप्लीकेशन लिस्ट आपको जो सोफोस में ऑलरेडी जितनी भी एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसका डेटाबेस आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा। इसके बारे में भी हम मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं सारी चीज़ों का। ट्रैफिक शेपिंग जितना भी वर्ड आ रहा है फाउल पे वो जनरली बैंडविड्थ यानी क्यूएस पॉलिसीज है, या फिर क्यूएस पॉलिसी बोल दीजिए या फिर बैंडविड्थ और ट्रैफिक शेपिंग। तो हम यहाँ पे जो कैटेगरीज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफर है, तो जो भी अगर ये वाली एप्लीकेशन है उसमें हमें बैंडविड्थ लगानी तो हम बैंडविड्थ लगा सकते हैं, लाइक 256 kbps फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पॉलिसीज भी मिल जाएगी, आप अपनी हिसाब से भी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे मॉड्यूल्स में भी कवर अप किया हुआ है, तो कैसे पॉलिसीज बनाना है, बैंडविड्थ पॉलिसी, वो भी हम देखेंगे। लाइक ऐसा होता है कि ये डिपार्टमेंट को सिर्फ 5 MBPS देना है, ये डिपार्टमेंट को 2 MBPS देना है, डायरेक्टर को 5 MBPS देना है फॉर एग्जांपल। तो कैसे हम क्यूएस पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो भी हम बताएंगे। पर ये जो एप्लीकेशन में क्यूएस पॉलिसी है वो वाला सेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे डेफिनेटली जब भी हमारे पास लैब एक्सेस हम लाइव सेशन होंगे, क्योंकि डेफिनेटली अभी भी मैंने बहुत कुछ गो थ्रू किया है, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी, और कैसे 1 by 1 उसको हम रिजोल्व करेंगे। क्योंकि क्या होता है कभी लाइक अभी किसी के मन में SD-WAN आ जाएगा, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं वेब और एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, तो SD-WAN भी आ सकता है। तो डेफिनेटली वो वाले क्वेश्चंस भी है, सब हम कवर अप करेंगे एक एक करके। और इसमें भी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स सिमिलरली हम कैसे उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो वायरलेस प्रोटेक्शन फायरवॉल में है, जनरली मैंने आपको बताया था सोफोस एपी के बारे में, जो मॉड्यूल्स जैसे आप प्लग इन करोगे तो आपको पहले तो ये जो थर्ड टैब है उसमें ही आपको दिख जाएगा पेंडिंग लिस्ट में, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे और इसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो जनरली जो भी उसका तो जीओ होता नहीं, तो हम यहाँ से उसको पूरा मैनेज और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखेंगे मैश नेटवर्क उसमें क्या है और हॉटस्पॉट क्या है, वाउचर्स क्या है। जैसे एपी से कोई गेस्ट यूजर आ रहा है उसको हम वाउचर्स देंगे, वो भी हम देखेंगे। वायरलेस सेटिंग्स कौन सी होनी चाहिए, हॉटस्पॉट सेटिंग्स कौन सी होनी चाहिए सोफोस एपी में। अगर आपका कोई ईमेल प्रोटेक्शन भी है हमारे पास, तो ईमेल हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पॉलिसीज से। तो बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज तो है ही यहाँ पे, तो अगर कोई सस्पिशियस मेल होगा या प्रोबेबल स्पैम या वायरस होगा तो या इस रूल के हिसाब से ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसके और एक और फीचर्स हैं, जैसे कि अगर सोफोस हम MTA यूज करें तो हम MTA और लेगेसी मोड है इसमें, उसका डिफरेंस देखेंगे। तो MTA मोड में हम जैसे कि कोई मेल सेंड कर रहा है, रिसीव हो रहा है, उसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है लाइक पोस्टल एड्रेस और समथिंग लाइक दिस, अकाउंट नंबर से, ठीक है, सब कुछ लिस्टेड है, तो वो वाला मेल हमें उसको मिल जाएगा, हमें भी उसकी कॉपी मिल जाएगी, सो दैट वी कैन डायग्नोस्ट और रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं जा रही ऑर्गेनाइजेशन के बाद। तो डेटा कंट्रोल लिस्ट भी हम देखेंगे डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। अपन अभी के लिए फिलहाल हम GUI को सिर्फ गो थ्रू करते हैं, बाद में हम डेफिनेटली एक सेशन कवर अप कर लेंगे विद अलोंग विद द मॉड्यूल्स। तो अगर कुछ क्वारंटीन हुआ है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई मेल को है तो यहाँ से क्वारंटीन हो जाएगा। अगर रिलीज करना है तो हम यूजर पोर्टल से करेंगे, वो भी हम कैसे रिलीज करेंगे मेल जो क्वारंटीन है, अगर क्वारंटीन है और लेजिटिमेट है उसको रिलीज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। लॉग्स हमें मिल जाएंगे, हम जनरेट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको मंथली रिपोर्ट से मेल की तो आपको भी मिल जाएगा स्पूफ में, और मेल लॉग्स भी इस हिसाब से। अगर कुछ हमें भरत, आई थिंक बहुत अच्छा। तो गाइस, अगर किसी का कोई भी डाउट्स है इस कोर्स को लेके कि क्या चीज हम कवर अप करेंगे, आप अपफ्रंट अभी पूछ सकते हो।
अभी हम डाउट्स लेते हैं, जिसका कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरी है गाइस बताइए। श्योर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जनरली हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, कैसे ट्रैफिक इन और आउट हो रहा है, ठीक है। पैकेट कैप्चर भी देखेंगे सोफोस से ही, जैसे कि 3-वे हैंडशेक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो 3-वे हैंडशेक कैसे हो रहा है, ट्रैफिक इन आउट कैसे हो रहा है। जनरली तो कोई भी फायरवॉल हो उसमें इन आउट ही देखना है, ट्रैफिक कैसे यहाँ से जैसे गूगल पे जा रहा है तो कैसे गूगल पे जा रहा है, कैसे वापस रिटर्न आ रहा है, हम वो पूरा पैकेट कैप्चर से देखेंगे, ये ऑफ कोर्स। और जैसे मैंने आपको बताया जो कॉन्फ़िगरेशंस है, हम मॉड्यूल में सब कुछ कवर अप कर लेंगे। जैसे कि दूसरा एक फायरवॉल इधर ब्रांच ऑफिस बना लेंगे, तो ब्रांच ऑफिस कनेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल। ब्रांच ऑफिस पे भी एडी सर्वर यहाँ पे हेड ऑफिस रहेगा, तो एडी सर्वर से ऑथेंटिकेशन करवाएंगे ब्रांच ऑफिस को। ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट होंगे, तो सारे यूजर्स को लॉगिन करेंगे, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। कनेक्टिविटी देखेंगे, एमपीलेस देखेंगे, ऑफ कोर्स जो दूसरे फीचर्स हैं जैसे बहुत सारे जनों के एसडी वैन पे भी है, तो एसडी वैन कैसे हम सोफोस से इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो दिस वुड बी आवर टोपोलॉजी। हम इसको ऐड कर देंगे, अभी के लिए तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ये ऐड किया हुआ है। गाइस और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, ऑथेंटिकेशन देख लेंगे, सिस्टम की सारी सर्विस देख लेंगे हम मॉड्यूल्स में, एक एक टैब्स यहाँ पे जितनी भी है वो सारी कवर अप हो जाएगी। हम कॉन्फ़िगर करेंगे, अप्लाई करेंगे यूजर्स के ऊपर और देखेंगे कैसे वो वर्क करता है। सेम ये सब चीजें फाइल पे हम जैसे लॉग्स भी एनेबल कर सकते हैं। रेड सोफोस सेंट्रल से प्रोफाइल्स बनाएंगे, ओके, यानी स्केड्यूल्स बनाएंगे, लाइक मंडे टू फ्राइडे एक्सेस कर सकते हैं यूजर्स, एक्सेस टाइम, ठीक है। कोई पर्टिकुलर यूजर पे भी कुछ सर्फिंग कोटा लगाना है, एक्सेस टाइम लगाना है, ठीक है। ये सब हम एक एक करके सारी प्रोफाइल यूजर्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखेंगे अपने ये वाले नेटवर्क सिनेरियो में। सेम 2-3 पीसी रख देंगे और यूजर्स को लॉगिन करके हम ट्रैफिक सबका इन आउट देखेंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगर मीट कर सकते हैं अपने बिजनेस नीड्स को यहाँ पे। So, हम जैसे हमने कल एक ओवरव्यू लिया था फायरवॉल का, तो हम एक वेबसाइट सोफोस की जो वेबसाइट है उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जिसमें हम सोफोस एक्सजी के जितने भी फीचर्स है अवेलेबल जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू मीट द बिजनेस नीड, तो हम उस फीचर्स को भी एक बार देख लेंगे। देन वी कैन हैव अ लुक टू आवर नेटवर्क सिनेरियो विच वी विल वर्क। हम एक नेटवर्क सिनेरियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, हियर, ओके, just give me a moment, let me show you that. ओके, सो एक जो टिपिकल हमारा नेटवर्क सिनेरियो होगा जहाँ पे हम सोफोस फायरवॉल एज ए गेटवे यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी अपने एक नेटवर्क टोपोलॉजीज क्रिएट करके रखी हुई है। हम यहाँ पे इसको गो थ्रू करेंगे इसके एक ओवरव्यू के बाद। जैसे ही हम अपना कोर्स का एजेंडा डिस्कस कर लेंगे, एक हम सोफोस फायरवॉल का एक्सेस लेके इसको हम कैसे डिस्कस करना है नेटवर्क टोपोलॉजी में, वो हम आगे देखेंगे। सो दिस वेबसाइट के बाद हम एक टोपोलॉजी रिव्यू कर लेंगे। ऑलराइट, देन we will see as per the Gartner where सोफोस के जो रिव्यूज हैं हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि अपने जो भी बिजनेस नीड है या फिर एग्जिस्टिंग नेटवर्क भी है कोई, वहाँ पे हम सोफोस कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। रिव्यूज से हम अगर हम कुछ रिप्लेस कर रहे हैं जैसे कि कोई ओल्ड राउटर है, ठीक है, वहाँ पे, और हमें सिक्योरिटी एनहांस करनी है, तो सोफोस इज द बेस्ट फायरवॉल वी कैन डिप्लॉय। तो एज पर द रिव्यू एंड कंपैरिजन विद अदर वेंडर्स हम देखेंगे कैसे सोफोस फायरवॉल बिजनेस की सिक्योरिटी को एनहांस करता है, तो हम ये इसको भी गो थ्रू करेंगे एक बार। सो आफ्टर दैट हम एक बार जो हमारा कोर्स का एजेंडा है जो हम कल से स्टार्ट करेंगे 8 to 9, सो हम जो भी सोफोस का जो फायरवॉल बैकएंड में कैसे एक्चुअली वर्क करता है वो हम देखेंगे, as well as with the installations and configurations, reviewing and troubleshoot करेंगे, different network scenarios create करेंगे LAN में, और
और अदर कनेक्टिविटीज लाइक IPsec एंड MPLS, अगर कोई कनेक्शन है एग्जिस्टिंग नेटवर्क में हमारे पास, या फिर हमने कोई नेटवर्क पे ऑलरेडी जो पुराना नेटवर्क है उसको रिप्लेस करना है, तो हम कैसे कनेक्टिविटी सोफोस के साथ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. So let me just quickly go through the objectives. जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम जो ये कोर्स है उसमें क्या क्या कवर अप करेंगे. हम एक्सप्लेन हाउ सोफोस फायरवॉल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट. जो सोफोस फायरवॉल है कैसे जो अभी करंटली डे टू डे सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करेगा आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन, वो हम देखेंगे. सेकेंड पॉइंट में कॉन्फ़िगर फायरवॉल रूल्स, पॉलिसीज एंड यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी हम फायरवॉल रूल्स कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल सोफोस फायरवॉल में, पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी हम यूजर को ऑथेंटिकेट करा के उस पे ऊपर पॉलिसीज अप्लाई करके कैसे सोफोस फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है एंड यूजर्स को फॉर सर्फिंग एनी अनवांटेड वेबसाइट्स ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स फॉर एग्जांपल. तो यूजर जैसे एक्सेस कर रहा है, ऑथेंटिकेट कैसे हम उसको मीट कर सकते हैं, हम वो देखेंगे. फिर डेमोन्स्ट्रेट थ्रेट प्रोटेक्शन एंड कॉमनली यूज फीचर, जितने भी थ्रेट प्रोटेक्शन फीचर्स है फायरवॉल में, जो कॉमन सिनेरियोज के भी आर्टिकल्स है उसके हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करके हम एक बार एक सिनेरियो क्रिएट करके उसके सारे फीचर्स देखेंगे. परफॉर्म द इनिशियल सेटअप ऑफ XG फायरवॉल एंड कॉन्फ़िगर द रिक्वायर्ड नेटवर्क सेटिंग, यानी हम एक सोफोस फायरवॉल सारे प्लेटफॉर्म्स में एक एक करके इंस्टॉल करेंगे, उसका इनिशियल सेटअप कैसे करना है. जैसे कि जनरली अगर फिजिकल बॉक्स है अराइव करता है, तो आपको जो स्टेप्स इनिशियल जब आप अनबॉक्सिंग करते हो फायरवॉल, तो उसका जो इनिशियल सेटिंग्स VMware में उसका जो इनिशियल सेटअप्स है, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में AWS है, एज्योर है, कहीं पे भी जहाँ पे भी जो प्लेटफॉर्म हम जो डिस्कस भी करने वाले आगे मॉड्यूल्स में, जहाँ पे भी हम डिप्लॉय करेंगे उसका जो इनिशियल सेटअप है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक जो नेटवर्क सेटिंग्स है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे. और परफॉर्म प्राइमरी साइजिंग फॉर दिस. अगर हमारे जो नेटवर्क हमने सोफोस फायरवॉल से क्रिएट किया है, फ्यूचर में उसका एक्सपांड करना है, राइट, तो उसको हम कैसे उसको स्केलिंग और साइजिंग कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. रिक्विजिट्स में तो सिर्फ हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबनेटिंग, राउटिंग, और हमने अभी तक कोई नेटवर्क डिवाइसेस कॉन्फ़िगर किए है, तो आपको सोफोस फायरवॉल डेफिनेटली इजी रहेगा कॉन्फ़िगर करना. और वैसे भी अगर न्यू है सोफोस फायरवॉल में, देन इट्स ओके. सोफोस फायरवॉल अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको रेस्ट ऑफ द फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करनी है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा. सो अभी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा. मैं आपको ये वाला डॉक्यूमेंट जो है जिसमें ऑब्जेक्टिव, प्रीरिक्विजिट है और जो हमारे एजेंडास है जो डिटेल में दिया है मैं शेयर करूंगा. सो मैं जो एजेंडा है मैं आपको पहले PPT में बता देता हूँ, उसके बाद हम सोफोस फायरवॉल के फीचर्स और आगे जो डिटेल में हमने जो कल डिस्कस किया था उसको एक ब्रीफ समरी दे देंगे. ओके. सो प्रीरिक्विजिट में जैसे बोला, जैसे आपको जो हम अभी नेटवर्क सिनेरियोस क्रिएट करेंगे विद सोफोस फायरवॉल, कैसे हम बिजनेस, कैसे एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है उसमें सोफोस प्रोडक्ट्स हमको डिप्लॉय करने, कॉन्फ़िगर करने, इंस्टॉल या फिर इंस्टॉलेशन से करना है स्टार्ट, तो भी हम कर सकते हैं. पर उसके लिए कैसे हम ये रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हम कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे सोफोस फायरवॉल हमें यहाँ पे जो प्रीरिक्विजिट है कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग का, जहाँ पे सबनेटिंग, ऑफ कोर्स राउटिंग, VLAN, VPNs का बेसिक हो तो भी चलेगा. देन एक्सपीरियंस विद द कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस. अगर आपने ऑलरेडी कोई राउटर्स कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, सोफोस सिमिलर ही है, बट वी हैव डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल जो हम एनेबल कर सकते हैं फीचर्स, जैसे कि ईमेल सिक्योरिटी है, वेब सिक्योरिटीज है, एप्लीकेशन कंट्रोल है, वो सारे फीचर्स हम एनेबल कर सकते हैं टू मीट द बिजनेस नीड्स एंड इट्स सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स. और फंडामेंटल नॉलेज थोड़ा सा एन्क्रिप्शन, हैशिंग एल्गोरिथम और सर्टिफिकेट के बारे में भी होगा तो +1 होगा. वी अलोंग विद दी जो भी हमारा ये मॉड्यूल है, अगर हमें
कोई बेसिक हम डिस्कशन भी करेंगे, लाइक सबनेटिंग डिस्कस करना है, राउटिंग डिस्कसिंग करना है, जिसमें OSPF है, फायरवॉल के साथ OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, BGP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके, BGP ओके, और RIP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सिनेरियोज भी हम थोड़ा सा अगर डिस्कशन में करना डेफिनेटली हम करेंगे, नो इश्यूज। सो फायरवॉल के साथ ये सेम चीजें हम कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकल एलोंग विद दी मॉड्यूल्स हम डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल्स भी हम मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक लैब बताया, अभी हम जैसे कि जो मैंने आपको सिनेरियो बताया जो वाला, वो अभी एक लैन नेटवर्क के लिए, ओके, और मैं आपको बता देता हूँ बाद में। हाँ, ये अभी लैन नेटवर्क के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई ब्रांच ऑफिस कनेक्ट करना है उसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे, पर अभी के लिए हम लैन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, DMZ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, या कोई अदर कोई जोन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट गो बैक टू द स्लाइड्स। सो जो हमारा जो कोर्स है यहाँ पे वो 12 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जो हम एक एक करके उसको ब्रीफ में एक बार जाएंगे, किससे एक एक फायरवॉल का जैसे ओवरव्यू है, तो फायरवॉल की जितने भी फीचर्स हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो कैसे फायरवॉल से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अभी करंटली इंटरनेट में कैसे कैसी एक्टिविटीज, मैलिशियस एक्टिविटीज चल रही है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हैकर्स है, जो पेन टेस्टर है, ठीक है, हम उन सबको कैसे वल्नरेबिलिटीज है सोफोस फायरवॉल से हम कैसे मीट करेंगे, वो हम थोड़ा सा ओवरव्यू में जाएंगे। फिर उसके बाद हम बेसिक क्लियर आउट करने के बाद सोफोस फायरवॉल में ओवरव्यू में, उसके बाद जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है वो गेटिंग स्टार्ट विद सोफोस फायरवॉल। इसमें अगेन मैंने आपको जैसे बताया था जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस है, जैसे कि इनिशियल स्टार्टअप से लेके यानी पावर ऑन से लेके जब ये अनबॉक्सिंग करते हैं फिर पावर ऑन करते हैं, पूरा हम जैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे पहले सेटअप करेंगे वो हम सेकेंड मॉड्यूल में कवर अप कर लेंगे, गेटिंग स्टार्ट विद सोफोस फायरवॉल। थर्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन होगा मॉड्यूल, उसमें हम नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share, and subscribe for more future updates. Then let me just delete out the module first. Then उसमें कंटेंट क्या है वो हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। सो हमारा जो फोर्थ होगा वो साइट टू साइट होगा, जो जैसे कि IPsec फॉर एग्जांपल। फिर हम फिफ्थ मॉड्यूल में जाएंगे जिसमें ऑथेंटिकेशन के बारे में हम डीप ड्राइव करेंगे। After that, in the sixth module, we will cover up the web protection. After that, in seventh module, we will cover up the application control. In the eighth module, we will cover the email protection. In the ninth module, we will cover up the remote access. In the 10th module, we will cover the wireless protections. And in 11th, we will cover the login and reporting sessions. And on the 12th module, we will cover up the central management. सो जैसे मैंने आपको बताया जो भी एजेंडा है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो हम मीट करेंगे, जैसे कि सोफोस का फायरवॉल का ओवरव्यू, जैसे सोफोस फायरवॉल क्या है, ठीक है, उसके जो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि हमको कैसे डिप्लॉय करना है, गेटवे में करना है, ब्रिज मोड में करना है, प्रॉक्सी में करना है, एंड सो ऑन, वो हम डिप्लॉयमेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल है सोफोस फायरवॉल से वो हम देखेंगे। फिर हम जो एक अटैक का जो एक अटैक होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो रहा है, रैनसमवेयर अटैक हो रहा है, मालवेयर अटैक, तो उसका जो टैक्टिक यूज कैसे करते हैं हैकर्स और उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सोफोस फायरवॉल से, वो हम देखेंगे कि वो टाइप ऑफ अटैक्स कैसे डिलीवर होता है और सोफोस कहाँ पे रोल प्ले करेगा उसको स्टॉप करने में और डिटेक्ट करने में और एक्शन लेने में, वो भी हम देखेंगे। जीरो ट्रस्ट होगा ओवरव्यू में। जीरो ट्रस्ट जनरली एक्चुअली इवन दो हमने समझ लो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलाउड किया हुआ है, बट हम उस कोई भी चीज़ को ऐसा उसमें जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा है जो अनट्रस्ट नहीं रखेंगे, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें भी हम डिटेल में जाएंगे। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल का एजेंडा होगा। सेकेंड मॉड्यूल का जो हमारा एजेंडा होगा, जस्ट गिव अ मिनट, I hope everyone see the sites. Okay, so getting start with Sophos firewall, उसमें हम देखेंगे पहले में जैसे कॉमन डिप्लॉयमेंट सिनारियोज है, जैसे मैंने आपको बताया गेटवे है, ब्रीच है, मिक्स मोड है, ओके, कोई वेब प्रोटेक्शन है, तो हम उस
कॉमन सिनेरियोस देखेंगे। सोफोस फाइल को हम डिफरेंट सिनेरियोस में ब्रिज में डाल के या फिर गेटवे में डाल के मिक्स मोड, जैसे ब्रिज और गेटवे दोनों मोड को मिक्स मोड कहते हैं, तो दोनों में कॉन्फ़िगर करके देखेंगे सोफोस कैसे वर्क करता है, सोफोस फायरवॉल इन योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क और द न्यू नेटवर्क फॉर एग्जांपल। फिर हम देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट और उसका सेटअप देखेंगे, उसके कौन से ऑप्शन है। फिर हम उसका एग्जिस्ट सोफोस फायरवॉल का कंसोल लेंगे, CLI लेंगे SSH से। कौन से वेज है हम कंसोल सिक्योरली कंसोल SSH ले सकते हैं, वो भी मेथड है, वो भी मिल जाएंगे। वेब एडमिन यानी GUI जो सोफोस का फायरवॉल का GUI है, और इनिशियल सेटअप विजार्ड रन करेंगे उसमें। फिर सेम मॉड्यूल में हम नेविगेशन और मैनेजमेंट देखेंगे, कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं वेब एडमिन कंसोल को, मैनेजिंग जो ऑब्जेक्ट्स है, प्रोफाइल्स है। मैं आपको ये सब चीज़ें एक बार अभी मेरे पास फायरवॉल मैंने टर्न ऑन किया हुआ है, सो हम ये देखेंगे कहाँ पे ये वेब एडमिन है, ऑब्जेक्ट्स है, प्रोफाइल्स है, कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं, कैसे इंटरफेस एंड राउटिंग जो जोन्स हैं, इंटरफेस है इसमें फायरवॉल में कौन कितने इंटरफेस है वो देखेंगे, राउटिंग देखेंगे। देन हम अगर DNS कॉन्फ़िगर करना है सोफोस फायर में, सो हम देखेंगे DNS कॉन्फ़िगर करेंगे, DHCP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और ये सब कुछ DHCP रिले भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे। सेम वे डिवाइस का जो एक्सेस है, यानी जो फायरवॉल का जो एक्सेस है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स है, हम उसको सिक्योरली कैसे एडमिन लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके या फिर वो डिटेक्ट ना कर सके, वो सिक्योरली हम इसको डिफाइन करेंगे सेकेंड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल में जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क प्रोटेक्शन, तो उसमें सब हम क्या करेंगे, सब अलग जो भी फायरवॉल रूल्स हैं, ठीक है, वो हम सेटअप करेंगे। फायरवॉल रूल कैसे कॉन्फ़िगर करना है, नेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जैसे कि पोर्ट फॉरवर्ड करना है, कोई सर्वर है तो फायरवॉल रूल से कैसे फॉरवर्ड करना है वो हम देखेंगे। TLS डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हम मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए जैसे सोफोस फायरवॉल का फीचर है फॉर मालवेयर प्रोटेक्शन एंड थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज, तो TLS डिस्क्रिप्शन यानी HTTPS स्कैनिंग हम लगाएंगे, HTTP और HTTPS स्कैनिंग, और इसमें हम सर्टिफिकेट लगाएंगे सोफोस का फायरवॉल ऐसे CA। इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, नो वरीज, अलोंग विद द प्रैक्टिकल्स। फिर हम वेब प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा कोई वेब प्रोटेक्शन है, यानी जो सर्वर है 80 पे काम कर रहा है या 443 पे काम कर रहा है, ठीक है, उसको हमको पोर्ट फॉरवर्डिंग करे बिना हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिहाइंड द सोफोस फायरवॉल, उसमें कौन कौन सी फीचर्स अवेलेबल हैं टू प्रोटेक्ट द सर्वर, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम इंट्रूजन प्रिवेंशन देखेंगे, कैसे हम IPS पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, स्पूफ प्रिवेंशन और डस्ट प्रोटेक्शन कैसे एनेबल कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन करें वो देखेंगे। सिक्योरिटी हार्टबीट कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में हम जाएंगे। डेफिनेटली अभी के लिए डाउट में रखेंगे, नो वरीज, आप बाद में ये हम अभी जो मॉड्यूल में जो कवर अप करेंगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो सिक्योरिटी हार्टबीट भी है, उसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे, नया टेक्नोलॉजी फीचर ऐड किया है। सो एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, उसमें ATP कैसे एनेबल करना है, अलर्ट्स कैसे क्लियर करना है, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करना है, वो हम थर्ड मॉड्यूल में देख लेंगे। फोर्थ मॉड्यूल में हम साइड टू साइड कनेक्शंस देखेंगे, लाइक साइड टू साइड जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वेबिनार में कि अगर 2 XG फायरवॉल है तो दोनों के बीच में साइड टू साइड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, VPN कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, IPsec, L2TP, PPTP VPN कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये साइड टू साइड कनेक्शन में हम कवर अप करेंगे। Then we will configure SSL VPN, which is of course for the remote users. आपको remote user को कुछ access देना है, like server, हम SSL VPN configure करेंगे। IPA अगर कोई थर्ड पार्टी ब्रांच में कोई थर्ड पार्टी राउटर रखा है कोई भी, तो उसको IPsec से कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसकी पॉलिसीज कैसे कस्टम डिफाइन करनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और डिटेल्स देखेंगे। रिमोट रेड यानी RED, just give a moment. ओके, हम यहाँ पे देखेंगे, just give a moment. रिमोट डिवाइस यानी रेड डिवाइस जो सोफोस का ही प्रोडक्ट है, मैंने जैसे बताया था आपको लास्ट
ट्रांसपेरेंट स्प्लिट, कैसे उसका ट्रैफिक फ्लो करवाना है, वो हम डिटेल में देखेंगे विद मॉडल्स अवेलेबल। जो हमारा 5th मॉड्यूल है ऑथेंटिकेशन, वो हम देखेंगे, यानी हम फायरवॉल पे जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे एनेबल करेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे। लोकली कैसे हम यूजर क्रिएट करके ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, जैसे यूजर नेम पासवर्ड डालना इंटरनेट एक्सेस के लिए, तो हम लोकली करवा सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी जैसे कि एडी सर्वर है या फिर कोई दूसरी कोई सर्विस ऑथेंटिकेशन है, वो कैसे सोफोस फायरवॉल से इंटीग्रेट करना है वो हम देखेंगे। यूजर एंड ग्रुप जैसे है, तो अगर हम लोकली क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कैसे उस यूजर का ग्रुप बनाना है, ठीक है। क्लाइंटलेस यूजर और गेस्ट यूजर्स क्रिएट करेंगे। क्लाइंटलेस यूजर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रिंटर्स है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम कैसे यूजर में काउंट करेंगे, ठीक है। उसका अलग से कॉन्फ़िगरेशन है गेस्ट यूजर के साथ भी, और ग्रुप्स। यूजर ग्रुप में हम अगर एडी यूजर फॉर एग्जांपल यूज करें ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू में जो सेकंड पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से यूजर ग्रुप कैसे इंपोर्ट करना है वो भी हम देखेंगे। फिर कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन मेथड है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। सिंक्रोनाइज यूजर आइडेंटिटी, जैसे एस्टास है, अगर कोई जैसे एस्टास, तो जनरली जैसे जो विंडोज का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे करंटली अगर आपके सारे विंडोज के पीसीज हैं, तो अगर यूजर्स को आपको कोई पर्टिकुलर यानी मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मेथड्स है उसको एलिमिनेट करना है हमें, तो हम कैसे वो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन एनेबल करना है, जैसे कि विंडोज लॉगिन या फिर क्रोम बुक है अगर फॉर एग्जांपल, या फिर कोई एजेंट्स है, तो उससे कैसे करना है वो हम देखेंगे। बाय इंस्टॉलिंग द क्लाइंट्स एंड पीसी पे हम करेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे ऑटोमेटिक करवाना है, पहले मैन्युअली करेंगे फिर ऑटोमेटिक भी कराएंगे, क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट ये मीट कर सके। यूजिंग ऑथेंटिकेशन, जैसे कि फायरवॉल रूल्स पॉलिसीज हम क्रिएट करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, फाइन ट्यून करेंगे, वीपीएन की सेटिंग्स हम करेंगे, वीपीएन में कैसे ऑथेंटिकेशन देना है, ठीक है, और वीपीएन एंड राउटिंग ऑफ कोर्स। फिर यूजर पोर्टल है, वेब एडमिन है, उसमें कैसे ऑथेंटिकेट करवाना है वो भी हम देखेंगे। ओके, वन टाइम पासवर्ड, ये भी वन ऑफ द फीचर्स है। जनरली अगर आपका कोई गेस्ट यूजर आता है, कैसे वन टाइम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, टोकन्स जनरेट कर सकते हैं फाइल में, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे और गेस्ट यूजर को टेम्पररी एक्सेस देंगे पॉलिसी के हिसाब से। Then on the 6th module, we will cover up the web protection. Generally, almost all सारे यूजर्स ब्राउजर्स, जैसे ब्राउजर से इंटरनेट एक्सेस करें उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वेब प्रोटेक्शन से, तो वो देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट और जो प्रॉक्सी है, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, फिर डीपीआई डीप पैकेट इंस्पेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, HTTPS स्कैनिंग लगाएंगे, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके वो देखेंगे, और डिफरेंस जानेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीपीआई एंड दी वेब प्रॉक्सी फिल्टरिंग, कैसे वो काम करता है वो हम पैकेट कैप्चर के साथ हम देखेंगे। सेम वे विद दी वेब पॉलिसीज, हम पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, तो जैसे कि उसमें कुछ अलग से हम पॉलिसीज बनाएंगे, अपार्ट फ्रॉम डिफॉल्ट्स भी आती हैं, तो डिफॉल्ट्स को हम एक बार गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद हम कोई कस्टम कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ग्लोबल सेटिंग्स रिव्यू करेंगे, उसमें प्रोटेक्शन सेटिंग्स कौन कौन सी है, कब एनेबल करनी है, उसका रिक्वायरमेंट कब है और कहाँ है वो देखेंगे। सेम विद द एडवांस सेटिंग्स एंड यूजर नोटिफिकेशंस जो वेब प्रोटेक्शन के बाद आता है। कोटास एंड ट्रैफिक शेपिंग, कोटास यानी डेटा यूजर को, पॉलिसीज अगेन पॉलिसीज ही है ये सब, तो पॉलिसीज में सर्फिंग कोटा और बैंडविड्थ क्या देना है वो हम क्रिएट करेंगे, और यूजर के ऊपर अप्लाई करके चेक करेंगे वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। ओके, अगर कोई एक्सेप्शन है, कोई ओवरराइड करनी है पॉलिसीज, वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अगर पॉलिसीज लगाई और कोई पर्टिकुलर यूजर पे बाईपास करना है, तो और ड्यूरिंग द बिजनेस आवर कैसे टेम्पररी इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सेप्शन में डालना है वो हम देखेंगे। सेम वे जैसे वेब प्रोटेक्शन में देखा था, वैसे हम एप्लीकेशन कंट्रोल में भी कंट्रोल से भी हम ट्रैफिक पूरा मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओवरव्यू लेंगे, फिर एक जो एप्लीकेशन कंट्रोल है बाय डिफॉल्ट जो आता है, उसमें जो पॉलिसीज है वो देखेंगे जो। ओके, तो हम एप्लीकेशन कंट्रोल में फिर आगे क्या करेंगे, एप्लीकेशन फिल्टर्स देखेंगे, एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसीज जो डिफॉल्ट है वो एक बार गो थ्रू करेंगे, और जो नई क्रिएट करनी है वो हम लैब में क्रिएट भी करेंगे अलोंग विद दी मॉड्यूल्स। सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी जो नया फीचर है सोफोस फायरवॉल में, वो हम कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे। कंट्रोल्स
सेंटर है उससे हम कैसे उसको मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सिमिलरली विद द क्लाउड एप्लीकेशन, हम क्लाउड एप्लीकेशन कोई कैसे मैनेज कर सकते हैं सोफोस फायरवॉल से, वो हम देखेंगे। अगेन ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसीज यानी बैंडविड्थ पॉलिसीज हम एप्लीकेशन में भी लगा सकते हैं, तो कैसे पॉलिसीज क्रिएट करना है, सेटिंग्स उसकी क्या है वो हम देखेंगे, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर बैंडविड्थ पॉलिसी देना है कोई स्ट्रीमिंग मीडिया एप्लीकेशन है, उसमें आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, तो कैसे वो पॉलिसी अप्लाई करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो हम एप्लीकेशन कंट्रोल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वुड बी ईमेल प्रोटेक्शन देखेंगे। सोफोस एक्सी ईमेल प्रोटेक्शन भी हमें सपोर्ट करता है, जैसे अगर कोई स्पैम मेल है, ठीक है, वो अगर हमारे पास मेल सर्वर है जो पोर्ट 25 पे या फिर कोई SMTP है, SMTP एस पे काम कर रहा है, पोप पे काम कर रहा है, IMAP पे काम कर रहा है, राइट, तो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं सोफोस एक्सी से, वो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखेंगे। यूजर के पीसी में फॉर एग्जांपल हम आउटलुक कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कैसे हम मेल का ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर सकते हैं सोफोस एक्सी से। सो हम देखेंगे ईमेल प्रोटेक्शन में कि ईमेल प्रोटेक्शन मोड्स उसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि MTA मोड, सोफोस खुद MTA मोड भी काम करता है और लेगेसी मोड भी काम करता है, उसके बारे में हम अलोंग विद दी जो मॉड्यूल है हमारा डिस्कस करेंगे, नो इशू। आपको MTA मोड हम जैसे डिस्कस करेंगे तो और सबका सिंक हो जाएगा, और लेट्स सी SMTP अगर हमने गो थ्रू नहीं किया हुआ है देन SMTP प्रोटोकॉल कैसे होगा, बीच बीच पे हम डिस्कस करते रहेंगे, IMAP, POP एंड रेस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल एज वेल। सो उसमें हम प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, स्मार्ट होस्ट क्या, स्मार्ट होस्ट उसमें क्या फीचर है वो हम देखेंगे, पॉलिसीज जो है जो हम राउट कर सकते हैं और उसको स्कैन कर सकते हैं, जो हमारा ट्रैफिक है, जैसे मैंने आपको बताया था IMAP का, पोप का, SMTPS, हम देखेंगे कैसे उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फिर अगर कोई ईमेल है उसमें कोई डेटा कंट्रोल एंड एनक्रिप्शन फीचर है, उसमें हम जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्योर PDF एक्सचेंज फीचर है वो कैसे एनेबल करना है और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके बारे में फर्स्ट ओवर जो हमारा पहला मॉड्यूल है, हम इसके बारे में उसमें ऑलरेडी आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा मेरा जो एजेंडा है थोड़ा सा अभी फास्ट लगेगा, बट डेफिनेटली हम इसको एक एक करके सब कुछ क्लियर करेंगे, कुछ भी जो भी फीचर्स है सारे फीचर्स मोस्ट प्रोबेबली सब हम यूज करके देखेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन इंक्रिप्शन है, ईमेल में अगर कोई PDF आता है, कोई सस्पिशियस PDF है, तो हम उसको कैसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर हम PDF सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनक्रिप्ट करके वो हम देखेंगे कैसे ये फीचर काम करता है। सेम वे अगर कोई ईमेल क्वारंटीन होता है तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे, वेब एडमिन से या फिर ईमेल डाइजेस्ट या यूजर पोर्टल, ये 3 वे से हम कर सकते हैं। तो हम एडमिन पोर्टल देखेंगे, यूजर पोर्टल देखेंगे, और डाइजेस्टिव ईमेल जो सोफोस के अंदर लॉग्स होते हैं वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि कैसे हम जैसे कि कोई ईमेल क्वारंटीन हुआ है, ठीक है, लेजिटिमेट है, तो हम कैसे यूजर को बोल सकते हैं कि आप वहाँ से रिलीज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम एडमिन से भी कर सकते हैं। सेम वे DKI वेरिफिकेशन की और साइनिंग एनक्रिप्शन मेथड हम देखेंगे यहाँ पे। देन नाइन्थ मॉड्यूल में हम रिमोट एक्सेस देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कैसे हम SSL VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, IPsec कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लाइंट लेस एक्सेस और मोबाइल एक्सेस। SSL VPN जैसे फॉर एग्जांपल है तो हम SSL VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर रिमोट यूजर को हम अपना जो सर्वर है वो बाहर से कैसे एक्सेस करना है वो कॉन्फ़िगर करेंगे और सेटअप करेंगे पूरा, जैसे कि फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्लाइंट साइड हमें SSL VPN क्लाइंट डाउनलोड करना है यूजर पोर्टल से, उसको इंस्टॉल करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, यू विल बी कनेक्टेड। फिर उस यूजर को हम कैसे गाइड कर सकते हैं कि आप अपना सर्वर एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही हम IPsec देखेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है IPsec में, ओके, उसको कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से सिनेरियोज है कॉन्फ़िगरेशंस के वो देखेंगे, और डिप्लॉयमेंट के साथ देखेंगे। क्लाइंट एक्सेस मॉडल में हम देखेंगे कैसे हम बुक मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट लेस यूजर यानी कोई ब्रिंग योर ओन डिवाइस फॉर एग्जांपल आता है तो उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर, मोबाइल एक्सेस पे, मोबाइल पे कैसे SSL VPN कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। और कोई थर्ड पार्टी कोई डिवाइस है उसमें SSL VPN कॉन्फ़िगर करना है वो भी हम देखेंगे। यस,
In the 10th module, we will cover up wireless protection. अब यहाँ पे वायरलेस प्रोटेक्शन जब आता है तब सोफोस एक्जी फायरवॉल वायरलेस प्रोटेक्शन यानी जो एपीज है उसको प्रोटेक्ट करता है कोई भी अननोन थ्रेट से। तो यहाँ पे तो अगर आपको वायरलेस प्रोटेक्शन करना है तो आपको सोफोस का ही एपी होना चाहिए, उनके सोफोस का ही इकोसिस्टम होना चाहिए। तो उसमें सोफोस वायरलेस प्रोटेक्शन भी है, उसके बारे में भी हम उसके मॉडल्स कैसे हैं, कौन कौन सी फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। फायरवॉल में हम क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई यूजर आ रहा है बाहर से और वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है तो हम उसको कैसे अपने नेटवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर सिक्योर रख सकते हैं, एज वेल एज यूजर अगर इन्फेक्टेड है तो उसको हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो वो हम वायरलेस प्रोटेक्शन से हम देखेंगे। तो हम उसका पहले वायरलेस ओवरव्यू लेंगे, देन वी विल चेक वायरलेस नेटवर्क जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट मोड देखेंगे, कैसे एपीज डिप्लॉय कर सकते हैं हम, ओके। और हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे उससे, ओके। आफ्टर दैट इन द 11th मॉड्यूल हम कवर अप करेंगे लॉगिन एंड रिपोर्टिंग। तो लॉगिन रिपोर्टिंग में हम देखेंगे कि हम रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे थ्रू फायरवॉल, और अगर हमको कोई रिपोर्ट दिख रहे हैं तो उसको कैसे बुकमार्क करना है, ठीक है। एप्लीकेशन डिस्क जो मीटर है वो हम डिस्कस करेंगे विद द यूटीक्यू यानी यूजर थ्रेड कोटा। कौन कौन से यूजर्स है, टॉप यूजर्स हैं जो ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। थ्रेट इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में वो भी हम दी प्रीवियस मॉड्यूल फर्स्ट, ओके। वायरलेस में डिस्कस किया था कि वायरलेस प्रोटेक्शन हम कैसे एनेबल कर सकते हैं सोफोस एपी से, तो हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो हम देखेंगे, ओके। कैसे हम नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट और हॉटस्पॉट के साथ। सो विद द 11th मॉड्यूल लॉगिन और रिपोर्टिंग हम देखेंगे सोफोस फायरवॉल से हम कैसे करेंगे। So login and reporting is the also one of the great feature. So to dig down the what activity is going on, अपने जो नेटवर्क में कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। अगर कुछ थ्रेट इंसिडेंट्स है कैसे उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर कोई यूजर्स है अनप्रोडक्टिव वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, एज पर द पॉलिसीज, तो हम वो कैसे हम उसको बुक मार करके उसको मेल नोटिफिकेशन से रेगुलर रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं ओवर ईमेल। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो उसमें ये सपोज लॉगिंग है तो हम लॉगवियर फायरवॉल का है वो देखेंगे, लॉगवियर। उसमें जनरली सारे लॉग्स मिल जाएंगे सिस्टम्स के, एप्लीकेशन के, वेब फिल्टर के एंड सो ऑन। मैं आपको वो भी एक बार नेविगेट करवा दूंगा आज ही, ओके। सिस्टम लॉग्स जैसे कोई थर्ड पार्टी डिवाइस है जैसे सोफोस का ही आईवी है, अगर उसमें हमको सेपरेटली सेव करने लॉग्स तो हम लॉगवियर से कर सकते हैं। एज वेल एज इस नाउ दूसरा भी एक फीचर है, हम क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। तो वो भी हम कॉन्फ़िगरेशन में जो 11th मॉड्यूल जब कवर अप करेंगे तो हम अपने लेवल में डेफिनेटली सारे फीचर्स हम एक एक करके देखने वाले हैं। सो लॉग कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। लास्टली द 12th मॉड्यूल हमारा जो होगा वो सेंट्रल मैनेजमेंट से होगा, यानी हम क्या करेंगे सोफोस का जो कंसोल है सोफोस सेंट्रल वो हम कनेक्ट करेंगे सोफोस फायरवॉल से। फिर सोफोस एक्जी फायरवॉल है वो हम कैसे हम मैनेज कर सकते हैं सोफोस सेंट्रल से, वो हम देखेंगे। जैसे कि अगर हमें रिपोर्ट सेव करना है क्लाउड्स पे तो वो भी फीचर है ये सब कुछ। तो उसका जो स्टोरेज प्राइस एवरीथिंग वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम रिपोर्ट सेव कर सकते हो, जैसा बताया रिपोर्टिंग कैसे हम सेव कर सकते हैं, ओके। ओके ओके। जीरो टच डिप्लॉयमेंट होगा यानी क्लाउड बेस्ड ही है, तो उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए। और बैकअप मैनेजमेंट हम देखेंगे, कैसे हम सोफोस का जो फायरवॉल है कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये हमारे एजेंडास होंगे, ये डिटेल्स में है जो हम कवर अप करेंगे all the modules one by one. Okay, just let me just जैसे मैंने आपको बताया 12 एजेंडाज जो हमारे हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगेन। सोफोस फायरवॉल का ओवरव्यू देखेंगे, एक गेटिंग स्टार्ट विद सोफोस फायरवॉल, नेटवर्क प्रोटेक्शन देखेंगे, साइट टू साइट कनेक्शंस, ऑथेंटिकेशन, वेब एंड ईमेल कंट्रोल, ईमेल प्रोटेक्शन, रिमोट एक्सेस, वायरलेस प्रोटेक्शन, लॉगिन एंड रिपोर्टिंग एंड सेंट्रल मैनेजमेंट। ये सारे हम डीप डाइव करेंगे बाय टुमारो
from 8 to 9. Okay, so let me just switch to Sophos Firewall. So before I go with the Sophos Firewall, ये हमारा lab environment होगा अभी के लिए. Along with the जैसे जैसे हम मॉड्यूल्स में हम आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली हम अपना सिनेरियो क्रिएट करते जाएंगे, जैसे कि साइट टू साइट IPsec कैसे करना है, ठीक है, रिमोट SSL कैसे कॉन्फ़िगर करना है, LAN DMZ कैसे कॉन्फ़िगर करना है, SD-WAN कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, IPsec और MPLS फेल ओवर कनेक्टिविटी कैसे चेक करनी है, वो हम एक एक करके जैसे मॉड्यूल्स जाएंगे वैसे हम कवर अप करेंगे. Okay, so let me just again go back to the Sophos website, which we have already discussed, but let me just give you the overview. तो Sophos Sophos है, बहुत सारे products उनके हैं along with their solutions. So there are Intercept X जो उनका endpoint है, ठीक है, server protection है, XDR है, mobile protection है जो endpoints में हम यूज कर सकते हैं. उसके बारे में जब हमारा जो ये कोर्स है खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन, अगर आप कोई फाउल पे कोई नया डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो और सोफोस का इकोसिस्टम हमें पूरा सेटअप करना है, तो ये सारे फीचर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर टू मेक मोस्ट यूज ऑफ इट. लाइक उनका जो भी मोटो है सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया था नेक्स्ट वेबिनार में भी, तो कैसे हम यूज कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स को, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं for zero threat protection feature, और भी बहुत सारे फीचर्स है, वो भी हम डेफिनेटली along with the जो मॉड्यूल्स है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे. सो जनरली अभी के लिए हमारा मेन एजेंडा तो फायरवॉल है, तो फायरवॉल पे हम इस पे हम जाते हैं लिंक में, बट इट आल्सो गिव्स APs एंड जीरो ट्रस्ट फंक्शनैलिटीज. ओके, उनके नेटवर्क सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी है, जैसे कि XDR है जो डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है और ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है कोई भी थ्रेड्स हो, उसको मैनेज करता है, मैनेज एंड रिस्पॉन्स का भी फीचर है, और रैपिड रिस्पॉन्स भी है. इसके बारे में हम और सारे जितने भी है वो एक बार जाएंगे एक एक करके. ईमेल प्रोटेक्शन है ये, ऑफ कोर्स क्लाउड ऑप्टिक्स है, इसके बारे में भी अभी तो आउट ऑफ स्कोप है, इसके बाद जो भी मैं अभी आपको भी प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ जो सोफोस के पास है विद सॉल्यूशंस, बट डेफिनेटली अभी के लिए हम कंप्लीटली फोकस करेंगे. एक कोई भी नेटवर्क है जैसे कि स्मॉल बिजनेस है, कैसे हम फायरवॉल डिप्लॉय कर सकते हैं, तो कंप्लीटली अभी फोकस हमारा सोफोस फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पे ही रहेगा. So let me just go through the Sophos overview, XG Firewall overview from the Sophos website. तो उन्होंने यहाँ पे क्वाइट अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, वो भी हम देखेंगे. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था सोफोस ऐसे अच्छे अभी जो नया जो सोफोस XG है सारे फीचर्स आपको देगा फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लेटेस्ट थ्रेड, जो भी कोई भी थ्रेड हो, ठीक है, वो सोफोस फायरवॉल डेफिनेटली आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा. तो हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम मीट होनी चाहिए, ठीक है, हम उसको डिटेल में जाएंगे along with the मॉड्यूल्स वी विल कवर अप. सो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे. हम along with the जब हम मॉड्यूल्स कवर अप करेंगे ऑफ कोर्स, तो हम एक एक करके वापस यहाँ पे आके जो भी डाउट्स यहाँ पे अगर रह जाता है फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली हम सोल्व आउट कर देंगे आगे जाके. तो कैसे डीप पैकेट इंस्पेक्शन होएगा, ठीक है, एप्लीकेशन एक्सलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्लाउड बेस है फॉर एग्जांपल, तो वो हम देखेंगे. इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे और इसका वर्किंग देखेंगे कैसे. तो उसका जो पावरफुल परफॉर्मेंस है, ठीक है, पावर्ड बाय एक्सट्रीम आर्किटेक्चर, वो भी हम एक बार डिटेल में जाएंगे कि कैसे वो वर्क करता है, ठीक है, जैसे कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, ठीक है, पर्पस जो बिल्ड इन परफॉर्मेंस है, ठीक है, कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हो हम देखेंगे. ऑलराइट, सो गोइंग टू द फीचर्स, जैसे यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल ही है. तो जो भी अगर एग्जिस्टिंग नेटवर्क भी हम रिप्लेस कर रहे हैं सोफोस फायरवॉल में, अगर कोई हिडन रिस्क भी, तो सोफोस उसको डेफिनेटली उसको एलिमिनेट कर देगा अपने प्रोटेक्शन पॉलिसी से स्कैन करने से. अगर कोई अननोन थ्रेट्स आ रहे हैं उसको भी स्टॉप करेगा. अगर कोई लेटेस्ट समझ लो मालवेयर जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, तो सोफोस ये ऐसा है जो पहले डिटेक्ट करके आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगा.
आइसोलेट इन्फेक्टेड सिस्टम, अगर कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुई है तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगी और उसको आगे कोई भी थ्रेड अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसको कैसे बचाती है वो हम देखेंगे। ओके, तो प्राइसिंग के बारे में हम देखेंगे। तो विजिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन जो सोफोस के पैकेट इंसेप्शन है, ठीक है, DPI, वो कैसे काम करता है टू along with the IPS and antivirus scanning and web protection, email protection and एप्लीकेशन कंट्रोल, वो सिंगल इंजन से कैसे काम करेगा और कौन कौन से प्रोटोकॉल वो इंस्पेक्ट करेगा वो भी डिटेल में हम यहाँ पे मेंशन किया है। एंड इट हैज़ अ 0 थ्रेड प्रोटेक्शन, यानी आपको कभी भी थ्रेड की ऐसा नहीं कि थ्रेड अटैक होगा, 0 डे होगा, कभी भी अटैक ऐसा नहीं कि अटैक हो जाएगा, तो सब कुछ इससे ब्लॉक हो सकता है। प्रॉक्सी बेस्ड ड्यूअल इंजन एवी स्कैनिंग है, पैरामीटर डिफेंस, कंट्री बेस्ड अगर कुछ ब्लॉक करना है तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। डीप पैकेट इंसेप्शन, सेम वे अगर कोई ट्रैफिक एनक्रिप्शन है, ठीक है, कैसे एनक्रिप्ट करना है तो उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। राइट, सैंडबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी, 0 डे, वेब प्रोटेक्शन, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बोला था सारे फीचर्स यहाँ पे है। along with जो हमारा मॉड्यूल होगा हम एक एक करके देखेंगे इसका एक्चुअल यहाँ पे मेंशन क्यों है, और हम अपने सोफोस जो लैब एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगरेशन में वो कहाँ दिखता है, ठीक है, वो हम देखेंगे, क्यों इजी हो जाएगा। यूजर आइडेंटिटी, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है, उसमें ये सब कुछ कवर अप हो जाएगा। एप्लीकेशन कंट्रोल जो है उसके जो फीचर्स है वो सारे एप्लीकेशन कंट्रोल में जो विजिबिलिटी है, ठीक है, एप्लीकेशंस की, वो हम देखेंगे यहाँ पे सारे फीचर्स। सेम वे विद दी वेब प्रोटेक्शन जो मैं बोला था, वैसे वेब कंट्रोल फीचर्स हम देखेंगे, जो ये वाले जो फीचर्स है वो सारे हम वेरीफाई कर लेंगे थ्रू मॉड्यूल्स। कंटेंट कंट्रोल, बिजनेस एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल कंटेंट कंट्रोल जैसे कि अगर कोई FTP है, ठीक है, फाइल डाउनलोड हो रहा है, उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल है, ठीक है, सैंडबॉक्सिंग से वो डिटेक्ट हो रहा है तो वो फीचर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे सैंडबॉक्सिंग से। 0 डे प्रोटेक्शन। बिजनेस एप्लीकेशंस हम देखेंगे, जो कोई हमने बिजनेस एप्लीकेशन कैसे बाहर होस्ट की हुई, ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं ऐसे कि सोफोस फाइव में हम कॉन्फ़िगर करेंगे बिजनेस एप्लीकेशन, लाइक मैंने जैसे आपको बताएगा, अगर कोई आपका वेब सर्वर है जो पोर्ट 480 या फिर पोर्ट 443 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पे फीचर है कैसे कम्स इनटू पिक्चर्स, वो हम देखेंगे। सेम वे विद द ईमेल और उसका डेटा वो देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ईमेल प्रोटेक्शन में, तो हम MTM मोड का फीचर्स, एंटी स्पैम कैसे, ये SPF एन्क्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है, पॉलिसीज हम कैसे लगा सकते हैं, ये सारे फीचर्स जो है हम कॉन्फ़िगरेशन में ही मॉड्यूल्स में देखेंगे एक एक करके, और ये वेबसाइट को भी हम रेफरेंस में रखेंगे। सेम वे ये विजिबिलिटी प्रोटेक्शन हो गया था। सेम वे नेटवर्किंग है, जो हमारे कनेक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल SD-WAN हम देखेंगे। अगर SD-WAN जो फीचर है हम वो देखेंगे यहाँ पे फायरवॉल पे, सारे कैसे हम वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू मीट दी रिक्वायरमेंट, और उसका सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, कैसे कौन कौन से सिनेरियो में हम SD-WAN कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली साइड टू साइड अगर हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, सारे फीचर्स हम देखेंगे सोफोस फायरवॉल में कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ये सारे फीचर्स कैसे काम करते हैं। रिमोट एक्सेस VPN, जैसे मैंने बताया IPsec और SSL VPN, बाहर से कोई सर्वर एक्सेस देना है, ठीक है, कैसे विंडोज में कॉन्फ़िगर करना है, यानी सारे फीचर्स हम जो उनका KB आर्टिकल्स भी हैं कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं वो भी हम रेफर करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लैब एनवायरनमेंट में। रेड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जैसे 2xG है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2xG दोनों साइड सोफोस के ही प्रोडक्ट आपने लगाए हुए हैं, यानी सोफोस का ही फायरवॉल लगाए हुए हैं, तो हम वो दोनों ब्रांचेस कैसे कनेक्ट करते हैं उसके ये सारे फीचर्स है वो हम देखेंगे। सेम वे विद वायरलेस कंट्रोलर, सारे फीचर्स हम देखेंगे एक एक करके। CTNA देखेंगे, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क, यानी हम कुछ भी डिवाइस को अनसिक्योर नहीं रखेंगे। इन शॉर्ट कैसे हम ये वाला फीचर मीट करेंगे, ये सारे फीचर्स हम देखेंगे फॉर सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी जनरली और हेल्थ ऑफ द डिवाइस। कोर नेटवर्किंग भी देखेंगे, अगर कोई हमें कनेक्टिविटी करना है लाइक OSPF BGP RIP कोई भी हम राउटिंग करना है वो हम देखेंगे। स्टैटिक डायनेमिक राउटिंग दोनों हो जाएगा, SD-WAN भी हो जाएगा ऑफ कोर्स, और अगर कोई IPv6 है तो वो भी हो जाएगा। सेगमेंटेशन देखेंगे, यानी अपना जितना भी नेटवर्क भारत, इसके अंदर SD-WAN के कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे? यस, SD-WAN कवर अप हो जाएगा। अच्छा, ठीक। SD-WAN के जो फीचर्स हैं, जैसे फायरवॉल में हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और अभी के जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है SD-WAN पे एप्लीकेशन से हम ट्रैफिक को पाइटराइज
प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कैसे उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। वो छोटी सी कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस करेंगे along with दी जो सोफोस के जो आर्टिकल्स हैं उसके थ्रू। और अगर कोई किसी का एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें हम ये कैसे डिप्लॉय करेंगे SD-WAN, तो हम वो भी देख लेंगे ये सब कुछ। ओके फिर यहाँ पे सेगमेंटेशन, अगर यहाँ पे अगर कोई हमारा नेटवर्क है, ठीक है, अगर लार्ज है, ठीक है, अगर हमने एक ही लैन कॉन्फ़िगर किया है और दैट उनके पीछे जैसे 50 यूजर्स हैं और सर्वर्स भी एक ही लैन में ही लगे हुए हैं, तो हम उसको कैसे सेगमेंट कर सकते हैं सो दैट लेटरल मूवमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल दैट इज द फीचर, वो भी कवर अप है, वो हम देखेंगे। तो कैसे हम सेगमेंट करेंगे वो भी देखेंगे, ये वाले फीचर्स एक एक करके। सेम वे जैसे लास्ट मॉड्यूल में रिपोर्टिंग था, मैनेजमेंट था, तो जो फीचर्स हैं वो सारे मॉड्यूल में ये कवर अप होंगे। तो कैसे हम सोफोस सेंट्रल से हम मैनेज कर सकते हैं और सारे फीचर्स ये जो है वो यूज करेंगे एक एक करके। थोड़े फीचर्स ऐसे हैं जिसमें ये सपोज लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको हम आर्टिकल्स जो कॉन्फ़िगरेशन बेसिक आर्टिकल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी वर्क करेंगे, ठीक है। सॉरी, ओके ओके सो डैशबोर्ड्स, ओके सो जो भी अगर हम रिपोर्टिंग और फायरवॉल इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, डैशबोर्ड पे जो अलर्ट आती है वो हम एक बार एक इनसाइट ले लेंगे, सिर्फ वेरीफाई करेंगे, जैसे कि कुछ ड्रिल डाउन करना है, ठीक है, सस्पिशियस इन्वेस्टिगेशन करना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो हम वो देखेंगे कैसे जनरेट करना है। फ्री रिपोर्टिंग के बारे में देखेंगे, जैसे कि सोफोस 7 दिन का स्टोरेज देता है फ्री में, अगर उससे ज़्यादा देना है तो उसका कोस्ट स्टोरेज सब क्या है वो हम सारे फीचर्स इसमें देखेंगे। मॉडल्स भी हमने आप मॉडल्स देख सकते हैं, उसके बारे में सिर्फ हम ये एक सिर्फ ओवरव्यू देख ही लेते हैं सिर्फ। सो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी मॉडल है। So, अगर छोटा सा कोई बिजनेस है उसको प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे आपके पास 2 से 5 यूजर्स हैं, ठीक है, 5 से 10 यूजर्स हैं, आप SMB और ब्रांच ऑफिस यानी SGS डेस्कटॉप सीरीज वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट दोस सिस्टम्स और सर्वर्स। तो ये वाले मॉडल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सब मॉडल्स में कवर अप होंगे, इसके हार्डवेयर के बारे में जाएंगे, सारे मॉडल्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि मीडियम स्केल बिजनेस है, जैसे कि इसमें 100 to 500 यूजर्स हैं, तो उसके मॉडल्स डिस्कस करेंगे, उसके हार्डवेयर पार्ट डिस्कस करेंगे। सेम वे लार्ज जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 1000 यूजर्स से ऊपर हो सकते हैं, तो वो वाले मॉडल्स भी डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको स्केल कर सकते हैं। और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एक बार मॉडल्स में ही सब कुछ कवर अप है, तो ये हम कवर अप कर लेंगे। अलोंग विद दैट हम यहाँ पे वेबसाइट में भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई करेंगे एक एक करके। SD-WAN के लिए भी जो फीचर है, ठीक है, सोफोस फायरवॉल में जो रेड से हम कैसे मीट कर सकते हैं, रेड डिवाइस से या फिर सोफोस टू सोफोस है, ठीक है, तो हम SD-WAN कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके डिवाइस सिनेरियोस पे भी देख लेंगे। तो उनके मॉडल एक बार डिस्कस करेंगे, मॉडल्स में ही कवर अप है। अलोंग विद, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वायरलेस मॉड्यूल का जो प्रोटेक्शन मॉड्यूल है, उसमें सोफोस के जो APIs हैं, ठीक है, ये वाले मॉडल्स API एक सीरीज वही सपोर्ट करेगा। जैसे थर्ड पार्टी APIs हैं लाइक नेटगेयर और एनीथिंग, वो प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे, वो तो क्योंकि वो थर्ड वेंडर के होंगे, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट यस ऑफ कोर्स उसको हम सोफोस के फायरवॉल रूल से सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सपोज पूरा सोफोस का इकोसिस्टम ना हो, तो एग्जिस्टिंग में हम धीरे धीरे कैसे चेंजेस ला सकते हैं वो हम देखेंगे, और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सोफोस फायरवॉल से वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में है, और फ्री ट्रायल्स भी हैं, तो हम फ्री ट्रायल्स सोफोस XG फायरवॉल कैसे हम अपने लैपटॉप में, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 30 डेज तक आप फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जब तक लैब नहीं मिल रहा है एक्सेस, जब तक सेटिंग सेट कर रहे हैं हम, तब तक हम फ्री ट्रायल यूज करेंगे अपने लैपटॉप पे, और कैसे ट्रैफिक फ्लो होता है वो हम देखेंगे। ओके सो जैसे मैंने आपको बताया गार्टनर की रिपोर्ट्स है, तो 4.7 रिव्यू है। अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए फायरवॉल, ठीक है, या फिर रिप्लेस करना है या फिर नया डिप्लॉयमेंट है, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स के बाद सोफोस फायरवॉल आप इजीली कॉन्फ़िगर कर पाओगे, कुछ भी इशू नहीं आएगा। यस ऑफ कोर्स सारे फीचर्स एनेबल करके आप अपनी बिजनेस को पूरी फुल्ली सिक्योर कर सकते हो।
मैं आपको सोफोस फायरवॉल जो है एक बार हम एक्सेस करते हैं। ओके जस्ट ओके, अभी मैंने सोफोस फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है अपने वीएम में, फ्री वाला ही है। सो लेट मी जस्ट एक्सेस टू द GUI। मैं एक कंसोल भी ले लेता हूँ इसका साथ में, क्योंकि हम दोनों देखेंगे। ज़्यादातर तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी GUI से ही हो जाएगी, आपको कंसोल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम देखेंगे कि सोफोस इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है और ट्रबल शूट कैसे करना है। तो आपको जो दो पार्ट है, इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगर, आपको GUI से हो जाएगा। जो तीसरा ट्रबल शूट बताया था उसमें हम मोस्टली CLI भी यूज़ करेंगे अलोंग विद द GUI, क्योंकि दोनों मेथड रहेंगे सबसे बेस्ट होगा। अगर आप सोफोस XG फायरवॉल में ही आप डोमेन में ही आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं एक पुट्टी भी ओपन कर लेता हूँ साथ में। सो लेट मी जस्ट पुट द IP। ओके, तो लेट मी जस्ट लॉग इन हियर। ओके, तो ये हमारा सोफोस का GUI है, ठीक है, सॉरी CLI है, और पीछे हम GUI है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वन है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, राउट कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस कंसोल, डिवाइस मैनेजमेंट, VPN मैनेजमेंट। ये सब हम सारे सब एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ पे हम इसका यूज होगा और कहाँ पे हम कोई जो ऑप्शन है CLI से काम आ सकते हैं, हम उसको भी मॉड्यूल के साथ ही कवर अप कर लेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल वन सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो इंटरफेस उसमें भी ऑप्शन आएगा, लाइक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखना है, DNS कॉन्फ़िगरेशन देखना है, या फिर एग्जिट करना है। तो आपको इंटरफेस की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अगर आपको लेट्स से डिवाइस कंसोल पे जाना है तो फोर्थ ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं TCP डंप ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, बहुत सारे फीचर्स हैं, हम बाद में मॉड्यूल में ही कवर अप करेंगे, एक एक करके। राउट कॉन्फ़िगरेशन देखना है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है, वो हम सब कुछ यहाँ पे कंसोल से देख सकते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, जैसे पासवर्ड रीसेट करना है, पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट करना है, कैसे करेंगे वो सारे वो मॉड्यूल्स में ही कवर अप हो जाएगा CLI से। Coming back to the GUI, let me log in here and show you the GUI. तो भरत, इसका जो 30 डेज का फ्री ट्रायल रहता है वो हर कोई बना सकता है, राइट? ये सारे हम सब बना सकते हैं, 30 डेज का होगा। जो मैं आपको अभी डिटेल्स बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में हम जाते हैं, तो ठीक है, मैं आपको यानी इंस्टॉलेशन जब कराऊंगा तो उसी में ही जब इंस्टॉलेशन करेंगे हम, तभी हम वो फ्री ट्रायल एनेबल कर देंगे, तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल किया था, तो ये यहाँ पे मेरी लाइसेंस का जो डिटेल है, जैसे कि लास्ट मेरा 10 दिसंबर को एक्सपायर होगा, यानी मैंने 10 को एनेबल किया था नवंबर को। तो मुझे 30 डेज में मुझे ये सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक नहीं मिलता, इसके लिए एडवांस लाइसेंस चाहिए, ठीक है। 30 डेज का हमको इतना मिल जाएगा। उसमें बेस लाइसेंस होगा, ठीक है। नेटवर्क प्रोटेक्शन यानी IPS का जो इंजन है, ठीक है, उस वो लाइसेंस बेस है। तो आपके पास IPS सिक्योरिटी लगानी है, तो हम वो सारे लाइसेंसेस चाहिए। सेम वे विद ऑल दिस थिंग्स। तो हम ये सारे जितने भी लाइसेंस है वो सब मॉड्यूल्स में तो कवर अप ही है, बट डेफिनेटली हम इसको डिटेल में भी जाएंगे। अब अभी के लिए हम ये देख सकते हैं। सोफोस जैसे हम लॉगिन करेंगे तो सोफोस का हमें GUI दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूरा जितना भी इनसाइट है जो सोफोस फायरवॉल से आपने कॉन्फ़िगर किया है या फिर कोई ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, यूजर्स हैं, ठीक है, आपको इनसाइट सारे मिल जाएंगे। इसके बारे में मैं मॉड्यूल के साथ ही अलोंग विद द मॉड्यूल्स डिटेल में जाएंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे फायरवॉल रूल्स है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूल्स आते ही हैं फायरवॉल पे, जैसे आप डिप्लॉय करते हो तो कैसे ट्रैफिक इंसेप्ट इन पॉलिसीज लगानी है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कैसे एनेबल करना है, ठीक है। राउटर नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ओके। DNS DHCP ये सारे फीचर्स हम मॉड्यूल्स में ही कवर अप है, एक एक करके हम देख लेंगे। VPN कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये जो GUI है उसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो भी सिनेरियोस हैं। राउटिंग है, जैसे बहुत सारे जनों के क्वेश्चन है राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो यहाँ से GUI से कर सकते हैं। अगर कोई स्टैटिक है तो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो भी हम एक टोपोलॉजी में देख लेंगे। BGP OSPF देख लेंगे, RIP देख लेंगे, और दूसरे जो भी टैब्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो हम एक एक करके देख लेंगे।
यहाँ पे आपको सिस्टम सर्विस कॉन्फ़िगर में ये हमने गो थ्रू किया, उसमें सिस्टम सर्विसेज भी है, यानी सोफोस का जो है जैसे अगर एचए में कॉन्फ़िगर किया है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे मॉड्यूल्स में कि एचए कैसे काम करता है, ठीक है, नेगोशिएशन के तहत इसका यूज कहाँ पे है, डिप्लॉय कैसे करना है, ट्रैफिक शेपिंग है, रेड है, जैसे रेड डिवाइस है एनेबल कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से है। ऑलराइट, कमिंग टू दी करंट एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो यूजर्स दिखेंगे। अगर ऑथेंटिकेशन वाला मॉड्यूल है, ठीक है, और हमने उसको प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है तो जो भी लाइव यूजर्स है हम यहाँ पे देख सकेंगे लाइव कनेक्शंस के साथ। अगर कोई IPv6 है तो वो देख सकेंगे, IPsec कनेक्शंस, रिमोट यूजर्स कनेक्टेड है वो भी देख सकेंगे। रिपोर्ट सेशन में हम सारे रिपोर्ट्स देखेंगे मॉड्यूल में भी, जैसे 11th मॉड्यूल है हमारा तो वो पूरा रिपोर्टिंग का है तो ये पूरा उसमें कवर अप हो जाएगा। जीरो डे प्रोटेक्शन है, मैंने जैसे बताया सैंडस्टॉर्म टेक्नोलॉजी यूज करता है। डायग्नोस्टिक्स यानी जो बेसिक नेटवर्किंग अपने टूल्स है, पिंग है, ट्रेस रूट है, ठीक है, नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए हमें जो ये हम यूज करेंगे डेफिनेटली। एक सभी सिस्टम ग्राफ देख सकते हैं यहाँ से, URL लुकअप कर सकते हैं। पैकेट कैप्चर मैं आपको बताऊंगा कैसे पैकेट फ्लो होता है आपके यूजर के सिस्टम से फायरवॉल से इंटरनेट तक, वो हम देख लेंगे। और भी सारे फीचर पैकेट कैप्चर है जो हम देखेंगे, बट ये हम LAN से WAN देखेंगे सबसे स्टार्टिंग में। कनेक्शन लिस्ट जो फायरवॉल पे है वो देखेंगे। IPS पॉलिसीज जैसे वेब प्रोटेक्शन, ईमेल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन प्रोटेक्शन जैसे बताया था, ठीक है। तो ये पॉलिसीज यहाँ पे कैसे क्रिएट करनी है, जो डिफॉल्ट पॉलिसीज अवेलेबल है उसको गो थ्रू करेंगे, नई क्रिएट करेंगे, अप्लाई करेंगे यूजर्स के ऊपर और कैसे वर्क करें हम देखेंगे। वेब है उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। ईमेल प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको मॉड्यूल में बताया था तो यहाँ पे वो पूरा ईमेल प्रोटेक्शन हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम सिनेरियोज देखेंगे कहाँ पे हम ये एनेबल कर सकते हैं, कौन से सिनेरियोज में। सोफोस सेंटर जैसे मैंने आपको 12th मॉड्यूल बताया था कैसे सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। कैसे फायरवॉल पे प्रोफाइल्स क्रिएट कर पॉलिसीज और प्रोफाइल क्रिएट कर जाती है, होस्ट सर्विसेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल्स में ही कवर अप है, नो वरीज। सो लाइसेंस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लाइसेंस है, डिवाइस एक्सेस, ठीक है, एडमिन, तो ये जैसे वेब एडमिन कंसोल हम कहते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम पूरा पूरा नेविगेट करेंगे कौन सी जगह पे हम क्या चीज कॉन्फ़िगर कर सकेंगे, उसका पर्पस क्या है। ऑलराइट, टाइम सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस अगर है, ठीक है, नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करनी तो वो भी हम देखेंगे। SNMP, नेट फ्लो और कस्टम मैसेज हम कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर बैकअप लेंगे, बैकअप रिस्टोर करेंगे, ठीक है, कैसे रिस्टोर करना है, बैकअप लेना है, ठीक है। फर्मवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, पैटर्न अपडेट के बारे में भी, और सर्टिफिकेट्स। अगर सोफोस हमें इंटरसेप्ट करना है सारा ट्रैफिक तो सोफोस एज CA यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे एडवांस प्रोटेक्शन हम एनेबल करेंगे लेटर ऑन। और एक चीज लास्ट, जैसे कि एप्लीकेशन है तो जैसे कि मैंने मॉड्यूल्स में बताया था कि सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन कंट्रोल, क्लाउड एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लिस्ट, वो हम देखेंगे मॉड्यूल्स में। जैसे मैंने आपको सारे बताया था वैसे ही है, तो हम उसको गो थ्रू करेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, एक एक फीचर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इंट्रूजन प्रिवेंशन जैसे डोस सेटिंग्स है, ठीक है, जैसे बताया कि डोस अप्लाई कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, स्पूफ प्रिवेंशन भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको स्पूफ प्रिवेंशन को भी रोकना है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो फायरवॉल से। देखेंगे हम कैसे बिजनेसेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें कैसे मीट कर सकते हैं, ये कैसे चैलेंजेस आते हैं फायरवॉल को डिप्लॉय करने में, और कैसे रिजोल्व करेंगे उसको, कैसे अप एंड रनिंग और मोस्ट सिक्योर करेंगे। कोई नया डिप्लॉयमेंट है तो कैसे कौन से मोड पे करना है, गेटवे में करना है, प्रॉक्सी में करना है, वो भी ऐसे सिनेरियोज भी थोड़े से डिस्कस करेंगे हम। मोस्ट ऑफ जहाँ पे सोफोस जी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर कोई भी दूसरे वेंडर से हम कंपेरिजन में दूसरा फायरवॉल है तो उसका जो ऑल्टरनेट है सोफोस हम कैसे है तो हम वो यूज करेंगे, वो देखेंगे। ऑल राइट, तो एक हम इसके नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो हम क्या करेंगे, VM में हम इंस्टॉलेशन इनिशिएट करेंगे, यानी हम PC से पूरा फायरवॉल कॉन्फ़िगर करें, मींस इनिशियल सेटअप करेंगे पूरा और उसको लाइव में लाएंगे। तो एक सर्वर होगा जैसे वो सारे यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है, लैंड जोन है, DMZ जोन है, ADMZ जोन है फॉर एग्जांपल,
और ये कोई कोई कस्टम जोन है, ठीक है। डीएमसी जोन पे सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग यूजर्स हैं, जिसमें अलग अलग पॉलिसीज लगानी है। एचआर में अलग लगानी है, सेल्स में अलग पॉलिसीज लगानी है, वेब फिल्टर एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसीज अलग लगानी है, ठीक है। क्यूएस पॉलिसीज लगानी है, ठीक है। सर्फिंग कोटास लगाने हैं यूजर्स के ऊपर या यूजर ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, उसके ऊपर कोई बैंडविड्थ पॉलिसी लगाने की, इस ग्रुप को सिर्फ 5 MB मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो वन बाय वन अलोंग विद द मॉड्यूल्स हम उसको कॉन्फ़िगर और मीट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे सोफोस फायरवॉल अपने काम आ सकते हैं। ओके, हम जो पहला लेक्चर था उसको तो हम कवर कर ही देंगे, प्लस हम सेकेंड लेक्चर का भी कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो इमेज है ये चेक पॉइंट हार्डवेयर की इमेज है। अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए चेक पॉइंट डिवाइस मिलता है तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको मिलेगा। ये ओपन है, यहाँ पे आप निक कार्ड लगा सकते हैं विद लैन गिग और एनीथिंग, राइट। एंड ये नॉर्मल अपने लैन पोर्ट, ये कंसोल, ये यूएसबी, ये कुछ एलईडीज, ये नेविगेशन, ठीक है। ये कोर्स का इंट्रोडक्शन था कि हम कौन कौन सी चीजें डिस्कशन करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आज की, तो हमारा मेन फोकस रहेगा इस सेक्शन पे, ठीक है, जिसमें हम पैकेट फ्लो पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आज के सेशन के बाद अगर आपसे पैकेट फ्लो या हिस्ट्री या आर्किटेक्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा इतना मैसेज कन्वे करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है, सबसे जो मेजर पॉइंट मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को ना एक डाउट होता है कि नोट्स बनाए जाए या नहीं बनाए जाए, ठीक है, और बनाए जाए तो किस तरीके से बनाए जाए। तो फर्स्ट थिंग कि आप लोगों ने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको एक कॉपी लेके आनी है, उस कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस अप्रोच को फॉलो किया ना, बिलीव मी, आपको कभी दोबारा चेक पॉइंट की क्लासेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जब तक आप नेटवर्क सिक्योरिटी में रहेंगे। एंड दिस अप्रोच इज फॉलोड बाय मी एंड माय फ्रेंड्स, एंड बिलीव मी, आज तक हमें कभी भी, ये जो नोटबुक है मेरे डेस्क पे हमेशा रहती है, बट मैं कभी इसे ओपन कर देखता नहीं हूँ अनटिल और अनलेस कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट एक बार मतलब श्योर ना करना हो कि यार ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है। तो करना क्या है, एक आपने नोटबुक ले लेनी है, ठीक है। अब मान लो ये नोटबुक आपने ली 100 पेजेस की, उसको 2 में डिवाइड कर दो। जो मेजर पार्ट है यानी जो 70 पेजेस होंगे वो आपके टॉपिक के नोट्स बनेंगे, और जो 30 पेजेस होंगे वो आपके बनेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के। किसके? इंटरव्यू क्वेश्चंस के। इंटरव्यू क्वेश्चंस हम हर एक टॉपिक के बाद इमीडिएटली डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको इंटरव्यू में कैसे बोलना है, प्लस उसको रियल लाइफ में, रियल इंडस्ट्री लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये 2 अप्रोच हमारी फॉलो होगी, ठीक है। तो 2 सेक्शन बनाने हैं आपने। फर्स्ट सेक्शन होगा आपकी टॉपिक नोट्स के लिए, सेकंड सेक्शन होगा हमारा इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, क्लियर है। हाँ, पार्टिसिपेशन देते रहना, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मतलब है ना। चलो, ये चीज अगर क्लियर है आपकी, तो आई होप कि आप मे बी अगर इस बार पेन एंड पेपर नहीं लेके बैठे हो तो नेक्स्ट टाइम से आप लेके बैठे और ये चीज रिगरसली फॉलो करें, बिकॉज यहीं से आपको जो इस कोर्स में जो आप पे कर रहे हो, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसकी वैल्यू आपको यहीं से निकलेगी, ठीक है। अगर ये चीज आपने फॉलो नहीं करी, मे बी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी, फिर धीरे धीरे स्लोली वो फेड होती चली जाएंगी। देन एक दिन आपको लगेगा कि यार दोबारा क्लासेस देनी पड़ेगी, तो वो फिर अगेन रिसोर्सेज जो है आपके खर्च होंगे। अच्छा, अब बात की थी हमने लास्ट टाइम कि चेक पॉइंट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। चेक पॉइंट मार्केट में आया, किस तरीके से आया, क्या क्या चीजें लेके आया, किस तरीके से मॉडिफिकेशन आया, ये
कैलकुलेट होता है हिस्ट्री में। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब स्लाइड है, इसका तुम्हारे इंडस्ट्री में कोई रेलेवेंस नहीं है, बट इंटरव्यू में कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो चेक पॉइंट जो था उसका सबसे पहला जो वर्जन था दैट इज कॉल्ड इप्सो। इप्सो मार्केट में आया, बहुत ही बेसिक इंटरफेस। आप लोगों में से किस किस ने विंडोज 95 पे काम किया हुआ है? किसी ने देखा है, किसी ने काम किया हुआ है? मे बी जब साइबर कैफे में जाते हो तो कभी आपको मिला हो, हाँ विंडोज 95 एंटी वगैरह है ना? तो मुझे याद है जब मैं साइबर कैफे जाता था, कभी टाइम पे मेरे पास ना तो कंप्यूटर होता था ना लैपटॉप होता था, तो कुछ ईमेल्स चेक करने के लिए, मतलब वी वर अराउंड इन 11th क्लास इन और मे बी 10th क्लास में थे हम जब, तो ईमेल हमने नई नई बनाई थी और हमें शौक होता था जाके चेक करने का कि कुछ नई ईमेल आई है या नहीं आई। वैसे आती कुछ भी नहीं थी, बट हमें एक शौक होता था, चस्का होता था। तो होता क्या था, जो वो कंप्यूटर हमें मिलता था, है ना, जो कंप्यूटर हमें वहां मिलता था दैट वाज वेरी बेसिक। इफ अगर मैं कंपेयर करूं उस चीज को आज के कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक है, सिंपल सा ये मॉनिटर, नीचे टास्क बार और यहाँ पे स्टार्ट, और कर्सर जो होता था वो बहुत ही बड़ा कर्सर होता था, कुछ इस टाइप का, और नेविगेशन बहुत ही आसान होती, सब कुछ सिंपल, सब कुछ मतलब सॉर्टेड होता था। बट प्रॉब्लम क्या थी, विंडोज 95 की वनरेबिलिटी बहुत थी इसमें। ठीक है, मान लो आपने टेलनेट का एक पोर्ट खोल दिया ना इस पे 21, तो 90% 90 to 95% चांस होते थे कि अगर आप किसी एंटरप्राइज में यूज कर रहे हैं इसे, तो इस पे इसी पोर्ट पे अटैक हो जाएगा, समझ रहे? तो इसकी वनरेबिलिटी बहुत है, ऑल्दो ये बहुत सिंपल था बट वनरेबल था। ठीक है, प्लस जब हाई इंटेंसिटी वर्क इस पे परफॉर्म किया जाता था विंडोज पे, तो ये कहीं ना कहीं इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया या फिर अदर जो चीजें रिसोर्सेज होते थे वो हाई यूटिलाइज होते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको ऑब्सोलीट करना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को। धीरे धीरे वो लोग नए वर्जन, फिर एक्सपी पे आए, एक्सपी से फिर विंडोज 7 पे आए, एंड देन 8 एंड देन 10। ठीक है, अभी तो 11 पे पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं 95 से एक्सपी पे एक मेजर रोल आउट था, बिकॉज बीच में एक वर्जन ना विस्टा भी लेके आए थे। ठीक है, विंडोज विस्टा, वो विस्टा जो था वो 95 का इनहेंस्ड वर्जन था, और 95 के बाद वो एक्सपी ले आए। अब अगर मैं बात करूं 95 और एक्सपी में, तो जमीन आसमान का फर्क था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इप्सो से स्प्लैट पे, तो जमीन आसमान का फर्क कर दिया इन्होंने। कैसे? सबसे पहले तो ये रेड हैट ले आए बीच में, जो इनका कर्नल ये बना रहे थे वो इन्होंने रेड हैट पे बना दिया। अब लाइनेक्स है, अगर एक तो पहले बात वो ओपन सोर्स, और मैं अगर कंपेयर करूं तो लाइनेक्स इज मच मोर सिक्योर देन एनी अदर लैंग्वेज, बट अगर उसमें अगर आप थोड़ा सा सिक्योरिटी ट्विक कर देते हो तो वो और एक्सटेंसिवली सिक्योर बन जाता है। फीचर्स भर भर के प्रोवाइड करता है लाइनेक्स। ठीक है, तो जितनी भी इप्सो की प्रॉब्लम्स थी, जो नोकिया ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में इप्सो को, जितनी भी इसकी प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मिटिगेट हुई किसमें? स्प्लैट में। किसमें हुई? स्प्लैट में, स्प्लैट। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ये जो स्प्लैट को डेवलप किया था इन्होंने, ये किया था रेड हैट पे, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी फीचर्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्प्लैट वाज मच मच बेटर देन इप्सो। ठीक है, चलो, अब स्प्लैट एक नया वर्जन था लाइक एक्सपी, बट स्टिल देयर वाज सम प्रॉब्लम्स इन स्प्लैट। ठीक है, जीयूआई जो इंटरफेस था इतना ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं था, और उस टाइम पे अगर मैं बात करूं 2010 या 2011-12 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ना एक मार्केट में ट्रेंड था नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का, कि हमें मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेके आनी। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या, जो लेयर 7 पे काम करे, ओएसआई लेयर 7 पे काम करने वाली फायरवॉल हमें चाहिए थी। तो उस लेवल पे काम करवाने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा ग्राफिकल और स्टेबल ग्राफिकल की रिक्वायरमेंट थी, जो स्प्लैट के पास नहीं थी। तो अगर मैं चेक पॉइंट की स्प्लैट की बात करूं, तो ये मार्केट में लेयर 7 के काम को अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो 2012 में फाइनली चेक पॉइंट ने क्या किया
कि ये लेके आए एक नया वर्जन चेक पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड गाया, ठीक है, और जिसमें इन्होंने इन दोनों ही वर्जन्स को एनालाइज किया और चेक किया कि क्या क्या ऐसी वनरेबिलिटीज हैं, क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो इफ्सो और स्प्लैट में हैं, वो सारे के सारे इश्यूज मिटिगेट कर दिए गए गाया के अंदर, ठीक है। एंड प्लस ये सब करने के बाद आईपी वर्जन 6 लॉन्च मतलब इंट्रोड्यूस किया गया गाया के अंदर फर्स्ट टाइम 2012 में, क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रेंड चला हुआ था कि आईपी वर्जन 6 बहुत जल्दी मार्केट कवर कर लेगा, बट अभी भी वो चीज चल रही है, अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। मेजर रोल आउट आपको देखने को नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आईएसपी पे आप काम नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेज थी चेक पॉइंट के इवोल्यूशन की, और करंटली अगर हम बात करें तो हम जो काम कर रहे हैं वो गाया पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड गाया, चेक पॉइंट गाया, ठीक है। जैसे सिस्को का iOS होता है ना, चेक पॉइंट का गाया सॉफ्टवेयर होता है। अब जो स्टार्टिंग हुई थी वो वर्जन R75 से हुई थी, ठीक है। उसके बाद R76, then R77, and R77.30 was a major version of checkpoint जिसने checkpoint को बहुत ही ज्यादा फेमस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करूं तो R77.30 ही बहुत स्टेबल वर्जन था अब तक। अभी R80 में अलग सीन है, बट R77 तक की अगर मैं बात करूं तो सबसे स्टेबल वर्जन जो था R77.30, और सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ R77.30 वाज नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इसी वजह से चेक पॉइंट मार्केट में, क्योंकि लॉजिकल जो थिंकिंग थी चेक पॉइंट पे काम करते वक्त R77.30 को के इंटरफेस पे, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे थी जब कोई बंदा उस पर काम कर रहा होता था। तो जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग होती थी बहुत नेक्स्ट लेवल पे, वो सोच कर सकते थे, वो रिलेट कर पाते थे। मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी रिलेट कर पाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर हमने ये डिस्कस किया, तो अब इसका जो रेलेवेंस है वो आपके मतलब ना ही अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें कोई रेलेवेंस है इसका, ना ही आप रियल लाइफ में इसका कोई रेलेवेंस है, बट इंटरव्यू में। Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share and subscribe for more future updates. में कभी कभी मतलब 1% से बात करूं, 1 से 10% का एक चांस होता है कि भाई इंटरव्यू पूछ लेता है कि भाई चेक पॉइंट का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, तुम्हें पता है इस चीज, देन यू शुड नो कि सबसे पहले इप्सो आया, देन स्प्लैट आया, देन गाया आया। कई बार क्या होता है वो ना कंपैरिजन पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्लैट एंड गाया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उस डिस्कशन से पहले आपको स्प्लैट के बारे में पता होना चाहिए और इप्सो के बारे में पता होना चाहिए कि स्प्लैट किसके बाद आया और क्या क्या चीजें उसमें थी, ठीक है। चलिए ये तो हो गए। हाँ बताइए सर, इप्सो कब लॉन्च हुआ था? इप्सो देखो अकॉर्डिंगली मतलब ऐसा कोई डेट मतलब मुझे याद नहीं है, बट आई बिलीव कि अराउंड 2007 या 8 के आसपास लॉन्च हुआ होगा। या आप इजीली गूगल भी कर सकते हो, बट मैंने कभी किया नहीं। और इप्सो के बारे में आपसे कोई मेजरली कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ स्प्लैट अराउंड 2010 के आसपास इन्होंने लॉन्च किया था, 10 या 9 के आसपास। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है ना। हेलो हेलो, यस प्लीज। R4 क्या है? R का मतलब जैसे .75 R.76 R.730, तो ये R का जो मतलब ये जो चेक पॉइंट का वर्जन है ना, ये R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। R के आगे ये अपना वर्जन नंबर देते हैं कि R77.30 चल रहा है, R77 R75 चल रहा है, ठीक है। ये R से ये वर्जन को डिनोट करता है, ठीक है।
ओके, थैंक एंड ये आर से मतलब आपसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं कि आर क्या है क्या नहीं है, बट आप ये जरूर याद रखिए कि इसका जो ये जो हिस्ट्री है वो किस हिसाब से इवॉल्व हुई है। ओके। विकास, ठीक है? लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? अभी जो चल रहा है वो R80 चल रहा है। ठीक हम है, लैब किस पे करेंगे? हाँ R80.1 पे करेंगे। R80.1 पे हम लैब करेंगे और इंडस्ट्री में कहीं मेजर मतलब देख रहा हूं मैं कि R80.40 रोल आउट हो गया है, क्योंकि R80.40 भी बहुत ही ज्यादा स्टेबल वर्जन है। ओके, सो हम बात करते हैं कि चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर कैसा है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बट आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कभी दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले चीज कि चेक पॉइंट के आर्किटेक्चर का एक एक्रोनिम है, उसे बोला जाता है स्मार्ट। क्या कहते हैं उसे? स्मार्ट। अब स्मार्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज स्मार्ट, बिलीव मी। जैसे आप लोग स्मार्ट हैं, सिमिलरली इसका आर्किटेक्चर भी स्मार्ट है। और स्मार्ट में S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर आर्किटेक्चर, और ये तीनों ही जो अल्फाबेट हैं ये आर्किटेक्चर से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो स्मार्ट एक्रोनिम है किसका? चेक पॉइंट का जो आर्किटेक्चर है उसका। अगर मैं बात करूं चेक पॉइंट का, अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ चेक पॉइंट, आई विल से इट इज कॉल्ड स्मार्ट। और स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, या फिर आप स्मार्ट कंसोल, मैनेजमेंट सर्वर, सिक्योरिटी गेटवे भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर है। इसी 3 टायर आर्किटेक्चर को स्मार्ट आर्किटेक्चर बोलते हैं या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर बोलते हैं। और ये 3 टायर क्यों है? क्योंकि 3 जो चेक पॉइंट की डिप्लॉयमेंट होती है वो 3 फेजेस में होती है। व्हाट आर वो 3 फेजेस क्या हैं? सबसे पहला फेज है चेक पॉइंट पॉलिसी एडिटर, सेकेंड वन इज चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर, and third one is cluster of gateway. तो ये दो 3 फेज हैं, that is called 3 टायर आर्किटेक्चर। एंड इस 3 टायर में सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है that is called स्मार्ट कंसोल। अभी स्मार्ट कंसोल क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन। what it is? It is an application which you will install on your computer, okay? एंड उस कंप्यूटर के थ्रू, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट सर्वर के आईपी से, और उस मैनेजमेंट सर्वर के अंदर ये आपके गेटवेज इंटीग्रेटेड होते हैं। तो व्हाटएवर द पॉलिसी मॉडिफिकेशन, व्हाटएवर द नेट मॉडिफिकेशन, व्हाटएवर द रूल मॉडिफिकेशन, राउटिंग, interfaces, whatever you want to modify, you will be able to do it on the management server. After doing that, after verifying each and everything, you will be pushing those changes to your gateways. ठीक है, तो ये जो काम करने का तरीका है कि भाई आपने एक्सेस लिया एक कंप्यूटर से, किसका एक्सेस लिया? एक मैनेजमेंट सर्वर का, और उस मैनेजमेंट सर्वर पे आपने सारे चेंजेस किए। आपको पॉलिसी बनानी थी, आपको नेट बनाना था, आपको राउटिंग करनी थी, आपको वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना, सब चीज आपने इस मैनेजमेंट सर्वर पे किया। एंड देन आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर वेरीफाइंग ईच एंड एवरीथिंग, यू पुश दोस चेंजेस टू योर गेटवे। और ये गेटवे क्लस्टर में थे, तो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी को भेजा, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। तो जो आपने प्राइमरी पे पुश किया वो सिंक हो गया सेकेंडरी के। तो लॉजिकली आपने फायरवॉल पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। आपने किस पे स्पेंड किया टाइम? अपने मैनेजमेंट सर्वर पे। एंड उससे बेनिफिट क्या मिला?
बेनिफिट ये मिला कि आपने अपने फायरवॉल पे ज्यादा कुछ लोड नहीं दिया, ठीक है। जो भी चीजें परफॉर्म करी, वेदर इट वाज इंटेंसिव इन नेचर इन टर्म्स ऑफ सीपी यूटिलाइजेशन और रैम यूटिलाइजेशन, तो जो भी कुछ होगा वो मैनेजमेंट सर्वर पे होगा, आपके गेटवे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उस चीज से। आप लोग समझ पा रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? हाँ विकास, इट्स क्लियर। यस बिल्कुल। बट यहाँ पे एक छोटा सा मेरा एक डाउट है, क्योंकि हम हम्म। लाइव एनवायरनमेंट में जो चेक पॉइंट पे काम करते हैं ना, वो एमडीएस और सीएसएम पे काम होता है। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर सकते हो एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है एमडीएस और सीएसएम का? ठीक है, एमडीएस की बात करते हैं, ठीक है। एमडीएस क्या है? मल्टी डोमेन सर्वर्स दे आर। अब एमडीएस में ऐसे चेक पॉइंट का ना एक फीचर है, मैं आपको बताता हूँ लेटर ऑन, वैसे तो बताता हूँ आप लोगों को, बट एक चेक पॉइंट का फीचर है। वो फीचर क्या है कि जैसे मान के चलो ये 3 फायरवॉल्स हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पे आप एक फायरवॉल और ऐड कर दो। अब जी ये एक सिंगल मैनेजमेंट सर्वर से आप 4 फायरवॉल मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि ये जो 2 फायरवॉल थी आपने एक पॉलिसी बेस में रख दिया, और ये दूसरी दो मतलब फायरवॉल एक दूसरी पॉलिसी बेस में रख दिया। अब मैंने क्या किया कि जो ऊपर की, एक मिनट में थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ इसे। ओके, सो दिख रहा है ना आप लोगों को? तो एमडीएस में क्या होता है बेसिकली, जब आप लोग ये आपने 4th फायरवॉल बनाई, ये दोनों फायरवॉल आपकी एक क्लस्टर में है, ये दोनों फायरवॉल आपकी एक क्लस्टर में है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल मैनेजमेंट सर्वर से आप इसके लिए अलग पॉलिसी बेस बना सकते हैं और इसके लिए अलग पॉलिसी बेस बना सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ऐसे करते 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 आपके पास 400 फायरवॉल्स हैं, तो आप क्या है, आप सिंगल मैनेजमेंट सर्वर से 400 फायरवॉल मैनेज नहीं कर सकते। उस सिनेरियो में क्या होता है, मल्टी डोमेन सर्वर आपका एक 4th, यहां पे मान लो आप एक 4th सर्वर आता है विच इज कॉल्ड एमडीएस, ठीक है। अब उस एमडीएस पे जो ये आपका सिंगल मैनेजमेंट सर्वर है, ऐसे कम से कम भी जितने भी आपके पास मान लो 400 फायरवॉल्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 या फिर उससे ज्यादा मैनेजमेंट सर्वर आपके इंटीग्रेटेड होंगे एमडीएस के ऊपर, और एमडीएस के थ्रू आप लैंड करोगे उसके मैनेजमेंट सर्वर पे, एंड देन आप मैनेज करोगे उसके पॉलिसी सेक्शन को या फायरवॉल्स को। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास 10, 12 या 15 फायरवॉल्स का नेटवर्क है, तो आप मैनेजमेंट सर्वर से इजीली एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बट जब हम बात करते हैं कि एंटरप्राइज लेवल की, वहां पे एमडीएस आता है एंड देन वीएसएक्स आता है। एमडीएस का एक और टेक्नोलॉजी है, एमडीएस एंड वीएसएक्स, ये दोनों ही लार्ज इंटरप्राइजेस पे आता है। और होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ मैनेजमेंट का तरीका होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट को आप मैनेज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, it's clear now. Any doubt? So no. So CSM is like management server, Yes. and MDS is the multi-domain server that is implied before the CSM. Yes. ठीक है? Yeah, fair enough. You can switch. Sir, to- I have one doubt. हम्म। तो सर ये जो बीच में हमारा सर्वर आ रहा है, तो ये सर्वर हमारा एप्लीकेशंस के रूप में होता है या फिर ये हमारा एक हार्डवेयर होता है अभी? ये जो सर्वर की बात कर रहे हैं हम, जी हाँ। ये क्या होता है, ये होता है चेक पॉइंट का गाया ही है, ठीक है। ओके। चेक पॉइंट गाया होता है, बट जब हम डिप्लॉय करते हैं ना चेक पॉइंट को, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप चेक पॉइंट के इस गाया वर्जन को एज अ गेटवे डिप्लॉय करना चाहते हो या फिर एज अ मैनेजमेंट सर्वर एसएमएस डिप्लॉय करना चाहते हो। तो जब हम उस गाया को इंस्टॉल करते हैं मैनेजमेंट सर्वर पे, तो हम एसएमएस वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अदरवाइज हम इसको गेटवे बना देते हैं। ओके सर, You ओके got it? जी हाँ, यस तो ये हाँ, तो जैसे ही आप एसएमएस सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके सारे फीचर्स जो होते हैं वो एसएमएस वाले इंस्टॉल होते हैं, और फंक्शनैलिटी सारे वो मैनेजमेंट सर्वर वाले करता है।
SMS stand for Security Management Server. ओके थैंक यू। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं, लाइक कई बार सामने वाला SMS करके बात कर रहा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये SMS क्या था। SMS इज नथिंग ओनली जस्ट एक्रोनिम फॉर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है, सेकेंड लेवल पे जो सर्वर आता है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो यहां तक कोई आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग विच इज अराइजिंग इन योर माइंड, लेट मी नो। कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके परफेक्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम फायरवॉल की बात करते हैं, है ना, तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है? अच्छा चलो, उससे पहले मैं एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोग मुझे जवाब दो, व्हाट इज फायरवॉल? बताइए। A firewall is a device which makes sure that all the users who are inside my network can access the internet, as well as at the same time no malicious traffic from outside can enter my network. ओके, ये अच्छा है। एंड कोई और? Firewall is something, and it achieves this thing where all the inside users can access the internet, and no outside traffic can come inside with the help of stateful packet filtering, as well as through connection-oriented approach, where it will form a connection table or a session table. It will check that, or else in the stateful packet filtering, it will check whether we have access list with respect to that traffic, and only then it allows that specific traffic to, to communicate over the firewall. I'm not sure about the checkpoint, but I believe I have studied Palo Alto and FortiGate, and both of them are following zero trust approach. So in order to communicate from one point to other point, you must have one access list, or we can say a security policy. Yes, so that's correct, but the question was, what is a firewall? You told me what benefit it provides, right? कि आप inside user outside जा सकते हैं, outside से कोई inside नहीं आ सकता. That feature set is provided, no? So we can say firewall is something which protects our environment. Yes, that's what the proper definition, but it's also a half definition. You should say a L3 device, layer 3 device, which provides an extensive security to our network and controlled by network administrators, network security administrators, is called firewall. We can modify, we can create, and we can deploy the policy section on the basis of the business requirement on the firewall, right? तो अगर मान के चलते हैं हम, ये मेरा फायरवॉल है ना, और इस फायरवॉल, ये मेरा लैन हो गया, ये वैन हो गया, है ना। अब यूजर यहां से आता है और इसने यहां जाना है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी फायरवॉल की बात करूं तो एक डिनाई होता है. So what you have to do, you have to create a policy that from source this to destination this, the traffic should be allowed. And vice versa, कि जब बंदा बाहर से आ रहा है और लैन में एंटर करना है तो उसके लिए भी यह पॉलिसी होनी चाहिए, otherwise it will not work. The connection will be dropped at the firewall level. Clear है? Hope जो आपकी फायरवॉल की अंडरस्टैंडिंग थी, अभी नॉलेज थी, उसको मैंने थोड़ा सा इंप्रूव किया होगा. Yes, Vikas. Okay. Now another question जो आप इंटरव्यू में मतलब सुनेंगे बहुत ज्यादा, आप अगर कोई L1 लेवल की या फिर जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड फायरवॉल.
what is the difference? Firewall also are L3 device, router is also a L3 device. We are configuring ACL on router, we are configuring ACL on firewall. What is the difference? राउटर से हम ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अचीव नहीं कर सकते, यानी कि मैं चाहूँ कि अगर मेरे इनसाइड यूजर्स इंटरनेट भी एक्सेस कर लें सेम टाइम पे और बाहर से ट्रैफिक अंदर भी ना आए, तो ये चीज सेम टाइम पे नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। या तो मेरे यूजर्स अंदर से बाहर जाएंगे या बाहर का ट्रैफिक अंदर आएगा, क्योंकि अगर मैंने इफ आई विल इम्प्लाई अ NAT on my router and simultaneously if I will place a security policy for deny all the traffic, so ultimately because router doesn't follow a approach of a step-by-step process in order to process a packet like firewalls does, so ultimately my traffic will be dropped at the router. बाहर से ट्रैफिक अंदर से ट्रैफिक बाहर तो जाएगा बट उसका रिप्लाई नहीं कभी आ पाएगा। ओके, व्हाट इफ मैंने ये बोला कि सोर्स मेरा 10.1.1.1 है और डेस्टिनेशन 20.1.1.1 है और कनेक्शन शुड बी अलाउड, ठीक है, एंड ये ACL मैंने एक बना दी राउटर पे एंड दूसरी ACL मैंने बनाई 20.1.1.1 से 10.1.1.1 पे ट्रैफिक अलाउ हो एंड उसके बाद डिनाई का ACL बना दिया मैंने, तो इस केस में भी नहीं हुआ क्या? इस केस में हो जाएगा, बट लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहेगी कि डिनाई के केस में क्या होगा, जो बाहर अंदर से ट्रैफिक बाहर तो चला जाएगा। अब बाय फायरवॉल में क्या होता है, इफ अ ट्रैफिक इज अलाउड फ्रॉम वन साइड, जैसे कि TCP और UDP ट्रैफिक जैसे जो इंस्पेक्टेड ट्रैफिक होता है उसका रिप्लाई तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इन दोनों के अलावा जो ट्रैफिक होगा उसका रिप्लाई ही नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी पॉलिसी ही नहीं इसको मिलेगी। हाँ, तो मतलब आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये दोनों कम्युनिकेशन तो अलाउ हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ और अलाउ नहीं होगा, राइट? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि राउटर जो है हमारे दो नेटवर्कों को ऐड करता है, जैसे 10 डॉट और 20 डॉट दोनों को ऐड करने का काम है, ये डेडिकेटेड है राउटिंग के लिए। और अगर इसमें हम ACL लगाते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा राउटिंग जो है वो स्लो हो जाएगा, सो दैट Exactly. That's one difference actually. Yeah. Yes. Very good. So you both guys are correct, but at some extent, जो फर्स्ट डिफरेंस हमारे सामने आया कि राउटर्स का जो मेन पर्पस है वो है राउटिंग। क्या है? राउटिंग। अगर उस पे हम फायरवॉल का भी काम करवाते हैं तो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो इट विल वर्क, बट जहां लार्ज इंटरप्राइज की बात आएगी ये हर तीसरे दिन बस्ट हो जाएगा, हर तीसरे दिन इसका RMA करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड इतनी ज्यादा ऊपर, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा ऊपर चला जाएगा कि इट विल बिकम अ डेफ एंड डम डिवाइस। समझ रहे हो आप? अगर 10, 20, मैक्सिमम 50 ACL हैं तो राउटर पे कर दे कॉन्फ़िगर, बट व्हाट इफ वी हैव 5000 ACL ऑन अ सिंगल फायरवॉल? अब बेचारा ये राउटर जो है वो बेचारा बताओ राउटिंग करे या फिर ACL को वेरीफाई करे? तो जो पहला डिफरेंस है राउटर और फायरवॉल के बीच में वो ये है कि राउटर्स आर मेंट टू डू राउटिंग, whereas firewall is meant to do filtering. So large enterprises में we have to use both at the different level and for the different purpose. And second and the most important difference, that firewall can be a L7 firewall, but router cannot be a L7 router. Application filtering कैसे करोगे आप इस पे राउटर पे? Are you getting my point? Yes sir, major difference. This is major difference. है ना? अगर मैं फायरवॉल की बात करूं उस पे एप्लीकेशन फिल्टर आप आराम से करोगे उसको। आपने बोल दिया भैया फेसबुक मेरा अलाउड है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फेसबुक मैंने अलाउ कर दिया, बट किसी के लिए भी फेसबुक गेम्स अलाउड नहीं है। फेसबुक गेम्स अलाउड नहीं है।
अब ये फायरवॉल को कैसे चल रहा है पता है कि ये ट्रैफिक जो है वो फेसबुक गेम्स का है और ये जो ट्रैफिक है वो फेसबुक का है, नॉर्मल फेसबुक का है, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन। जो वेब का ट्रैफिक होगा वो 443 या 480 इट विल यूज, बट अगर मैं बात करूं फेसबुक गेम्स की तो 443 और 80 के अंदर भी एक किसी ना किसी पोर्ट पे वो गेम्स वर्क कर रही होगी, जिस गेम को वो फायरवॉल पकड़ेगा और उसको ब्लॉक करेगा। तो ये जो पैकेट के अंदर घुस के इंस्पेक्शन हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड L7 एप्लीकेशन, L7 इंस्पेक्शन, लेयर 7 इंस्पेक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके राइट। आई होप कि ये देखो, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, ये कभी कभी जो जैसे इंटरव्यूज होते हैं ना कि भाई इंटरव्यू में 3 राउंड है 4 राउंड है, जो फर्स्ट राउंड होता है ना उसमें बंदा क्या होता है वो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछता है, कुछ मेजर नहीं पूछता वो आपसे। मेजर पूछा जाएगा सेकंड राउंड में या मोस्ट प्रोबेबली थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में ऐसे भी मैनेजरियल राउंड होता है, ठीक है, तो उसमें आपके प्रोसेस से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। बट सेकेंड राउंड जो होता है मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही एक्सटेंसिवली इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि भाई आप बताओ डिफरेंस क्या है इसमें, आप बताओ ये जो ACL आप बना रहे हो इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये दो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, पॉइंट बताए हैं, आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना और हमेशा माइंड में रखना कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और फायरवॉल की एक छोटी मोटी डेफिनेशन माइंड में आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, मान लो आप कल को L3 लेवल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं और L1 का कोई स्टूडेंट आता है या ट्रेनी आता है, तो माइट भी चांसेस कि वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो एटलीस्ट आपको ये चीजें मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर, करेक्ट। चलो, अगर आप लोग एग्री कर रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं माइंड में अभी? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? यार ऐसा मत फील करना कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाना चाहता। कंसीडर मी एज योर फ्रेंड जो कि आप लोगों को गाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हेजिटेट मत होना कि यार नहीं हो सकता ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली यू कैन आस्क, अगर सिली होगा तो मैं उसका उस तरीके से आंसर जरूर करूंगा, ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं, एक जनरल टर्म आती है कि जो ट्रैफिक फ्लो होता है। अभी तक देखो हमने चेक पॉइंट का कोई स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने करीब अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट हो गए हैं और हमने कोई जनरल अगर मैं खाली वो 3 टायर आर्किटेक्चर की बात छोड़ दूं तो हमने चेक पॉइंट कोई स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, हम जनरल टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर से उसको रिलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चेक पॉइंट का जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें हम उस चीज को जनरल पढ़ेंगे फिर उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं जनरल टर्म बात करूं, ट्रैफिक कंट्रोल मेथड क्या क्या होते हैं हमारे पास, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? चलो, साइलेंस है तो मैं नो समझता हूं इसका मतलब। हमारे पास जो जनरली फायरवॉल की बात करूं ना, तो हमारे पास 3 तरीके के ट्रैफिक कंट्रोल मेथड्स होते हैं, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ऐप अवेयरनेस, ठीक है। 3 तरीके के फिल्ट्रेशन मेथड होते हैं। सबसे पहला क्या है, पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग क्या हो रहा है कि भाई पैकेट आपके पास आया फायरवॉल के पास, ये मान लो आपकी फायरवॉल है, एक मिनट मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो एक मिनट, ये मेरा फायरवॉल है, ठीक है, ये मेरा लैन है, ये है वैन, ठीक है। अब पैकेट फिल्टरिंग में हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक हमारे पास आया, हमने ट्रैफिक में सोर्स एंड डेस्टिनेशन देखा और हमने अपना पोर्ट नंबर देखा। भाई सोर्स मेरा 10.1.1.1 है, डेस्टिनेशन है 20.1.1.1 एंड जो पोर्ट है वो है 443,
ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन हमने देखा, हमने कह दिया जी अलाउ, दैट इज कॉल्ड पैकेट फिल्टरिंग। अगर हमने देखा 10.10.10.1 है, ठीक है, या फिर 10.1.1.1 एंड इट्स ट्राइंग टू गो ऑन 30.1.1.1 ऑन पोर्ट नंबर में भी 80, या फिर आप मान लो ये जो 10 सबनेट का सोर्स है और 20 सबनेट का जो डेस्टिनेशन है, इसी के बीच कम्युनिकेशन मान लो, बट अपार्ट फ्रॉम 443 नाउ यू आर ट्राइंग ऑन 139, तो उस केस में ये डिनाई कर देगा। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल सा पैकेट फिल्टरिंग हो गया। जो पोर्ट अलाउड है, जो कम्युनिकेशन अलाउड है वो अलाउ हो गया, जो कम्युनिकेशन डिनाई है वो डिनाई हो गया। तो ये हो गया एक कॉमन टिपिकल फायरवॉल की टर्म, ठीक है। यार ये मिनिमाइज कैसे हुआ, ठीक है। ये हो गई जनरल पैकेट फिल्टरिंग कि भाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन हमारे पास डिफाइंड है हमारे पॉलिसी बेस में, अगर ट्रैफिक उस सोर्स एंड डेस्टिनेशन से मैच करता है तो वो अलाउ है, अदरवाइज वो डिनाई है। क्लियर है पैकेट फिल्टरिंग क्या हुई? ओके सर, लेकिन ये पैकेट में क्या क्या होता है सर, इसको कैसे फिल्टर किया जाता है, कैसे ये करता है वो पूरा? देखो पैकेट में अगर मैं फायरवॉल की फिल्टर की बात करूं ना, पैकेट की, जो फायरवॉल से मतलब है जिस चीज की, जिस इंफॉर्मेशन को, वो 4 ही चीज होती हैं। सोर्स एड्रेस, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये 4 ही इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर फायरवॉल काम करता है, ठीक है, जिसके ऊपर फायरवॉल अलाउ या डिनाई काम करता है पैकेट फिल्टरिंग। उसके बाद एक एप्लीकेशन का भी सेक्शन आ जाता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के थ्रू आप पोर्ट को तो फिल्टर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी फायरवॉल अगर वो पैकेट फिल्टरिंग कर रही है तो ये काम तो कर ही रही है, ठीक है। ये चीज तो जैसे चेक पॉइंट की बात करूं तो ये काम वो कर रही है, एसए की बात करूं वो भी ये काम कर रही है, किसी और भी फायरवॉल की अगर मैं बात करूं, वॉच गार्ड, सोनी वॉल, ये सब ये काम कर, पैकेट फिल्टरिंग हर कोई कर रहा है। बट व्हाट अबाउट स्टेटफुल इंस्पेक्शन? अब आप बोलोगे स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है, बताते हैं आपको। ये मेरी फायरवॉल है, ठीक है, लैन वैन, ये एक पैकेट फॉर्म होता है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। ये पैकेट आया मेरे लैन इंटरफेस पे, यहाँ पे हिट किया, फायरवॉल ने देखा कि हाँ भाई क्या है, सोर्स एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन ये है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, पॉलिसी मैच हुआ, पॉलिसी चेक करी उसने, ये सारी पॉलिसीज बनी हुई हैं उसकी, ठीक है। और हाँ याद रखना, फायरवॉल में क्या होता है, जो पॉलिसी का जो लुकअप होता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। कैसा होता है? टॉप टू बॉटम। अगर मान के चलिए आपने ऊपर एक डिनाई रूल बनाया हुआ है, एनी डिनाई, और नीचे आपने 1000 रूल बनाया हुआ है, तो इन एनी केस वो 1000 रूल आपके वेस्ट हैं, बिकॉज ऊपर आपने सबसे एनी रूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि जब भी आप कोई भी न्यू मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप ऊपर ना करें, आप उसको हमेशा नीचे ऐड करें। अगर इनकेस आपने कुछ गलत भी कर दिया तो उससे ऊपर वाले रूल के ट्रैफिक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको नीचे आपने जो बनाया है, अगर उसके नीचे आपका खाली एक क्लीन अप रूल है, तो आपको खाली वो ही अफेक्ट होगा, अदरवाइज ऊपर कोई भी ट्रैफिक आपका अफेक्ट नहीं होगा।
ठीक है। अब हुआ क्या कि जो ये सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट आया आपके पास, आपने फायरवॉल पे गए, आपने फायरवॉल पे चेक किया कि हाँ भाई इसका एक्शन क्या है, फायरवॉल ने चेक किया तो बोला जी अलाउ है, तो उसने पैकेट तो अलाउ कर दिया, बट साथ के साथ एक सेशन टेबल भी मेंटेन कर ली। क्या कर लिया? सेशन टेबल भी मेंटेन कर ली, जिसमें हूबहू ये इंफॉर्मेशन अलाउ रहेगी, सॉरी मेंशन रहेगी कि व्हाट वाज द सोर्स एड्रेस, व्हाट वाज द डेस्टिनेशन एड्रेस, व्हाट वाज द सोर्स पोर्ट, व्हाट वाज द डेस्टिनेशन पोर्ट, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड स्टेट टेबल या फिर सेशन टेबल। क्या कहते हैं इसे? रिपीट करते हो मेरे साथ साथ। सेशन टेबल या स्टेट टेबल। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि स्टेट टेबल क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कि उसमें ये इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। एक जॉब आईडी भी होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके जो कंप्यूटर है, जो सोर्स, जो इनिशिएटर है वो प्रोवाइड करेगा, बट जॉब आईडी जो होगी वो फायरवॉल प्रोवाइड करेगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि जब ट्रैफिक वापस आता है वैन इंटरफेस पे, तो सबसे पहले आपका ये जो सेशन टेबल बनाई गई है, इस सेशन टेबल को चेक किया जाता है कि क्या भाई इस सोर्स एंड डेस्टिनेशन की कोई भी एंट्री है हमारे पास जो रिसेंटली अलाउ की गई हो, और अगर एंट्री मिलती है तो उस ट्रैफिक को अगेन रूल बेस में नहीं चेक किया जाएगा, सेशन के बेसिस पे वो अलाउ हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि सेशन टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? यस प्रैक्टिकल होगा तो और ज्यादा थोड़ा क्लियर होगा। हाँ प्रैक्टिकल होगा, बट आप ये चीज ना देख नहीं पाओगे कि मतलब वो मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है, ये मैकेनिज्म आप देख नहीं पाओगे। बट हाँ मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से कम्युनिकेशन अलाउ हो रहा है। अब हुआ क्या, सेशन टेबल से फायदा क्या मिला हमें? ठीक है, फायदा देख लेते हैं हम। ये मेरा एक पीसी है, ठीक है, बीच में जी एक फायरवॉल रखा हुआ है, ये मेरा एक सर्वर है। ठीक है। अब जो ये पीसी है ये एप्लीकेशन ऑनर की मान लो आप। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑनर ने बोला कि विकास, जो आपका ये जो सर्वर है ना, ये मेरा जो सर्वर है, इस पे कनेक्शन हमेशा मैं ही इनिशिएट करूंगा, हमेशा मैं ही ट्रैफिक भेजूंगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि कनेक्शन सर्वर से इनिशिएट हो रहा हो हमारे पास, कभी ऐसा नहीं होगा। तो अगर ये सिनेरियो है, तो अगर टिपिकल फायरवॉल है मेरे पास, तो टिपिकल फायरवॉल में क्या करना पड़ेगा? सोर्स से डेस्टिनेशन एक रूल खोलना पड़ेगा मुझे। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग जवाब नहीं नहीं नहीं, इट्स क्लियर। है ना, आप लोग अनम्यूट रहो और बात करते रहो मेरे से। तो एक तो आपने रूल बना दिया सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में अलाउ, और अगर नॉर्मल फायरवॉल है तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक डेस्टिनेशन से सोर्स का भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रिक्वेस्ट यहां से इनिशिएट हुई है, सर्वर के पास गई है, उसके रिस्पॉन्स भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए। समझे मेरी बात? अब अगर आपने ये रूल बना दिया कि जो इनिशिएट ट्रैफिक हुआ वो तो अलाउ हो गया, बट रिस्पॉन्स के लिए कोई रूल नहीं बना तो डिनाई हो जाएगा वो तो, है ना। लेकिन अगर आपकी जो फायरवॉल है वो स्टेटफुल इंस्पेक्शन कर रही है, तो आपने एक ही रूल बनाया है, डेस्टिनेशन से सोर्स कोई रूल नहीं बनाया, आपने एक रूल बनाया है, सोर्स से डेस्टिनेशन इट विल बी अलाउड। ट्रैफिक इनिशिएट हुआ यहां से, वो पहुंचा आपके सर्वर के पास, और सर्वर जब रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट को, उस टाइम पे ये स्टेट टेबल या फिर सेशन टेबल के बेसिस पे वो कम्युनिकेशन अलाउ हो जाएगा। तो जहां पे आपको दो पॉलिसी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे सिर्फ एक पॉलिसी के थ्रू आपने कम्युनिकेशन को अलाउ कर दिया। क्लियर? अब होता क्या है कि सेशन टेबल की भी ना एक टाइमर होता है।
बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड और 60 सेकेंड मान लो आप। अगर 60 सेकेंड में ये जो सेशन आपने मेंटेन किया है इसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये जो एंट्री है ये फ्लश कर दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा? इसको फ्लश कर दिया जाएगा। एंड खुशी की बात ये है कि इस टाइमर को आप खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कई बार आपको सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि भाई मैंने ट्रैफिक भेजा, मेरे फायरवॉल से अलाउ हो गया, डेस्टिनेशन में पहुंचा या नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, बट मेरे को ट्रैफिक वापस नहीं आ रहा मेरे फायर उस पे क्लाइंट के पास। अब क्लाइंट आ गया जी आपके पास कि विकास चेक करो फायरवॉल पे कुछ इशू है क्या। आपने चेक किया कि जी सोर्स से डेस्टिनेशन तो अलाउ है, डेस्टिनेशन से सोर्स जब चेक कर रहे हो तो ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। यू गॉट इट। अब ट्रैफिक नहीं आ रहा तो उससे क्या कम्युनिकेशन तो वैसे ही ब्रेक डाउन हो गया। अब इसका रीजन क्या होता है? जो ये फायरवॉल से लेके सर्वर के बीच का जो मीडिया है ना, ये जो मीडिया है मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस में ये मीडिया विल बी द कल्प्रिट। कि मीडिया में कोई स्लोनेस है, हाई यूटिलाइजेशन है, बैंडविड्थ चोक्ड है या फिर डिस्ट्रप्शन है, जिसकी वजह से या तो पैकेट यहाँ डिलीवर ही नहीं हो रहा या फिर अगर यहाँ डिलीवर हो रहा है यहाँ से वापस जो ट्रैफिक आ रहा है वो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा मेरे पास। उस केसेस में आपको यहाँ पे पैकेट कैप्चर करना पड़ेगा और यू हैव टू चेक कि ये जो आपका इंटरफेस है आउटसाइड वाला इंटरफेस इस पे कोई ड्रॉप आ रहा है या नहीं आ रहा। और आपको ये भी मैच करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे आपका पैकेट इस फायरवॉल से अलाउ हुआ था उसके कितनी देर बाद वो ट्रैफिक वापस आ रहा है। अगर वो स्पेसिफिक टाइमर से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो पैकेट ड्रॉप होगा। या तो आप उसके लिए एक नया रूल बनाएं कि डेस्टिनेशन से सोर्स कनेक्शन कम्युनिकेशन अलाउ होगा। तो ये जो एक छोटी सी कहानी थी स्टेटफुल की, ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? और इसमें फटाफट मुझे बता दो क्या क्या डाउट्स हैं, मैं अभी क्लियर कर दूं। बिकॉज अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहा ना तो फिर आपको मतलब फिर प्रॉब्लम आएगी आगे। मैं बता रहा हूं आपको पहले। Because it's clear. किसी और को? चलिए, तो मैं होप करता हूं कि ये जो सेशन टेबल या फिर स्टेट टेबल की जो बात थी वो आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। अब जी जो थर्ड पॉइंट होता है, जो थर्ड कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल मेथड है, दैट इज कॉल्ड ऐप अवेयरनेस। क्या है वो? ऐप अवेयरनेस। अब ये ऐप अवेयरनेस कैसे काम करता है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फेसबुक एंड फेसबुक गेम्स का, ये जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉल्ड ऐप अवेयरनेस। अब मान लीजिए एक ना यूआरएल है। यूआरएल क्या है? नॉर्मल सा यूआरएल है, मान लो एनटीपी का यूआरएल है। ठीक है, अब आपके जो एप्लीकेशन मैनेजर है उनको कोई नॉलेज नहीं थी इतना, वो आए अपने इस पे क्या बोलते हैं इंटरनेट पे, उन्होंने एनटीपी सर्च किया, उन्हें एक यूआरएल मिल गया। ठीक है, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट जनरेट कर दी कि विकास आपको इस यूआरएल को मेरे एप्लीकेशन के थ्रू या मेरे यूजर्स के लिए आप अलाउ कर दो। आपने क्या किया? फायरवॉल पे एक रूल खोल दिया 443 अलाउ है। अब हुआ क्या कि 443 जो अलाउ था आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये एनटीपी जो एप्लीकेशन होस्टेड थी उस यूआरएल पे वो कोई गैम्बलिंग साइट बन गई अब। ठीक है, अब हुआ क्या कि अननोइंगली आपके यूजर्स के लिए ये गैम्बलिंग साइट एक्सेसिबल है या फिर अडल्ट्री साइट एक्सेसिबल है, या फिर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूट्यूब अलाउड नहीं है। ठीक है, बट एनी हाउ द यूट्यूब इज अलाउड। तो ये कैसे हो रहा है? Because those firewalls are not doing application awareness
मैकेनिज्म, ठीक है, जो एप्लीकेशन को नहीं पकड़ पा रही वो लोग। एक मैं रियल सिनेरियो देता हूं। एफटीपी होता है, कोई मुझे बताएगा एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? FTP has two port numbers, 20 and 21. One is for control plane and another is for data plane. Okay. I guess it is 20 and 21. 22 Okay. is for SSH. 21, okay. Sorry, my bad. Okay, so port 21, 20 and 21. Perfect. Yeah. And 21 what if... is for control plane and 20 is for data plane. Okay, what if I want to use SSL over FTP? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं। ये जो 20 और 21 के थ्रू जो मेरा डेटा ट्रांसफर होगा, वो किस फॉर्म में होगा, इनक्रिप्टेड में या प्लेन में? ओके, तो आपने बोला कि जो ये डेटा है आपका, अगर वो 20 और 21 में होता, प्लेन में होगा। अगर मुझे इनक्रिप्शन में करना हो तो, बट प्लेन में अगर हो रहा तो ये रिस्क है ना? नहीं है? बिल्कुल। तो इसको करने के लिए we will use SSL over FTP or we will use any other mechanism. SSL over FTP। अब ये अगर आपने यूज किया SSL over FTP, तो आप डेफिनेटली 20 and 21 तो यूज नहीं कर सकते। No. Then what port you will use? Port 22. Okay. It will support this. अब देखो मजे की बात क्या है, अगर आपने रूल बनाया और इंस्टेड ऑफ अलाउिंग पोर्ट 20, 21, 22 इन द सर्विस सेक्शन, अगर जो आपने डाल दिया FTP, तो ये जो इनक्रिप्शन वाला कहानी है ना FTP का, कि भैया मुझे जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में फॉरवर्ड करना है, ये कभी कंप्लीट होने ही नहीं वाली, ये हमेशा ड्रॉप हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर रखा है, FTP अलाउ किया है, और FTP का डिफॉल्ट पोर्ट, हाँ, डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, 20 and 21। अब आपने एप्लीकेशन अवेयरनेस यूज कर ली, आपका 22 कभी अलाउ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फायरवॉल ये कह रहा है कि भाई आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है मुझे, उसके हिसाब से FTP अलाउड है, और मेरा डेटाबेस कहता है कि FTP का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो 20 and 21 है। तो इसके अलावा तो मैं कुछ और अलाउ करने वाला नहीं हूँ, बट जो ट्रैफिक आ रहा है आपके सोर्स से वो 22 का आ रहा है। उस केस में आपको सर्विस सेक्शन में बाय डिफॉल्ट की जगह एनी अलाउ करना पड़ेगा, कि एप्लीकेशन तो आपका FTP हो, बट सर्विस सेक्शन में पोर्ट कोई भी आ सकता है FTP के लिए, या फिर आप पर्टिकुलर डिफाइन भी कर सकते हो कि पोर्ट 22 आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो होता क्या है, ये फीचर सबके पास है, ये फीचर किसी किसी के पास है, और ये फीचर भी किसी किसी के पास है। बट मैं अगर बात करूं मेजर फायरवॉल की, पालो, ये रिगरसली फॉलो करता है इस तीनों अप्रोच को, रिगरसली। चेक पॉइंट, FortiGate, ये तीनों ही फायरवॉल, ये मेजर फायरवॉल की मैंने बात बताई आपको, ये तीनों ही इस अप्रोच को फॉलो करता है, ये तीनों ही फीचर को सपोर्ट। विकास, ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया ये जरा दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरा असल में राउटिंग से बैकग्राउंड है, तो ये मतलब ठीक है, वो FTP के लिए पोर्ट तो 2021 होगा, अदर देन FTP, सो 22 हम मतलब किस जगह हमने अलाउ करवाना है, मतलब टू पास थ्रू द ट्रैफिक ना? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, FTP पता है आपको, FTP किस लिए यूज करते हैं हम जी लोग? बिल्कुल, हाँ जी, फाइल और उसका ट्रांसफर। पोर्ट नंबर ही पता है, ठीक हाँ है, पोर्ट नंबर 21, 22, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो बना लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम लोग, अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो गाइस मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा, है ना? वैसे मुझे लग नहीं रहा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल। No, because it's absolutely fine.
ये मेरा क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये मेरा सर्वर हो गया। अब होता क्या है, एप्लीकेशन एफटीपी जब हम होस्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, जो जो कई बार होता है ना, इन हाउस डेवलप्ड एफटीपी एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें हमें ऑप्शन होता है कि हम जो हमारा प्लेन एफटीपी अगर आप यूज करते हो ना पोर्ट 20 और 21 पे, तो जो भी डाटा आपने यहाँ से यहाँ भेजा ना, वो आपका जाएगा प्लेन टेक्स्ट में। तो अगर मैन इन द मिडिल अटैक है, अगर यहाँ पे कोई स्निफर बैठा हुआ है या यहाँ पे कोई स्निफर बैठा हुआ है, तो इट कैन इजिली कैप्चर एंड इट कैन इजिली सी व्हाट डेटा यू आर ट्रांसफरिंग। तो इट्स अ वल्नरेबिलिटी, राइट? तो होता क्या है, जब तक ये सर्वर यहाँ लैन में ना होना, तब तक हम क्या रेकमेंड करते हैं कि आप पोर्ट 20 या 21 यूज कर लो। जैसे ये लैन से बाहर गया ना, फायरवॉल से बाहर गया, हम रेकमेंड कर देते हैं, हाँ, हम क्या करते हैं कि भैया तुम एक काम करो, तुम पोर्ट 20 या 21 यूज नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, तुम पोर्ट 22 यूज कर लो, या फिर एनी अदर पोर्ट यू वांट टू यूज फॉर द एन्क्रिप्शन। अब 22 किसके लिए होता है? एसएसएल के लिए। एसएसएल क्या प्रोवाइड करता है? एन्क्रिप्शन। तो जैसे ही आपने अपने एफटीपी एप्लीकेशन, एसएसएल और एफटीपी कंबाइंडली हम इसको एसएफटीपी इसी को बोलते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे ही आपने एसएसएल इनेबल किया आपने अपने एप्लीकेशन पे, वो बाय डिफॉल्ट जो ट्रैफिक भेजेगा वो भेजेगा आपका पोर्ट नंबर 22 पे, ठीक है। लेकिन जो आपने फायरवॉल में रूल बनाया हुआ है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, एप्लीकेशन, एफटीपी, सर्विस, डिफॉल्ट, एक्शन, अलाउ। सोर्स से डेस्टिनेशन का ट्रैफिक आया एफटीपी के लिए, एप्लीकेशन एफटीपी अलाउड है, पैकेट ओपन किया गया, चेक किया गया कि पोर्ट 22 यूज हो रहा है, बट सर्विस तो डिफॉल्ट है, और एफटीपी का डिफॉल्ट सर्विस क्या है? 20 और 21, बट जो ट्रैफिक आ रहा है वो 22 पे आ रहा है। तो हुआ क्या? ब्लॉक, डिनाई। क्यों हुआ? क्योंकि यही तो एप्लीकेशन अवेयरनेस फीचर है। सर क्या मैं 22 की जगह 23 यूज कर सकते हैं, या फिर ये वो विल टेलनेट का डिफाइन हो गया, पहले से डिफाइंड है? वो पहले से टेलनेट हो गया। डिफाइंड है। नहीं, वो ओ, राइट 23 राइट। टेलनेट हो गया। वो टेलनेट तो खुद प्लेन टेक्स्ट में काम करता है, हाँ हाँ हाँ, है राइट ना? राइट। हाँ, या तो आप जो वेल, जैसे एसएसएल है, एसएसएल इंक्रिप्शन दे रहा है आपको, तो आप उसे यूज कर लो, या फिर आपको अपना खुद का पोर्ट बनाओ। कई बार होता है ना कि जब मैं 5900 मैंने पोर्ट पे एफटीपी बना दिया मैंने, अब करना क्या है आपको कि वो इंक्रिप्शन वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने एक की जनरेट कर दी, पब्लिक एंड प्राइवेट की का मैकेनिज्म डाल दिया वहां पे कोडिंग में, और हम उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, और डिक्रिप्शन वहां पे सर्वर पे हो रही है। राइट सर, है ना? तो क्योंकि यही तो फीचर है फायरवॉल का, कि एप्लीकेशन अवेयरनेस यही तो है फायरवॉल की एप्लीकेशन। अब होता क्या है, मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, रूल में 443 अलाउड है और 443 पे अटैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि 443 के अंदर किसी अदर ही एप्लीकेशन का ट्रैफिक आ रहा है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए क्या कहते हैं कि आप ना 443 मत अलाउ करो, आप ना HTTPS अलाउ करो। HTTPS आपने अलाउ किया हुआ है, तो फायरवॉल क्या कर रही है, वो चेक करे एप्लीकेशन क्या है, HTTPS, उसके बाद वो पैकेट चेक नहीं करेगी कि भाई अंदर पोर्ट क्या है। उसे पता है HTTPS के लिए 443, तो वो 443 चेक करेगा। अगर 443 के अलावा कोई भी अदर पोर्ट है, डिनाई, इमीडिएटली डिनाई। आपने 443 के ट्रैफिक को मान लो किसी और पोर्ट से एनक्रिप्ट कर दिया, वो डिनाई हो जाएगा इमीडिएटली। ये अगर हमने पोर्ट भी अलाउ किया, मतलब either ways from my perspective is fine, क्योंकि 443 आपने मेंशन कर दिया या HTTPS, तो 443 के केस में किस तरह से अटैक मतलब आता होगा? होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। मतलब राउटर पे भी नॉर्मली हम सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है ना, वो आप पोर्ट वगैरह दे देते हैं या एप्लीकेशन मेंशन कर देते हैं। ये हो गया जी आपका एप्लीकेशन हेडर।
यहाँ पे मेंशन आपका 443, बट डेटा अंदर अंदर डेटा क्या वो 443 का डेटा है या फिर exe फाइल है जो आपके कंप्यूटर पे पहुंचते ही इंस्टॉल हो जाएगी? वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? भाई आपने सर्विस डाल दी 443, है ना, एप्लीकेशन हेडर पे देख लिया 443, अलाउ भी कर दिया, बट ये जो एप्लीकेशन है exe फाइल है, क्या HTTP के ऊपर कभी भी exe फाइल अटैच कर सकते हो तुम? इट्स नॉट फिजिबल। यस तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? होता है ना कई बार हमने लिंक पे क्लिक किया, लिंक क्या है जी, HTTP का, और जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया एक फटाफट वो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, इंस्टॉल भी हो गई और वो चली भी गई, और कहाँ गई पता नहीं जी हमें। लो, हो गया फिशिंग अटैक। अब वो आपके नेटवर्क में कहाँ घूम रही है किसी को नहीं पता। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, एंटीवायरस को मैनुअल कॉल देते हैं कि आप पूरा नेटवर्क स्कैन करो बैठ के। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि यूजर को ट्रेन करो। आप कितनी भी फायरवॉलें लगा लो, आप कितनी भी सिम लगा लो, सिम टूल लगा लो, आप कितनी बड़ी भी साइबर सिक्योरिटी की टीम बिठा लो, until or unless आपका यूजर अवेयर नहीं है ना, you cannot stop any phishing, any DOS or any DDoS. No, you cannot do that. तो एक क्वेश्चन ना कभी कभी, मतलब वैसे तो नेटवर्क सिक्योरिटी में तो नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी एक सिनेरियो आता है जहां डिस्कशन हो जाता है या कहीं हो जाता है कि भाई सबसे अच्छी जो प्रोटेक्शन मानी जाती है वो किस चीज की मानी जाती है नेटवर्क सिक्योरिटी में, और ऑप्शन में एक होता है ट्रेन योर यूजर्स। अगर आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर बट आपका यूजर जो है वो अवेयर नहीं है, बिलीव मी इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि लिंक तो आने हैं और लिंक पे आपके यूजर ने अगर क्लिक करना है तो फिर तो हो लिया ना चीजें। बट हाँ ये चीज है कि आपने अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पॉलिसीज अच्छे से बनाई हुई हैं, आपने चेंज मैनेजमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम में कोई भी L1 या कोई भी बंदा आ रहा है वो कोई भी रूल खोल के जा रहा है, अगर ये आपने इस चीज को कंट्रोल किया हुआ है ना, तो बिलीव मी 99% सक्सेस रेट है कि आप इन सारे वनरेबिलिटीज को आप अपने फायरवॉल लेवल पर रोक सकते हो या फिर सिम से पकड़ सकते हो या फिर वाइस वर्सा। क्लियर है? जी जनाब, ठीक, थैंक यू। एनी अदर डाउट? नहीं, आगे जिस तरह द वे वी विल गो देन लर्न मोर थिंग्स। चलिए, होप आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना रहे होंगे, है ना? राइट। मोस्ट इन सारे मोस्ट का 1000 स्क्वायर कर दो, जितने मोस्ट बनेंगे ना उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ रहे हो? अगर ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो 5 मिनट का, बट इस टॉपिक को बिल्कुल लाइटली मत लेना, चेक पॉइंट पैकेट फ्लो, क्योंकि ये एक बार पढ़ने वाला टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो ये सिर के ऊपर से जाएगा। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 117 हो रहे हैं, 119 पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है? फायरवॉल ना एक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है? उस टेबल में फायरवॉल क्या करता है, सोर्स, डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड द जॉब आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन वो मेंटेन करता है। किसके लिए मेंटेन करता है? जो भी ट्रैफिक फायरवॉल से निकलता है इनिशियली। वो क्यों करता है? ताकि जब डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक पहुंचे, ये सर्वर है आपका, डेस्टिनेशन पे पहुंचा और जब ये वापस आएगा तो उसके लिए इस अगर जब ये वापस आएगा तो अंडर अ स्पेसिफिक टाइम it will not check a policy for the return traffic, it will check the session table
or maybe state table, and the traffic will be allowed on the basis of that table. अगर एंट्री उस सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए स्टेट टेबल में है तो वो बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी डिनाइड। ओके, मतलब सर आप बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो मतलब वो रिटर्न होना चाहिए, राइट? हाँ, अगर हम टाइमिंग मेंटेन नहीं करते हैं तो ये तो फायरवॉल का ये जो स्टेट टेबल इसका बफर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ओके ओके, हमें फ्लश तो करना पड़ेगा ना, कितनी ट्रैफिक ओके हमारे यहाँ से जाते हैं जो वापस नहीं आ पाते, बट अगर हम सभी का हम अगर बना के रखें तो फिर तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमारे लिए। ओके ओके सर, गॉट इट। बाय डिफॉल्ट टाइमिंग सर 36 सेकंड की होती है। 30 से 60 के बीच का होता है, ठीक है। और ये टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। टीसीपी की अलग टाइमिंग होती है, यूडीपी की अलग टाइमिंग होती है, नेट के लिए अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा, ये अच्छे से मैं आपको कवर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, ट्रबल शूटिंग में ये चीजें बहुत काम आती हैं, तो मैं उसको ऐसे डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाना चाहता। I'll tell you guys, don't worry। आप मतलब बस ये बताओ कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसमें कोई डाउट अगर आपको आता है तो इमीडिएटली आप मुझे पूछ लें। सर ये पूछना था, सेशन टेबल क्लियर कर सकते हैं मैनुअली क्या? मैनुअली देखो रेकमेंडेड नहीं होता है, बट कर तो आप रेकमेंडेड नहीं होता, अगर गलती से वही बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन के अंदर किसी ने कर दिया तो वो सब कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगा। ऐसे होता भी नहीं। मैनुअली का इसमें ऑप्शन होता है कि नहीं, ये पूछना था। मैनुअली ऐसा कोई ऑप्शन जीयूआई पे तो नहीं होता, जीयूआई पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता, सीएलआई के थ्रू आप कर सकते हो। इसको चेक कर सकते हैं हम सेशन में, ये सेशन बना हुआ है कि नहीं? हाँ, जॉब आईडी आप चेक कर सकते हो ना। ओके, तो सेशन बना है वो तो आपको लॉग में ही दिख जाएगा ना, समझ रहे हो? वो क्लियर हो गया ज्यादा टाइम लगने के बाद, ऐसे होता है ना ऑटोमेटिकली। लॉग तो क्लियर नहीं होगा ना, सेशन टेबल क्लियर हो गया, लॉग टेबल तो क्लियर नहीं हुई ना। ओके, समझ रहे हो? तो लॉग में तो आप वैसे भी देख सकते हो उसको। मान लो सेशन टेबल आपके उड़ा दी किसी ने, हालांकि देखो सेशन टेबल अगर उड़ गई है ना, तो जो वापस ट्रैफिक आ रहा होगा उसी को वो डिनाई कर देगा, और टीसीपी जिस हिसाब से काम करता है वो इमीडिएटली रीट्रांसमिट की रिक्वेस्ट भेज देगा, और जैसे ही रीट्रांसमिट की रिक्वेस्ट भेजा वो सेशन टेबल फिर मेंटेन हो गई। और सेशन टेबल सर उसमें रिबूट वगैरह होता है डिवाइस, उस कंडीशन में तो पूरा क्लियर हो जाता है ना सर, फिर से न्यू सेशन बनेगा ऐसा रहता? एक मिनट, हाँ दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हैं? अगर डिवाइस रिबूट होता है उस केस में पूरा क्लियर हो जाता है ना सर ये सेशन टेबल? हाँ, उसमें तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने डिवाइस रिबूट कर दी। सैम ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हम इसमें फर्स्ट क्लास में ज्यादा हमने कुछ डिस्कशन किया नहीं था, हमने बेसिक ही डिस्कस किए थे, और वो बेसिक मैंने इस क्लास में भी कवर किए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने जो आपका जो फायरवॉल, अगर आपने तो फायरवॉल रिबूट होते ही, अगर आप ये देखो, ये क्लस्टर में फायरवॉल है आपकी, सेशन आपके यहाँ जा रहे हैं, वो सेशन यहाँ पे रेप्लिकेट भी तो हो रहे हैं, समझ रहे बात? अगर ये फायरवॉल रिबूट हो गई, कनेक्शन Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share and subscribe for more future updates. यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए तो हम एचए कॉन्फ़िगर करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है सर, है ना? मेक सेंस और नॉट? गॉट इट, थैंक यू। तो स्टार्ट करें गाइस, एक बार कंफर्मेशन दे दो यार, और सारे रेडी होने चाहिए, ये थोड़ा सा क्रूशियल टॉपिक है अपने लिए। यस सर, यस सर। सर एक चीज और मुझे बता दीजिए कि इसका जो है पैकेट का हम कैप्चर लगा सकते हैं क्या, मतलब हाँ, वायर शार्प पे हाँ, कैप्चर लगा सकते हैं, हाँ, देख सकते हाँ, हैं? बिल्कुल। ओके, आप कैप्चर लगा सकते हैं, उसको वायरशार्क पे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं यार, अगर आप ये चीज नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब फायदा क्या हुआ फिर, है ना, डीबगिंग का। चलिए, चेक पॉइंट पैकेट फ्लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत मतलब आसान लैंग्वेज भाषा में बताऊंगा आप लोगों को, सुनते जाना है और एक्टिवली सुनना है ना, एक्टिव लिसनर बनना है आपने। ये फायरवॉल है, ये लैन है, ये वैन है, ठीक है। ट्रैफिक आया इधर से, लैन की साइड से यूजर ने इनिशिएट किया, या फिर ट्रैफिक आया इधर से बाहर से कहीं से और आउटसाइड इंटरफेस पे हिट किया।
तो सबसे पहले क्या चेक होता है, दैट इज कॉल्ड सैम डेटाबेस। अब सेम डेटाबेस क्या होता है, फायरवॉल के इंटरफेस लेवल पे, ठीक है, इस इंटरफेस लेवल पे एक डेटाबेस क्रिएटेड होता है जिसमें अगर तो आपने कोई अलाउ या फिर डिनाई का रूल बना दिया, तो वो जो पैकेट होगा वो यहीं से आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगर अलाउ है, अदरवाइज यहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। गॉट इट? यस सर। रिपीट करता हूं, सैम डेटाबेस एक डेटाबेस है जहां पे अगर तो आपने किसी सोर्स एंड डेस्टिनेशन का ट्रैफिक अलाउ कर दिया या डिनाई कर दिया, वो ट्रैफिक फायरवॉल प्रोसेस ही नहीं करेगी, वो जो डेटाबेस आपने बनाया है वो इंटरफेस लेवल पे है। अगर तो वो अलाउ है तो वो फॉरवर्ड किया जाएगा इमीडिएटली टू द लैन, या फिर लैन पे हिट हुआ है तो वैन, या अगर डिनाई है तो इमीडिएटली ड्रॉप। 99% केसेस में हम डिनाई बनाते हैं सैम डेटाबेस। 1% होता है, हालांकि मेरे करियर में मैंने कभी नहीं देखा किसी ने अलाउ बनाया हो सैम डेटाबेस में, बट फिर भी 1% लोग होते हैं जो कभी कभी जैसे टेस्टिंग के लिए हम बना देते हैं कि भाई फायरवॉल को बाईपास कर देते हैं, तो वहां पे हम बना देते हैं उसको। बट इट्स वेरी रिस्की, वेरी वेरी वेरी, इफ यू आर अलाउइंग एनी कम्युनिकेशन थ्रू सैम डेटाबेस, इट्स वेरी रिस्की, बिलीव मी। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार हम क्यों करेंगे, हमारा फायरवॉल भी तो डिनाई कर रहा है, हम सैम डेटाबेस पे क्यों कर रहे हैं, राइट? किसी ने पूछा नहीं मुझसे, अगर मैं होता आपकी जगह पे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता कि विकास फायरवॉल में अगर ट्रैफिक जाता भी है तब भी तो यार हम उसको डिनाई ही कर रहे हैं, अलाउ या डिनाई कर रहे हैं, फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर डेटाबेस बनाया जिसमें हम ये चीज कर रहे हैं। क्योंकि अगर फायरवॉल में चला गया तो दो चीजें होंगी, एक तो ही एंटर्ड our network, and second thing is if he is into the firewall he will utilize the resources of firewall. So rather than saving our utilization, we are gonna deny him then and there itself. यस, फर्स्ट पॉइंट आपने बोला नेटवर्क में एंटर हो गया, सेकेंड थिंग है firewall यूटिलाइजेशन, करेक्ट? yes, नेटवर्क एंट्रेंस वाली जो चीज है गलत है। जब तक कि वो इंटरफेस से बाहर नहीं निकलता, देयर इज नो नेटवर्क। और अगर मैं बात करूं, मतलब यू मीन टू से कि अगर मेरा जो लैंड ट्रैफिक अगर फायरवॉल में एंटर कर गया तो वो इंटरनेट पर चला गया? नहीं, नो, इट्स रॉन्ग। जब तक कि वो इस इंटरफेस से बाहर नहीं जाता तब तक वो इंटरनेट पर नहीं कहलाएगा। ऐसे जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर जब तक वो लैन इंटरफेस को नहीं क्रॉस करता, इट्स नॉट इन द नेटवर्क, करेक्ट? और वो पास तब तक नहीं करेगा जब तक फायरवॉल अलाउ नहीं करेगी। बट फायरवॉल यूटिलाइजेशन, दिस पॉइंट is 100% correct, and that is the reason we have created SAM database. And what is the logic? अगर आप लॉजिक की बात है रियल सिनेरियो में, मतलब चलो ठीक है, मैं एक बंदा हूं, मैंने जी एक सर्वर को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट डाली फायरवॉल पे, वो इंटरफेस पे ब्लॉक नहीं, वो ब्लॉक होनी चाहिए थी बट इंटरफेस पे ब्लॉक नहीं हुई, वो अंदर चली गई फायरवॉल के अंदर, और फायरवॉल ने उसको ड्रॉप कर दिया, तो क्या उससे यूसीपी यूटिलाइजेशन बढ़ गया? नहीं बढ़ा, एक पैकेट से कभी कुछ नहीं होता। What if there are 1000 packets, 1000 and 1000 packets? उस केस में फायरवॉल डेफ एंड डम हो जाती है, फायरवॉल काम करना बंद कर देती है। इतने पैकेट प्रोसेस कैसे करें? और जब भी चलो ठीक है, फायरवॉल छोड़ो, मान लो एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर पे ये आपको ना रियल टाइम में ये इश्यूज मिलेंगे। आप नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करेंगे, आपके पास सर्वर का बंदा आएगा, बोलेगा यार मेरे सर्वर पे ना पता नहीं कोई अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, इमीडिएटली तो बहुत सारे हिट आ रहे हैं। हिट कहाँ से आ रहे हैं जी? इस आईपी से आ रहे हैं। अच्छा, कितने हिट आ रहे हैं? like a DOS.
हाँ, कितने हिट आ रहे हैं पर सेकेंड? 1000 आ रहे हैं। सर्वर की यूटिलाइजेशन 99% हो रखी है। रैम तो पूछो ही मत, लॉगिन नहीं कर पा रहा मैं रैम पे, रैम के थ्रू तो रैम चाहिए ही नहीं है सर्वर पे, वो बैठ जाएगा सर्वर थोड़ी देर में। तो आप क्या करोगे, एक तो ऑप्शन ये है आप चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के पास जाओ, उनके बोलो जी चेंज ओपन कर रहे हैं, चेंज में क्या करेंगे आप, सोर्स ये डेस्टिनेशन ये हम पॉलिसी बनाएंगे। अब पॉलिसी क्या बनाएंगे, 1000 पॉलिसी तो पहले ही है, सबसे नीचे 1001वीं पॉलिसी बनाएंगे हम। अब जब फायरवॉल पर ट्रैफिक आएगा तो पहले तो 1000 ट्रैफिक चेक करेगा, 1000 रूल चेक करेगा, 1000 रूल के बाद 1001 पे ड्रॉप होगा। तो आपने इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, अपनी बढ़ा ली कि हर सेकंड जो 1000 हिट आ रहे थे आपके सर्वर पे वो फायरवॉल पे आने लग गए। एंड अलाउ करने में ना थोड़ा सा सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वो कम यूटिलाइज होता है इन कंपैरिजन टू डिनाई और ड्रॉप। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। तो इस सिचुएशन में बेस्ट वे क्या है, गो टू द सैम डेटाबेस, सोर्स इज दिस, destination is your 168.1.1.1.1 and action anyone allow, oh sorry deny होगा क्या? जैसे ही ट्रैफिक आया तुम्हारा यहाँ पे, सोर्स क्या है ये डेस्टिनेशन, यहाँ डिनाई इमीडिएटली वैन पे डिनाई। वैन मतलब वो आगे फायरवॉल के पास आगे पहुंचे ना, फायरवॉल की मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ी ना, कुछ बढ़ा और ना ही आपका सर्वर ही बच गया। तो ये इमीडिएट रेमेडिएशन जब भी आपको करना होता है, पैनिक सिचुएशन जब आपकी होती है उस केस में आप ये चीजें करते हैं। एंड लेटर ये होता है इमीडिएट सॉल्यूशन, ठीक है, जो आप इमरजेंसी चेंज के थ्रू कर सकते हैं कि भैया आपने इमरजेंसी चेंज रेज किया, आपने सैम डेटाबेस में ये चीज अलाउ कर दी। उसके बाद आपको एक चेंज नॉर्मल और परफॉर्म करना पड़ेगा, उस सैम डेटाबेस से हटा के आपके पॉलिसी सेक्शन में लेके आने के लिए। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट? हेलो, यस प्लीज। सर आपने बोला कि अगर हम डिनाई करेंगे तो फायरवॉल पे उसका सीपीयू मेमोरी मतलब आपने बोला कि यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, राइट? मतलब सर वो नहीं समझा, मतलब अगर डिनाई करेंगे तो फिर ज्यादा मतलब कैसे हो सकता है फिर? अगर मतलब वो थोड़ा मतलब लॉजिकली मतलब फिट नहीं बैठ रहा, इसके लिए मैंने पूछा। ये देखो, एक सेकेंड में कितने हिट आ रहे हैं? 1000। फायरवॉल पे रूल कितने हैं? 1000। ओके। आपने रूल बनाया डिनाई का 1001। ओके। अब एक सेकेंड में 1000 पैकेट ये सारे रूल्स को चेक कर रहे हैं और 1001 पे जाके ड्रॉप हो रहे हैं। एक तो ये सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि इंटरफेस लेवल पे ही ड्रॉप हो गए। विच वन इज द बेस्ट वे? अगर वो इंटरफेस पे ड्रॉप हो तो? व्हाई? क्योंकि अगर इंटरफेस पे ड्रॉप हो तो मतलब मेरा फायरवॉल उससे मतलब प्रोसेस ही नहीं करेगा, राइट? हाँ, that's what the intention of SAM database. So what is the SAM database? It's a database, okay, which we create to take the action on the traffic at the interface level. अगर आपने SAM database में source, destination, port डिनाई कर दिया तो वो इंटरफेस लेवल पे ही पॉलिसी और ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर? यस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। आप और सवाल पूछो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो। मैंने पूछा सर कि सैम डेटाबेस क्या होता है सर, ये टॉपिक मतलब कहाँ से आया सैम डेटाबेस? क्या ये सीपी हमारा चेक पॉइंट के पैकेट फ्लो के अंदर होते हैं सैम डेटाबेस? हम सैम ये देख रहे हो ना, सैम डेटाबेस ये फर्स्ट स्टेप है आपका चेक पॉइंट पैकेट फ्लो का। अगर ट्रैफिक आपका फायरवॉल पे हिट करेगा तो सबसे पहले जो चीज चेक होगी सैम डेटाबेस की, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन ट्रैफिक में आ रहा है कहीं उसकी एंट्री हमारे सैम डेटाबेस में तो नहीं है। जो अगर सैम डेटाबेस में है तो इमीडिएटली ड्रॉप इट। गॉट इट?
तो सबसे पहला जो चेक पॉइंट का स्टेज है दैट इज कॉल्ड सेम डेटाबेस. चेकिंग द सेम डेटाबेस, वी विल चेक वेदर दिस ट्रैफिक is allowed on the same database or not. If it's not allowed, it will not be processed further. Clear? कोई और डाउट? सो सर ये भी तो कोई मेरे ख्याल में मतलब रूल्स ही होते होंगे ना जो इंटरफेस लेवल पर हाँ काइंड ऑफ हाँ ACLs हाँ हाँ हाँ, it's a rule. It's also a rule. तो अगेन मतलब एक यहाँ से ट्रैफिक अगर पास कर जाती है राइट, सो नाउ इट इज इनसाइड द फायरवॉल. So हाँ. again, there will be some set of rules which the packet has to pass through to get through the firewall. हाँ. See, जो अंदर के रूल है ना, जो पॉलिसी सेक्शन है वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि ट्रैफिक आपको VPN पे भेजना है, सर्विस क्या अलाउ करनी है, डिनाई करनी है, लॉगिंग करनी है. आप कभी भी इस चीज को मैच नहीं कर सकते हो. हाँ, वो अगर स्केल उसका शायद ज्यादा होगा इससे, राइट? हाँ, अगर आपने सैम डेटाबेस में अलाउ कर दिया ना तो वो आपका वैन से सीधा लैन पे शूट होगा, वो फायरवॉल के पास नहीं जाएगा प्रोसेस करने के लिए. अच्छा. गेटिंग माय पॉइंट? बट अलाउ लाइक कोई नहीं करता. इट्स नॉट रिकमेंडेड इवन. एंड आई विल वार्न यू कि अगर आप कभी अलाउ करो तो. नहीं अलाउ इन अ सेंस मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भी अब कोई हमारे पास लेजिट ट्रैफिक भी है राइट, वो आप फायरवॉल के अंदर आ गई है जो हमने अलाउ करनी है. नाउ अगेन देयर विल बी सेट ऑफ रूल्स व्हिच द पैकेट हैज टू पास थ्रू. हाँ, तो वो तो आप पॉलिसी सेक्शन में करोगे ना, ठीक है. सैम डेटाबेस में नहीं करेंगे आप. ये ना हाँ. पॉलिसी लुकअप. ठीक है. इट विल बी फोर्थ स्टेप जहां आप उसे करोगे. ठीक है. उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सैम डेटाबेस की. एंड मुझे ये मेक श्योर करना है कि सैम ये काइंड डेटाबेस. ऑफ वही हो गया जो आप बता रहे थे कि भी आपका एक फर्स्ट लेवल का इंटरव्यू हो गया, बंदे को वहां ड्रॉप करना है कि आगे जाके ड्रॉप करना है. हाँ हाँ, एग्जैक्टली सिमिलरली. भैया भाई वो भी छोड़ो यार, फर्स्ट लेवल का इंटरव्यू छोड़ो. आप बंदे को इंटरव्यू के लिए कॉल करना नहीं करना, ठीक है. वहीं ड्रॉप कर दो उसको. आपके पास रिज्यूमे आया, आपने देखा कि भाई जो आपका क्राइटेरिया है वो आपको चाहिए कि भाई एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो हमारे पास, बट जो आपके पास बंदा आया है वो BCom ग्रेजुएट है और ना ही उससे लैंग्वेज आती जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ठीक इमीडिएटली है. ड्रॉप करना पड़ेगा उसे. राइट. तो क्या मैं ये मेक श्योर करूं कि ये सैम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आप सभी राइट. को अच्छे से क्लियर है? सबकी ये चाहिए मुझे. सर यस थोड़ा यस यस. प्रैक्टिकल जब होगा ना तो थोड़ा और क्लियर होगा. अभी तो पिक्चर बहुत क्लियर है. ठीक है ठीक है, प्रैक्टिकल में मैं आपको सैम डेटाबेस दिखाऊंगा. बट अभी जो मैं थ्योरेटिकल आपको बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर? हाँ, ये बिल्कुल चीज पिक कर पा वैलिड रहे है. जी सर है ना, वो चीज आप रिलेट कर पा रहे हैं ना वैलिडिटी के साथ कि हाँ भाई ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है सैम डेटाबेस का ये फर्स्ट स्टेप है. एंड व्हाई दिस इज बीइंग डेवलप्ड टू सेव टाइम, एफर्ट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फायरवॉल. ये आप समझ पा रहे हैं ना? दैट्स ऑल इट मैटर्स फॉर नाउ. आप बाकी की चीजों का आप टेंशन छोड़ दीजिए. बिलीव मी, आप चेक पॉइंट सर्टिफाइड होके निकलेंगे यहाँ. श्योर सर. चलिए, तो सैम डेटाबेस को हम डन कर लेते. ट्रैफिक आया, सैम डेटाबेस में एंट्री नहीं है. सेकेंड थिंग, एंटी स्पूफिंग. मोस्ट एंड नेक्स्ट लेवल टू मोस्ट टॉपिक जो इंटरव्यूअर आपसे L1 इवन L2 लेवल के कॉन्सेप्ट में भी पूछेगा. एंटी स्पूफिंग क्या होती है, कहाँ इनेबल करते हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात? तो एंटी स्पूफिंग की अगर हम बात करें तो एंटी स्पूफिंग जो फीचर है वो बस ये चेक करता है कि जो ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है और उस ट्रैफिक का जो सोर्स है क्या वो लेजिटिमेट सोर्स है या नहीं है. जिस सोर्स से ट्रैफिक आना चाहिए उसी सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा है. यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल, मान लो ट्रैफिक आपका जो हिट हुआ है वो हुआ है, आप बताओ ट्रैफिक कहाँ हिट करवाएं, लैन इंटरफेस पे या वैन पे करवाएं? बताओ. वैन पे करवाएं. ठीक है,
हम करवा देते हैं जी वैन पे, यहाँ पे ट्रैफिक हिट हुआ। अब आपको क्या लगता है जो इंटरनेट से ट्रैफिक आता है उसका सोर्स आईपी क्या होना चाहिए हमेशा? बताइए। पब्लिक आईपी सर होना चाहिए। वो 192.168 1.0 से हो सकता है क्या कभी? नहीं। नो। या फिर जो 10 सीरीज की अपनी प्राइवेट रेंज है, कभी उससे हो सकता है क्या? नो। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि इस इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट कर रहा है और उस इंटरफेस के पैकेट, जो ट्रैफिक का पैकेट है, उसमें मेंशन है कि जी सोर्स आईपी है मेरा 192.168.1.100, तो इस केस में क्या होना चाहिए? ड्रॉप। That's what anti-spoofing does. It makes sure कि whatever traffic is being passed through the interface, it's having a legitimate source. It validates the legitimacy of the source in the packet. Make sense? Right. And where you have to enable it, most of the cases on the WAN interface, and some of the cases in the LAN as well. अब पब्लिक आईपी से सोर्स में पब्लिक आईपी है मान लो 169.172.68.99, इस आईपी से अगर ट्रैफिक आ रहा है, सोर्स में ये आईपी है और वो लैन इंटरफेस पे हिट कर रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? This traffic should not be allowed and there is someone in between the network who is doing something. There is a man in the middle. We need to scan the network. Right? Right. So अब ये ना बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत ही डिबेटेबल लाइन है जो मैंने अभी बोली है कि सम केसेस में लैन में कर दो, बट लैन में मैं क्यों करूं? है ना, लैन। अब मेरे से जब कई बार क्या होता है कि जब सामने वाला थोड़ा सा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो कई बार मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और मैं उनको जवाब भी इसी तरीके से देता हूं कि जब मुझे मॉनिटरिंग करनी है, क्या करनी है? मॉनिटरिंग करनी है, तब तो मैं कर दूंगा लैन इंटरफेस पे, और जो तो मुझे एक्शन लेना है तो मैं करूंगा वैन इंटरफेस पे। अब कहते हैं ठीक है मॉनिटरिंग हाँ करनी चाहिए, अगर मॉनिटरिंग मुझे अपने फायरवॉल पे करनी है तो बाकी के जो अदर टूल्स हैं उनमें हमने क्यों पैसा खर्च किया हुआ, अगर सारा बर्डन मुझे अपने फायरवॉल को देना है तो। Yes, you can do that on the LAN interface as well, but you should not do that. Why you are increasing the load of the firewall? हाँ, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर मान लो आपके पास सिम नहीं है, आपके पास स्कैनिंग टूल्स नहीं है, तो in that case you can go for it, but it will only guide you, like it will only inform you that yes, that the traffic is coming on the LAN interface with the WAN IP. It means there is something wrong with the network. There is someone in the network who is initiating the traffic with the public IP. But action, है ना, drop ये भी होगा by default. Yeah, it will also be dropped. This traffic will be dropped by default. Yeah, in the anti-spoofing section. But when you apply this anti-spoofing concept on the WAN interface, it will make more sense in the real scenario. Clear? मतलब तो सीधा सीधा इसमें ये है कि आपका अगर लैन पे इंटरफेस पे अगर आपका हिटिंग हो रहा है तो वो लैन नेटवर्क होना चाहिए। अगर लैन नेटवर्क पे लैन इंटरफेस पे हमारा अगर पब्लिक आईपी आ रहा है तो फिर वो वही एंटी स्पूफिंग हुआ। अगर वैन पे अगर हमारा प्राइवेट आईपी अगर आ रहा है तो वो हमारा एंटी स्पूफिंग हुआ। वो एंटी स्पूफिंग नहीं हुआ, वो एंटी स्पूफिंग नहीं हुआ, वो जब ब्लॉक होगा तब वो ब्लॉक एंटी स्पूफिंग में होगा। ओके ओके, राइट राइट, समझे? उस जब ये सिचुएशन अकर होगी आपकी, वो जो सिचुएशन को एक मिनट, मान लो ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर गया 192.160 प्राइवेट आईपी की रेंज से,
तो ये जो इंटरफेस पे जब ब्लॉक होगा ना, वो एंटी स्पूफिंग में ब्लॉक होगा, और आपको फायरवॉल लॉग भी दिखाएगी कि ब्लॉक्ड इन एंटी स्पूफिंग। राइट तो आप जाके बोल सकते हो कि भैया जो आपका ट्रैफिक आ रहा है ना, वो लेजिटिमेट सोर्स नहीं, आप सोर्स बताओ मुझे, सोर्स क्या है आपका। वो बताएगा 192.168। बोले आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो नेटवर्क। राइट गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहला जो था कि सैम डेटाबेस वी विल डिसाइड वेदर द ट्रैफिक which is coming to the firewall, that traffic is required or not, whether is there any entry in the SAM database or not. If no entry is there, it will be passed to anti-spoofing, and anti-spoofing make sure that whether this source is legitimate source or not. कहानी क्लियर है? हेलो सर। Yes, please go on. हाँ सर, ये पूछने का था, ये जो सैम डेटाबेस इज दिस फीचर इज अवेलेबल इन सब फायरवॉल में है, ओनली ऑन चेक Only on checkpoint. ओके ओके, बिकॉज वी गेट दिस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इन पालो अल्टो, क्योंकि न्यूमरस मतलब कनेक्शंस आ रहे थे, उसमें बफर ओवरफ्लो प्रोटेक्शन हो गया था, फायरवॉल पूरा डाउन हो गया था। तो बाद में वो स्विच रिस्टार्ट किया तो फिर वो लॉक्स आना बंद हो गया सर। तो हम लोग ने कुछ ट्रैफिक ब्लॉक नहीं किया इंटरफेस पे, बट वो पता नहीं, वो बोले कि स्विच रिस्टार्ट किया एंड बफर ओवरफ्लो प्रोटेक्शन जो था वो रिजॉल्व हो गया, लॉक्स आना बंद हो गया था उसके, बहुत लॉक्स आ रहे थे अननेसेसरी, तो वो रिजॉल्व हो गया था। अच्छा, तो दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल इन चेक, राइट? SAM database, yeah. ओके ओके। Any other questions? I hope कि ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर होंगे, और क्लियर इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर मैं नींद में उठा के पूछ लूँ ना आपसे, तो आपको बिल्कुल क्लियर कर, मतलब अगर मैं इस पे 100 क्वेश्चन पूछूं ना घुमा फिरा के, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस तरीके से क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर एवरीवन? बाकी कुछ नहीं है यार फिर। चेक पॉइंट का उसमें कुछ नहीं है बाकी। सेशन लुकअप, एज द नेम सेज, it will check whether any session is already in the place in the firewall for the source and destination or not. कि फायरवॉल में इस सोर्स एंड डेस्टिनेशन की क्या कोई ऑलरेडी सेशन चल रहा है, अगर तो चल रहा है तो उसी सेशन के थ्रू ट्रैफिक पास होगा, अदरवाइज अ न्यू सेशन विल बी क्रिएटेड, अ न्यू स्टेट एंट्री विल बी created. Done? कोई डाउट? साइलेंस में नो डाउट। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे सेशन चल रहा मींस हमारे ट्रैफिक इनकमिंग एंड आउटगोइंग हो रहे हैं, ठीक है सर? तो अगर बाय द वे अगर हमारा कोई नया ट्रैफिक मुझे भेजना है, तो उसमें अगर ये ट्रैफिक ऑलरेडी इन गोइंग एंड आउट गोइंग है, तो उसे ही चेक करेगा, ठीक है? और वहां पे अगर ये रनिंग है तो फिर इट्स ओके। ओके, दिस इज द मेन वर्क ऑफ सेशन लुकअप। हाँ, अगर सेशन चल रहा है तो ठीक है, अगर हमारा सेशन नहीं चल रहा, अगर हमारी ट्रैफिक इन हिट नहीं कर रही है, लैन पे वैन पे नहीं जा रही है, तो उस सिचुएशंस में क्या होंगे? सेशन क्रिएट होगा। ओके, राइट, है ना? सेशन लुकअप का मतलब यही है सिंपल सा कि इज देयर एनी एग्जिस्टिंग सेशन इन द फायरवॉल और नॉट। इफ यस, पास द ट्रैफिक थ्रू दैट, इफ नो, क्रिएट अ सेशन। Two argument will be given here. Yes, no, yes, pass the traffic. No, create a session. Cool.
सर सेशन एंट्री की कोई लिमिटेशन होती है या अनलिमिट सेशन हो सकती है इसमें? या लिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेमोरी ही तो ले रहा है, समझ रहे हो? मेमोरी ही तो ले रहा है। अगर वो फुल भी हो जाता है ना, मान लो, तो वो धीरे धीरे मेमोरी को और इंक्रीज करता जाता है, मतलब अपने पास देता जाता है ना, और धीरे धीरे फायरवॉल स्लो हो जाएगा। अगर मान के चलो आपने एक छोटी फायरवॉल लगा दी चेक पॉइंट की, है ना, चेक पॉइंट की छोटी फायरवॉल लगा दी, और उससे आप मतलब पर सेकंड के 50 लाख ट्रैफिक कनेक्शन बाईपास करवा रहे हो, तो कनेक्शन टेबल तो मेंटेन होगी ना यार, फिर वो फायरवॉल स्लो हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं कि कुछ नंबर ऑफ सेशन है उसके बाद में ओवरराइट हो जाए, पुराने सेशन डिलीट हो नहीं जाए। नहीं 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 नहीं, वो टाइमर होता है। विद इन अ टाइमर अगर ट्रैफिक नहीं आया तो वो एंट्री डिलीट होगी, ऐसे ओवरफ्लो के ऊपर एंट्री कभी डिलीट नहीं होती। ठीक है सर, ये पॉसिबिलिटी है कि मान के चलो 10 लॉग्स हैं आपके पास, है ना, और मान लो आपको एक और एंटर करना है, तो जो सबसे फर्स्ट वाला है उसका चेक कर लिया, हाँ भाई कितना हो गया, 60 सेकंड हो गया, इसको फ्लश कर दो, फिर ऊपर नहीं आ जाएगा, नीचे वाला फ्लश हो जाएगा। दिस इज हाउ द टाइमर वर्क्स। फिर कोई और आना है तो उससे सबसे नीचे वाला ब्लॉक मतलब हट जाएगा, उस फ्लश हो जाएगा, उसके ऊपर नया एंट्री बन जाएगा। बट टाइमर प्लेज अ क्रूशियल रोल, है ना। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. After the session lookup, the policy lookup will be happening. आपने क्या कहा कि सेशन लुकअप किया, सेशन है, बोले यस, बोले पास द ट्रैफिक। सेशन कब बनेगा? जब पॉलिसी रहेगी, ठीक है। अगर सेशन है दैट मीन पॉलिसी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो पास कर दो ट्रैफिक को सेशन के बेसिस पे। अगर जो नहीं है, क्रिएट अ सेशन। सेशन क्रिएट कैसे होगा? पॉलिसी के बेसिस पे, कि पॉलिसी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, अलाउ और डिनाई, या नो पॉलिसी मींस ड्रॉप। तो सेशन लुकअप अगर नहीं है, मतलब सेशन क्रिएटेड नहीं है, तो कुड बी टू रीजंस, या तो पॉलिसी है और ट्रैफिक इनिशिएट नहीं हुआ, या फिर पॉलिसी नहीं है, जो भी ट्रैफिक इनिशिएट हुआ वो ड्रॉप हुआ है। कूल। अब इसमें कोई डाउट बताओ। मीन्स No doubt? सेशन लुकअप जो है हमारा पॉलिसी लुकअप के ऊपर बेस्ड है। अगर हमारी पॉलिसी होगी तो सेशन चलेगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, जो सेशन लुकअप का जो रिजल्ट है ना, उसके हम्म। बाद पॉलिसी लुकअप किया जाएगा। ओके, तो मैं दोनों स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा, समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। कि सेशन लुकअप का जो आउटपुट आया, यस और नो का, यस का मतलब क्या है कि सेशन बना हुआ है, और सेशन कब बनेगा? जब पॉलिसी होगी। राइट। अगर पॉलिसी नहीं है तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा और सेशन तो बनेगा ही नहीं। राइट सर। और अगर जो नो है तो भैया सेशन क्रिएट करो। सेशन क्रिएट कैसे करोगे? पॉलिसी के थ्रू। तो चेक करो कि पॉलिसी है या नहीं है। अगेन यस एंड नो, पॉलिसी है और नहीं है। यस है तो चेक करो कि एक्शन क्या है, अलाउ है या डिनाई है। अलाउ है तो क्रिएट अ सेशन एंड सेंड इट टू फर्दर। अगर डिनाई है तो ड्रॉप इट। और अगर पॉलिसी नहीं है तो एनीवे ड्रॉप इट। तो सर सेशन तो हमारा डिपेंड होगा पॉलिसी पे ना? इंटर डिपेंड बोलो तुम। या
राइट, इंटरडिपेंडेंसी। हम्म हम ये नहीं कह सकते कि सेशन पूरा डिपेंड है पॉलिसी पे, हम ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिसी पूरा डिपेंड है सेशन पे, नहीं, इंटरडिपेंडेंट। मेक सेंस? या अब ये लेफ्ट सेक्शन डन हुआ या नहीं? ये लेफ्ट सेक्शन पे कोई भी डाउट हो बता दो मुझे अभी। मैंने इसीलिए ये थोड़ा सा क्रूशियल टॉपिक है, इसीलिए मैंने बायोफॉरगेट किया हुआ है। आई डोंट वांट टू You मेक explained it very nicely and very slowly, so that that's why everything we are here ना। can हमें be हमें मतलब खत्म नहीं करना टॉपिक, हमें समझाना है यहाँ पे। और समझाना भी ऐसा नहीं है कि आप जाकर घर दोबारा पढ़ो, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। इट विल बी इन योर माइंड फॉर एवर, बिलीव मी। चलिए, तो ये मैं कंप्लीट समझ लूं, ये पूरा सेक्शन affirm. डन ना? Okay, perfect. Then we are moving ahead, and I was just asking, like, do you have any issues while we have discussed, history of checkpoints? So do you have any doubt in this section? No, in history, I don't have any doubt. Okay, smart architecture we have discussed. I think this should also be clear. Traffic control methods, I think ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। काफी टाइम हमने स्पेंड किया इस पे, कोई है तो मुझे बताना है ना। उसके बाद हमने चेक पॉइंट का पैकेट फ्लो हमने एक डिस्कशन किया था, है ना। तो आज थोड़ा सा हम इसको एक बार क्विकली जो लेफ्ट सेक्शन है इसको रिवाइज कर लेते हैं, एंड ताकि आपको मतलब याद रहे ये, है ना। तो सबसे पहले जो अपना स्टेप था कि भाई ट्रैफिक हिट करता है फायरवॉल को, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा सैम डेटाबेस। और सैम डेटाबेस क्या होता है? एक डेटाबेस होता है फायरवॉल के इंटरफेस लेवल पे जो काम करता है, और उसमें क्या होता है कि हम अलाउ या डिनाय का रूल बना सकते हैं। और अगर जो ट्रैफिक इंटरफेस लेवल पे हिट कर रहा है वो सैम डेटाबेस से मैच कर जाता है, तो वो इंटरफेस लेवल पे ही एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, वो ट्रैफिक आपके फायरवॉल के पास नहीं जाएगा प्रोसेस होने के लिए। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग जो होती है हमारी वो है एंटी स्पूफिंग। एंटी स्पूफिंग क्या होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल to make sure that the source address which is which you are getting on the firewall is legitimate or not। कि ऐसा तो नहीं हो कि लैन इंटरफेस पे कोई पब्लिक आईपी से ट्रैफिक आ रहा है या फिर वैन इंटरफेस पे आपको लैन आईपी से कोई हिट मिल रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेजिटिमेसी चेक करने के लिए एंटी स्पूफिंग वर्क करता है, एंड वी कैन enable anti-spoofing on the interfaces. I'll show you while we'll do the lab. So इंटरफेस पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है एंटी स्पूफिंग का, ठीक है। हम वहां पे इनेबल कर सकते हैं, लैन पे भी वैन पे भी, बट मैं रेकमेंड करता हूँ वैन पे करो हमेशा। और अगर मॉनिटरिंग की जरूरत है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे तो आप लैन पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है अपना वो सेशन लुकअप का आता है, कि जो ट्रैफिक हिट हुआ है फायरवॉल के इंटरफेस पे उसके लिए कोई एग्जिस्टिंग सेशन है या नहीं। ईदर यस ईदर नो। अगर है तो उस ट्रैफिक को उस सेशन के थ्रू पास कर दिया जाए, अगर नहीं है तो क्रिएट ए सेशन। और सेशन क्रिएट करने के लिए पहले पॉलिसी मैच होनी चाहिए। अब चेक करो पॉलिसी है या नहीं है। इफ देयर इज नो पॉलिसी then drop it in the cleanup rule. If there is a policy, then match the policy and pass the traffic and create a session. ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का सेक्शन पूरा खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्या होता है कि excuse me, one question. Yeah, go ahead.
Yes, firewall works only layer 7. Yeah, firewall is working on layer 3, layer 4. Layer 3 firewall is a layer 3 device, and but it have the capability to work on layer 7 as L7 devices इन्हें बोला जा रहा है आज के डेट, because they are doing SSL inspection. Okay. Because they are doing SSL offloading. अब SSL कहाँ काम करता है? लेयर 7 पे. Yes. इसीलिए हम इसको लेयर 7 L7 लेयर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स बोल रहे हैं मैंने. ठीक है. अब L3 जो होती है और L4, L3 पे पाथ डिफाइन होता है. ठीक है. लेयर 3 पे पाथ डिफाइन होता है कि किस पाथ के थ्रू हमारा ट्रैफिक जाना चाहिए. ठीक है. L4 पे डिफाइन होता है कैरियर कि थ्रू विच प्रोटोकॉल this traffic should follow this path, whether TCP or UDP. Make sense? तो राउटिंग की कैपेबिलिटी ऑलरेडी है फायरवॉल के पास. Yes. ये कैरियर डेफिनेशन ऑलरेडी हो रहा है. Yes. है ना. और ऊपर की 3 लेयर आपकी एप्लीकेशन हो गई. Yes. So that is why it is called application layer firewall. So basically we can say that the firewall works only layer 3, layer 4 and layer 7. It has capability to work on layer 3, layer 4 and layer 7. You are taking it in a wrong direction. You cannot say that it only works. You can say that it works as well on layer 7. Okay. Firewall is a L3 device, but it can work till layer 7. The next generation firewalls are working till layer 7. Makes sense? Okay. ठीक है. पॉलिसी लुकअप हो गया. पॉलिसी में yes और no हो गया. उसके बाद आता है डेस्टिनेशन नेट की पॉलिसी है हमारे पास और पॉलिसी में अलाउ हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है. ठीक है. उसके बाद चेक होगा कि जो डेस्टिनेशन आईपी है क्या उसके लिए हमारे पास कोई नेट कॉन्फ़िगर्ड है. ठीक है. अब अगर आप लोगों ने ये जो मैंने लाइन बोली है, अगर इस लाइन को आप लोगों ने समझ लिया है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जब आप पॉलिसी क्रिएट करोगे तो आप डेस्टिनेशन में पब्लिक आईपी रखोगे अपने सर्वर का या प्राइवेट आईपी रखोगे सब सर्वर का. So because in the packet flow, destination NAT comes after the policy lookup, so that is why we'll keep public IP in the policy. Clear? ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 90% केसेस में बता रहा हूं मैं. 90% टिल L2 लेवल के इंटरव्यू में 90% केसेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने जो पॉलिसी बनाई है, आपने मान लो वेब सर्वर एक होस्ट किया है अपने नेटवर्क में, तो आपने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी आपने प्राइवेट आईपी से बनाई है या पब्लिक आईपी से बनाई. तो चेक पॉइंट के सिनेरियो में आपको बोलना होगा कि सर डेस्टिनेशन कम्स आफ्टर द पॉलिसी लुकअप, सो दैट इज व्हाई विल क्रिएट द रूल फॉर द पब्लिक आईपी. डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट आई थिंक देखो सिस्को पे जो सिस्को ASA है, ASA की मुझे थोड़ी सी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे प्राइवेट आईपी के साथ नेट रूल बनाते हैं. आई एम नॉट श्योर, यू शुड चेक दैट. Yes. है ना? आई एम नॉट श्योर बट यू शुड चेक दैट. ऐसे ही अब आपका होमवर्क यहाँ पे क्या आता है, तो फर्स्ट उसमें डेस्टिनेशन नेट पहले होता है फिर पॉलिसी लुकअप होता है. हाँ, तो कई बार जो सिस्को ASA का बंदा होगा ना, अगर वो चेक पॉइंट का कोई आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो इस बात पे डिबेट करेगा, बट यू हैव टू मेक इट श्योर कि सर चेक पॉइंट पैकेट फ्लो में द पॉलिसी लुकअप कम्स आफ्टर बिफोर डेस्टिनेशन नेट, दैट इज व्हाई वी आर क्रिएटिंग विद द पब्लिक आईपी. बट अब आपका पहला होमवर्क जो है वो ये है कि जितनी भी फायरवॉल आपके माइंड में आए उनका पैकेट फ्लो आप चेक करें और
चेक करें कि आप अगर उस पे नेट पॉलिसी बनाते हैं तो वो पब्लिक आईपी के थ्रू बनाएंगे या फिर प्राइवेट आईपी के थ्रू। सर सबके ऊपर हम प्राइवेट आईपी भी बनाते हैं, चाहे वो पालो अल्टो हो, चाहे वो फोर्टिगेट हो, चाहे वो एएसए हो। एसआरएक्स का मुझे पता नहीं है, उसमें मैंने काम नहीं किया, बट फोर्टिगेट और पालो अल्टो में तो डेस्टिनेशन नेट पहले होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, कि भाई पॉलिसी लुकअप कर लिया आपने, तो जब पॉलिसी लुकअप पहले हो रहा है दैट मींस यू हैव टू क्रिएट द पॉलिसी ऑन द पब्लिक आईपी। ठीक, क्लियर है? ऑलराइट, अब डेस्टिनेशन नेट हो गया। डेस्टिनेशन नेट करने के बाद हम चेक करेंगे राउट लुकअप। राउट लुकअप किस चीज का? राउट लुकअप होगा इस डेस्टिनेशन के बेसिस पे डू वी हैव एनी राउट टू राउट दिस पैकेट। ये सिर्फ लुकअप है। सर जो लुकअप होगा वो पोस्ट नेटेड आईपी का होगा, प्री नेटेड आईपी का होगा? पोस्ट नेटेड आईपी का। ओके, है ना? आपके पास पब्लिक आईपी मान लो 169.16.20.1 से 10.1.1.1 में नेट हो गया, तो इस नेटिंग के लिए आपको चेक करना है कि मुझे इस पैकेट को भेजना किधर है। इधर ये मान लो आपका फायरवॉल है, तो ये लैन ये वैन हो गया, ये डीएमजी मान लो इसको, है ना? ठीक है, ये डीएमजी हो गया, ये आपका ग्लोबल डीएमजी हो गया, ये इंटरनल डीएमजी मान लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हिट हुआ, सब कुछ होने के बाद ये चेक करें कि मुझे इस पैकेट को किस तरफ भेजना है, ग्लोबल की तरफ, डीएमजी इंटरनल की तरफ या लैन की तरफ, ठीक है। ये राउट लुकअप होगा। तो 4, ये 5, ये 6, ठीक है। आफ्टर दैट ये लुकअप हो गया। लुकअप होने के बाद राउटिंग अभी नहीं हुई, सिर्फ लुकअप हुआ है, ठीक है। लुकअप होने के बाद 7th स्टेप होगा सोर्स नेट का, कि जो ट्रैफिक आया है क्या उस ट्रैफिक में जो सोर्स आईपी है उसके लिए मेरे को मुझे नेटिंग भी करनी है क्या? अगर जो सोर्स नेट भी कॉन्फ़िगर्ड है तो सोर्स नेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड, सॉरी कन्वर्जन यहाँ पे हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद 8th स्टेप आता है आपका, सोर्स नेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये जाएगा L7 इंस्पेक्शन पे, कि हमारे ऊपर हमारे पास क्या कोई L7 प्रोफाइल या रूल कॉन्फ़िगर हुआ है क्या? अगर तो कोई L7 प्रोफाइल या रूल क्रिएशन आप लोगों ने किया हुआ है फायरवॉल पे, तो वो यहाँ पे हिट हो जाएगा, अगर नहीं तो वो आगे मूव कर जाएगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये L7 इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 9th, दैट इज VPN। फायरवॉल विल डिटरमाइन कि भाई जो ये डेस्टिनेशन नेट हुआ या नहीं हुआ, जो भी आईपी मेरे पास डेस्टिनेशन में फिलहाल के टाइम पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ट्रैफिक को मुझे VPN पे भेजना है। एंड अगेन द डिसीजन विल मेक हियर यस और नो। अगर तो ये यस है तो वो आगे राउटिंग के लिए भेज दिया जाएगा कि VPN पे राउट कर दिया जाए। अगर नो है तो वो नॉर्मल राउटिंग, जो भी राउटिंग कैपेसिटी यहाँ पे लुकअप में हुआ होगा उसकी तरफ भेज दिया जाएगा। मतलब जो एक्चुअल में पैकेट को राउट किया जाएगा वो इस स्टेप पे किया जाएगा। कंफ्यूजन ये होती है कि राउट का पैकेट यहीं भेज दिया, नहीं, यहाँ पे पैकेट हमने भेजा नहीं, हमने सिर्फ लुकअप किया, ठीक है। पैकेट को एक्चुअल में राउटिंग हमने इस 10th स्टेप पे किया। इसके बाद ये जो पैकेट होगा वो हमारे वैन इंटरफेस या फिर लैन इंटरफेस या भी जो भी इंटरफेस पे इसको राउट करना होगा, उस इंटरफेस से ये पैकेट बाहर निकल जाएगा। अब इतने ये पैकेट फ्लो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर आप L1 L2 की इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो L3 में कोई आपसे पूछेगा नहीं। सर एक छोटा सा डाउट है मेरा, SSL डिक्रिप्शन कहाँ पे हो रही है? वो एक
मुझे उससे पहले एक चीज बताओ, SSL डिक्रिप्शन में आप क्या कर रहे हो? सर लेट्स सपोज इनबाउंड इंस्पेक्शन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इनबाउंड इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आप उसमें एक्चुअल में, मैं बात करूँ SSL डिक्रिप्शन में, तो आप करते क्या हैं? मुझे इस टर्म से मुझे आप थोड़ा सा फैमिलियर करवाएं कि SSL डिक्रिप्शन से आप क्या, उसके उस एक्शन में आप क्या परफॉर्म करते हैं, फायरवॉल पे क्या एक्टिविटी होती है लॉजिकली? सर दो चीजें हैं जो जितना मैंने इसको पढ़ा है, SSL डिक्रिप्शन में हम दो तरीके, इसमें दो चीज होती है, एक होती है फॉरवर्ड प्रॉक्सी, एक होती है इनबाउंड इंस्पेक्शन। मतलब बाहर से जो ट्रैफिक अंदर आ रहा है उसको मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ और उसको मैं रीड कर रहा हूँ और फिर मैं उसको अंदर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में जो मैं इससे जज कर पा रहा हूँ वो लेयर 7 इंस्पेक्शन पे होगा। फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो है वो होता है कि अंदर से ट्रैफिक जब बाहर जा रहा है तो मेरा जो फायरवॉल है वो मैन इन द मिडल की तरह बिहेव करेगा और इट विल बी लाइक सर्वर फॉर माय क्लाइंट एंड इट इज लाइक क्लाइंट फॉर द सर्वर। तो वो दो SSL हैंडशेक बनाएगा, एक वो जो यूजर था जिसने सर्विस ओरिजिनेट करी उसके लिए वो एक सर्वर की तरह बिहेव करेगा, उसको लगेगा दो आई एम कम्युनिकेटिंग विद द रियल सर्वर बट एक्चुअल में सर्वर जो है वो खुद फायरवॉल होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर दिया है आपने, बट कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखो, ये मेरा पीसी है, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, लंबा नहीं करेंगे कि SSL बहुत लंबा टॉपिक है, बट ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। यहाँ के इस ब्राउजर से एक ट्रैफिक जनरेट हुआ डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन के बीच में ये मेरी फायरवॉल है और ये मेरा सर्वर है, ठीक है। अब SSL ऑफलोडिंग हमने क्यों किया? ताकि हम जो ये सर्वर का काम है ना उसको हम थोड़ा ऑफलोड कर सकें। अब या तो ऑप्शन ये है कि क्लाइंट ने जो ट्रैफिक भेजा हमने उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक किया और उसको राउट कर दिया सर्वर के पास। अब सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसे डिक्रिप्ट करेगा, देन उसके इंफॉर्मेशन चेक करेगा, देन उसको हम भेज देगा। अब हुआ क्या कि जो ये SSL ऑफलोडिंग हुई वो यहां पे लाई करती है सोर्स नेट के बाद। क्यों? क्योंकि अगर हम SSL ऑफलोडिंग करते हैं तो उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? अगर हम SSL इंस्पेक्शन की बात कर दें, ठीक है, इंस्पेक्शन में क्या कर रहे हैं? हम उसको डिक्रिप्ट करके चेक कर रहे हैं कि जो SSL का ट्रैफिक आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, वो लेजिटिमेट है या नहीं है, राइट। और SSL कहाँ है? L7 में काम करता है। तो ये जो पूरा एरिया है यहां पे ये सारा काम होगा। ठीक है, मेक सेंस? मेक सेंस। लॉजिक समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे काम हो, रटना मत, लॉजिक समझना क्यों यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है सर, है ना, ये बिल्कुल मत रखना हाँ विकास ने बता दिया कि भाई यहाँ पे L7 के बीच में होगा, है ना, सोर्स L7 और राउटिंग VPN के बीच में होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने को ये समझना है कि ऐसा क्यों होगा। हमें अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, बिकॉज SSL ऑफलोडिंग में हम कर क्या रहे हैं? हम उसको ऑफलोड कर रहे हैं। अगर इंस्पेक्शन हो रहा है तो हम चेक कर रहे हैं कि डेटा लेजिटिमेट है या नहीं है, और अगर ऑफलोडिंग कर रहे हैं सिर्फ, तो हम उसे ऑफलोड करके डिक्रिप्ट पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो SSL कहाँ काम करता है? L7 में। L7 इंस्पेक्शन कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है ना? ठीक है सर। चलो, और कोई डाउट? नेगेटिव सर। मैं वेट कर रहा हूँ जब तक मैं ये सब चीज को रब कर रहा हूँ। आप लोग एक बार इसको रिवाइज करो और मुझे बताओ अगर कोई डाउट हो तो इसके ऊपर। कोई भी क्वेश्चन माइंड में कुछ भी आ रहा हो, है ना, छोटा मोटा भी, तो बताओ मुझे। और अगर आप लोगों के माइंड में नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे अभी आपके। चलिए, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जब हम नेक्स्ट सैटरडे अपनी क्लास करें तो उसमें हम लैब परफॉर्म करें। क्या परफॉर्म करें? लैब। अभी की जो ये फर्स्ट 4 घंटे क्लास है इसमें हमने थ्योरी कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना?
या नहीं बना रहे? हाँ जी सर। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि थ्योरी जो पार्ट है वो 4 घंटे में कंप्लीट करके हम लैब पे मूव करें। अगर नेक्स्ट सैटरडे से हम थोड़ी थ्योरी और मोस्ट लाइक 70% हम लैब पे काम करेंगे। ठीक है, अब लैब का मतलब ये है कि हमें कुछ लैब के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कि जो चेक पॉइंट का सॉफ्टवेयर है गाया, याद है आपको गाया के बारे में बताया था मैंने? यस सर। और अगर याद है बता दो कब लॉन्च किया था चेक पॉइंट ने गाया? टू 2012 सर। यस करेक्ट। 2012 में गाया को चेक पॉइंट ने लॉन्च किया था और तब से अब तक गाया ही चल रहा है, उसके अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अब गाया को इंस्टॉल करने के जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कशन करेंगे कि वो मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप गाया को इंस्टॉलेशन के लिए आप मान लो आप एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपके पास आ गया जी कि भाई आपको चेक पॉइंट डिप्लॉय करना है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ना ईदर द मैनेजमेंट, ईदर विद योर आईटी मैनेजर, या फिर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा और उसको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले डिप्लॉयमेंट का मेथड क्या चूज कर रहे हो आप? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्टैंड अलोन है? अब अगर जो फर्स्ट क्लास जो यूट्यूब पे हमारी हुई थी, अगर उसमें आप लोग इन्वॉल्व थे तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, बट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को कि डिफरेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड में और स्टैंड अलोन में, एंड व्हाट चेक पॉइंट रेकमेंड्स कि आपको डिप्लॉयमेंट कौन सी करनी चाहिए एंड क्यों। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्या होता है? ओके, थोड़ा सा ये आपका क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये मैनेजमेंट सर्वर हो गया, सॉरी ये आपके दो गेटवे हो, ठीक है, ये दोनों आपके वर्चुअल लिंक्स हैं। तो ये आपका एसएमएस हुआ, ये आपकी गेटवे हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो 3 टायर आर्किटेक्चर है, फर्स्ट आपका क्लाइंट, सेकंड आपका एसएमएस, थर्ड आपका गेटवे, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अगर मैं फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो यहां एसएमएस भी आपका एचए में होता है। अगर एक अच्छे एनवायरनमेंट की बात करूं तो ये भी अच्छे में। तो हुआ क्या कि जब भी क्लाइंट पे आपने स्मार्ट कंसोल ओपन किया, आपने एसएमएस को लिया स्मार्ट डैशबोर्ड के थ्रू, एंड देन उसके बाद मॉडिफिकेशन आपने क्लस्टर पे भेज दी। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। ठीक है सर, फायरवॉल किधर रहेगा इसमें? ये रहा ना गेटवे। अच्छा, फायरवॉल इसी पे रहेगा, गेटवे पे ही ये इनेबल्ड? गेटवे पे इनेबल्ड मतलब मैं समझा नहीं, मतलब नहीं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया और सर्वर से क्लाइंट नहीं 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 नहीं, ये क्लाइंट आप समझे नहीं, ये स्मार्ट डैशबोर्ड क्लाइंट है चेक पॉइंट का, ये एडमिन पीसी है ये नॉर्मल क्लाइंट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का पीसी है। एडमिनिस्ट्रेटर के पीसी पे स्मार्ट डैशबोर्ड चेक पॉइंट का कॉन्फ़िगर्ड है, उसके थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप हो। ओके, अब आप यहाँ पे बैठ के यहाँ से आपने एसएमएस को रिमोट पे लिया, एसएमएस को रिमोट पे लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करके आप फायरवॉल पे पुश कर दो। ओके, गेटवे पे ही गेटवे के साथ फायरवॉल कनेक्टेड है। गेटवे
के साथ फायरवॉल कनेक्ट। अच्छा, गेटवे से आप क्या मतलब क्या मेंशन कर रहे हो? गेटवे मींस नो मैं ये बता रहा हूँ कि वी आर सेंडिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम चेक पॉइंट SMS डैशबोर्ड टू सर्वर एंड सर्वर देयर आर टू गेटवे कनेक्टेड व्हिच इज थ्रू वर्चुअल लिंक. Okay, so my question is the firewall, where is the firewall located? These gateways are firewall, no? Okay. So here there are two firewalls because two gateway, na? Because they are in HA. Okay, so two firewalls are connected with HA. Okay, understood. Understood. Yeah, and similarly यहाँ पे SMS भी अगर अच्छा एनवायरनमेंट है तो जो SMS होगा, मैनेजमेंट सर्वर होगा, वो भी हमारा क्लस्टर में होगा, HA में होगा। सर्वर, हाँ, मैनेजमेंट सर्वर। ये देखो, कल की क्लास में थे आप? No, because I am in I am doing job, so they will not give me allowing the class permission. So that's why I am confused. Okay. Okay. It's Nilesh, right? Yes. मैं एक बहुत ही छोटा सा क्विक 5 मिनट लेके मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप क्लास के साथ मगअप कर सकें, ठीक है। दो अपना जो इसका ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको नीलेश? यस। ये है चेक पॉइंट का आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आपका हो गया चेक पॉइंट पॉलिसी एडिटर, ठीक है, जिसपे आप बैठेंगे, आप बैठ के पॉलिसी मॉडिफिकेशन करेंगे। जो पॉलिसी मॉडिफिकेशन आप कर रहे होंगे वो आपने पिक किया होगा मैनेजमेंट सर्वर से, चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर से। यस। And after the modification, when you push the policy from the management server, it will be reflected to your gateways. Okay. So ये है 3 tier architecture। 3 tier architecture जो चेक पॉइंट क्लेम करता है। फर्स्ट लेवल आपका ये रहा, सेकेंड लेवल ये रहा, थर्ड लेवल आपका ये रहा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज कॉल्ड 3 tier. So it is also known as the distributed architecture. Yes, this 3 tier architecture known as distributed deployment, where you have no dependency of the client, either management server, either gateway on any of the devices. Okay, understood. Understood? Yes. Hope now you'll be able to connect the dots. Yes. Right? Yes. अब बात करते हैं कि ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमने एक सेपरेट क्लाइंट लिया, एक मैनेजमेंट सर्वर लिया और 2 गेटवे ले लिया, गेटवे जितने भी हैं। तो ये हमारा एक टिपिकल एनवायरनमेंट, बहुत छोटा सा एनवायरनमेंट है ये, टिपिकल एनवायरनमेंट में दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब बात है स्टैंड अलोन में क्या होता है। स्टैंड अलोन में क्या होता है, जब हमारे पास जो नेटवर्क है वो छोटा होता है, उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा एक ये तो हो गया क्लाइंट, ठीक है, स्मार्ट डैशबोर्ड क्लाइंट। यहां से ये जो मैनेजमेंट सर्वर है ना, Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share and subscribe for more future updates. SMS सर्वर, इसे वर्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हो गया SMS मैनेजमेंट सर्वर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, ओके, SMS इज एक्रोनिम। जो सेकेंड पार्ट होता है दैट विल बिकम द गेटवे। Gateway is also aligned on the management server. That is the standalone. Yes. So ये क्या हुआ, देखो लॉजिकली ये भी 3 tier ही बन रहा है ना? Yes. लॉजिकली फर्स्ट लेवल, सेकेंड एंड द थर्ड लेवल, ये भी 3 tier ही है, बट फिजिकली इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अगर जो तो ये मैनेजमेंट सर्वर क्रैश हुआ तो गेटवे बैठ जाएगा आपका। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंड-अलोन डिप्लॉयमेंट। अब गेटवे आपके पास 2 होने चाहिए, उस पे HA एनेबल करना है, उसके लिए लाइसेंसेस चाहिए हो, है ना। तो उस पे कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो जब अगर आपके पास बहुत छोटा एनवायरनमेंट है, बहुत छोटी कंपनी है जिसमें आप डिप्लॉय कर रहे हो, मान लो आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया किसी कंपनी का
और कंपनी छोटी है, वो ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च नहीं कर सकती अपने आईटी प्रोजेक्ट पे, तो वहां पे ये इस तरीके का डिप्लॉयमेंट आफ्टर द रिस्क असेसमेंट कैन बी डन, कि भैया ये हम स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, आपके सारे फीचर्स वर्क करेंगे चेक पॉइंट के, बट रिस्क कितना है कि जिस दिन ये आपका हाई यूटिलाइजेशन या कुछ भी हुआ और ये बैठा, तो फिर आपका ये जो गेटवे है वो फिर बैठ जाएगा और आपका जो नेटवर्क है वो इंटरप्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट विल एग्री ऑन दिस रिस्क एंड यू हैव टू डिप्लॉय दिस। मैंने अब तक जितने डिप्लॉयमेंट करी है उसमें अराउंड 70% जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टैंड अलोन की है, 30% जो डिप्लॉयमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बिकॉज स्टैंड अलोन टेक्स टाइम, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्स टाइम। स्टैंड अलोन जो होती है वो थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और इजी टू सेटअप होता है, और मतलब थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना, और थोड़ा पैसा भी कम लगता है। तो until or unless it's not a very big organization, very standard oriented organization, they will not go for the distributed environment. जा भी सकते हैं, बट मतलब मैंने जो देखा है 70% वो स्टैंड अलोन में देगा। ठीक है, अब बात आती है सेकंड। अब आपने ये डिसीजन मेक करना है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये आपने डिसाइड कर लिया अपने आईटी मैनेजर या फिर आईटी मतलब सॉरी ऑपरेशंस के जो हेड वगैरह है उनके साथ बैठ के ये डिसीजन ले लिया। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होता है राउटेड मोड और ब्रिज्ड मोड, कि जो आपको डिप्लॉयमेंट करनी है वो किस मोड में करनी है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए सिर्फ आप इस टर्म को याद कर लो, ठीक है। एक राउटेड मोड डिप्लॉयमेंट, एक ब्रिज मोड डिप्लॉयमेंट, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, उसके लिए थोड़ी सी और चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ये मैं यहाँ पे स्टार मार्क करता हूं, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लें कि ब्रिज मोड और राउटेड मोड का मैं एक्सप्लेन करना, मैं आपको मे बी नेक्स्ट क्लास या उससे अगली क्लास में डिफाइन करूंगा इसको, ठीक है। बट ये डिसीजन भी आपको इनिशियली ही मेड करना पड़ता है कि आप जो डेवलपमेंट करेंगे वो किस मोड में करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आता है थर्ड, जो या तो आपने मान लिया कि स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने मान लिया डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं तो उसमें गेटवे आपने एक लेना है, दो लेना है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट लिया, एक सिंगल एसएमएस ले लिया और एक सिंगल गेटवे ले लिया। बोलो जी क्लाइंट से हम एसएमएस यूज करेंगे और एसएमएस से हम एक सिंगल गेटवे मैनेज कर रहे हैं फॉर नाउ, यानी अगर 2020 में डिप्लॉयमेंट हुई है तो ये डिप्लॉयमेंट कर दो, फ्यूचर में 2021 में या 22 में हम एक और गेटवे लेके इसको एचए में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन भी आपको इनिशियली ही लेना पड़ेगा कि आपको एचए क्रिएट करना है हाई अवेलेबिलिटी या नहीं क्रिएट करना। या फिर हो सकता है कि स्टैंड अलोन में बंदा बोले कि भाई ये आपका क्लाइंट हो गया, ये आपका स्टैंड अलोन का बॉक्स हो गया, आप इसी में ही वो कर दो। अगर तो ये आपको बोलता है बंदा ये सिनेरियो बनाने के लिए, क्योंकि जो ऑपरेशन वाले पर्सन होते हैं ना उनको इतना रिस्क का क्या बोलते हैं नॉलेज नहीं होता कि रिस्क क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स। अगर जो तो ये आपको बोला जाता है कि एक क्लाइंट और एक मतलब स्टैंड अलोन डेवलपमेंट करो, जो स्टैंड अलोन का बॉक्स है उसको दो कर दो, तो उस केस में आप उनको रेकमेंड करें कि सर इससे तो बेटर है आप ये वाली डिप्लॉयमेंट करें, ये वाली। आप यहाँ पे दो दो मैनेजमेंट सर्वर और दो दो फायरवॉल क्यों बना रहे हो? अगर आपके पास 3 रिसोर्स है, गो फॉर दिस वन। इससे क्या होगा कि आपके एक सिंगल डिवाइस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस कि आपका ट्रैफिक बहुत हाई पास हो रहा है, बहुत ज्यादा यूजर है आपके, है ना। और ये स्टेबल भी रहेगा, आरएमए करने में इजी टू मतलब मेंटेन होगा ये एनवायरनमेंट, कि आपकी जो पॉलिसी बैकअप्स हैं वो सारे आपके मैनेजमेंट सर्वर पे हैं, गेटवे बैठ भी गया तो आप इसको आरएमए कर दो। लेकिन अगर यही बैठ गया
तो आप इस पे आ जाओगे। और अगर ये बैठा है तो उसका एक रीजन होगा कि हाई यूटिलाइजेशन या कुछ भी गया। अगर सेम सिचुएशन यहाँ भी हो गई, दोनों बैठ गए ये लोग, बट अगर मान लो ये बैठा है आपका गेट पे, आपका मैनेजमेंट सर्वर तो सेफ है ना, पॉलिसीज बैकअप सारे लॉग्स इस पे सेफ है ना। अगर आता है आपका फायरवॉल, आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको फायरवॉल प्लग करना होगा, मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्टिविटी बनानी है और पॉलिसी पुश कर देनी है। वो पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर जाएगी गेटवे में, आपका नेटवर्क चल गया। मेक सेंस? कोई क्वेश्चन? No, Vikas. नीलेश, No, क्वेश्चन? no, sir. No. ठीक है, तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट हम बनाने वाले हैं अपने लैब में। ठीक है, ये हमारा एसएमएस हो गया। आईपीज हम थोड़ा चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, बट मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये जो स्लाइड है ना, जो मैं आपको शो कर रहा हूं, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो आप, और प्रिंट स्क्रीन लेके अपने नोटपैड में सेव कर लो। रीजन कि अगर मान लो आप अपने सिंगल लैपटॉप पे आप ये लैब बनाते हो, वर्चुअल लैब, तो कि इस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है आप, और ये डिप्लॉयमेंट आपके लिए इजी टू सेटअप होगी अगर आप अपने लैपटॉप पे करते हैं तो। और जो लैब मैं करवाऊंगा उसका तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर ही दूंगा कैसे करना। ठीक है, चलो जी, परीक्षा की घड़ी। मुझे यार फटाफट 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें बता दो, हम नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ, कौन बताएगा? Because of its next generation firewall capabilities, easy to deploy. Okay. And 3-tier architecture that okay, makes it easy to manage. Okay. Okay. Or second, smart is secure management, secure console, management server, and secure gateways. security management architecture. Yeah, security management architecture. Yeah. I was going through the 3 those. SMS is secure management server. ठीक है नीलेश, स्मार्ट की डेफिनेशन हमने कल डिस्कस करी थी। ठीक है, स्मार्ट, हाँ, स्मार्ट स्टैंड फॉर एस मींस सिक्योरिटी, एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट, और ART लिया गया है आपके आर्किटेक्चर से। ठीक है, यस। अब ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके L1 के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। व्हाट इज SMS, व्हाट इज स्मार्ट। और अगर आप प्री सेल्स में जाते हैं ना, प्री सेल्स की प्रोफाइल होती है ना, yes. उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 110%। सर L2 के प्रोफाइल के लिए धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अभी जो सेशन हमने आज तक जो कंप्लीट किया है ना, उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये L1 लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। Okay. पूछने के लिए आपसे ये जो सैम डेटाबेस है, इसका कॉन्सेप्ट आपसे L2 में पूछ लेगा, क्या दिक्कत है? Okay. इट्स नॉट अ बिग डील। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये L1 लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, SMS स्टैंड्स फॉर secure management server. Perfect. What is 3-tier architecture? You know, right? Yes. Yes. What is packet flow? याद है 10 के 10 लेवल? Yes. SAM database, anti-spoofing, session lookup, route lookup, policy lookup, destination at. Then we have a route lookup, source net, layer 7 inspection, VPN, routing. Perfect. Guys, I'm proud of you. Believe me. चलिए, SAM database पता है? बता देंगे? Yes. Pretty clear है? Explain कर दोगे? Yes. Anti-spoofing? Done. नीलेश, ये दोनों ही टर्म थोड़ी सी क्रिटिकल हैं,
मैं नहीं चाहता मैं आपको जल्दीबाजी में बताऊं। आप प्लीज कल का सेशन देखना, हमने उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ओके ओके है ना? ओके। सो दैट बीइंग सेड, हमारा एक लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड। स्क्रीन दिख रही है? यस। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। आई बिलीव जो शेयरिंग है वो न्यू स्लाइड दिख रही नहीं दिख रही? लेक्चर दिख 3 रही की। है सर, दिख रही है। सो लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो वेलकम आप सभी का कि आप लोग यहाँ पे आए चेक पॉइंट पढ़ने के लिए। आज का जो हमारा जो मतलब मोटिव होने वाला है वो है कि हम लैब डिप्लॉयमेंट और थोड़ा सा अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम डैशबोर्ड के फीचर्स एंड ऑल को हम देख सकें। ठीक है, अगर टाइम बचता है 2 आवर्स के बाद तो। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि लैब डिप्लॉयमेंट तो मैं आपको करवा ही दूं ईवीएनजी पे। आप लोगों को लैब का एक्सेस मिल गया सबको? यस लैब का एक्सेस मिल गया ना? परफेक्ट परफेक्ट। तो ईवीएनजी पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा दूं, आज मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये चेक पॉइंट का बॉक्स है। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है ये। और अगर आपको डिप्लॉयमेंट में कभी मौका मिलता है फिजिकल बॉक्स का तो कुछ इस तरीके से बॉक्स आपके सामने आएगा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो टॉपिक पे हम चल रहे हैं दिस वन लेक्चर 3 कि हम लैब क्रिएशन देखेंगे। वीएम पे नहीं कर रहे, हम ईवीएनजी पे कर रहे हैं। ठीक है, वीएम पे अगर आपको करनी है तो आप खुद के लैपटॉप पे कर सकते हैं। उसके लिए जो रैम की रिक्वायरमेंट होती है 4 से 8 जीबी की रैम चाहिए आपको मिनिमम। ठीक है, अगर आपके पास हार्डवेयर ऐसा है कि आप 4 से 8 जीबी रैम है उसकी तो आप इजीली वीएम पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ईवीएनजी अपने लैपटॉप में डाल के ईवीएनजी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये बेसिक अच्छा कौन होता है किस पे लैब करना? देखो फर्क जो है ना दोनों का, वीएम का और ईवीएनजी का। ईवीएनजी में क्या होता है, आपको टोपोलॉजी बनाने का एक डायग्राम मिलता है। ठीक है, कि ये मान लो आपका पीसी हो गया, यहाँ से आप स्विच पे गए, स्विच के आगे फायरवॉल लगा हुआ है, उसी के नीचे आपने दूसरी फायरवॉल लगा दी, यहाँ पे फिर एक और स्विच लगा दिया। तो ये सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ना ईवीएनजी पे देखने को मिलता है। अगर आप वीएम पे लैब बनाते हैं ना तो ये आपको अपने पेन और पेपर से कॉपी बनाना पड़ेगा। उसके बाद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी यहाँ कि किससे क्या कनेक्शन देना है, किससे क्या आईपी देनी है, ये सारे आपको पेन एंड पेपर पर करना पड़ेगा। वहां पे कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो बस बेसिक सा डिफरेंस इतना है। बट मुझे लगता है कि अगर आप वीएम पे करते हैं तो आप रियल टाइम इश्यूज को फेस करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिप्लॉयमेंट होती है या तो वो वीएम पे होगी या फिर वो फिजिकल बॉक्स होगी। करेक्ट? यस। तो फिजिकल बॉक्स अगर मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको करने में। आपको उसमें कनेक्ट करना है और ओके ओके करना है, जो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। बट अगर वीएम पे आप करते हैं ना तो वीएम पे आप एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं रियल नेटवर्क में, रियल डिप्लॉयमेंट में, वो चीजें आप फेस करते हैं वहां पे कि नेटवर्क से मैं मतलब जो नेटवर्क अडेप्टर है मेरा उसको ब्रिज किसके साथ करूं, उसका लैन कैसे क्रिएट करूं, उसमें फिजिकल इंटरफेसेस कैसे ऐड करूं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस पर ट्रबल शूटिंग करेंगे तो आपको वीएम की भी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कर तो रहते आप चेक पॉइंट की लैब और साथ में आपने वीएम वेयर का भी एक छोटा सा कोर्स कर लिया खुद से खुद। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है वीएम का। अदरवाइज अगर इसका बेनिफिट है तो इसका घाटा ये है कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। ठीक है ना? अच्छा, ये जो सेक्शन है ना इसको एज इट इज प्रिंट स्क्रीन ले लो और अपने नोट्स में मैनुअल लिखना इन सब की डेफिनेशन।
इसकी डेफिनेशन आप यहां से, ये जो मैंने लिखी कॉपी पेस्ट मत करना, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, चलिए। तो जब हम चेक पॉइंट की पॉलिसीज बनाते हैं ना, तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, उन पॉलिसीज को हम कुछ बोलते हैं। वो पॉलिसीज क्या होती हैं? एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूं। कभी सुना है इन 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 टाइप्स के बारे में? मैनेजमेंट रूल, स्टेल्थ रूल, इंटरनल रूल। Yes. I think you are Sanchit, right? Yes. I think you are working on checkpoint, correct? Yes, actually I'm working on all the major firewalls. Yeah. So that is why you have heard, but I'm asking the people, like, किसी ने सुना है इन टर्म्स के बारे में? चलो, सबसे पहला जो टाइप आता है ना पॉलिसी का, सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट रूल। अब मैनेजमेंट रूल क्या होता है? सबसे जब हम फायरवॉल पे पॉलिसी क्रिएट करते हैं, मान लो हमने फायरवॉल डिप्लॉय कर दी, तो सबसे पहला जो रूल हम क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट रूल। एंड वो क्या होता है, वो क्यों बनाते हैं? वो रूल होता है इन केस अगर मान लो जो हमारा पीसी है, उसके बाद एसएमएस सर्वर है, उसके बाद हमारे जो गेटवे हैं, अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पीसी से एसएमएस की कनेक्टिविटी चली गई या गेटवे की कनेक्टिविटी चली गई, तो आउट ऑफ द बॉक्स एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए इस पीसी से इस गेटवे की, ताकि जो ये कनेक्टिविटी ब्रेक हुई है उस कनेक्टिविटी को हम रिस्टोर कर सकें। ठीक है, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट रूल। नंबर 2, स्टेल्थ रूल। व्हाट इज स्टेल्थ रूल? स्टेल्थ रूल, ये जो आपने मैनेजमेंट रूल बनाया है, ठीक है, इसमें आपने स्पेसिफिक सबनेट से दे दिया एक सोर्स, और डेस्टिनेशन में आपने ये गेटवे और मैनेजमेंट सर्वर दे दिया, और आपने बोल दिया कि भाई ये जो सबनेट या फिर ये आईपी जब कोशिश करे इस गेटवे और मैनेजमेंट सर्वर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट नंबर 22 और मे बी 80 और 443, तो एक्सेस ग्रांट हो जाए। बट स्टेल्थ रूल में आप बताते हो कि अपार्ट फ्रॉम दिस एडमिन या दिस सबनेट, अगर कोई और पर्सन या नेटवर्क और आईपी will try to connect this SMS server or these gateways, those connections should not be allowed. उसको इमीडिएटली आपने ब्लॉक करना है। तो ये चीज भी आप मैनुअली फायरवॉल पे डिफाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड स्टेल्थ रूल। The rule which we create to prevent our gateways to grant access to any unauthorized persons. Clear है? उसके बाद आते हैं इंटरनल रूल्स। अब ये इंटरनल रूल्स क्या होते हैं? जो भी रूल आप फायरवॉल पे क्रिएट करते हो ना, अलाउ, डिनाई, ड्रॉप, बायपास, जो भी आप क्रिएट करते हो, वो सब के सब इंटरनल रूल कहलाते हैं। ठीक है, देन आता है क्लीन अप रूल। अब देखो, क्लीन अप रूल is most important rule when I say in checkpoint terms. Why? Because जो most of the troubleshooting होगी आपकी, वो cleanup rule की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, पॉलिसी मान लो आपकी इतनी, ये 1000 पॉलिसी आपने बना दी, ठीक है, सबसे लास्ट में एक पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर करोगे which will be source any, destination any, an action deny और ड्रॉप, एंड लॉगिंग में लॉग इनेबल करोगे आप।
क्या करोगे? लॉग इनेबल। तो जब भी कोई नया ट्रैफिक आता है वो इन सारे रूल से होते हुए नीचे जाएगा। अगर इन सारे रूल्स में से किसी भी रूल पे वो मैच नहीं करता है तो क्लीन अप रूल पे जाके वो ड्रॉप हो जाएगा और लॉग जनरेट हो जाएगा। तो अगर तो आपका ट्रैफिक अगर क्लीन अप रूल पे जाके ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स यू डू नॉट हैव any rule on the firewall for this source and destination. You need to create one. And अगर तो ट्रैफिक ऑलरेडी है आपके पास, सॉरी रूल ऑलरेडी है आपके फायरवॉल पे, स्टिल यू आर गेटिंग हिटेड बाय क्लीन अप रूल, इन दैट केस यू नीड टू ट्रबलशूट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद योर फायरवॉल। जैसे अभी संचित एक्सप्लेन कर रहे थे कि संचित क्या था वो, कि नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट यूज हो रहे थे, क्या था वो? सर नॉट इंस्पेक्टेड टाइप यूज हो रहा था, पोर्ट नंबर इंस्पेक्टेड, नॉट इंस्पेक्टेड टाइप पोर्ट्स यूज हो रहा था रूल में। दैट इज वाई दैट रूल वाज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द ट्रैफिक, इट वाज गेटिंग ड्रॉप्ड विद द क्लीन अप रूल। ठीक है, इस क्लीन अप रूल को समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी वर्किंग भी और इसका कॉन्सेप्ट भी। अब इन चारों रूल टाइप में कोई डाउट है तो फटाफट बता दो, एनी डाउट? शमशाद, नीलेश? Sir, first of all, we would like to know that what is the rule and where is it created on firewall? All right. Okay. Yes, sir. See, rule stands for ACL, stand for access control list. ठीक है, अब ये क्या होता है, ये वो रूल्स होते हैं, वो कंडीशंस होती हैं जो हम फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए या डिनाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रूल ऑन द फायरवॉल। मेक सेंस? यस। एंड कहां बनाते हैं वो थोड़ी देर में हम देख लेंगे लैब में। अगर आज नहीं देखे तो नेक्स्ट लैब में हम देख ही लेंगे। कूल? एंड डोंट वरी, ये जो सारे रूल्स है ना, ये हम बनाएंगे खुद अपने फायरवॉल पे, अपने फायरवॉल की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, so that we also call it types of policies. Yeah, there are types of policies. आपकी जो पॉलिसी बेस होता है उसको आप कैटेगराइज करते हो इन 4 टाइप्स में। Okay. We can say that the types of first policy is management rule policy and stealth rule policy and internal rule policy and cleanup rule policy. देखो, इस तरीके से ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, है ना, कि पहला जो रूल है वो मैनेजमेंट रूल है, दूसरा जो है वो स्टेल्थ रूल है, ऐसा ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप जब पॉलिसी सेक्शन को देखोगे ना, उसमें सोर्स, डेस्टिनेशन और पोर्ट नंबर और एक्शन देख के आप मतलब अंदाजा लगा लोगे कि ये क्या रूल है, ये किस लिए रूल बनाया गया है। और अगर if in interview sir, an interviewer asks me please brief types of policy, what we have to answer? These policies: management rule, stealth rule, Okay. internal rule, cleanup rule. And I'm sure अगर L1 के लिए आप जा रहे हो ये पूछा जाएगा आपसे, I'm sure, I'm 100% sure. ठीक है, एनी अदर क्वेरी? अब मैं बता देता हूं आपको कि किस लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जिस लेवल पे हो उस अकॉर्डिंगली आप लोग ध्यान दे देना। आप अगर तो L1 जा रहे हो या फिर L2 जा रहे हो, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज,
है ना। मैनेजमेंट रूल, इंटरनल रूल, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं L1 लेवल के इंटरव्यू में। अब टाइप्स ऑफ पॉलिसी जब पूछी जाएंगी, आप बताएंगे तो हो सकता है आपसे वहीं के वहीं पूछा जाए, अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट रूल क्या होता है, स्टेल्थ रूल क्या होता है, इंटरनल रूल क्या होता है, या क्लीन अप रूल क्या होता है। तो ये चीजें आपसे L1 लेवल पे पूछी जाएंगी। L2 पे जा रहे हैं तो आपसे टाइप्स ऑफ पॉलिसी ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, सीधे आपसे पूछेगा व्हाट इज स्टेल्थ रूल एंड व्हाई वी क्रिएट, व्हाट इज क्लीन अप रूल एंड व्हाई वी क्रिएट। ठीक है। एंड अगेन L2 पे व्हाट इज एक्सप्लिसिट रूल, जो ये दोनों रूल्स है जो हम अभी डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लिसिट रूल और इम्प्लिसिट रूल। अच्छा संचित, एक चीज मुझे बताओ, आप जैसे आप काम कर रहे हैं अभी चेक पॉइंट पे, हाँ जी सर। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना जो L1 L2 का मैंने बताया, तो थोड़ा सा इन पे फोकस करना आप लोग, ठीक है। एक मिनट सर, मैं एक बार, हाँ डन, प्लीज गो अहेड। सॉरी यार, मैंने रब कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं कोई पूछ इशू लूंगा, नहीं, ठीक है। कोई इशू नहीं। इफ यू वांट आई कैन टाइप इट, लाइक राइट इट अगेन। नो 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 इश्यूज। एक्चुअली सर मैं नोट्स बाद में आराम से बनाता हूँ, मैं भी सिर्फ वो स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ। हाँ, that's also a cool thing, you know, better approach even. एक्सक्यूज मी सर। Yes please. ये टाइप्स ऑफ पॉलिसी जो है, इसको मैं जैसे रिकॉर्डिंग सेशन तो रहेगा, तो इसको मैं नोट्स बना के इसको खुद कॉपी पे लिख सकता हूँ ना, अपना हाँ हाँ पर्सनल हाँ। नोट्स बना के। देखो इसको ना, जो मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, इसको कॉपी पेस्ट मत करना। नो नो नो, मैनेजमेंट रूल लिखना और उसके बाद सुनना मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, वो एक्सप्लेनेशन को अपने खुद के वर्ड्स में लिखना। हाँ वही मैं बोल रहा था। हाँ ठीक है, चलो। वो तो अभी वीकली क्लास है, तो 5 दिन फ्री रहूंगा, तो उसको मैं अपने खुद के वर्ड से अपना हाफ एन आवर 1 आवर जैसे टाइम मिलेगा उस अनुसार मैं उसको लिख के अपना को कुछ ये कर सकता, नोट्स प्रिपेयर। हाँ हाँ, यू कैन डू इट। ओके, सो संजित, मैं आपसे पूछ रहा था, आप जैसे अगर आप काम कर रहे हो, तो आई थिंक जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाओगे तो यू विल गो फॉर आई थिंक L2 और L3 प्लस, राइट? करेक्ट। L2 प्लस, राइट? करेक्ट। वहां पे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम क्लीन अप रूल को ना बनाएं तो क्या होगा? सर ये तो अभी भी पूछा जाता है। अच्छा, तो आप क्या जवाब देते हैं उसका? सर क्लीन अप रूल को अगर हम नहीं बनाएंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो यूटिलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, जितना मैं इसको समझ पाया हूँ। और दूसरा, जीरो ट्रस्ट नाम की चीज खत्म हो जाएगी। एक जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का एक जो कॉन्सेप्ट है जीरो ट्रस्ट का, कि they don't trust because they have a cleanup rule at the end that no traffic is allowed from one end to other end. Because in ASA क्या होता था, सिक्योरिटी लेवल्स पे काम करता था ASA, कि ट्रस्ट टू अनट्रस्ट अलाउड कर देना, और अनट्रस्ट टू ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक इज नॉट अलाउड। तो वो चीज जो है, वो चीज बाय डिफॉल्ट, चाहे पालो अल्टो हो, चाहे फोर्टीगेट हो, चाहे चेक पॉइंट हो, ये तीनों कॉन्सेप्ट लेके आए जीरो ट्रस्ट का, कि चाहे लैन हो चाहे वैन हो, हम कोई भी ट्रैफिक तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं होगी। अदरवाइज वो एक रूल को हिट करेगा। और ये जो रूल है, इट्स टाइप ऑफ एन इम्प्लिसिट डिनाई। ये जो क्लीन अप रूल हम बना रहे हैं वो? यस। अच्छा ठीक है। I think I am confused in the implicit और explicit deny। जो cleanup rule हम बना रहे हैं वो explicit deny है। अगर कोई रूल नहीं होगा तो वो ट्रैफिक implicitly deny होगा। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम क्लीन अप रूल नहीं बनाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा, राइट? तो अगर देखो इम्प्लिसिट बना, जैसे एक्सप्लिसिट रूल हम बना, मतलब सॉरी, अभी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट नहीं बोलते हैं, ये बाकी के लोग जो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लेमन टर्म में बात करते हैं
कि जो रूल हम बना रहे हैं क्लीन अप रूल, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक ड्रॉप हो, और अगर क्लीन अप रूल नहीं है तब भी बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। तो हम क्लीन अप रूल क्यों बना रहे हैं सर? क्योंकि मुझे इतना इन डेप्थ नहीं पता इसमें, बट लेकिन हाँ मैं इस चीज को एएसए से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि एएसए में वही मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट था कि बाय डिफॉल्ट जो भी आप ज्यादा सिक्योरिटी, उसमें क्या होता है हर इंटरफेस में ना हम सिक्योरिटी लेवल दे देते हैं। संचित, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप एक तो एएसए को किसी से कंपेयर मत करो ठीक है, एएसए बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली है ना, एएसए तो मतलब आप, मैं कह रहा हूँ मतलब आप उसको कंपेयर, हाँ आप पालो अल्टो कंपेयर करो, आप फोर्टिगेट करो, सोनिक वॉल करो, बट एएसए से कंपैरिजन मत करो। कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर नीचे हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप 70% तक पहुंच गए थे वहां पे जहां पे आपको आंसर करेक्ट देना चाहिए था, बट ड्यू टू नो अंडरस्टैंडिंग आप थोड़ा सा रह गए। मैं क्लियर कर देता हूं उस चीज को, और मैं होप करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आप इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर दें। एक तो ये जो ट्रस्ट वाली बात है ना, ये चेक पॉइंट में कभी मत बोलना। देयर इज नो ट्रस्ट कॉन्सेप्ट इन चेक पॉइंट। अगर आप रिलेट करोगे तो हाँ ट्रस्टिंग आती है कि भाई ठीक है ये मेरा डीएमजी जोन है, ये मेरा वो है, बट यहाँ पे हम कोई मतलब ट्रस्ट अनट्रस्ट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है कि हम क्लीन अप रूल क्यों बना रहे हैं, अगर क्लीन अप रूल नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर इन केस क्लीन अप रूल हम नहीं बनाते हैं तब भी ट्रैफिक ड्रॉप ही होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है गाइस, डिनाई होगा ना ये। हाँ गाइज प्लीज नोट कर लेना, बाय डिफॉल्ट फायरवॉल सारा का सारा ट्रैफिक ड्रॉप करेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास क्लीन अप रूल नहीं है तो वो ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाई ही होगा, ड्रॉप ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है। अगर बाय डिफॉल्ट वो ड्रॉप ही है तो हम क्लीन अप बना क्यों रहे हैं? बिकॉज ये जो ड्रॉप का आपका रूल होता है इसमें लॉगिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? लॉगिंग नहीं होती। अगर तो वो डिफॉल्ट ड्रॉप हो रहा है ना तो वो लॉग जनरेट ही नहीं करेगा चेक पॉइंट। करेक्ट 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 सर। और अगर जो क्लीन अप रूल आप बना रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप कर वही काम रहे हो कि सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, एक्शन ड्रॉप या डिनाई, सॉरी विद लॉगिंग एंड लॉगिंग इनेबल, कि भैया इस रूल पे अगर कोई ट्रैफिक ड्रॉप होता है तो मुझे लॉग मिल जाए एटलीस्ट, ताकि मैं ये बता सकूं अपने यूजर को कि ये या तो नया सेटअप है या फिर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है आपके सोर्स एंड डेस्टिनेशन में, जिस वजह से यहाँ पे कोई रूल हिट नहीं हो रहा और आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी रूल क्रिएशन के लिए। मेक सेंस? Yes, sir. Any doubt in this No, sir. discussion apart from Sanchit? Sir, I have one dot. Go ahead. Sir, dot in checkpoint firewall. I am working on ASA. I don't know about the checkpoint firewall. In ASA, traffic allows from higher security level to lower security level by default. So in checkpoint, security level concept is not there in checkpoint. Okay. No. So how traffic is flow from one interface to other interface? You make it flow. It is by default. It is not allowed. There is no concept of high trust, no trust, and any trust. No. My question is this: but traffic how can follow in the checkpoint? It has to match a security policy. Yes. Agar to, if you want it to get passed by the checkpoint, yes, you have to create a rule. Types of policy. Yeah, you have to create an internal rule. Okay. And if there is no rule, if there is no policy, it will be dropped. Packet will be dropped. Yeah.
Okay, so in cleanup rules, if we are not applying the cleanup rules, then by default packet will be dropped, but we are not able to find any type of logs. Yes. If we apply the cleanup rules, then packet will be dropped, but we are finding the logs. That is the main difference, na? Yes. Yes. So can I note on my note paper? Yeah. You can note. See, first of all, it's not rules actually. Cleanup rules नहीं होता. This is rule. It is only one rule actually. ठीक है? Cleanup rule. It's my typing mistake. So cleanup rule और जो by default checkpoint का behavior होता है वो same होता है. Difference is in cleanup rule we define logging, and there is no logging. Okay, cleanup rule में we define logging and by default if we not applying cleanup rules, then automatically packet will be dropped and there is no logging. Yes. You'll not be able to troubleshoot. Okay. Okay, understood. अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट रूल्स की और इम्प्लिसिट रूल की। एक्सप्लिसिट रूल वो होते हैं जब L2 में आप जाओगे तो ये जरूर पूछा जाएगा, ये डिफरेंस पूछा जाएगा। एक्सप्लिसिट जो रूल होते हैं वो कौन से रूल होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर खुद बनाते हैं फायरवॉल पे। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपने क्लीन अप रूल बनाया, दैट इज एक्सप्लिसिट रूल। आपने मैनेजमेंट रूल बनाया, दैट इज एक्सप्लिसिट रूल। आपने स्टेल्थ रूल बनाया, दैट इज एक्सप्लिसिट रूल। आपने इंटरनल रूल्स बनाए 1000 एक साल में, दोज ऑल आर एक्सप्लिसिट रूल्स। मेक सेंस? यस। एंड अगर जो आपने क्लीन अप रूल नहीं बनाया और जो ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है बाय डिफॉल्ट, दैट रूल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट रूल, जो बाय डिफॉल्ट होते हैं फायरवॉल के अंदर। क्लियर? यस सर। ये आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करना और ये दोनों टर्म्स को अच्छे से क्लियर करना माइंड में, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। इम्प्लिसिट पूछेगा, आप एक्सप्लिसिट बता के आ जाओगे, इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और फिर बोलोगे फीडबैक नहीं आया। ठीक है? नो सर, इम्प्लिसिट रूल्स जहां तक मुझे पता है, इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट पॉलिसी आर अवेलेबल इन ईच एंड फायरवॉल, दैट इज द इम्प्लिसिट रूल। इफ वी आर चेंजिंग एंड इफ वी आर क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ पॉलिसी ऑन द फायरवॉल, दैट इट कम्स अंडर एक्सप्लिसिट रूल्स। यस, यू आर करेक्ट। और क्लीनअप रूल जो है वो एक्सप्लिसिट रूल्स के कैटेगरी में आएगा कि इम्प्लिसिट? हाँ, क्लीनअप आप बना रहे हो ना, तो एक्सप्लिसिट में आएगा। हाँ। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये सब क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। और नेक्स्ट सैटरडे को जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मैं एक बार इसमें से कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है? बट प्लीज आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये डैशबोर्ड है अपना चेक पॉइंट का। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे से हम इस पे काम करेंगे। तो आपको याद है जो मैंने एक क्लाइंट पे, ये क्लाइंट था, ये SMS सर्वर हुआ, ये गेटवे हुआ, ये चीज याद है ना आपको? तो ये जो क्लाइंट है ना, जब आप क्लाइंट पे SMS को एक्सेस करोगे तो ये विंडो आएगी आपके पास, और ये लोगो है स्मार्ट डैशबोर्ड का, कुछ इस तरीके का लोगो आ गया। ठीक है? अब कोई मुझसे पूछ रहा था कि
फायरवॉल रूल क्रिएट कहाँ करते हैं? जब इस डैशबोर्ड को आप एक्सेस करोगे, ये रहा गेटवे एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जितनी भी आपके गेटवे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे सिंगल गेटवे है या फिर यहाँ पे 2 गेटवे हैं जो उसमें एचए में है, तो ये दोनों गेटवे की इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में मिलेगी। सेकंड है पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसीज। यहाँ पे आप जाके पॉलिसीज डिफाइन करेंगे। अभी ये सिर्फ जनरल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में हम इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपका लॉगिंग का फीचर हो गया एंड ये सेटिंग्स हो गया। ये जो ऑप्शन है, यहां से आप चेंजेस को पब्लिश करते हैं एंड यहां से आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, ये जो मैनेजमेंट सर्वर का आपने एक्सेस लिया हुआ है, यहां से ये पॉलिसी गेटवे पे रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? सेम वही आई थिंक आई हैव लॉस्ट वन स्लाइड। ओके, ये सेम लैब का सिनेरियो। ठीक है, अब एक यार इंटरव्यू क्वेश्चंस का यहाँ पे सेक्शन था जो कि आई थिंक मिस हो गया मेरे से, मैं सेव नहीं कर पाया उसे। तो इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ। किसकी तरफ? लैब की तरफ। मैं फटाफट एक्सेस कर लेता हूँ। मेरी EVNG की स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? नेगेटिव सर। नो सर। EVNG अभी बताओ। हाँ जी सर, दिख रही है। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड देना, मैं अपना माउस पिक कर लूं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की लैब मिल गई है कोई आप लोगों को, राइट? यस सर। ओके, सो ये मैंने एक डेमो ओपन भी किया था, मैंने आप लोगों के लिए लैब बनाई थी। ये सर लैब जो मिला है, ऐसे जो ये टोपोलॉजी मिला है, सो इसको अपने सिस्टम में हम हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर? सिस्टम में मींस उस पे पर्सनल लैपटॉप पे। ये पर्सनल लैपटॉप पे ही तो करोगे आप? हाँ, तो पर्सनल लैपटॉप पे करेंगे तो वी हैव टू बी कॉन्फ़िगर स्विच, वी हैव टू बी कॉन्फ़िगर गेटवे, स्विच 6 मैनेजमेंट सर्वर ऑन माय सिस्टम, पर्सनल लैपटॉप। देखो, लोकली अगर आपको करना है ना आपके फिजिकल मशीन पे, ऑफलाइन डिप्लॉयमेंट अगर आपको करनी है तो आपको VMware से करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली में क्या ना, जैसे मैंने कभी लैब किया नहीं है अपने पर्सनल सिस्टम में, देन हाउ कैन आई एक्सेस एंड हाउ आप कैन आई? ऐसे करो ना, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना? यस। हाँ, तो आप जो आपको EVNG का जो एक्सेस मिला है, नेटवर्क किंग से जो लैब मिला है, उस पे लैब बनाओ, आप सारी चीजें कॉन्फ़िगर करो वहां पे। मैं बता रहा हूँ ना कैसे करनी है आपको। अच्छा, तो ये लैब है आपके पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए इस लैब को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे EVNG पे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, राइट? तो EVNG सर लॉगिन कहाँ पे होगा? गूगल से करना पड़ेगा अपने सिस्टम हाँ, में? आपको लिंक मिलेगा, आपको लिंक मिला है ना नेटवर्क किंग से? यस यस। हाँ, लिंक पे क्लिक करो, आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालो और आपको ये विंडो खुल जाएगी आपकी। EVNG का? हाँ, यस ये विंडो EVNG की है, ये विंडो यस। rex.networkkings.com, पोर्ट नंबर 8099। ओके, ठीक है, यस। अच्छा ये मैंने फोल्डर बनाया है। ठीक है, CCSA प्लस CCSC। अभी ये ओपन नहीं हो रहा ड्यू टू सम रीजन, रेस्ट्रिक्शंस में भी। मैं गौरव से बात करके इसका एक्सेस ले लूंगा और आई मेक श्योर कि जितनी भी हमारी लैब्स हैं वो सारी इसमें स्टोर हों ताकि आप फ्यूचर में इनका रेफरेंस ले सकें। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही आप इस पेज पे लैंड हुए, आपके पास ये सारे ऑप्शन है ना? यस इस पे ऐड न्यू लैब पे जाओ। यस। चेक पॉइंट CCSA CCSC_lab_1। ठीक है, वर्जन 1 ऑथर। आई डोंट थिंक हमारे पास ये एक्सेस है। मतलब ये लैब ऐड करने का लिंक का तो एक्सेस है, बट लैब नहीं हम ऐड कर सकते। एक बार गौरव से बात कर लेना यार, वो मिल जाएगा आपको एक्सेस, है ना? नहीं, उन्होंने कल भी सेशन में यही कहा था कि अगर आपको कोई टोपोलॉजी चाहिए देन लेट मी नो, वो टोपोलॉजी हम आपको विद इन 30 मिनट्स हम प्रोवाइड कर देंगे।
बट इसका एक्सेस नहीं देंगे वो EVNG के न्यू टैब का। हाँ, आपको एक टोपोलॉजी दे देंगे वो, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, अगर आपको टोपोलॉजी मिल जाती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या है, आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन करो अपनी, नहीं? करेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा, EVNG पोर्टल लॉगिन करने से ये सारा चीज मुझे ये टोपोलॉजी मिल जाएगा अपने सिस्टम पे। ये मैंने 2 चेक पॉइंट ले लिया मान लो, ठीक है, या फिर एक काम करो, क्लोज करो। अगर तो वो आपको बोलते हैं कि आपको टोपोलॉजी बना के दे देंगे, तो आई बिलीव कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी बना के दे देंगे आपको। अब आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन कैसे करना है, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल रॉ टोपोलॉजी बनाई हुई है, इसमें मैंने अब तक कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई, ठीक है। तो इस पे करना है या नया नया लैब बनाएं, आप लोग बताओ। एक नया लैब बनाइए ना। ठीक है, तो अगर जैसे गौरव साहब की बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आपको लैब टोपोलॉजी बना के दे, तो कुछ इसी की टोपोलॉजी बना के दे देंगे और आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, राइट। अब देखिए, इस लैब को मैं क्लोज करता हूं, हम बना लेते हैं लैब 1 जो इस पे हम काम कर रहे थे। ये मैंने एक विंडो का पीसी ले लिया, ये मैंने सबसे कॉर्नर में यहाँ रख दिया, और इसका मैंने इसको एडिट कर दिया एडमिन पीसी, ठीक है। हुआ क्यों नहीं नाम इसका यार, एक मिनट, नोड पे गए, विंडोज डाला, यहीं पे चेंज कर देते हैं एडमिन पीसी, हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्पेस का प्रॉब्लम था। एडमिन पीसी ले लिया मैंने यहाँ पे, और एक मैं ले लेता हूँ स्विच, ठीक है। ये मैंने एक स्विच ले लिया, ये लो, ये स्विच ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा चेक पॉइंट का क्या हो गया, एसएमएस, एसएमएस मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। और ये हो गया आपका एडिट cp अंडरस्कोर गेटवे, ओके, चेक पॉइंट अंडरस्कोर गेटवे 1, ठीक है। ये पहला कनेक्शन मेड कर दिया मैंने, उसके बाद स्विच का कनेक्शन किया मैंने ईथरनेट 0/0 से, ठीक है, ओके किया। उसके बाद इस स्विच का कनेक्शन इस गेटवे से कर दिया, ईथरनेट 0/0, ठीक है। इतना, किसी कुछ डाउट? अब क्या करते हैं हम, सबको ना ऑन कर लेते हैं, मोर एक्शन स्टार्ट ऑल नोड्स, ऑलराइट। ये सारे के सारे आपके कलर चेंज हो गए ना इनके,
ये सब ऑन हो गए हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है और ये देखिए आपका एक्सेस हो गया स्टार्ट विंडो नॉर्मली। ये विंडो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमें दोबारा एंटर प्रेस करना है कि आपको डिस्क चेक नहीं करना है। अब ये आपका विंडो मशीन लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सर्वर को लॉन्च कर लेते हैं। इसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है यहाँ पे वो है एडमिन 123। ठीक है, गेटवे पे एक्सेस हमें मिल गया, करेक्ट। ये अगेन सर्वर आ गया यार। ओके ठीक है, कोई नहीं, सर्वर पे काम कर लेते हैं हम। ये हमारा मैनेजमेंट सर्वर हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है CMD में। ठीक है, हमें क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िग चेक करना है। आईपी कॉन्फ़िग क्या है, 10.1.1.10 है और गेटवे है 1.1.1। ओके, अब हम इस पे जाएंगे अपने मैनेजमेंट सर्वर वाले गेटवे पे। इस पे हम चेक करेंगे शो इंटरफेस ETH 0। अब ETH 0 क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये फायरवॉल कनेक्टेड है वो ETH 0 पे है, राइट। दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes. तो that is why we have checked the configuration of ETH 0। अब बाय डिफॉल्ट जो आईपी इसको असाइंड होता है वो होता है 192.168.1.1/24। ठीक है, Yes. बट इस आईपी के थ्रू आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते, या तो आप इस एडमिन पीसी को 192 सीरीज के नेटवर्क में लेके आओ। ठीक है, ये टोपोलॉजी याद है आपको, ये वाली। या तो आप इसको अपने पीसी को और मैनेजमेंट सर्वर को एक सिमिलर नेटवर्क पे लेके आओ और इसका गेटवे का एक इंटरफेस भी उसी नेटवर्क में लेके आओ, तब तो ये नेटवर्क बनेगा और आप एक्सेस कर पाओगे, है ना। तो इससे बेटर है हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने मैनेजमेंट सर्वर पे। ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, आईपी चेंज कर देते हैं किस सीरीज का, जिस सीरीज का आईपी आपका हमारे क्लाइंट के पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट सर्वर पे गए, सेट इंटरफेस सॉरी ETH 0 IPv4 10.1.1.50 मास्क लेंथ 24। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये कमांड के थ्रू हमने ये कह दिया कि भाई जो हमारा ETH 0 है, जिसपे हमारा अभी तक का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 है, उसका आप आईपी चेंज कर दो 10.1.1.50 कर दो। ठीक है, अब आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आप ऊपर से चेक भी कर लो, शो इंटरफेस इथरनेट 0 करोगे तो आपको ये आईपी मिल गया। ठीक है, ये मिलने के बाद आप अपने क्लाइंट पे जाओ, CMD पे सबसे पहले पिंग कर लो 10.1.1.50। पिंग आ गया। अब यहां तक की कहानी क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये होती है बेसिक रिक्वायरमेंट लैब को स्टार्ट करने के लिए। ये होती है बेसिक ट्रबल शूटिंग। अब कई लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट का आईपी तो 10 सीरीज में है, गेटवे का आईपी 192 सीरीज में है और एक्सेस करने लगे पड़े, एक्सेस ही नहीं हो रहा गेटवे। तो until or unless you will not make it a part of your own LAN, you won't be able to access it. Cool? कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ पे मैं पॉज दे रहा हूँ 2 मिनट का।
ये सर 1 डॉट है। ये I have 1 dot. Just show me topology. This sample topology, that the same topology we are not building there. If you want to see the topology we are building, this is the topology we are building. So here the checkpoint firewall gateway is there and switch is connected to the PC and management server is there connected. So that is my question is that is the 3-layer architecture. That is the yeah, this is distributed environment. That is the distributed environment because gateway is different place and management server is in different physical place. Yeah. Okay. So just that's why I asking you. Yeah, this is the distributed one. हम एक बार डिप्लॉयमेंट उसका भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडअलोन का भी कर लेंगे, नेक्स्ट लैब में कर लेंगे। आज मुझे लगता है यहाँ पे दो फायरवॉल लगे हुए हैं ना, एक चेक पॉइंट गेटवे 1 एंड दूसरे मैनेजमेंट सर्वर एक बना रखा है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो मैनेजमेंट सर्वर हम बना रहे हैं ना वो फायरवॉल ही है, बट उसको हम मैनुअली बोल रहे हैं कि तुम्हें फायरवॉल की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी, तुम्हें मैनेजमेंट सर्वर की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कैसे हम उसको बताएंगे और उसके बाद क्या चेंजेस आ जाएंगे। मींस कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने यहाँ पर जो है टोपोलॉजी में 2 हमने फायरवॉल्स लगाया है। हाँ, ओके, एक को मैनेजमेंट सर्वर बनाते हैं, दूसरे को चेक पॉइंट। तो मींस प्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है कि चेक पॉइंट जब हम डिप्लॉय करते हैं डबल रहते हैं, एक को सर्वर बनाते हैं, दूसरे को हम चेक पॉइंट का गेटवे बनाते हैं। और इनफैक्ट डबल नहीं, मे बी आपको 6-7 फायरवॉल मिलेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है ये जो एक चेक पॉइंट फायरवॉल एक है जो जिसे आप गेटवे दिए हैं, चेक पॉइंट फायर, और एक मैनेजमेंट सर्वर है। ओके, तो बेसिकली हियर इन ऑब्जर्विंग देयर आर 2 firewalls, 1 management server and checkpoint. So we have to create all policy on the management server and pushing that all policy through gateway on the firewall. And basically why we are using management server to protect our firewall. Yes. To protect the firewall. यही तो मेन मतलब इसका चेक पॉइंट का खूबी है कि ये जो है मैनेजमेंट सर्वर से पहले चेक करता है, उसके बाद ही चेक पॉइंट पे डिप्लॉय करता है। ओके, तो सर्वर का कॉन्सेप्ट यही हुआ कि हम सर्वर इसलिए डिप्लॉय करते हैं कि हम फायरवॉल को किसी भी कीमत पे हम उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ऑल पॉलिसी एवरीथिंग जो है वो वर्चुअली हम सर्वर में करते हैं और गेटवे के थ्रू फायरवॉल पे पुश करते हैं। तो लेकिन सर एक चीज ये पूछा जा सकता है, अगर सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए तो 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वो मच मोर सिक्योर है एज कंपेयर टू स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर। that is why checkpoint recommend to do that 3 tier architecture, right? Okay, that is why they recommend to do the distributed deployment. Okay, understood sir. Understood. Any other question? No sir, go ahead. Okay, give me a minute. All right, so यहाँ तक सब क्लियर है। और जो हमने ये एक्टिविटी की है, इंटरफेस का आईपी क्यों चेंज किया और हमने यहाँ पे जो कनेक्टिविटी बनाई है अपने क्लाइंट की और मैनेजमेंट सर्वर की, ये आपको क्लियर हो गई? यस सर, अगर आप टोपोलॉजी पे लिख देंगे तो बेटर रहेगा सर। क्या लिख सकते हैं क्या इस पे इवेंजी में? हाँ, ये डेट 10.1.1.10/24 10.1.1.50/24 ठीक है? Yes sir, better, good, thank you. कोई और डाउट? Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share and subscribe for more future updates. ठीक है, अब क्या करते हैं हम,
यहां से CMD करते हैं मिनिमाइज, हम चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। अब देखो चेक पॉइंट का जो फर्स्ट टाइम एक्सेस होता है ना, जो पहला एक्सेस होता है वो आपको ब्राउजर पे करना होता है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आपका एक्सेस होता है वो आपको ब्राउजर पे करना है। कैसे करना है? https 10.1.1.50। ये थोड़ा सा स्लो चलेगा यार, पता नहीं क्यों ये सर्वर आ रहा है, यहाँ पे PC आना चाहिए था, बट लेट्स सी। चेक पॉइंट का GUI एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, वेब GUI, दिस इज कॉल्ड वेब GUI। आप इसको वेब पेज पे एक्सेस करोगे, और यहाँ पे अगर आपका थोड़ा स्लो चलता है ना तो इसको कंपैटिब वैसे तो ये आ गया है कंटिन्यू, जैसे ही आप इसको एक्सेस करोगे कंटिन्यू करना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, जो नॉट रेकमेंडेड हो, क्योंकि यहाँ पे SSL का एरर है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट कोई इस ब्राउजर के पास इस URL के लिए कोई SSL सर्टिफिकेट नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स गिविंग दिस एरर। क्लिक ऑन कंटिन्यू and now just go to compatibility setting and just add this one in your browser compatibility mode, and I hope कि ये यहाँ पे आ जाए। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार यार। आई थिंक लॉगिन पेज नहीं आ रहा, ये मुझे गौरव से बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये सर्वर क्यों लॉन्च हो रहा है जब मैं PC लॉन्च कर रहा हूँ तो। ओके, तो आई थिंक हमें अभी स्टॉप होना पड़ेगा आज के लिए, ठीक है। लैब जो इनिशियल लाइक बेसिक सेटअप मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो सर्वर है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वैसे इसने एक्सेस तो कर लिया बट यहाँ पे लॉगिन पेज आना चाहिए, बट वो आ नहीं रहा। And apart from this compatibility setting, there is no other setting we can do here. Okay, let's do one more thing. HTTPS 10.1.1. Yeah, this one. अच्छा, ये इसको ऐसे लेगा क्या? ठीक है, include, ठीक है। सो फर्स्ट सेशन है, इसमें हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत बड़े मिथ्स को डिस्कस करेंगे, एंड व्हाई F5 है ना, मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो LTM फीचर सेट है ना, अगर स्पेसिफिक LTM की बात करूं तो वो दे रही हैं, तो हमें F5 पे क्यों मूव करना चाहिए, विल डिस्कस दैट थिंग, ओके। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल अपीयरेंस की, तो कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, ये 8900 सीरीज का बॉक्स है F5 का, जो बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है। मैंने इस पे काफी काम किया हुआ है, एंड इसके फीचर्स, इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से काम करती है, ठीक है। अगर वैसे तो सारे ही बॉक्स F5 के बहुत अच्छे हैं, बट दिस वन इज हाई एंड बॉक्स एक्चुअली, ऑलराइट। Major 3 questions, I always recommend to all of the joiners to ask to themselves, like why you should join this course, or maybe you can say why we should attend this F5 course, okay. So you can ask these 3 questions to yourself. First is like, क्या आप ऐसे environment में है जहाँ पे F5 यूज हो रहा है, या फिर फ्यूचर में F5 इंस्टॉल होने वाला है, या फिर you are in the network security domain from last 3-4 years and you want to try something new. You are done with the firewalls, right? You are master in the firewalls, but you want to learn something new apart from the firewalls. So you want to enhance your knowledge beyond the network security or firewall security domain. So you can learn F5. So अगर इन सभी questions का आंसर yes है, तो you are at the right place, okay. तो ये 3 questions बहुत ही important होते हैं किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, तो इनका जो आंसर है वो yes जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या मतलब प्री रिक्विजिट क्या है इस चीज के, ठीक है। सबसे पहले तो CCNA और उससे ज्यादा का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। यू शुड नो व्हाट इज SSL, you should know what is TCP,
SSL हैंडशेक, TCP हैंडशेक, यू शुड नो, राइट, कि पैकेट्स कैसे एक्सचेंज होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, क्योंकि मेनली जो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे वो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर रहेगा। सारा खेल ही हमने इस पे खेलना है। तो अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो SSL के थ्रू हो रहा है, तो क्या हैंडशेक प्रोसेस है, TCP के थ्रू हो रहा है तो क्या हैंडशेक प्रोसेस है। ब्रीफली वी विल डिस्कस इन दिस कोर्स एज वेल, बट यू शुड नो लाइक कि डीप अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी। मतलब अगर मैं बात करूँ एल्गोरिथम की, तो SSL की हैंडशेक में कौन कौन से एल्गोरिथम एक्सचेंज होते हैं ब्राउजर के साइड से, you should know that, right? Proxy SSL, yeah, you should know like what is the proxy, because if I talk about big IP like F5 जो प्रोडक्ट है वो F5 big IP its full name। तो अगर मैं बात करूं big IP की, तो big IP is full proxy, by default it's full proxy, ठीक है। अब कैसे है मैं आगे स्लाइड में आपको डिस्कस करूंगा। लैब सिंपल है, अगर आप अपने लैपटॉप पे लैब सेटअप करना चाहते हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए आपको, VMware, या फिर आप नेटवर्किंग के अगर कोर्स परचेज करते हैं या फिर आप एनरोल करते हैं खुद को, तो आपको एक वर्चुअल लैब भी मिल जाएगी जिसपे आप ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ इंटरनेट कनेक्शन, ऑलराइट। एंड आफ्टर लाइक अगर आप खुद की पर्सनल लैब, ऑफलाइन लैब करना चाहते हैं, तो अगर आप VMware इंस्टॉल भी कर लेते हैं तो साथ में आपको बिग IP का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ISO फाइल चाहिए होगी, विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम F5 वेबसाइट, ठीक है। easy, it's very easy, you just need to mention on the Google that download F5 big IP LTM ISO file, it will be downloaded। एंड ये चीजें तो चलिए ठीक है, ये चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अ प्रॉमिस जो आप खुद से करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, कोर्स मैंने एक वीकेंड में क्लासेस ले ली, डेली मैं 10 से 15 मिनट इस टॉपिक को, इस टेक्नोलॉजी F5 को दूंगा, चाहे मैं एक यूट्यूब वीडियो देखूं, चाहे मैं अपने लेक्चर को रिवाइज करूं, चाहे मैं नोट्स पढूं, चाहे मैं इसकी एडमिन गाइड पढूं, बट 10 से 15 मिनट मैं डेली दूंगा। और अगर जो ये प्रॉमिस आप खुद से करते हैं तो बिलीव मी यू विल बी F5 एडमिनिस्ट्रेटर सोन, ठीक है। अब बात आती है व्हाई F5, ठीक है, मैं आई एम टीचिंग F5, ओके, एंड for me F5 is a very good technology, but why should you believe me, right? कि आपको मतलब क्यों believe करेंगे आप मेरे पे, I'm just a person, right? But there is one organization which evaluates technologies on the basis of their performance, support, technology and vision, and their organization name is Gartner. And this is the report of Gartner published in 2019 for LTM. And see what is the stand of the F5. There are 3 market leaders, right? There are 3 market leaders in LTM section where F5 is one of them. And I believe it's the first one, maybe. I'm not sure like whether the Citrix is on number 1 or the F5 one, but I think it should be F5, right? So this report says that F5 is the market trend right now, and if you want to learn, you should not be doing delay. Okay? Without any delay, you should learn this technology. All right. Okay. So next जो question है, next जो आपके मन में होना चाहिए ये question कि what is a load balancer or LTM? LTM stands for local traffic manager, ठीक है। और load balancer is a term which indicates a device which does the load balancing, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, माइट बी आप में से कुछ लोग ये टर्म जानते भी होंगे, बट मैं तो मतलब बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल लूं, अगर एक टीम है, टीम में 5 मेंबर हैं, उन 5 मेंबर को मैनेज करने के लिए एक टीम लीडर होता है, दैट टीम लीडर इज लोड बैलेंसर।
व्हाट ही डज बेसिकली कि जो भी काम टीम के पास आ रहा है उस काम को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। इससे होगा क्या, इन सभी टीममेट्स की प्रॉपर एफिशिएंसी निकल के आएगी, करेक्ट। सो F5 a L4 or L7 device which distribute the traffic between the application servers to achieve best out of the hosted physical devices। कि अगर मैं मान लूं कि ये जो 5 अभी हमने टीम मेंबर्स बोले थे, ये 5 सर्वर्स हैं, तो जो लोड बैलेंसर है यहाँ पे, वो लोड बैलेंसर क्या करता है, इन 5 सर्वर्स पे इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि ये जो 5 सर्वर के रिसोर्सेज हैं ये प्रॉपरली एंड इक्वली यूज हो सके एंड हमें बेस्ट वैल्यू मिले अपनी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब मान के चलो मैंने 10,000 रुपीज पर सर्वर खर्च किया है, ठीक है, और 5 सर्वर हैं मेरे पास, तो टोटल सम इज 50K। अब अगर मैं कुछ ऐसा सिनेरियो मान के चलते हैं कि ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के पास जा रहा है, जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्चुअल सर्वर्स हैं, रियल सर्वर्स हैं आपके, तो पहले 2 सर्वर्स की तो वैल्यू हमें निकल के आ रही है कि 20K वी आर यूजिंग प्रॉपर्ली, बट व्हाट अबाउट दीज रिमेनिंग 30K? ये तो वेस्ट है ना, दे आर सिटिंग आइडल, they are doing nothing. Maybe they might be doing backup for these 2 servers. Okay, let's consider these 2 servers as a backup, but still after doing the backup, what they are doing nothing, right? 50% of the cost I think still we are like losing, and ये 5th वाले की तो 100% we are losing, right? तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका 100% सिक्योर करने के लिए we can say we use load balancer, right? Any doubt till here? No, sir. Perfect. Okay, so आपने ये समझ लिया कि what is LTM, what is load balancer, right? But why we need it? हमने एक मोटी डेफिनेशन पढ़ ली कि हमें प्रॉपर अगर यूटिलाइजेशन और मे बी एफिशिएंसी चाहिए all of the available resources, then we should use load balancer, right? But if there is no load balancer, then what will be scenario? Let's discuss that. मान के चलते हैं ये मेरे कुछ यूजर्स हैं, ओके, काउंट मान लेते हैं 30। अब एक पर्सन है, लेट्स से देयर इज विकास, ओके, व्हाट ही डज, ही लॉन्चेस अ एप्लीकेशन एंड उसने एक ऑनलाइन मार्केटिंग की कि भाई आप कुछ भी ग्रोसरी है, कुछ भी चीज है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग है, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, एंड उस एप्लीकेशन के लिए एक सर्वर डिप्लॉय कर दिया, ये रहा, एंड इस सर्वर को मैंने होस्ट किया पब्लिकली ऑन इंटरनेट, ठीक है, दिस इज इंटरनेट। एंड मैंने क्या किया, अपने 30 दोस्तों को ये बोला कि यार तुम लोग ना इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड इवेल्युएट इट एंड यूज इट कि तुम्हें सर्विस कैसे लगती है। तो मेरे 30 दोस्त हैं अभी, तो ठीक है, 30 दोस्त इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं और इस सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। अभी तक 30 users are there, everything is good with this server because this server is having approximately 32 GB of RAM, 512 GB is SSD maybe, and i5, let's for example, right? And any other specification which I'm not aware of actually with the server in the term of server terminology, right? So 30 यूजर्स थे, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आफ्टर अ मंथ ये 30 जो बंदे हैं उनमें से 25 बंदों ने सोचा यार एप्लीकेशन तो अच्छी है, डिस्काउंट्स भी अच्छे मिलते हैं एंड सर्विस भी अच्छी है, तो क्यों ना ये जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है अच्छा खासा हम अपने रिश्तेदारों को बताएं।
तो 25 ने 25 रिश्तेदार को बता दिया, अगेन उन 25 ने अनदर 25 को बता दिया। करते करते ओवर द टाइम इन 6 months this user base which was 30 users earlier, now it's 3000. Then what will happen? अब ये 3000 जो यूजर्स हैं वो सारे इंटरनेट पे जाएंगे, एक्सेस करेंगे इस एप्लीकेशन को एंड चीजों को करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होंगे ये रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज कम पड़े तो होगा क्या? रिस्पॉन्स टाइम विल इंक्रीज। जो एप्लीकेशन पहले विद इन 1 ms में माइक्रोसेकंड में रिस्पॉन्स कर रही थी, इट इज टेकिंग नाउ 5 seconds, and 5 seconds for application server is a big delay। ठीक है, तो इस सिनेरियो में चलिए ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर मेरा एक एप्लीकेशन सर्वर है और मेरे यूजर बेस अगर बढ़ रहा है तो मुझे अपना एप्लीकेशन सर्वर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई हैव परचेज वन अनदर सर्वर हियर and let's say I have purchased 2 of them, another one is here. What is the method through which I can communicate to these 3000 clients कि I have sufficient resources, and जब वो एक्सेस करेंगे इन रिसोर्सेज को तो इक्वली कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो। मान लो अगर 3000 आ रहे हैं तो 1000 इस सर्वर के पास जाएं, 1000 इस सर्वर के पास जाएं एंड 1000 इस सर्वर के पास जाएं। इसकी क्या गारंटी है, कैसे मैं कर सकता हूं? एनी आइडिया? एनीवन जो मुझे इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर सके कि मैं इस चीज को अचीव करना चाहता हूं। मान लीजिए अगर कि आई हैव 3 सर्वर्स एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक, हाउ कैन आई डू दैट? No one? I think for this we have to use F5 LTM, I think. Definitely that will use, like we will use that, but apart from that LTM, what is the method? Do you have anything in mind? For distributing equality, we have to use this app. App? Yes. You what, like this application server? Yes. Okay. All right. Let me explain. Because when we use 3000 users, so it will there will be traffic jam. So for distributing the equality speed, so for example, server cannot increase the sources. So that time we will use another application, I think. Yeah, so we have one application server here, we have second one here, we have third one here, we have 3 application servers now, right? Then how we can distribute this 3000 connection between all 3 of them? Just like as you said, load manager. Load balancing, right? Yes, load balancer. But apart from this also there are certain methods. Okay, see, load balancer तो बहुत बाद में आया। ठीक है, पहले का सिनेरियो हम देखते हैं क्या होता था पहले। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि ये जो हमारा सबसे पहला सर्वर है, वेब एप्लीकेशन सर्वर है, इसका एक पब्लिक आईपी होगा, राइट? मान लीजिए ये मेरा पब्लिक आईपी है। ठीक है, अब मैंने पब्लिक आईपी को मैप कर दिया डीएनएस के साथ और मैंने दे दिया xyz.com। अब अभी तक जो मेरे यूजर थे वो xyz.com पे एक्सेस कर रहे थे, इंटरनेट पे जाके डीएनएस उसको इस आईपी में रिजॉल्व कर रहा था और वो रिक्वेस्ट इस सर्वर पे लैंड कर रही थी। अब अगर मैंने जो 2 एप्लीकेशन सर्वर बढ़ा दिए हैं तो एक तो मेथड मेरे पास ये है कि भैया जो मेरे 2 सर्वर्स हैं इनके पास भी कुछ आईपी होगी, मान लो 20.1.1.2 और .3। ठीक है, ये 2 मेरे और एप्लीकेशन सर्वर आ गए, मैं इनको भी कुछ नए यूआरएल से मैप करा दूं, डीएनएस से मैप करवा दूं, xyz1.com, xyz2.com, और मैं इस 3000 यूजर्स को मैनुअली बोलूं जाके कि भैया आप जो पहले के 1000 हैं वो यूज करो ये वाला, बाकी के जो 1000 हैं वो यूज करो xyz1.com, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल कैन यूज दिस वन।
तो एक तो ये हो गया, बट दिस इज द worst way of managing your application server and the connection. In the first way it will take any long time, I think. नहीं, आप जाके क्लाइंट को बोलो कैसे, आप क्या बोलो क्लाइंट को जाके, अच्छा मान के चलो फ्लिपकार्ट है, कल को आपके पास फ्लिपकार्ट की मेल आती है कि आज से भाई हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर, मान के चलो आप यू आर नॉट इन 2021 राइट, मान के चलो आप हैं 2003 में या 2002 में, मान के चलो, ठीक है, I don't know when this invention happened, but मान के चलते 2002 में हैं आप, और फ्लिपकार्ट आपके पास आता है कि यार हमारा ना एप्लीकेशन सर्वर का रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे हमें, तो लेट्स डू वन थिंग, आज से हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट 1 जो है वो आप लोग यूज करोगे, किसी और यूजर को मेल कर दिया आप फ्लिपकार्ट 2 यूज करो, किसी को बोल दिया फ्लिपकार्ट 3 यूज करो। अब कोई बंदा अगर फ्लिपकार्ट 1 यूज कर रहा है, कोई बंदा फ्लिपकार्ट 2 यूज कर रहा है, किसी को याद ही नहीं कि फ्लिपकार्ट 1 यूज करना है, या उसने मेल ही नहीं पढ़ी, वो नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे जा रहा है, और फ्लिपकार्ट पे जा रहा है उसको स्लोनेस मिल रही है, उससे हुआ क्या, यूजर बेस खराब हो गया। सर ऐसा कर सकते हैं सर इसमें कि हम अगर हम ओल्ड मेथड अगर हम यूज करें तो जैसे एक नेट कर सकते हैं कि एक बहुत सारे पूल आईपीस को जो है वो लोकल आईपीस को, जैसे वेब सर्वर अंदर हैं, हाँ। तो उनको पूल ऑफ आईपी को जो है ना अगेंस्ट एक पब्लिक आईपी पे जो है वो उसको ट्रांसलेट कर दें और पैट कर दें उसको, यानी आईपी तो एक होगा, बाहर से जो भी एक्सेस कर रहा होगा उसको एक आईपी नजर आएगा, लेकिन अंदर जो है उसको अंडर उसकी पोर्ट्स पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हो जाएगी उसकी, तो उसको पैटिंग कर देंगे, इस तरह से कुछ करें। ठीक है, बढ़िया अप्रोच है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है, ठीक है। यहाँ भी through network we can send the message to client or server, whatever. देखिए प्रैक्टिकलिटी में बात करते, देखो लोड बैलेंसर का आपको पढ़ना है ना, तो आपको प्रैक्टिकलिटी सोचनी पड़ेगी, आपको दिमाग के ना सारे गेट खोलने पड़ेंगे। सबसे पहले तो पहले सजेशन का मैं आंसर देता हूं कि भैया हमने यहाँ पे एक फायरवॉल लगा दिया, फायरवॉल से हमने एक वर्चुअल आईपी पे ट्रैफिक ले लिया और अंदर हमने भेज दिया उसको ट्रैफिक, अगेन उसको ट्रांसलेट करके। लेकिन क्वेश्चन तो ये था ना कि हमारा जो 443 का ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, जो हमारे ट्रैफिक 20.1. हम आपने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये तो थी ही नहीं कि हम मल्टीपल आईपीज में उसको ट्रैफिक मंगवा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम तो ये थी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। आपने 20.1.1, 1.2, 1.3 की जगह पे आपने एक प्राइवेट आईपी यूज कर, पब्लिक आईपी यूज कर लिया, ठीक है, ट्रैफिक उस आईपी पे रिसीव कर लिया, ट्रांसलेट करके आगे भेजा, लेकिन आप भेजोगे तो किसी एक पे ही ना 443 के लिए। सर इसमें सर they have to take help distributor. सर जो राउटिंग है, इनको जो राउट कर रहे हैं, अगर हम इनको इक्वल यानी लोड बैलेंसिंग और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, अगर हम डायनामिक प्रोटोकॉल्स भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते उससे, यानी अगर हम कोई भी प्रोटोकॉल है, जैसे पहले EIGRP जैसे उसमें वो 8 पाथ्स पे यानी इक्वल वो करता था, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो राउटिंग जो है ना, राउटिंग सिर्फ और सिर्फ राउटिंग करने के लिए है कि मेरे पास से ट्रैफिक तुम्हारे पास भेज दिया। अब तुम्हारी लोकेशन पे अगर तुम्हारे नाम के 6 बंदे हैं और 6 बंदे कैपेबल हैं वो सेम काम करने के, तो वो 6 बंदों कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस काम को? सर वो पोर्ट्स डिफरेंट पोर्ट्स पे वो करना पड़ेगा उसको। एक वर्चुअल आईपी, जैसे बाहर से अगर वर्चुअल आईपी है हमारे लिए और अंदर जो है वो जो है उसके अगेंस्ट जो है उसको मैप करेंगे डिफरेंट आईपीस के अगेंस्ट, और फिर उसको यानी कि जैसे ये हमारा ये लोड बैलेंसर है, ये लोड बैलेंसर यानी हमारा स्टैटिक, आइदर इट विल बी अ स्टैटिक और डायनामिक लोड बैलेंसिंग किस तरह की भी है, तो वो उस तरह से वो डिवाइड करेंगे। स्टैटिक करेंगे तो इक्वल डिवाइड कर देगा, और अगर इसको डायनामिक करेंगे तो वो इक्वल उसको उसके हिसाब से, लोड के हिसाब से उसको डिवाइड करता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है, आपका ट्रैफिक आ किस पोर्ट पे रहा है? 443 इंटरनेट पे आ रहा है सर। 443 पे ट्रैफिक रिसीव हुआ, आप क्या चाहते हो उसको आगे किस पोर्ट पे भेजो? आगे पोर्ट आपको 44 यानी अंदर जो लोकल है, लोकल पोर्ट का, तो लोकल पोर्ट आप ये तो आपकी पब्लिक है ना, अपने पब्लिक उस पे 443 पे आ रहा है आपको, ठीक है। और अंदर कैसे भेजोगे? अंदर जो है वो पोर्ट आप कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसको कस्टमाइज कर लें। 443 की सर्विस तो 443 पे ही रन होगी ना सर? राइट, ठीक है, 443 पे ही भेजना पड़ेगा, इसी पे भेजना पड़ेगा आपको। राइट, तो आप कैसे पैटिंग कर लोगे? ठीक है ये हाँ ये इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो पैकिंग रोल आई थिंक इंटरनेट इट विल बी डन, आई थिंक।
नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं 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 ठीक कह रहे हैं सर वो, क्योंकि वो फिर उसको वो कैसे उसमें कैसे वो करेगा, ये तो एक पे चला जाएगा ना, उसको फिर वो दोबारा दूसरों पे कैसे लेंगे उसको। समझो, मतलब आंख बंद करो और सोचो कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको पहले So आप इमेजिन करो। distributor communicating, sir, to each other, server to client. लेट मी टेल यू, मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो सबसे पहला वे था ये वाला, ठीक है, कि Okay. 3 आईपी बनाए, 3 डीएनएस बनाए और आपने क्लाइंट को बता दिया कि भाई 3 मेरे आईपी हैं, आप कैटेगराइज कर दिया कि 1000 ये करेंगे, 1000 ये करेंगे, 1000। बट जैसे ये 3 लाख हुआ फिर क्या करोगे? आपने 10 सर्वर बनाए तो 10 यूआरएल थोड़ी बनाएंगे आप। 3 लाख यूजर हुए, आपने 10 सर्वर बनाए, 10 सर्वर के 10 यूआरएल बने, आप कैटेगराइज करते रहो। अब आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट के क्या 3 लाख यूजर होंगे? मैं कह रहा हूँ 3, मतलब मेरे हिसाब से 30 लाख या मतलब आई डोंट नो लाइक, बट 30 लाख से ज्यादा ही होंगे। और 30 लाख यूजर्स को मैनेज करने के लिए, उनके डेटा मैनेज करने के लिए कितने सर्वर्स होंगे सोचो। I think many servers. राइट, अब हम हर एक सर्वर के लिए ये डीएनएस एंट्री नहीं बना सकते ना, और हर एक यूजर को हम भेज नहीं सकते ना कि आप प्लीज आप ये वाला यूज करो, प्लीज आप ये वाला यूज करो, राइट। So that time we use data center. Let me explain. थोड़ी देर बाद सारे क्वेश्चन दूंगा, अभी के लिए आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डिस्कशन। तो एक तो वे था ये, जो कि बहुत ही वर्स्ट वे था, ठीक है। अनदर ऑप्शन आता है हमारे पास कि हम अपने डीएनएस को इन्वॉल्व कर दें बीच में। Sorry, I thought there will be DNS, but I didn't expect. डीएनएस को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? यूजर जो है, हम डीएनएस जब एंट्री बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि भैया आप क्या करो, जो भी यूजर आपके पास आएगा इन सर्वर्स के लिए क्वेरी लेके, आपने एक डीएनएस की एंट्री बना दी, ठीक है। सर्वर 1 के लिए आपने दे दिया 10.1.1.1, दूसरे दे दिया 10.1. We can use a pack file as well, right? Yeah. We can use a pack file also. नहीं, पैक फाइल तो आप इंटरनल यूजर के लिए बना रहे हैं ना। आप किसी मान के चलो जम्मू कश्मीर में कोई यूजर बैठा हुआ है, कोई उसने नया लैपटॉप खरीदा, तो क्या आप अपने एप्लीकेशन सर्वर के लिए पैक फाइल बनाएंगे उसके लिए? नो, but we can assign a port with 2 IP address, right? Let me explain. आपने क्या बोला कि भाई डीएनएस को बताया कि मेरे पास ये 3 एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास यूआरएल है xyz.com। आपने क्या बोला कि जब मेरे पास फर्स्ट रिक्वेस्ट आए उसको तो आप भेज दो 1.1 पे, सेकंड रिक्वेस्ट आए उसको भेज दो 1.2 पे, थर्ड रिक्वेस्ट आए उसको भेज दो 1.3 पे। प्रॉब्लम सॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन की। जस्ट लाइक आईपी फॉरवर्डिंग। हाँ भाई, आपने इसको बोला कि डीएनएस भाई साहब, आपके पास जब ट्रैफिक आएगा देन forward first traffic to server 1, second to server 2, third to server 3, and then again fourth one to server 1, and then again fifth one to server 2, and then again the sixth one to server 3. And this is how you have to distribute the traffic between these 3 servers. And this method is called round robin. What is called? Round robin method, that you are distributing the traffic one by one and sequential. And this is the most used method for load balancing. Not with the DNS, with F5 also, with Citrix also, and any other LTM also. Round robin. Until or unless you do not have a very big environment, very big application server you are managing. If it's small organization, small infrastructure you are managing, small application server you are managing, it will be 100, like I'm not 100%, 90% it will be a round robin. Make sense? Yes. But there is Sir, a round robin क्या एक एप्लीकेशन है या एक सर्वर? मेथड है। एडिशन का मेथड होता है ना, इसका मेथड क्या है एडिशन का?
कि आप पहले लेफ्ट वाले को ऐड करोगे, है ना, फिर राइट वाले को ऐड करोगे. दिस इज हाउ इट्स अ मेथड ऑफ राउंड रॉबिन, कि जो फर्स्ट ट्रैफिक आएगा वो फर्स्ट सर्वर को जाएगा, सेकंड को जाएगा, थर्ड को जाएगा. सर इसके लिए Sir, हमें I have a हार्डवेयर डिवाइस question. चाहिए होगी. Vikas? Yes, please. Yeah, I have a question here. This is not efficient, I think. Instead of that, we cannot do that. The appliance itself cannot maintain a session table like based on the source and destination. I'm coming on those parts as well. Okay, give me some time. I'm going slow, like step by step. Okay, sure. So this part is clear or not? Like the problem which we had here when we had nothing nothing as a solution, that problem is being solved, right? Yeah. Do you think there should be some problem? Yes, there are many problems. Yes, because we have to be enter manually each and everything. Enter manually means whenever we require such kind of IPs, so we have to be enter manual, right? No. We do DNS server. I have a question, sir. तो राउंड रॉबिन जो है वो अगर हम यूज करते हैं, वी यूज राउंड रॉबिन, अगर हमारे पास डिफरेंट स्पेक्स के सर्वर्स हैं तो राउंड रॉबिन विल बी नॉट बी इफेक्टिव. अगर वो सेम उसके कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनकी पावर सेम है सर्वर्स की, तो देन इट विल बी वेरी गुड मेथड. No, if you do not have the same configuration and same services being hosted on no, all not services. I'm not talking about the services. I'm talking about the like if the एक सर्वर है उसकी RAM 512 GB है और एक ही है 16 GB है, तो जो 512 GB वाला सर्वर है it can take more resources. It can work more. तो उस सूरत में जो है हमें उसको ज्यादा यूटिलाइज कर लेना चाहिए. तो इट मीन राउंड रॉबिन ये होगा कि 1 by 1 पहले 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है. So then in that case it will not be effective. It is exactly effective. No. That's a problem of that DNS and the round robin we are using in DNS, right? Yeah. But we have see, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप लोड बैलेंसर में राउंड रॉबिन कर रहे हैं, then you can do what it's called, मतलब एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो व्हाट राउंड रॉबिन विल डू, इट विल सेंड 2 ट्रैफिक टू हियर, one is here, one is here. Okay, that right, you can do. Right. And again 2 traffic here, one is here, one is here. Again 2 traffic here. This is how round robin will perform. Right. I think it's called weight ratio method. Yeah. When we involving the DNS for distributing equality, but here, as you said, sir, there is distributing 1 by 1. Application 1, 2, 3. So when it will send at the same time to send to every one server, when it can possible? I didn't get your question. एक ही वक्त में सभी सर्वर को जो है ना डाटा सेंड होना चाहिए. Why do you want that? Because when DNS sending 1 by 1, it will take time. See, it's not doing like one packet is receiving and one it's not like that. It's just it's a very fast process. It's not like it's very slow process. No, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि 1 इसको भेजा ऐसे हो, ये एक्सप्लेन करने के लिए है. अदरवाइज 1 ऐसे फटाफट, मतलब it's very quick process. Yeah, understood. It will send frequency of seconds. Okay, but what is the reason we are involving DNS to solve our problem which we had in earlier session, earlier slide, right? Distribution. What about the balancer, loader balancer? Wait. I'm coming to that point. Okay. So मुझे बस इतना बताओ, जो आपका previous session में distribution का problem था, वो solve हुआ या नहीं हुआ? Yes, I think it should be yes, right? Yes. What about weight management? What about monitoring? क्या हुआ? What about availability? Four, 4GB, 4GB, 32GB. This should get
much more traffic in comparison to these two, right? Yeah, 8x. So what about that? DNS can't do that. Let's say ये जो आपका सर्वर 3 है, इस पे 443 की सर्विस स्टॉप हो गई, छोड़ तो रहने दो, ठीक है, ये सर्विस आपकी स्टॉप हो गई है, देन डीएनएस के पास तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो इसको मॉनिटर करे. What it will do? It will send the traffic here. तो जो क्लाइंट आपका है, मान लो जो ये फर्स्ट क्लाइंट है, इसका ट्रैफिक आपके पास फर्स्ट सर्वर पे जा रहा है, सेकंड क्लाइंट का सेकंड सर्वर पे जा रहा है, थर्ड क्लाइंट का जो ट्रैफिक आया वो थर्ड पे जाना चाहिए था, बट थर्ड पे तो 443 की सर्विस बंद है, बट डीएनएस को पता नहीं, उसने थर्ड पे भेज दिया और इसको आ गया पेज डज नॉट रिस्पॉन्डेड. तो हुआ क्या? Like a hub yeah. तो हुआ, जब जैसे ही इसको पेज डज नॉट रिस्पॉन्डिंग आया, हुआ क्या, इसको लगा कि यार फ्लिपकार्ट नहीं चल रही है, काम करो अमेज़न पे चलो, कस्टमर गया हाथ से. Yes. So monitoring is the problem. सर्वर ही बैठ गया जी. In that case, what it will do? Same problem. If 443 service is stopped, what will do DNS? It will sell to another application or no. It does not have any mechanism to do that. ठीक है. अब सर्वर ही बैठ गया पूरा का पूरा. Destination host unreachable. सर लेकिन अलर्ट तो रेज होगा ना, अगर मान लो वो तो आपके पास होगा ना, आप आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके पास तो अलर्ट होना ही चाहिए. अगर आपके पास अलर्ट नहीं हुआ तो फिर तो अनंत तक ये चलती जाएगी कि यूजर कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएगा एप्लीकेशन को. बट मान के चलो अलर्ट रेज हुआ, आपको 4 मिनट लगे उस सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए, उस 4 मिनट तक ट्रैफिक तो आ ही रहा है ना इसके पास, या आपने डीएनएस के पास गए और आपने बोला भैया इस पर मत भेजो. सही. अब अलर्ट आया है, वो अलर्ट किसी, अब ऐसा तो है नहीं कि विद इन सेकंड अलर्ट जनरेट हो गया और इंजीनियर ने समझ भी लिया सर्वर 443 डाउन है, उसने विद इन सेकंड लॉग इन भी कर लिया और एक सेकंड में प्रॉब्लम, ऐसा तो होता नहीं ना रियल लाइफ में. यस. एटलीस्ट मतलब मिनिमम मैं बात करूं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है तो 5 मिनट तो लग ही जाएंगे ना इस सर्विस को आप करने में. और 5 मिनट के लिए अगर मान लो 5000 यूजर आ गए सर्वर पे आपके पास और उनको दिख गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, वो बोलेंगे यार फ्लिपकार्ट तो नहीं चल रही, एक काम करो हमें तो बॉटल ऑर्डर करनी है, अमेज़न पे चलते हैं. तो 5000 कस्टमर तो फ्लिपकार्ट ही गए ना. यस. So these are the problem with the DNS, right? इसकी वजह से हमने क्या किया, हम ले आए एक लोड बैलेंसर. ठीक है. अब ये जितनी प्रॉब्लम थी, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए ये बना है वो कर रहा है, ठीक है. नंबर 2 मॉनिटरिंग, वो भी ये करेगा. कैसे? हमेशा कुछ टाइम इंटरवल पे ये 443 की सर्विस को पिंग करता रहेगा, एक्सेस करता रहेगा, and it will make sure that the traffic it is sending to server 3, then 443 service is running on server, otherwise it will not send the traffic on this server. Also अगर ये ट्रैफिक भेज रहा है सर्वर 3 पे, तो सर्वर 3 अप है, अवेलेबल है एंड सर्विस रनिंग है, तभी इस पे भेजेगा, otherwise it will not send. Otherwise, can it will be indicate to user? No, why should user should indicate like server is not available? For example, server 443 service stopped. Balancer loader, it can indicate to user the server services is stopped. अरे यूजर को तो पता नहीं चले, इसीलिए तो हम ये चीजें कर रहे हैं ना. हाँ. Okay. Got it. है ना. Logical. How we can monitor? What you need to monitor? If some server is getting a problem with the port, so F5 will indicate.
Yeah, F5 will give you an alert. But is there any monitoring tool we have to check about the alert? See, there are multiple monitoring tools in the market. SolarWind, OP Manager, Spectrum. Multiple tools are available to monitor the server. But if I talk about the specific application server and the port availability, you can do it on F5. F5 will tell you that on this server, this port is not responding. Okay. So can you tell me what exactly error we get? Error means the port is not responding. The port is not responding. Server is not responding. What exactly error we have on the offline? monitoring? There are multiple errors section actually. Okay, I'll tell you when I'll show you in the lab. Okay, so there will be a black status that it's offline, red, down, and green, it's up and working. Correct. So these are the states which So you can on the F5 we can see, right? Yeah, There will be a color. Well, yeah, that is fine. So, but every time we cannot go and check on to log in the F5, right? Whenever we have an issue with the user end about member service is not responding. This will be the error. Okay. So जो आप लोगों ने IP दी है ना 1.1, 1.2, 1.3. So 10.1.1.0/24. This is called pool. What it's called? Pool. Pool. आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में what is pool? Pool is the network of the in which we create the servers, right? And these servers are pool members. What they are? Pool members. Pool members. Can get on sure? I think someone is speaking without mute. Okay. So this was the basic. Okay. कि भाई load balancer क्यों लेके आए हम उसमें और क्या बेनिफिट हमें मिला लोड बैलेंसिंग से। अब मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताता हूं जो कि आप लोगों को और मजबूर करेगी सोचने के लिए। बेनिफिट्स, मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विसेज, ये तो समझ गए आप लोग, राइट? यस। ये सेटअप है कुछ इस तरीके का, ठीक है। मॉनिटरिंग तो अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि भाई मॉनिटरिंग हो जाएगी। नाउ F5 की अगर मैं बात करूं या LTM की बात करूं तो वेरियस लोड बैलेंसिंग टेक्निक, पहली लोड बैलेंसिंग टेक्निक मैंने आपको बताई राउंड रॉबिन। देखो अगर मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करूं ना तो कभी भी एप्लीकेशन सर्वर्स इस तरीके से नहीं क्रिएट होते कि एक को मैंने 4 GB रैम दे दिया, दूसरे को मैंने 8 GB दिया। नहीं, सबको 4 GB ही मिलती है या सबको 8 GB ही मिलती है। This is how application servers get deployed. तो राउंड रॉबिन बहुत ही अच्छे से चलता है उसमें। बट इन एनी केस मान लो भैया कोई ऐसा सिनेरियो आपको मिल गया जहां पे ऐसा मिल जाता है कि एक का 4 GB है, एक का 8 GB और अगले का 32 GB है। इन दैट केस वेट सेशन मैनेजमेंट, लीस्ट कनेक्शन, सेकंड थर्ड लोड बैलेंसिंग मेथड लीस्ट कनेक्शन। दो कनेक्शन आए, सॉरी 3 कनेक्शन आए, तीनों कनेक्शन F5 ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों के बीच में, ठीक है। अगेन 3 कनेक्शन आए, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हर किसी के पास 2-2 कनेक्शन है। जो सर्वर 1 के पास 2 कनेक्शन है, वो जो कनेक्शन है वो ज्यादा डेटा चाहिए था उनको, इस वजह से वो उन्होंने सेशन एंड नहीं किया। जबकि जो सर्वर 2 के बाद 2 कनेक्शन है उसमें से एक सेशन एंड हो गया और सर्वर 3 के दोनों ही सेशन एंड हो गए।
तो सर्वर 1 के पास 2 कनेक्शन है, सर्वर 2 के पास 1 है, सर्वर 3 के पास 1 भी नहीं है। तो F5 क्या करेगा, अगर लीस्ट कनेक्शन लोड बैलेंसिंग मेथड यूज्ड है तो बिफोर सेंडिंग the connection request to the server 1, it will send at least one connection request to server 3 first, then 1, 1, 2, 2 and 3, and अगर जब तक ये दोनों तीनों बराबर नहीं होते तब तक तो सर्वर 1 के पास नहीं जाएगा। So this is called least connection. चलो, okay. Apart from this, अब मान के चलते हैं एक हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें हमने 2 चीजें ऐड की हुई हैं। इस पे तो 443 चल रहा है, इस पे भी 443 चल रहा है। इस पे हमने क्या किया, 443 एंड 21 एंड 20 की सर्विस भी डाल दी फाइल FTP की, कि भैया आप डेटा यहां से ले सकते हो, डेटा यहां से दे सकते हो। अब F5 what F5 will do, F5 by default start doing this thing, this thing करेगा क्या, जैसे ही पोर्ट 20 और 21 का ट्रैफिक आता है इसके पास, तो वो इन दोनों के पास तो भेजेगा ही नहीं, बाय डिफॉल्ट उसको वो इनको ही पास ही भेजेगा, चाहे आप कोई सा भी वो मेथड यूज कर लो, लोड बैलेंसिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ F5। हाउ, आई विल टेल यू इन द अदर सेशंस, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। हम देखेंगे कि वहां पे काउंटर्स सर्वर नंबर 3 के बढ़ रहे होंगे और सर्वर 2 और 1 और 2 के नहीं बढ़ रहे होंगे, लाइव देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, कि भाई बहुत सारे हमारे पास लोड बैलेंसिंग के मेथड मिल जाते हैं, ठीक है। अदर फीचर्स देख लेते हैं F5 के। अगला फीचर क्या है, दैट इज कॉल्ड SSL ऑफलोडिंग। अब पता है क्या है, अगर मैं बात करूं SSL और TCP की, SSL is a headache for any of the network device and that is why it's secure. अगर वेब सर्वर्स के पास SSL का ट्रैफिक जाता है तो वो एनक्रिप्टेड है ना, यहां से यहां ट्रैफिक पहुंचाती है, एनक्रिप्टेड है, राइट। मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सही है। क्लाइंट से ट्रैफिक निकला, एनक्रिप्टेड है, SSL यूज कर रहे हो आप, HTTPS यूज कर रहे हो, राइट। सर्वर के पास पहुंचा, सर्वर पहले क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट, उसके बाद क्या करेगा, रीड करेगा, उसके बाद फुलफिल करेगा। अब ये SSL का जो डिक्रिप्शन है ना, अभी तो एक पैकेट की बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड में हजारों पैकेट आते हैं, सबका पहले तो डिक्रिप्शन करो। दैट वर्क कैन बी डन ऑन F5। ऑफलोडिंग कर दिया आपने, जो भी ट्रैफिक आया आपके पास F5 के पास आया, F5 ने क्या किया, उसको ऑफलोड किया। ऑफलोड करने के बाद यहीं से उसको प्लेन टेक्स्ट में भेज दिया, तो यहां से जो ट्रैफिक गया वो तो हुआ एनक्रिप्टेड, राइट, यहां से आगे प्लेन टेक्स्ट। तो सर्वर को क्या करना है, सर्वर को सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड करनी है। इससे क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ द CPU विल डिक्रीज। सर्वर को सिर्फ रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है, प्लेन टेक्स्ट पढ़ के, वो अगेन रिस्पॉन्ड, it will respond back to F5 in plain text and then again F5 will encrypt it and send it to user। अब इसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 40% लोड कम हो गया आपके सर्वर्स का, 40%। एंड 40%, बिलीव मी, इफ आई टॉक अबाउट इन रियल सिनेरियो, 40% इज अ बिग अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। बट सर रिसोर्स तो ये भी यूज करेगा ना F5 भी, तो वो लाइक किस चीज का रिसोर्स यूज करेगा वो, डिक्रिप्शन करने के लिए। तो F5 तो हमारा बना ही उसी चीज के लिए है ना। ओके ओके। लोड बैलेंसिंग के लिए हमें, देखो हम F5 क्यों लगा रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए, राइट, कि हमारे वेब सर्वर्स जो हैं उन पे उनकी बेटर परफॉर्मेंस मिले। तो कैसे मिलेगी, या तो एक ऑप्शन ये था कि भैया हम यहाँ पे जो 3 सर्वर, यहाँ 5 सर्वर कर दें, सबके सब
SSL डिक्रिप्शन करेंगे और सबके सब रिस्पॉन्स। उससे बेटर है 3 ही सर्वर रहने दो, SSL ऑफलोडिंग यहाँ कर दो तुम। सही। जैसे मैंने पहले बताया, फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर है, फुल प्रॉक्सी। सर्वर को नहीं पता क्लाइंट कौन है, क्लाइंट को नहीं पता सर्वर कौन है, सब कुछ हिडन रहता है। ठीक है, ट्रैफिक जो क्लाइंट इनिशिएट करेगा वो इनिशिएट करेगा वर्चुअल आईपी पे, F5 उसे कन्वर्ट करेगा लॉजिकल आईपी पे, एंड दैट्स इट। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से होगा कि जो सर्वर होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा आपका F5 को, एंड F5 रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट को। मेक सेंस? मतलब F5 कोई टेबल बनाएगा, ACL ऐसे हाँ, कोई टेबल हाँ, maintain हाँ। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन विल बी डन हियर। मॉनिटरिंग किस चीज की? जो पोर्ट 20 या 21 का ट्रैफिक आया, हाउ द F5 विल नो कि इसको मैं यहां भेजूं। F5 को ये तो पता है कि इस सर्वर पे, स्पेसिफिक 3rd नंबर सर्वर पे 20 एंड 21 की सर्विस होस्टेड है, बट जो पैकेट आया है उसमें रिक्वेस्ट इस चीज पे, इस पोर्ट की, हाउ इट विल नो? इट विल इंस्पेक्ट द पैकेट, है ना? इंस्पेक्शन हुई तभी तो अंडरस्टैंडिंग हुआ कि भाई इसको 20 और 21 की सर्विस है, इसको यहाँ भेज दो, राइट? by the monitoring. By the SSL offloading. SSL offloading. डिक्रिप्ट किया पैकेट को, अंदर चेक कर लिया कि भाई क्या एप्लीकेशन है, 2021 की, इधर भेज दो। इंस्पेक्शन। एंड व्हाट डज मॉनिटरिंग मींस कि भाई जो मैं ट्रैफिक यहाँ पे अगर भेज रहा हूं तो मेक श्योर कि ये सर्वर है, ये सर्विस आप है, ये मॉनिटरिंग हुई यहाँ। करेक्ट? यस। चलो, मॉनिटरिंग कर लिया हमने, ठीक है, और इंस्पेक्शन भी कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर फीचर इज मॉडिफिकेशन ऑफ हेडर्स। अभी मैंने बताया क्लाइंट से ट्रैफिक आया वर्चुअल आईपी पे। So I have a doubt. In this in infra which you explained, there is a single point of failure. You said multiple servers are being managed by one F5. You can connect Do one more we? here. Okay, okay. For redundancy, we have two F5s. You can create Okay. one more here. It's up to you. It's totally up to you. हम यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी के फीचर सेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? हम F5 की बात, हमें लोड बैलेंसर यूज क्यों करना है पहले तो हमें ये समझना अच्छे से। अच्छा, ओके, ओके, राइट। मॉडिफिकेशन ऑफ हेडर्स, हमने क्या बोला? क्लाइंट से ट्रैफिक आया वर्चुअल आईपी पे। वर्चुअल आईपी कहाँ है? F5 पे। F5 पे, राइट। F5 ने वर्चुअल आईपी को कन्वर्ट किया फिजिकल आईपी में। फिजिकल आईपी कहाँ है? यहाँ पे। तो उसने पैकेट का क्या किया? राउट करने से पहले जो डेस्टिनेशन आईपी था उसको क्या किया? चेंज किया, नहीं किया? किया, राइट। तो आईपी पैकेट का जो पैकेट जो आईपी हेडर है उसको मॉडिफाई किया, नहीं किया? किया है। So it's similar like a netting, right? Yes. Okay. कंप्रेशन कैन बी डन। कंप्रेशन मुझे फटाफट बता दो, कंप्रेशन होता क्या? बहुत शॉर्ट में बताना, आई डू नॉट हैव मच टाइम एक्चुअली, तो शॉर्ट में फटाफट बता दो कंप्रेशन क्या होता है। बिग फाइल का साइज को कंप्रेस करके लाइट वेट बनाना ना, ताकि इजी हो, फटाक से रिसीवर के पास सेंड भी हो जाए और अटका भी ना रहे नेटवर्क में। कितने टाइप के होते हैं कंप्रेशन? अच्छा सा। ये तो कंप्रेशन की आपने मीनिंग बता दिया। मुझे वही पता था। कंप्रेशन है ना, ये इट्स अ जनरल टर्म दैट कंप्रेशन, व्हाट इज द कंप्रेशन? कंप्रेशन इज लाइक वी आर सप्रेसिंग समथिंग, राइट? एग्जैक्टली So सेम। about the Windows we can use a RAR file, zip file, RAR something like and that. zip. It's ये तो सर हेडर फाइल में बिट भेजते हैं ना कंप्रेशन की, या दूसरी? हाँ, जो 101000111100 होता है, इसको क्या करते हैं, ये जो कभी आईपी वर्जन 6 देखा है आपने? IPv6 उसका ना रिप्रेजेंटेशन देखना कभी। अगर मान लो 4 1 है ना, या फिर मान लो यहाँ पे 0 0 है ना, ये 3 0 को हटा देंगे। 0 है तो 0 राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दिया, 1 1 को राउंड ऑफ कर दिया। दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन कैन बी डन ऑन F5।
Believe me, server cannot do that. सर्वर ने अनकम्प्रेस्ड डेटा भेजा यहाँ पे, F5 ने उसको इमीडिएट प्लेन टेक्स्ट पे भेजा है, उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद चेक किया, अरे ये तो फालतू की बिट से हटा दिया, उसको आगे भेज दिया. एंड दैट टू लॉसलेस कंप्रेशन. लॉसी कंप्रेशन नहीं करता F5, कभी नहीं करता. देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंप्रेशन, वन इज लॉसलेस, वन इज लॉसी. लॉसी में क्या होता है, कुछ बिट्स को डिलीट ही कर देते हैं, जबकि लॉसलेस में हम उनको सिर्फ मॉडिफाई करते हैं. एंड लॉसलेस जो कंप्रेशन होता है उसको हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं. जो स्टार्टिंग की 3 0 हमने हटाई हैं, इनको हम बाद में क्लाइंट साइड पे लगाया जा सकता है. वेयर एज इन लॉसी कंप्रेशन इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? Sir, I have one more question. Not about this infra. We are talking about the server only, right? So whenever we have connect virtually from like a VPN, usually now we can work like a work from home, right? So F5 we can use as a client to, connect VPN process. VPN process. I mean, my question is that somehow we have right away we work as a work from home. So we have to use like a big IP client here, somehow VPN tunnels to access our organization servers, switches, router. So how F5 can be help to do that? No, there will not be any help in work from home setup from F5. See, try to understand the difference between a firewall and a load balancer. Firewall is to protect your network and give you access, right? Load balancer is to give you maximum availability and better utilization of resources. But we can create the policy, right? Rules on the F5 to rules to access this thing. You cannot deny. Right. So where we build this F5 device actually? Before your server, before your application server. So it means they can access from anywhere, I think. F5, why you want the access of F5 from anywhere? Like as he said just before, the guy was for administrative purpose, you can access it from anywhere, but user don't have any visibility of F5. It's an administrative job. User को कोई फर्क नहीं है. VPN में user को चाहिए होता है कि भाई, yes please. Yes, sir. Actually, what he means that in our organization, client use a big IP client to connect the VPN to our organization. So he means that whether this big IP client software is configured, managed by F5 or not. Well, I'm not sure. I need to check the setup. Because it's a F5 or how infra is in our premises, that big IP client, which is installed in the end user system, which is managed by F5. Correct. This is in our infra. That's why we want to know whether VPN kind of connectivity provided by F5 or not. See, till now, I don't think that such sort of connection, like solution is being provided. But definitely I'll go today and I'll check if such kind of setup is available. But I don't think so this will be available. Sir, I think when we build the F5 device in our organization, as a administrator, wherever whoever can use if possible, so it means automatically F5 using in the network, I think. Hello, hi, Atul this side from networking. Hey, Atul. Yeah, hi Vikas. So basically, guys, yes, F5 provide SSL security layer, but that is a different module, which is ASM. Web. Okay. Yeah, WEF basically application security manager that support SSL VPNs, and I think. Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share, and subscribe for more future updates. These guys are asking about this thing. Yeah. I thought the question is for like LTM. Through LTM we are connecting to the guys, VPN. And what we are covering here is LTM module, which is going to load balance the traffic to the servers.
So if you want to learn that APM also, you guys can put your inquiry to networkings. We will definitely come up with the APM module also. Okay, thanks for the clarifications, man. Thank you. for Verify that out. clarification. Yeah, thank you. Okay, so guys, two more things are there. Okay, let me just quickly cover these things too, because we are running out of time. So I think जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया ये आपको क्लियर होगा अच्छी तरीके से, right? Yes, sir. Yeah. Another thing is SSL acceleration chip. ये थोड़ा सा मैं रेकमेंड करूंगा हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? एक्सेलरेशन चिप के बारे में जो इनबिल्ट है F5 में, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ठीक है? बट इसके बारे में डीप में अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। उससे पहले हम दे लेते हैं वन कनेक्ट। सर 5 मिनट रुक जाना, एक 5 से 7 मिनट एक क्लास चल रही है, वो खत्म हो रही है बस। वन कनेक्ट, ओके? वन, व्हाट इज वन कनेक्ट? आपने कर लिया स्टार्ट है? गौरव, आई थिंक यू आर ऑन अनम्यूट। ठीक है, फिर कर लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। ओके, सो गाइस, ओके, व्हाट इज वन कनेक्ट? आपने कौन सा ज्वाइन किया? वन कनेक्ट, नहीं, अच्छा, तो who is this? Who is? एक ही है ना आपके पास, तो आप अभी क्लास चल रही है उसमें? Sorry guys, you can continue. I'm so sorry because actually I forgot to mute myself. Yeah. Thanks, Gaurav. So one connect, what is this feature one connect? यहाँ से SSL की क्वेरी आ रही है, ठीक है? एनक्रिप्टेड है, यहाँ डिक्रिप्शन हो रहा है और यहाँ पे इसको भेजा जा रहा है। बट ये ठीक है, मैंने एक चीज अंडरस्टैंड की कि भाई जो SSL की हैंडशेक हो रहा है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में नहीं हो रहा है। SSL का हैंडशेक आपका क्लाइंट और F5 के बीच में हो रहा है। बट स्टिल अगर मैं SSL का हैंडशेक F5 और सर्वर के बीच में नहीं हो रहा है तो इस बीच में क्या चीज हो रही है? दैट इज कॉल्ड TCP हैंडशेक, राइट? SSL यहाँ पे हुआ बट TCP यहाँ पे हो रहा है। अब TCP के भी तो हैंडशेक हो रहा है तो उसके लिए भी तो यूटिलाइजेशन हो रही है ना। अब मान लो यहाँ से कनेक्शन आया, मैंने SSL ऑफलोडिंग यहाँ पे की एंड देन मैंने कनेक्शन बनाया और सर्वर से मैंने इंफॉर्मेशन लेके क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। अगेन फिर आया, फिर मैंने कनेक्शन बनाया, है ना? बट दिस इज नॉट द आइडियल वे। There is a feature in F5 which is called one connect. What F5 will do, F5 will terminate the session which is being established between client and the F5, but it will not terminate the session between F5 and the server. Okay, so what it will do, when another client will request for the resource which is available on server 1, it will use this same existing session to provide the information. That is called one connect. Okay. And to like one more feature is there in F5 which is called I rule. It's a very big feature and very big concept basically introduced by F5. What it says कि अगर तो कुछ ऐसा है जो F5 में आपको पसंद नहीं आ रहा है and you want to modify, you can modify it with the I rule. अब मान के चलो राउटर है, ठीक है? राउटर में रिप यूज किया आपने या OSPF यूज किया। Again, someone is speaking on. Thanks. So मान लीजिए आपने रिप यूज किया, OSPF यूज किया, but the working of OSPF is not sufficient for you. Then you cannot tweak this OSPF. You cannot tweak RIP, but you can tweak F5. You can create I rule through a scripting language, and you can run that program on F5, and F5 will behave as per your
command. That is iRule, and it's a fantastic feature provided by iRule, and I think मेरा personally ये मतलब thought है कि this is the one of the feature through which F5 is leading the market now, because everybody want to modify, everybody want to tweak the tweak the devices as per their requirement, है ना? Flexibility हर किसी को चाहिए, F5 is providing. I think basic of F5 I have discussed here, apart from this SSL acceleration chip, because I think I will take at least 10 minutes to explain this. So that is why I'm leaving it for now. For sure in next session I'll discuss this. ये शायद आप लोगों को पता ही होगा जब आप यहाँ तक पहुंचे हो तो, कि ये गार्टनर की रिपोर्ट है जिसमें ये 3 टेक्नोलॉजी लीडर सेक्शन में है। सबसे पहले ये F5 है, ठीक है। ये F5 का बॉक्स है 8900 सीरीज, बहुत ही बेहतरीन बॉक्स जिसे मैं बोलता हूँ, मैंने काम किया है काफी इस पे। अगर पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके की ये पूरे अपना सेक्शन है जो निक कार्ड लगा हुआ है, ये ईथरनेट का सेक्शन है, ठीक है। ये फाइबर का सेक्शन लगा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। ये नेविगेशंस है, ये एलईडी है, ये F5 का लोगो, और ये मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट नहीं है, ये फाइबर पोर्ट ही है, ये आपके कंसोल और ये मैनेजमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं F5 की। और जब क्वेश्चन आता है जब कनेक्ट करते हैं तो ये इधर वाला पोर्ट इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला, इनमें से कोई एक, और उसके बाद लॉगिन पासवर्ड मतलब देना पड़ता है। हाँ, ऑटोमेटिक एडमिन का जो आता है वो 192.168.1.245 आपका रहने वाला है डिफॉल्ट आईपी इसका। तो इसमें तो पासवर्ड सेट किया हुआ होता होगा सर बाय डिफॉल्ट जब नया खरीदते हैं तो? एडमिन या फिर हाँ, अगर कुछ नया होता है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। गूगल क्या करेगा, जो इसकी एडमिन गाइड होगी ना, इस पर्टिकुलर मॉडल की जो एडमिन गाइड पब्लिश हुई होगी, उस एडमिन गाइड में घुस के यूजर नेम पासवर्ड आपको पब्लिश कर देगा फ्रंट पेज पे, ठीक है। ओके चलो, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले, व्हाट इज अ लोड बैलेंसर और एलटीएम? एलटीएम stands for local traffic manager, ठीक है। लोड बैलेंसर कहीं ना कहीं बहुत कम यूज करेंगे आप, ठीक है, मार्केट में, कि ये लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर हर एक वो चीज होती है जो कि लोड को बैलेंस कर रही होती है। बट अगर मैं F5 की बात करूं और जिस मॉड्यूल को हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा जो ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक होगा, उसको मैनेज करेगा। क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो करेक्ट टर्म जो बनती है वो एलटीएम बनती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज कि यार एलटीएम क्या बोलते हैं, हमने तो लोड बैलेंसर पढ़ा था। ऐसा नहीं करना आपको। अच्छा, अब बात करते हैं ये होता क्या है। L4 or L7 device which distribute the traffic between the application servers to achieve best out of the hosted physical devices. अब ये जो डेफिनेशन लिखी है एक लाइन की, इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? फटाफट क्विकली बता दो मुझे। इससे ये मतलब लग रहा है कि जितने भी सर्वर्स होंगे नेटवर्क एनवायरनमेंट में, उनके ऊपर जो ट्रैफिक आएगा किसी एप्लीकेशन के लिए, उनको कैसे डिवाइड करना है या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सा मेथड यूज हो रहा है इन सर्वर्स के ऊपर लोड बैलेंस करने के लिए। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये F5 LTM कहते हैं, तो इसमें व्हाट इज लोड बैलेंस और LTM लिखा, मतलब कि क्या लोड बैलेंस कहते हैं इसको या फिर F5 LTM कहते हैं क्या, मतलब इसका
मैंने वही बताया अभी आपको कि जो लोड बैलेंसर टर्म है ना, जी, it is anything which balance the load, like team leader. आप जहां पे काम करते हैं वहां पे टीम लीडर हैं, है या नहीं है? What he does, मैनेज करते हैं मतलब कि सारे उसके अंडर में 4 बंदे हैं, जी जी बिल्कुल। and he knows that my person A is good in R&S, my person B is good in monitoring, my person C is good in both R&S and monitoring, and my person D is good in communication, right? Awesome. Now let's suppose we have an activity where all the top management persons will be there, right? मान लो आप एक लोकेशन है, एक हेड ऑफिस है, वहां पे माइग्रेशन चल रहा है, and your team is doing the migration, ठीक है? So when team leader comes into the picture, what he will do? He will align person A and person C for in the front for the activity, right? कि जो भी activity होगी, you will be performing that activity. Person B, he will align that you have to monitor the tool and you have to inform immediately if something goes wrong, correct? And he will assign person D that you have to do a fair communication between all the parties, like my management as well as client's management, about the work has been done. ठीक है? So sorry. तो बेसिकली उसने किया क्या? जो उसके पास रिसोर्सेज थे उन सभी की एक स्पेशलिटी थी, राइट? और इसके पास एक लोड था. क्या लोड था? माइग्रेशन का. उसने क्या किया? इस माइग्रेशन के लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मेक सेंस? लोड बैलेंसिंग. हाँ, तो उसने क्या किया? जो लोड था उसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेहतर पर्सन के बीच में, बैलेंस कर दिया. यस. या फिर एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि टीम लीडर हैं, उसके पास 4 बंदे हैं, उन्होंने बोला भाई मॉर्निंग आवर्स के सपोर्ट तुम दोगे, आफ्टरनून आवर्स के सपोर्ट तुम दोगे, इवनिंग का तुम दोगे और नाइट का तुम दोगे. दिस इज ऑल्सो बैलेंसर, लोड बैलेंसिंग. यस सर. मेक सेंस? यस यस सर. अगर ये चीज नहीं करें हम तो व्हाट विल बी द सिनेरियो कि एक बंदा आया मॉर्निंग में, एक्टिविटी स्टार्ट हुई, अब थ्रू आउट द एक्टिविटी बेचारा बैठा हुआ है क्योंकि हैंड ओवर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोड बैलेंसिंग हो ही नहीं पा रही क्योंकि दूसरे बंदे को तो बोला ही नहीं क्या काम करना. अगर म्यूचुअल कंसेंट से वो कर दे तो ठीक है, बट फिजिकल डिवाइसेस में म्यूचुअल कंसेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है, राइट? जी सर्वर्स आपस में बात तो नहीं कर सकते हैं. जी. So they do need something which will do this mutual communication sort of thing between them. ठीक है? अब आई होप कि लोड बैलेंसर जो टर्म है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट? अब हम बात करते हैं कि एलटीएम, ठीक है? अब हम बात करते हैं अपने एलटीएम के बारे में.
ये मेरा F5 है, ठीक है, ये पूरा लैन है, ये पूरा DMG है। DMG में एक एप्लीकेशन के 3 सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब लैन से तो ट्रैफिक कंटिन्यूअसली हिट आ रहे हैं, राइट, मे बी 1000 यूजर्स आर देयर। अब मान के चलो ये जो DMG में जो एप्लीकेशन सर्वर है ना, ये है रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? अटेंडेंस जहां पे मैनेज होती है, किसी को अटेंडेंस मार्क करनी है, he will log in and he'll mark the attendance। किसी को अगर एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन देनी है वो कर सकता है, किसी को मान लो सिक लीव देनी है या हाफ डे चाहिए वो कर सकता है, किसी को लीव प्लान करनी है अप्रूवल के लिए चाहिए तो वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें उसे वहां पे इस एप्लीकेशन सर्वर से मिलती हैं, ठीक है, सॉर्टेड है। मतलब सर डीमिलिटराइज्ड जोन, DMG बेसिकली वो प्लेस होता है जहां पे आपके सारे सर्वर्स रखे होते हैं विद द हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल, डीमिलिटराइज्ड जोन। सर्वर सर्वर रूम होता है उसी को मतलब कहते हैं क्या? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन है ये सबको एक्सेसिबल है। अब मान के चलो अपने कंपनी में 1000 यूजर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 यूजर जो है वो डेली इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे, राइट, अपने अटेंडेंस मार्क करने के लिए, करेक्ट नॉट? अब जो 1000 यूजर्स का ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास मेरे F5 बॉक्स पे, तो क्या है मेरे पास सिनेरियो मेरे पास क्या है कि या तो मैं F5 को हटा के जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी की सारी एक ही सर्वर पे भेजता रहूं, एक टाइम आएगा कुछ टाइम बाद कि ये सर्वर की जो इसकी CPU यूटिलाइजेशन है, रैम वगैरह है, मान लो यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर है ना, कंपनी ग्रो कर गई, यहाँ पे 1000 से 2000 यूजर्स आ गए, बट सर्वर हमारे पास एक ही है, यूज में आ रहा है। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी तो कन्वर्ट कर रखा है इन दोनों के बीच में कि ये डाउन होता है तो ये अप हो जाएगा, ठीक है। बट अभी जो मेरा लोड जा रहा है वो सारा प्राइमरी सर्वर पे जा रहा है। अब सॉरी, अब जो मेरा ट्रैफिक 1000 यूजर्स का आ रहा था यहाँ पे, अब क्या हो रहा है वो 2000 यूजर्स का जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर यूजर बेस डबल हो गया, ट्रैफिक का काउंट डबल हो गया है, तो मेरा यूटिलाइजेशन भी डबल हो जाएगा। मान लो पहले 40% था, अब 80% हो गया, राइट। एंड किसी भी सर्वर को, किसी भी डिवाइस को अगर प्रॉपरली वर्क करना है तो उस डिवाइस का यूटिलाइजेशन बिलो 80% होना चाहिए, whether it's a router, whether it's a switch, whether it's a server or PC, anything। अगर 80 से ऊपर जाता है तो वो मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे अब जो मेरा सेकंड सर्वर है वो लाइव तो है मेरे पास, मैंने मान के चलिए अगर मैंने इसको $5000 में खरीदा है ना, तो इसको भी $5000 में खरीदा है क्योंकि कैपेसिटी दोनों की सेम है, राइट। बट सारा काम तो मेरा ये कर रहा है, ये बेचारा आइडल बैठा हुआ है। तो एक नजरिए से अगर हम देखें, ये $5000 की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो आइडल बैठी हुई है, whereas I'm creating a risk कि any time this server can fail। और अगर एक बार फेल हुआ तो इसमें मेंटेनेंस चार्ज अगेन देना पड़ेगा मुझे इसको ठीक करवाने के लिए, करेक्ट। तो
एलटीएम ने क्या किया, लोकल ट्रैफिक मैनेजर ने क्या किया कि जितना भी ये लोकल ट्रैफिक आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कि पहली रिक्वेस्ट चेंज कर लेते हैं कि फर्स्ट रिक्वेस्ट तुम ले लो, सेकंड तुम ले लो, थर्ड तुम ले लो, देन अगेन फोर्थ तुम ले लो, फिफ्थ तुम ले लो एंड सिक्स्थ तुम ले लो, देन अगेन 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is how this number goes on. अब हुआ क्या कि जो तो ट्रैफिक 12 कनेक्शन मेरे सर्वर 1 से बन रहे थे, अब वो 12 कनेक्शन 3 सर्वर से बन रहे हैं और एक सिंगल सर्वर पे सिर्फ 4 कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो 4 इज लेसर देन 12। ठीक है, अब 12 सेशंस में मेमोरी ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी या 4 में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 12 में होगी, राइट? तो जो मेरा पहले का सिनेरियो था कि एक ही सर्वर पे 12 बन रहे थे, अब वहां 4 बन रहे हैं। जब नंबर एक सर्वर पे 12 सेशन बन जाएंगे तो हर किसी के पास 12 रहेंगे, राइट? टोटल 36 सेशंस रहेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट में नहीं करूं तो सर्वर नंबर 1 पे 36 सेशंस बनेंगे, ऑब्वियसली उसका यूटिलाइजेशन हाई जाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ एलटीएम। अब इस चीज को करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है ना, इधर से इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इस चीज को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट सारे एक बार बता दो, और कोई डाउट यहां तक में कुछ हो बता दो। हम आगे पढ़ने वाले हैं, सिनेरियो पर डिस्कशन करने वाले हैं कि सिनेरियो क्या होने वाला है एंड F5 मार्केट में कैसे, मतलब नहीं F5 नहीं, लोड बैलेंसिंग मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस। ऑल क्लियर सर? ऑल क्लियर। ऑल क्लियर सर, ये तो लोड बैलेंसर अब आया है, बट इसके पहले जब लोड बैलेंसर नहीं था तब इस चीज को मैनेज करने के लिए कोई और टूल था? अगली स्लाइड में वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। क्या पोलो अल्टो चेक पॉइंट इसी तरह का लोड बैलेंसर है या सिर्फ दे आर फायरवॉल्स? फायरवॉल, दे आर फायरवॉल्स, दे आर नॉट एलटीएम और जी। ओके। नहीं, मैं सोच रहा था कि सारे फायरवॉल मतलब कि लोड बैलेंसर नो 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 नो, दे आर वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी। There are no relation between LTM, GTM, ASM related to firewall. There is no relation between them. जैसे कंपनी में सोफोस फायरवॉल लगी है और FortiGate लगी है, तो वो तो लोड बैलेंसर नहीं हुई ना? No firewall is a load balancer. अगर ये परसेप्शन है किसी का कि फायरवॉल लोड बैलेंसिंग भी करता है, इट्स अ मिथ, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। मेरा कंफ्यूजन था, सही हो गया, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि जितने भी फायरवॉल जैसे पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, F5 ऐसे सारे मतलब लोड बैलेंसिंग काम करते हैं। नो 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 नो, थैंक यू सो मच। जो ASM है ना, ASM, ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ web application firewall, right? There could be some relation between the firewall, okay, between the firewall and the ASM, but GTM और LTM में तो कोई रिलेशन ही नहीं है फायरवॉल का। मतलब नो, दे आर बोथ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा बेस ही अलग है यार। तो अगर सिर्फ इसी को लगाया जाए तो सारे वर्क कर जाएंगे जैसे जितने भी फायरवॉल जैसे कि काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। तो इसको अलग लगाना पड़ेगा, और जैसे पोलो अल्टो 14 इसको अलग लगाना पड़ेगा।
यार देखो समझो आप ना, पर्पस समझो। फायरवॉल क्यों लगाते हैं? आप फायरवॉल पे काम कर रहे हैं अभी? अभी आप फायरवॉल काम कर रहे हैं, राइट? एक मिनट, ओके। तो मुझे ये बताइए कि फायरवॉल पे आप क्या ऑपरेशनल वर्क परफॉर्म करते हैं? अभी तो सर उस पे सारे मतलब कि ट्रैफिक वगैरह मॉनिटरिंग का देखते हैं, और जितने भी ट्रैफिक इन गोइंग आउट गोइंग, और मतलब कि बैंडविड्थ वगैरह सारे यूजर्स का, ये सारे मतलब कि अभी काउंट देखता हूँ उस पर। अच्छा, तो बेसिकली अभी आप L1 टाइप का काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग वगैरह ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, राइट? रिपोर्टिंग वगैरह, मॉनिटरिंग वगैरह, राइट? जी कोई प्रॉब्लम आती होगी तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे बता देते होंगे, राइट? ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप इसे देख लीजिए। कूल। तो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ कि फायरवॉल हम क्या करते हैं। फायरवॉल से हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, समझ रहे हैं आप? फायरवॉल का काम ही जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन लगाना होता है। क्या करना होता है? जैसे कोई साइड ब्लॉक करना होता है। यस, किस पर्सन को क्या एक्सेसेस रहेंगे ये फायरवॉल के थ्रू हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? अगर तो जो मेरा डीएमजी में कोई सर्वर है, वो सर्वर अगर वेब सर्वर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सर्वर पे किस किस को एक्सेस रहेगा, ये चीज हम फायरवॉल से डिसाइड करते हैं। जैसे कोई यूजर बहुत सारा यूट्यूब चला रहा है, उससे बैंडविड्थ ज्यादा खत्म हो रहा है, तो उस प्रॉपर आईपी को लेके मतलब कि हम फायरवॉल पे इंटीग्रेट करके उस यूट्यूब का साइट को डाल के ब्लॉक कर सकते हैं। हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं वहां पे। जी जी। बट वी कैन नॉट डू दैट ऑन F5. On a certain level we can do that, but on a bigger level it's not possible, ठीक है? अब फायरवॉल है, ठीक है? आपने क्या किया, ये मेरा फायरवॉल है, यहाँ पे लैन है, ये वैन है, ये F5 है, ठीक है? ये कनेक्टिविटी आपकी फायरवॉल की बनती है। अब लैन से बंदा वैन पे जा रहा है, फायरवॉल विल चेक whether the access is there or not. If the access is there, it will pass the traffic. If access is not there on that particular port, it will deny the traffic. ठीक है? लैन से ट्रैफिक आया, डीएमजी जा रहा है, डीएमजी के पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जा रहा है, इट विल चेक whether for this particular server is that person is having the access. If yes, the policy matches, it will pass, otherwise it will drop. Whereas the main motto of F5 is the traffic is coming and a bulk traffic is coming from the LAN or maybe from the WAN if it's a web server. And we have multiple servers. We have to distribute the traffic between them. The availability of the service is the main motto of the load balancer. Make sense? Yes, sir. Firewall और I think अब LTM का आपको थोड़ा sorted हुआ होगा, right? सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा ही कंफ्यूजन था। ओके। अब क्वेश्चन अभी किसी ने मुझे पूछा कि सर जब LTM नहीं था तो क्या हुआ, ठीक है? अब वही सेम क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड LTM। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि LTM नहीं है, राइट? ये मेरा लैन है, इंटरनेट पे लैन आया, ये सॉरी ये मेरा वैन है, ठीक है? ये इंटरनेट है, क्लाउड है मेरा, ये सारे मेरे यूजर्स हैं। अब मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बना दी, ठीक है? एप्लीकेशन क्या करता है कि ग्रोसरीज डिलीवर करती है, ठीक है?
मैंने क्या कहा, मैं गया अपने रिलेटिव्स के पास, रिश्तेदारों के पास, ठीक है, रिलेटिव्स के पास गया, मैंने बोला कि जी मैंने नया नया ये काम स्टार्ट किया है, आप लोगों को अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपनी ग्रोसरीज मेरे पास से ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। उन सभी ने मेरी बात समझी, हालांकि रिलेटिव समझते नहीं है, बट स्टिल मान के चलते हैं कि उन्होंने समझी, राइट। ये 3 रिलेटिव्स हैं मेरे, इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन जो मैंने सर्वर बनाया हुआ है उस पर लोड आ गया 3 यूजर्स का। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने 2-4 दुकानदार जो होते हैं ना, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनसे मैंने टाई अप किया हुआ है कि भाई मेरे अगर एप्लीकेशन से कोई बंदा आता है तो आपकी सेल बढ़ेगी। आपको क्या करना है कि उस जो मटेरियल वो ऑर्डर करेंगे उन पे सिर्फ 5% का मार्जिन रखना है, रेस्ट डिलीवरी कर देंगे। एंड वो शॉपकीपर्स रेडी हैं ये चीज करने के लिए। अब मान के चलो एक पेंसिल बॉक्स है, मार्केट में मिल रहा 30 रुपीज का, आपकी ऐप से मिल गया वो 21 रुपीज का। आपके रिलेटिव्स तो खुश हो गए क्योंकि बच्चे तो हर किसी घर में है, राइट, और पेंसिल बॉक्स चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली मैगी का पैकेट है, जो 10 रुपीज का पैकेट था वो आपकी एप्लीकेशन ने 9 रुपए में डिलीवर कर दिया, रिलेटिव्स और खुश हो गए। ओवर द टाइम जो ये 3 रिलेटिव्स हैं ये 100% सेटिस्फाई हुए आपके डिलीवरी से, आपकी एप्लीकेशन से। व्हाट दे डिड, दे ऑल आर हैविंग अ व्हाट्सएप ग्रुप which is called family members, and they referred your application in that group and mentioned that this is a very good application, the services are very good, you all can download this application and you can use it and you all will get benefited. सबने बात सुनी। अब 1 2 3 ग्रुप में बात गई, हर ग्रुप में मान लेते हैं 50 यूजर्स हैं, 50 में से 25 ने इंस्टॉल कर लिया उसको। नाउ जो 3 थे, अब मेरे पास टोटल 78 यूजर्स हो गए। सॉर्टेड है। 78 जो यूजर्स हैं, अब जो 3 यूजर्स का ट्रैफिक था वो 78 यूजर्स का हो गया। आफ्टर अ मंथ दिस नंबर्स बिकम 780। जो 78 यूजर्स थे अब 780 यूजर्स हो गए। आफ्टर 1 ईयर ये नंबर जो है वो इंक्रीज करके 3000 हो गया। विकास इज नाउ अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब 3000 पहले जो था 3 यूजर्स थे, 78 यूजर्स हुए, 780 भी हो गए, ठीक है भाई, सर्वर ने झेल लिया। बट व्हाट अबाउट दिस 3000 यूजर्स? अब क्या ऑप्शन बचता है? पहला ऑप्शन तो ये है कि सर्वर की स्पेसिफिकेशन आप इंक्रीज कर दो। रैम मान के चलो 16 GB था, 64 GB कर दो। हार्ड ड्राइव आपकी 1 TB थी, आप इसको मे बी 16 TB कर दो। CPU प्रोसेसर जो आपका था i3 था, मान के चलो आप 4 कोर का प्रोसेसर था मान लो आप सर्वर पे, आप इसे ऑक्टा कोर लगा दो, 2 प्रोसेसर लगा दो, मान लो ऑक्टा कोर के 8 के 2 प्रोसेसर लगा दिए। आपने स्पेसिफिकेशन से बढ़ा दी, लेकिन इस स्पेसिफिकेशन को बढ़ाने के लिए भी तो आपको डाउन टाइम चाहिए, या इधरली आप इस सर्वर को अगेन एक नया सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय करो और इस कनेक्शन को यहाँ पे शिफ्ट करो एंड देन इसको अपग्रेड करो। या तो ये एक मेथड है, या फिर आप डाउन टाइम ले लो। अब डाउन टाइम के टाइम पे अगर इसमें 3000 यूजर्स में से किसी 2 यूजर ने भी एप्लीकेशन ओपन की तो सर्विस तो अनअवेलेबल है, तो 2 कस्टमर बेस तो गया आपका। करेक्ट नॉट? आप अच्छा आप मुझे बताओ, आप फ्लिपकार्ट खुद यूज करते हैं? करते नहीं करते?
जैसे जैसे ही आपको ऑर्डर करना है फ्लिपकार्ट पे कुछ, आपको फ्लिपकार्ट पे वो ऑप्शन अनअवेलेबल दिखता है, आप क्या करते हो इमीडिएटली? अमेज़न खोल लेते हैं। यस, आप अमेज़न खोल लेते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो फ्लिपकार्ट का कस्टमर है, कस्टमर फ्लिपकार्ट का क्यों है? बिकॉज उसने सबसे पहले फ्लिपकार्ट ओपन किया, इसलिए वो फ्लिपकार्ट का कस्टमर है। बट फ्लिपकार्ट पे सर्विस अनअवेलेबल थी, इसलिए वो कस्टमर डाइवर्ट हो गया किसी और वेबसाइट पे। तो व्हाट हैपेंड बेसिकली कि वो कस्टमर बेस खराब हो गया। मान लो अगर 2 कस्टमर भी खराब हो गए तो इट्स अ लॉस। अब मान लो आपने इसको, चलो आपने डाउन टाइम नहीं लिया, आपने इसको एक नए सर्वर पे भेज दिया। अब ये सर्वर तो आपके पास है ही है। अब इस सर्वर को अपग्रेड करने के लिए अपना ट्रैफिक आपने दूसरे सर्वर पे शिफ्ट किया। ये दूसरे सर्वर पे भी तो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तभी तो दूसरा सर्वर आया आपके पास। अब इसको आपने अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद इस सर्वर क्या करोगे? ये तो पड़ा रहेगा आपका साइड में। प्रॉब्लम समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, रूट कॉज क्या हो रहा है यहाँ पे? वो प्राइमरी जा रहा है, सेकेंडरी पे नहीं जा रहा है। भाई आपने एक जो मेजर सर्वर आपने बिल्ड कर दिया, आपने ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मान लो आपका विजन अच्छा है कि भाई आज 3000 यूजर है, कल को 30,000 यूजर्स होंगे, उसके लिए अच्छी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो आपने क्या किया कि अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दी, लेकिन जो बैकअप सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया था वो तो प्राइमरी अप होने के बाद वो तो साइड में पड़ा ही हुआ, राइट? अब ये बैकअप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इसके साथ इसको प्राइमरी सेकेंडरी बना दो। और इन एनी केस अगर मान के चलो ये 3000 का जो यूजर बेस है या 30,000 पहुंच भी गया अगर मान लो, तो क्या होगा? अगर ये फेल हो गया सर्वर, तो प्राइम सेकेंडरी जो बैकअप सर्वर वो तो झेल ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से 30,000 यूजर्स का डेटा। करेक्ट और नॉट? यस सर, यस सर, यस सर। सर्विसेज फेलियर। तो जितने भी साइट पर विजिट करते हैं लोग, तो उसके तो मल्टीपल यूजर पे, मल्टीपल सर्वर पे डिवाइडेड होंगे। सपोज दैट इंडिया से कर रहा है तो इंडिया के सर्वर पे जाएगा। 100 अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा सर्वर्स होते हैं। अगर मैं किसी एक ऐप, अगर फ्लिपकार्ट की बात करूं तो मेरे एज पर मी मोर देन 100 सर्वर्स होंगे उनके पास। डाउन टाइम चला गया, मान ले कि इंडिया के सर्वर पर डाउन टाइम चला गया, तो सारे सर्वर पर तो डाउन टाइम नहीं जाएगा, वो पर्टिकुलर। हाँ, तो वो जो इंडिया के सर्वर पर डाउन टाइम गया है, उस ट्रैफिक को राउट कैसे करे दूसरे सर्वर पे? तो एलटीएम से करेंगे ना सर? यस, वहां पे एलटीएम, बट एलटीएम से पहले भी एक चीज आती है, वो हम डिस्कस करें। ये चीज सॉर्टेड है जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये बहुत बेसिक है और बहुत ज्यादा टाइम लिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। जनरली इतना टाइम लगता नहीं है, बट आज मैंने बहुत ही मतलब तसल्ली से समझाया है। तो ये समझ में आया, नहीं समझ में आया आपको? प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम समझ, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, तो सॉल्यूशन तो चुटकियों का खेल है, समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम समझनी बहुत जरूरी है। ये लो जी, पहला सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। क्या हुआ? पहला सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। क्या? डीएनएस। इंट्रोड्यूस द डीएनएस इन बिटवीन द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी एप्लीकेशन है उसका जो नाम है XYZ है .com मान लेते। ये मेरा सर्वर 1 है जो मैंने सबसे इनिशियली बिल्ड किया था, ठीक है, जब मेरे पास 3 यूजर थे खाली, ठीक है। अब XYZ मेरा यहाँ पे होस्टेड है, इसका आईपी है 10.1.1.1। मेक सेंस? अब मैं अपने डीएनएस पे गया, मैंने अपने डीएनएस को बोला
कि whenever any connection comes to you and ask you for the IP address of xyz.com, तो जो फर्स्ट कनेक्शन होगा उसको तो आप रिजॉल्व करो 10.1.1.1 में, जो सेकंड कनेक्शन आए उसको करना है आपको 10.1.1.2 में, एंड जो थर्ड कनेक्शन आए उसको कर देना आप 10.1.1.3 में। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, जैसे ही फर्स्ट क्लाइंट आया डीएनएस के पास, उसने xyz.com डाला, उसका डीएनएस लुकअप हुआ, पहला डीएनएस लुकअप में आईपी जो रिजॉल्व हुआ उसका वो हुआ 10.1.1, एंड वो ट्रैफिक फिर सोर्स से सोर्स से डेस्टिनेशन के पास चला गया और इस सर्वर पे लैंड कर गया। सेकंड क्लाइंट आया, उसने डीएनएस रिक्वेस्ट डाली, डीएनएस रिक्वेस्ट रिजॉल्व हुई 10.1.1.2 में, एंड क्लाइंट से सर्विस चलेगी आपके सर्वर के पास, सेकंड के पास। थर्ड क्लाइंट आया, थर्ड ने डीएनएस रिक्वेस्ट डाली, उसका जो आईपी रिजॉल्व हुआ वो 10.1.1.3 हुआ और थर्ड रिक्वेस्ट चली गई आपके इस सर्वर के पास। सिमिलरली अगर कोई फोर्थ क्लाइंट आता है, DNS request जाएगी, again this DNS will resolve this query to this IP address 1, ये यहाँ पे फिर चला जाएगा। अगेन अगर कोई फिफ्थ आता है तो वो सेकंड के पास जाएगा, सिक्स आता है तो यहाँ पे जाएगा। This method, like first request here, second here, third here, then fourth here, fifth here, sixth here, this method is called round रॉबिन। क्या कहते हैं इसे? राउंड रॉबिन। और 75% से लेके 90% तक डिप्लॉयमेंट में यही मेथड यूज होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सर इसके अलावा सेकंड बेस्ट मेथड क्या हो सकता है सर? विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स में या फिर लेक्चर्स में, ठीक है? वन बाय वन चलेंगे। अभी राउंड रॉबिन को हमें अच्छे से समझना है। बहुत ही सेंसफुल कॉन्सेप्ट है राउंड रॉबिन का, बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही सिंपल है कि जितने भी कनेक्शन आ रहे हैं उनको रोटेट करते रहो अमंग द सर्वर्स, ठीक है? ये सर्कल यूं ही घूमता रहेगा। सॉर्टेड है? इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आगे सर। अब मुझे फटाफट आप लोग ना एक जवाब दो सवाल का कि इस सेटअप में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आती है? सर इस सेटअप में ये दिक्कत है कि जैसे 10.1 जैसे इसमें लोड से ज्यादा हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा किस पे लोड ज्यादा जाना चाहिए पर्टिकुलर, ये डिवाइड नहीं है इस पे। ट्रैफिक मतलब किस पे जाना चाहिए पर्टिकुलर, ये नहीं दिख रहा है इसमें। तो आपको वो चीज क्यों करनी है? क्योंकि सर वो लोड ज्यादा हो जाएगा, हम सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे ना। लोड ज्यादा कैसे होगा? देखो अगर मान के चलो अभी एक छोटा नंबर ले लेते हैं कि 9 कनेक्शंस आ रहे हैं, 9 कनेक्शन तो 3-3 कनेक्शन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो लोड कहाँ बढ़ा? उसके बाद अगर जैसे ट्रैफिक आएगा, जैसे सर कोई डाउन रहता है, जैसे कोई सर्वर डाउन रहता है एक, तो 2 सर्वर बढ़ जाएगा ना फिर। हाँ, तो अगर डाउन हो गया तो 2 पे फिर भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, वो तो आपका सर्वर फेलियर हो गया, राइट? यस सर। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? वो सर्वर तो अगर मान लो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो आपको तो वो हार्डवेयर रिप्लेस करना ही है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो जब वो वापस रिटर्न बैक कम हो पाएगा
तो डीएनएस उसको क्यूरी नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि जब वापस राउंड रॉबिन में क्या होगा कि वन बाय वन फर्स्ट सर्वर, सेकंड, थर्ड, ऐसा। तो जब वन डाउन हो जाएगा तो 2 एक्टिव सर्वर्स रहेंगे, तो वो जो राउंड रॉबिन में तो उसको प्राइमरी सेकेंडरी को ही ज्यादा कनेक्शन देगा, थर्ड वाले को नहीं दे पाएगा। क्या डीएनएस के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी होती है? नहीं। देन नहीं, आप लोग मतलब इसको ना देखो, ये जो हमारा पूरा कोर्स है ना F5 का, इसको ना एज अ फ्रेंड कंसिडर करो कि मैं ना एक फ्रेंड की तरह आपसे बात कर रहा हूँ। जितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, क्वेश्चंस उतने ही शूट होंगे और आपके डाउट्स ना उतने ही क्लियर होंगे। आपके माइंड में कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना, लेट मी नो। मैं अगर वो प्रॉब्लम आपको नजर में आ रही है, दैट मींस दैट कंफ्यूजन यू हैव इन योर माइंड, स्पिट इट आउट, आई विल मेक इट क्लियर। अभी किसी ने बोला है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पे ही वो भेजेगा, थर्ड सर्वर पे नहीं भेजेगा। तो देयर इज नो मैकेनिज्म कि डीएनएस ऐसा कुछ कर सके। सर डीएनएस सर्वर भी बैठ जाए तब इशू? डीएनएस सर्वर तो मल्टीपल होंगे ना यार, अगर लोकल बैठ जाएगा तो ग्लोबल है, राइट? आप डीएनएस में बेसिकली जब हम एंट्री बनाते हैं ना, मैं थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूँ डीएनएस का। जब हम डीएनएस पे एंट्री बनाते हैं तो एक लोकल डीएनएस से बनता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, एक बनाते हैं हम ग्लोबल डीएनएस पे जो ग्लोबली उस यूआरएल को आईपी में रिजॉल्व करे, राइट? तो लोकल बैठ गया तो ग्लोबल है, और ग्लोबल एक तो है नहीं, ये 4 तो है नहीं, ये 6 तो है नहीं, मल्टीपल सर्वर्स आते हैं। और कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ, मतलब अपने दिमाग को ना बाउंड मत करो, खोल दो उसको, सोचो। सर प्रॉब्लम यही है ना कि अगर एक सर्वर डाउन होता है फिर हम ये कोई मतलब जैसे इस सर्वर जो डाउन हुआ है उसके जो यूजर थे वो किस सर्वर जाएंगे, दोबारा 1 पे जाएंगे या 3 पे जाएंगे, 2 डाउन हुआ है तो इसके लिए भी लोड बैलेंसर को यूज करना पड़ता होगा। मैं क्या मतलब तुम सर ये भी हो सकता है ना सर, जैसे आपने 3 आईपीस के लिए 3 अलग अलग डीएनएस बनाए, मतलब xyz.com 1 और 2 3, तो अपन ने आईपी बाइंड करा उनसे, तो नहीं जो नहीं नहीं, 3 अभी रिक्वेस्ट आई। हमने आईपी बाउंड नहीं करा। हमने नहीं, मतलब डीएनएस को बोला है कि एक क्वेरी आएगी तो आपको अगर XYZ की एक क्वेरी आती है उसको 10.1.1 में कॉन्फ़िगर वो रिजॉल्व करना है, हाँ दूसरा वही, आता है तो लाइक दैट्स ओनली सर। 1.1.2 पे जैसे करना है, 2 पे और गया, 1 पे गया, 1 रिक्वेस्ट, सेकंड पे गया, सेकंड, थर्ड अगर डाउन हुआ है तो थर्ड यूजर को तो सर्वर अनअवेलेबल या सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग लाइक दैट ऐसा मैसेज मिलेगा। तो वहां पे थर्ड यूजर जो होगा वो उस मतलब एप्लीकेशन को अवॉइड करेगा, लाइक जैसे ये कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो वो फिर दूसरी शॉपिंग पे जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक लॉस्ट ये हो सकता है कि थर्ड यूजर हमारे से लॉस्ट हो रहा है। करेक्ट। आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था क्या? नहीं सर, एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे आपने अच्छा। डीएनएस का बोला तो एक तो ये पॉसिबिलिटी, और दूसरा आपने जो राउंड रॉबिन बोला है तो वो थर्ड डीएनएस उस जो था राउंड रॉबिन मेथड के अकॉर्डिंग, जब थर्ड सर्वर डाउन होगा और वापस अप आएगा तो वो उसको क्यूरी नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो अपन उसको बताए कि यार एक्टिव स्टैंड बाय से एक्टिव में गया, एक्टिव से स्टैंड बाय गया, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करे। ठीक है। और कुछ और कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही हो यहाँ पे? आपने एक बोला कि यूजर लॉस, एक आपने बोला नो मैकेनिज्म ऑफ अवेलेबिलिटी, राइट? ये चीज बोली आपने दोनों, ठीक है, ये मैंने नोट किया, अभी डिस्कस करेंगे। और कोई सॉल्यूशन किसी के माइंड में कुछ आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही हो इसमें? आई कैन सी 21 पार्टिसिपेंट्स हैं और 21 में से सिर्फ 2 या 3 की आवाज में अगर मैं सुन पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है बाकी को या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा या फिर F5 बेसिक डिवाइस ट्रैफिक, आई थिंक। किसी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ F5 व्हाइल एवरीवन मूविंग टू क्लाउड?
platform to leverage load balances within cloud and not in सी पहले देखो एक मैं ये जो चैट में क्वेश्चन किसी ने पूछा है, रोहित मान ने आई थिंक भेजा है, राइट? F5 LTM में क्लास 11th में है आप, ये उदय सिंह जी, अगर मतलब मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, आप क्लास 11th में हैं तो LTM मुझे समझ नहीं आ रहा आप मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन स्टार्ट विद LTM, बट CCNA आपको होना चाहिए उसके लिए, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको IP एड्रेसेस, सबनेट मास्क की चीजें पता होनी चाहिए। F5 LTM मींस, अरशद खान जी आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि F5 LTM का क्या मीनिंग होता है, राइट? अगर आप सुन पा रहे हो तो, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं मुझे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रोहित मान का कि भाई F5 का फ्यूचर क्या है। एंड सौरभ सिंह जी, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट बेसिकली ट्रैफिक को डिवाइड करता है वो। ठीक है, रोहित मान जी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी। पहले हम ये 2 पॉइंट, मुझे लग रहा है कोई अभी बोल नहीं रहा, ठीक है, तो मैं इस डिस्कशन को एंड करता हूं यहाँ पे और मैं इन 2 कंक्लूजन पे बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, क्या नाम था सर आपका, जो जिन्होंने ये 2 सॉल्यूशन दिए मुझे अभी? सर अक्षय। अक्षय, अक्षय जी ने, अक्षय कुमार, अक्षय गुप्ता। अक्षय गुप्ता, ओके। मैं तो खुश हो गया था यार कि मतलब ठीक है। ओके, जोक सपाट। सो जो तो फर्स्ट, में से टाइम नहीं मिलता। अरे सर उसके पास बहुत टाइम है। जितना उनके पास टाइम है ना, उतना टाइम किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ आपको। सही बात है, कुछ ही हुआ इज सॉर्ट ऑफ सुपर हीरो नाउ। चलो, सबसे पहला जो अक्षय ने सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम बताया कि यूजर का लॉस होगा कैसे, कि जो फर्स्ट रिक्वेस्ट सर्वर 1 के पास गई वो रिजॉल्व हो गई, सर्वर 2 के पास गई वो रिजॉल्व हो गई, सर्वर 3 के पास गई और सर्वर 3 डाउन है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई कि जैसे थर्ड कनेक्शन की रिक्वेस्ट, थर्ड यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर 3 पे आई, डीएनएस ने उसको फॉरवर्ड तो कर दिया बट उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा बिकॉज सर्वर डाउन। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट सेकेंड पॉइंट ही मेंशन कि जब ये सर्वर अप आएगा तो ही लाइक द DNS विल नॉट बी हैविंग एनी क्लू that this server is up now and I have to send the traffic on the third one also, right Akshay? Right. But there is a problem. You are 50% correct over here and your statement is 100% correct, 100% wrong. कैसे? आपने जो अवेलेबिलिटी की बात की ना कि ये सर्वर अप आ गया, इसको DNS को चलेगा ही नहीं पता, अगर क्या मैं इस बात को ऐसा बोलूं कि ये सर्वर डाउन हो गया है, ये ही नहीं पता DNS को, तो अब का क्या पता होगा उसको? करेक्ट, राइट सर। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? समझ रहे हो? अक्षय ने बोला, अक्षय अपनी जगह पे ठीक है, उन्होंने मतलब सही तरीके से बोला, बट क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि DNS के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कि वो अप या डाउन का कुछ फंडा समझ सके। अब मैं कह रहा हूं अगर DNS को यही नहीं चल रहा पता कि वो सर्वर डाउन है, तो अब का कहां से चलेगा पता उसको? एंड वो सर्वर डाउन है, DNS को नहीं पता, दैट इज व्हाई व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कंटिन्यूअसली सेंडिंग द ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ राउंड रॉबिन, एंड व्हाटएवर यूजर्स आर कमिंग लाइक गेटिंग लैंडेड ऑन सर्वर 3, they are getting a web page error called service is unavailable. अब चाहे 3 लाख कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ रही हो DNS के पास, DNS ने 1 लाख यहाँ भेजी, 1 लाख यहाँ भेजी और 1 लाख थर्ड पे भेजी, थर्ड ने रिस्पॉन्स नहीं करा। अब 1 लाख जो यूजर हैं मेरे, उसमें से 50 लाख ने क्या किया, उस पेज को रिफ्रेश कर लिया। हेलो,
आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस यस कोई कुछ बोल रहा है बैकग्राउंड में, क्या रिपीट करेंगे? कोई डाउट है आपका? तो वॉइस ब्रेक हो रहा था क्या बीच में? नहीं देखो, मेरा कनेक्शन तो स्टेबल है। किसी और को ब्रेकेज हुई क्या? नहीं नहीं। ठीक है, तो प्लीज आप अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लो, है ना? और अगर अभी सॉर्टेड है तो अभी आप इसको ध्यान से सुन लो कि जो 1 लाख यूजर थे मेरे, जो इस सर्वर 3 पे लैंड हो रहे थे, उसमें से 50,000 ने क्या किया, उस पेज को रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश किया तो वो या तो इस पे लैंड हो गए या फिर इस पे लैंड हो गए। और जो 50,000 थे उन्होंने बोला यार ये तो एप्लीकेशन बेकार है, कहीं और चलो। हो गया लॉस। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो 50,000 ने रिफ्रेश किया है उसमें से 25,000 यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गए और बाकी के 25,000 इस पे फिर दोबारा लैंड कर गए। तो 50,000 तो पहले ही चले गए, तो 25,000 बाद में और चले गए। या मान लो 15,000 थे, वो 15,000 और चले गए, तो 65,000 का यूजर्स का आपका फॉर अ टाइम बीइंग लॉस हो गया। और रियल बिजनेस की अगर बात करें और इतनी बड़ी अगर आउटेज होती है ना, इतना बड़ा लॉस, अगर 65,000 यूजर्स डाइवर्ट हुए हैं, अगर मान के चलो 1 रुपए का भी सामान वो ऑर्डर करते तो 65,000 का रेवेन्यू था। इट्स अ ह्यूज 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 लॉस। लॉसेस बिलियंस में हो जाते हैं, नौकरियां झटके से चली जाती हैं। कभी हुआ आप लोगों के साथ? मतलब मे बी आपके टीम में या किसी और टीम में ऐसा कुछ हुआ हो कि डाउन टाइम हुआ और फिर इन द एंड कंपनी ने उसको बेचारे को फायर ही कर दिया। ऐसा रियली होता है, रियल सिनेरियोज में ऐसे होता है। अगर आपने रिस्क हाईलाइट नहीं किए हुए ना रिस्क रजिस्टर में, तो जिस दिन ऐसा सिनेरियो बनेगा आपके पास रिस्क आ जाएगा। So always try to maintain a risk register and always try to inform your higher management as well as the client that we are sitting on a risk. ताकि कल को अगर वो रिस्क अकर होता है, थ्रेट बनता है, तो आप बता सको कि यार देखो मैं तो डे 1 से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि रिस्क है, लेकिन आप लोग तो आंख बंद करके बैठे हुए थे। सर एक डाउट है सर। बताइए सर, इन केस इन दिस सिनेरियो अगर F5 यहाँ पे होता तो ये जो सर्वर जो है, जो एप्लीकेशन सर्वर जो है, ये डाउन होने से पहले ये अलर्ट ट्रिगर करेगा ना सर? करते हैं इनको। अभी नेक्स्ट स्लाइड में F5 भी लेके आ रहे डीएनएस की जगह। ठीक है अक्षय, ये जो सेकेंड लाइन थी इसको आपके माइंड में क्या मैंने मॉडिफाई किया या नहीं किया? हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर हुआ मुझे। हुआ ना जी। किसी कुछ डाउट तो नहीं है? आगे मूव कर लें अब हम। यस सर। तो डीएनएस के साथ ना प्रॉब्लम ही यही थी, इसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि अगर कोई सर्वर डाउन चला जाता है या मान के चलो सर्वर अप भी है, ये सर्विस अगर मैं 443 की सर्विस होस्ट कर रहा हूं, ये सर्विस ही अप नहीं है इस सर्वर पे, तो वो कुछ कर सके उस चीज का। डीएनएस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप कर सके कि भाई इस सर्वर पे ये सर्विस होस्ट नहीं है, अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मैं इस पे कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजूं। डीएनएस के पास ऐसा कोई कुछ भी नहीं था ऐसा। सॉर्टेड है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई हमें, वो प्रॉब्लम समझ में आई आपको? तभी आगे सॉल्यूशन समझ पाओगे। जी सर बिल्कुल समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? क्लियर है? तो पता होना चाहिए कि हमारा सर्वर सर प्रॉब्लम क्या है या नहीं है। सर प्रॉब्लम यही थी ना कि लाइक की सर्वर में कोई सर्विस होस्टेड थी और सर्वर डाउन चले जाता है तो डीएनएस को पता नहीं चलता था कि सर्वर डाउन है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी लॉस हो जाता है तो डीएनएस को तो पता ही नहीं है ना। ओके सबसे पहले हमें डीएनएस को बताना होगा कि मतलब किस सर्वर की किस तरह आप बता ही नहीं सकते। यू हैव नो मैकेनिज्म। Hi, you are watching the recording from one of our live session. Hit like, share and subscribe for more future updates.
तो सर उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, इन 3 सर्वर्स की जो आईपी है ना, इनके लिए अलग अलग यूआरएल बाइंड कर दो। ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका, अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो, कि भैया xyz1.com वो होगा 10.1.1 में, xyz2.com वो होगा 10.2 में, ये आपका सेकंड जो सर्वर है, एंड जो xyz.com है वो होगा 10.3 में। और आप अपने यूजर्स के पास जाएं और आप उनको बोलें कि सर आप पहले 1 लाख यूजर्स में से हैं, तो आपको xyz1.com यूज करना है। सेकंड 1 लाख के पास जाएं, मतलब 1 लाख से 2 लाख वाले के बीच जितने यूजर्स आते हैं, ठीक है, उनके पास जाएं, उनको बोले कि आप xyz2.com यूज करें, और बाकी 2 लाख से 3 लाख वाले जो यूजर्स हैं उनको जाके बोलें कि आप .3 यूज करो, xyz3.com यूज करें। ये एक सॉल्यूशन है, बट मुझे आप बताओ क्या ये फिजिबल है? नहीं सर। नो सर। सॉल्यूशन तो है ना? फिजिबल है? नहीं है। फ्लिपकार्ट कैन नॉट गो टू क्लाइंट्स एंड कैन से दैट आपको फ्लिपकार्ट 1 यूज करनी है, या आपको फ्लिपकार्ट 2 यूज करनी है, या आपको फ्लिपकार्ट 1000 यूज करनी है, 1000 सर्वर। अमेजोन नहीं कर सकता ये चीज, फ्लिपकार्ट नहीं कर सकता ये चीज, और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे हम खुद के लिए, और क्लाइंट बेस जो टूटेगा वो तो टूटेगा ही। कूल। तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम डीएनएस के थ्रू इस चीज को रिजॉल्व कर सकें सर। लेकिन टेम्परेरी। आज के मार्केट में तो ये सर्विस यूज नहीं कर रहे ना सर, जो डीएनएस वाला मेथड। छोटे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फॉर टाइम बीइंग दिस कैन बी यूज्ड, ठीक है। मान के चलो फ्लिपकार्ट, तो हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, जो अटेंडेंस वाला प्रॉब्लम था ना, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जहां पे हमने होस्ट किया था, अब मान के चलो वो इंटरनल एप्लीकेशन हो गई, और इंटरनल मान के चलो आपके पास 100 तो यूजर है, 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क करनी है आपको, उसके लिए आपने 2 एप्लीकेशन सर्वर बना दिया और डीएनएस से एंटर करके लोड बैलेंस आप दोनों पे कर रहे हो। वहां पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, अगर डीएनएस की आप यूज कर रहे हो और छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसने 4 दिन नहीं भरा, छोटा 100 एम्प्लॉय हैं, 100 में से कोई 5-10 एम्प्लॉय है जिन्होंने आज अटेंडेंस नहीं भरी क्योंकि सर्वर अनअवेलेबल था, तो ठीक है, कल फिल आउट कर लेंगे, राइट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है उसमें, राइट। यस। बट अगर आप हो और आपको यू नीड पेंसिल बॉक्स फॉर योर चाइल्ड, या फिर आपको अपने नीस के लिए चाहिए, तो वो तो आज ही चाहिए ना, ताकि आप आज ही ऑर्डर करोगे तभी तो कल डिलीवर होगा। अब कल करो तो परसों डिलीवर होगा, कल आपका बच्चा रो रो के पागल हो जाएगा कि सर पेंसिल तो है ही नहीं, मैं पढ़ूं क्या। आपकी वाइफ बोलेंगे आटा तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं रोटियां कैसे बनाऊं, है ना। तो छोटे जो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन की क्रिटिकलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, वहां दिस कैन बी यूज्ड फॉर अ टाइम बिंग। देखो आइडियल सोल्यूशन तो ये भी नहीं है, फॉर अ टाइम बिंग आप इस चीज को कर सकते हो, बट बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। ये इनिशियल प्रोसेस हुआ करता था जब F5 मतलब लाइक लोड बैलेंसर्स नहीं होते थे, तब ये इनिशियली कर लिया जाता था कि चलो ठीक है डीएनएस यूज कर लो। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक बंदा कंटिन्यूअसली यही मॉनिटर कर रहा होता था कि सर्वर अप है, सर्विस अप है, सर्वर अप है, सर्विस अप है। तुमने अगर याद हो तुम्हें, अगर कोई बंदा 2010 के आसपास कंप्यूटर से अगर फैमिलियर हुआ हो, सर्वर रूम में कभी एंटर किया हो, तो एक बड़ी सी ना स्क्रीन हुआ करती थी, उस पर कुछ नहीं चलता था, बस ना सर्वर्स के पिंग चलते थे, छोटे छोटे बॉक्स खुले होते थे और अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए पिंग चल रहे होते थे उस बड़ी सी स्क्रीन पे। वो क्या कर रहे होते थे, इन सर्वर्स की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे होते थे। एक बंदा साधा सीधा बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा जी, बस वो स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा, हाँ ये सर्वर अप है, ये सर्वर अप है, ये सर्वर अप है।
या फिर किसी बंदे ने, आपकी जो 100 बंदे हैं इनमें से किसी ने बता दिया कि सर मेरा सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा, तो आपने चेक कर लिया कि हाँ भाई ठीक है ये सर्वर डाउन है, उसको आप कर लेते हैं। ठीक है, बट आज के सिनेरियो में इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल, इवन नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई? सॉल्यूशन की तरफ बढ़े? यस सर प्लीज। यस यस। ये लो सर, जिसका आप सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। F5 आ गया मार्केट में, आपने उठा के उसको रख भी लिया अपने एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में लगा दिया। बेनिफिट क्या मिला आपको? अब फटाफट मुझे आप सारे जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है ना, बता दो। पहली प्रॉब्लम क्या थी? सर सर्वर डाउन गया तो उसका F5 कैसे अलर्ट आएगा कि डाउन चला गया? पता ही नहीं चलेगा कि सर ट्रैफिक को कौन से सर्वर पे भेजें पहले? सर F5 के पास मैकेनिज्म होता है मॉनिटरिंग का, तो मतलब कोई भी लोड बैलेंसर उसके पास मैकेनिज्म होता है, क्योंकि वो एक तरह से इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो उसके पास मैकेनिज्म है कि कौन सा सर्वर डाउन गया, तो उसके पास अपन इनग्रेस और आउटग्रेस इंटरफेस पे वो बाइंड करते हैं कि कौन सा सर्वर बाइंड किया हुआ है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि लिंक डाउन हुआ है या सर्वर डाउन हुआ है, तो उसको इन्फॉर्मेशन रहती है। तो जो राउंड रॉबिन मेथड यूज कर रहा है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो उस हिसाब से वो ट्रैफिक डिवाइड करेगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है, सॉल्यूशन हो गया ना ये तो। अच्छा अक्षय राइट? राइट सर। हाँ तो अक्षय अभी तो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम पढ़ी है, ताकि तो हम उसको डिस्कस करें कि F5 ने। ठीक है चलो आपकी बात मानते हैं, आपने कहा है कि मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे करते हैं मॉनिटर? सर वो मुझे नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है क्योंकि बेसिक मैं थोड़ा काम करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस। हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग लेके बैठना चाहिए किसी सेशन में, तो उससे क्या होगा कि डिस्कशन जो होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, राइट? ठीक है, नाइस। अच्छा, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास था अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक प्रॉब्लम थी सर्विस मॉनिटरिंग, ठीक है। एक प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी मैंने यहाँ पे, मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ, और ना आप लोगों ने बताया मुझे। अब मुझे ये बताओ, सर्वर 1 दिख रहा है सबको? हाँ जी सर। अगर मैं मान के चलूं जो सर्वर 1 है इसकी 64 GB रैम है, ठीक है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 512 GB हार्ड ड्राइव है। सर्वर 2 की मान के चलो आप 128 GB रैम हो गई, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एंड 1024 मान लेते हैं TB आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है। सर्वर 3 मान लेते हैं 8 GB रैम है, 4 कोर या 2 कोर प्रोसेसर है, 512 GB हार्ड ड्राइव। सबसे सफिशिएंट सर्वर कौन सा हुआ हाई कॉन्फ़िगरेशन का? सेकंड वाला सर। ये वाला। अब मान के चलो ये सर्वर अगर सबसे सफिशिएंट है, सबसे हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन है, अप्रोक्सीमेटली इस सर्वर से डबल कॉन्फ़िगरेशन है, और इस सर्वर से 4 गुना कॉन्फ़िगरेशन सेकंड वाले ही है, राइट? तो इन कंपैरिजन अगर मेरा सर्वर 1 2 कनेक्शन को हैंडल कर रहा है, तो सर्वर 2 एटलीस्ट 4 कनेक्शन को हैंडल करना चाहिए। करेक्ट। और अगर सर्वर 3
भी मेरा 2 कनेक्शन हैंडल कर रहा है, तो ये कम से कम 8 कनेक्शन हैंडल करना चाहिए। बट अगर मैं राउंड रॉबिन यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या ये फिजिबल है डीएनएस के थ्रू? नो, कोई मैकेनिज्म नहीं है डीएनएस के पास कि वो इस चीज को कर सके कि भाई कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको कनेक्शन प्रोवाइड किए जाए। मेक सेंस? यस सर। एक और प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने नहीं पूछी। पूछो क्या? आप पूछो क्या? सर व्हाट? कौन सी? पहले इसको नोट कर ले। क्या? कैपेबिलिटी। रिसोर्स मैनेजमेंट, कैपेबिलिटी मैनेजमेंट। वो प्रॉब्लम क्या है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब लास्ट। एक कनेक्शन आया इसके पास, सर्वर 1 के पास, ठीक है। अक्षय का पीसी पे अक्षय ने f5.com खोल लिया। अक्षय बहुत ही क्यूरियस पर्सन है, ठीक है। उसका कनेक्शन चला गया सर्वर 1 के पास। अक्षय सुबह 9 बजे लॉगिन किया था। अक्षय ने 9 AM अक्षय ने सोचा था आज तो मैंने F5 का पूरे सारी की सारी चीजें रट लेनी है। मैंने आज F5 का हर एक कोना जो वेबसाइट है छान लूंगा मैं आज पूरा। शाम के 6 बज गए। अक्षय इज स्टिल ऑन द वेबसाइट। अक्षय ने बहुत सारी चीजें, एडमिन गाइड, मैनुअल्स और बहुत सारी चीजें डाउनलोड पे लगा रखी। दूसरा एक पर्सन है विकास। विकास इज वेरी लेजी पर्सन। उसने भी f5.com खोला। वो चला गया सर्वर 2 पे। डीएनएस ने सर्वर 2 भेज दिया उसको। विकास गया F5 पे, उसने फटाफट देखा, अच्छा हाँ अबाउट F5 डाउनलोड सेक्शन है, फीचर सेट है, एडमिन गाइड्स हैं, हाँ सॉर्टेड है, कूल है। विद इन 10 मिनट्स सेशन क्लोज्ड। थर्ड पर्सन आया, मान लो गोलू। गोलू अगर कोई साउथ इंडिया से है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा गोलू वर्ड क्या होता है, बट इन नॉर्थ इंडिया इट्स वेरी कॉमन नेम, राइट? गोलू। Golu is also like very typical person. What he did, he just wanted to see the f5.com. अच्छा, उसने f5.com हिट किया, वो आ गया सर्वर नंबर 3 पे। उसने कहा अच्छा ये वेबसाइट खुलती है, ठीक है, जब खुलती है तो शाम को देख लेंगे। विद इन 1 मिनट क्लोज्ड। अब हुआ क्या? आफ्टर 1 आवर सर्वर 1 के पास तो अक्षय अभी भी बैठा हुआ है और दबा के R&D मारे जा रहा है उस पर। सर्वर 2 आइडल है, सर्वर 3 आइडल है, राउंड रॉबिन चल रहा है। नंबर 4 आया रमन। अभी रमन का हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, क्या नाम था देख लेते हैं फटाफट। रोहित मान। रोहित तो क्वेश्चन, रोहित आप ही हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, रोहित मान लेते हैं यहाँ पर, रमन नहीं मानते, ठीक है, रोहित मान लेते हैं। रोहित ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन एंड क्यूरियस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसने बोला यार आज विकास ने बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ चीज थी, तो एक काम करते हैं, चलते हैं F5 पे, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। व्हाट ही डिड, ही वेंट टू डीएनएस एंड डीएनएस ने देखा कौन सा कनेक्शन है, 4 कनेक्शन है। चौथा कनेक्शन कहाँ जाएगा? सर्वर नंबर 1 पे। अब एक बात बताओ, एक बहुत ही टिपिकल डेटा ट्रांसफर तो ऑलरेडी हो रहा है ना सर्वर 1 पे, और सर्वर 2 और 3 तो आइडल बैठे हुए हैं। तो लॉजिकली क्या वो कनेक्शन सर्वर 2 पे नहीं राउट होना चाहिए था? डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरीके से होना चाहिए था ना। हाँ, या 3 पे भी हो सकता था, बट हुआ क्या? 1 पे चला गया। मान लेते हैं कुछ ऐसा सिनेरियो होता है
कि 60% जो केसेस होते हैं कनेक्शंस के और टिपिकल यूजर्स के, वो लैंड कर रहे हैं सर्वर 1 पे, और बाकी के जो 40% या 20% कर रहे हैं सर्वर 2 पे, सर्वर 3 पे। तो ओवर द टाइम क्या होगा कि जो एक्टिव नंबर ऑफ सेशंस होंगे सर्वर 1 के पास ज्यादा होंगे, सर्वर 2 और 3 के पास कम होंगे, क्योंकि इनके यूजर्स तो फटाफट आ रहे हैं, चेक किया और चले गए, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सर्वर 1 ओवर द टाइम हाईली यूटिलाइज हो जाएगा और ये बैठ जाएगा। अक्षय विल से अरे यार क्या घटिया वेबसाइट है, जब वेबसाइट इतनी घटिया है तो प्रोडक्ट कितना घटिया हो। अरे अक्षय इज IT मैनेजर इन अ कंपनी, ही विल से नहीं यार F5 नहीं लेना मैंने, सिट्रिक्स लेके आओ, नेटस्केलर लेके आओ। प्रॉब्लम है नहीं है? तो सॉल्यूशन भी तो लेके आएंगे ना हम। What it is called connection management। ये मेन प्रॉब्लम थी हमारी DNS की, या लोड बैलेंसर से पहले जो भी मेथड हम यूज कर रहे थे उनकी ये मेन प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक सॉल्यूशन आया F5 एंड इट सॉर्टेड आउट ऑल द प्रॉब्लम्स। क्या किया सबसे पहले, सर्वर पे पोलिंग स्टार्ट कर दी। क्या किया अक्षय, क्या किया? पोलिंग। Why he did, or sorry, why it did? To check the availability, whether the server is available to accept the connection or not. सर्वर 3 डाउन गया, पोल का रिस्पॉन्स नहीं किया, 3 पोल मिस हुए, it will remove server 3 from the list and it will start transferring the data between these two. Similarly, service monitoring. सर्वर अप है, सर्वर आपका अप है, यहां से आपकी 443 की सर्विस चली गई, इट नीडेड टू बी रीस्टार्टेड। 3 पोल किए, 3 पोल मिस हुए, लिस्ट में से हटा दिया, सर्विस अनअवेलेबल। इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग चली गई, सॉर्ट हो गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या किया, ट्रैफिक मैनेजमेंट या फिर ये आप कनेक्शन मैनेजमेंट ले सकते हैं। चलो ठीक है, इसको अलग अलग समझा देते हैं आपको। सर्वर 1 है, इस पे मैंने कर दिया 443, इस पे 443, और ये सर्वर डाउन नहीं है मेरा, इसको हम बना देते हैं ये अप है। तो इस पे भी मैंने क्या किया, 443 होस्ट कर दिया, प्लस मैंने इस पे पोर्ट नंबर 21 होस्ट कर दिया। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कि 443 का ट्रैफिक आता है तो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पोर्ट 21 का ट्रैफिक आ रहा है तो कहां भेजना है, जल्दी बोलो, सर्वर 3 पे। Definitely it will not send that port 21 traffic to server 1 or server 2. No, never. Traffic management sort हो गया, no problem, no problem. Service management, सर्विस की जो पोलिंग करी है इसमें, सॉर्ट हो गई कि हम हार्डवेयर को मॉनिटर कर रहे हैं, पोल कर रहे हैं, दैट इज ओके, वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग द सर्विस टू। अगर हमारे सर्वर पे 2 सर्विस एक्टिव हैं 44321, तो हम दोनों के दोनों सर्विस की मॉनिटरिंग करेंगे।
एंड अगर कुछ भी डाउन, अगर हार्डवेयर डाउन गया और 3 पोल के बाद रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो बिफोर रिमूविंग इट फ्रॉम द लिस्ट इट विल जनरेट वन अलर्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर दैट दिस पर्टिकुलर सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. Go and check. Service down गई, alert will get generated. This particular server, on that server, this particular service 443 or 21 is not responding. Go and check. सर एक डाउट है सर. हाँ सर जब कोई भी यूजर आए और उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करे, तब वो एफआई पता करेगा कि ये सर्विस डाउन है बोलकर, या फिर वो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में करता रहेगा. सम काइंड ऑफ अलर्ट मैसेजेस भेजता रहेगा. हाँ, वो ऐसा नहीं है like कनेक्शन आएगा तब वो चेक करेगा, नहीं. It will continuously will be doing it whether the service is up or not, up or not, up or not in a particular interval. उसका टाइम रेंज क्या होगा सर? टाइम रेंज आप कर सकते हो उसको मॉडिफाई. If you want it in 5 minutes, you can do it. If you want in 30 seconds, you can do it. Okay, got it. डिफॉल्ट टाइम भी रहेगा ना सर कुछ? डिफॉल्ट टाइम एज सच मुझे मतलब याद नहीं है, उसको इनेबल करेंगे जब हम लैब में, तो हम उसको देख लेंगे. ठीक है. ओके. वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 30 सेकंड्स होता है, बट एक्चुअल हम वहां पे देख लेंगे. ठीक है. ठीक है. सर्विस मॉनिटरिंग हो गई, पोर्ट मॉनिटरिंग हो गया, हार्डवेयर मैनेजमेंट हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया. सबसे हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्वर 2 की है. It will check and we can distribute the ratio based traffic. कि अगर मेरे पास 5 कनेक्शन आ रहे हैं, तो 1 कनेक्शन जाए 1 और 3 पे, बाकी के 3 कनेक्शन जाए मेरे सर्वर 2 पे. This we can do with F5. हो गया ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर. रिसोर्स मैनेजमेंट हुआ नहीं हुआ कि जरूर सर्वर हमारा जो हाईली कॉन्फ़िगरेबल था, उसको हमने क्या किया, उस पे हमने 3 कनेक्शन भेजे. रेस्ट जो सर्वर थे हमारे, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, इस पे हमने 2 भेजे, इस पे 2 भेजे, इस पे 1 भेजा. या फिर अगर 6 कनेक्शन है, इस पे 3 भेजे, इस पे 2 भेजे, इस पे 1 भेजा. वी कैन डू दैट. ठीक है. लास्ट, कनेक्शन मैनेजमेंट. इस पे 100 कनेक्शन लाइव हैं, इस पे 4 कनेक्शन लाइव हैं, ये आइडल है. बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट कनेक्शन विल लैंड ऑन सर्वर 3 until or unless it will be having 4 connection. अब जैसी 4 कनेक्शन होगा, इन दोनों के पास 4 कनेक्शन हो गए, ट्रैफिक विल स्टार्ट redistributing between these two. Not redistributing, it should be distribution. I'm really sorry. Distribution will be happening between these 2 servers until or unless these 2 will be having at least 100 connection. जैसे तीनों के पास 100 हुए, दोबारा फिर तीनों के बाद एक ही जाना स्टार्ट हो जाएगा. That's called connection management. It will maintain a table that which server is having how many active current session. Sorted है? सर एक क्वेश्चन था. सर जैसे कि हम F5 को, जैसे एक सर्वर डाउन गया, हाँ, और F5 में हमें पता चल गया कि सर्वर डाउन गया, तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि सर्वर क्यों डाउन गया? हम सर्वर टीम को इन्वॉल्व करेंगे इसमें कि सर्वर डाउन गया आपका. यस. तो अपने आंसर से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि सर्वर डाउन गया, तो देन सर्वर टीम विल चेक. अगर तो एप्लीकेशन डाउन है, एप्लीकेशन टीम विल बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है. अगर तो सर्वर डाउन है, सर्वर टीम विल बी इन्फॉर्म्ड.
या फिर एक चीज और भी हो सकती है, एक चीज और हमने प्रोवाइड की यहाँ पे, पूछो क्या। अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं फिर पूछ लेता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग पूछेंगे मेरे से, बट आप लोगों ने पूछा नहीं, मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। याद है हम डीएनएस यूज कर रहे थे? याद है नहीं है? जी सर, जी सर। तो हम क्या कर रहे थे, हम डीएनएस के थ्रू आईपी को रिजॉल्व करवा रहे थे 1.1 में, 1.2 में, 1.3 में। अब क्या हो रहा है जब F5 आ गया बीच में, तो अब जब क्लाइंट ट्रैफिक इनिशिएट करेगा तो कौन से ट्रैफिक पे कर रहा है? 1.1 पे, 1.2 पे, 1.3 पे? बताइए। वो तो सर्विस पे डिपेंड करेगा ना सर, जो सर्विस पे वो तीनों ही 443 यूज करनी है, मान चलो फिलहाल के टाइम पे। तो हम लोग जैसे सर्विस इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि राउंड रॉबिन मेथड है, उसके हिसाब से जाएगा। नहीं जाएगा, ठीक है। आप XYZ है, राइट? हमारा XYZ था ना? जी सर। ये कहाँ, इसको कौन डीएनएस पे क्या रिजोल्यूशन मिल रहा है इसका? पहले तो हम इन तीनों में रिजॉल्व करवा रहे थे, राइट? अब किस में रिजॉल्व करवा रहे हैं हम? कुछ है माइंड में? नहीं सर। बिग आईपी जितने मोस्ट लगा दो ना उतना मोस्ट कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चुअल आईपी। हम XYZ को डीएनएस एंट्री क्रिएट करेंगे एक पब्लिक आईपी में। अगर जो तो ये वेब सर्वर है, पब्लिक आईपी मान लेते हैं 91.198.201.38। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे क्लाइंट्स हैं वो XYZ को एक्सेस करेंगे, उनका डीएनएस लुकअप होगा इस आईपी में, इस आईपी की राउटिंग होगी, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, F5 पे लैंड करेगा, एंड देन F5 will resolve it into the physical IP and it will distribute it, and that conversion is called reverse proxy. याद है स्टार्टिंग बताया था what it will called? Reverse proxy. सर इसको नेटिंग भी बोल सकते हैं ना सर? हाँ, logically you are doing netting. Okay. Destination net. Okay. But concept is called reverse proxy. Proxy, forward proxy क्या होता है? अगर आईपी से डोमेन नेम पे जा रहा है तो नहीं, वो तो ARP हो गया। अगर तो आप सिक्योरिटी L1 से L2 के इंटरव्यू पे जा रहे हो, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, वर्चुअल आईपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होता है? जो हम लैन में यूज करते हैं कि मेरा यूजर कुछ चीज एक्सेस करता है, वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के पास जाती है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग यूजर्स आईपी, it will send its own IP to the internet, और जब रिक्वेस्ट आएगी वापस तो ये प्रॉक्सी के पास आएगी एंड प्रॉक्सी विल फुलफिल दैट रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रॉक्सी।
Here, when client is making a request to get a connection of xyz.com, instead of real servers, F5 virtual IP is accepting that traffic and it is passing to a real server that is called a reverse proxy. Make sense or not? Got it, sir. सर लैम लैंग्वेज में ये होगा कि जो यूजर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है कि जो F5 का वर्चुअल सर्वर है उन ट्रैफिक को पहले अपने पास ले रहा है, राइट? और उसके बाद वो फिर वो सर्वर्स को रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सर रिवर्स प्रॉक्सी ये हुई कि वर्चुअल आईपी से फिजिकल सर्वर को जो डाटा जा रहा है उसको कहते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझो, आने वाले टाइम में दे दे आप अच्छे से और समझ जाओ। ठीक है, सॉर्टेड है, कोई डाउट? सर आई हैव अ डाउट। तो सर हम सर्वर को वर्चुअल आईपी से कॉन्फ़िगर करेंगे क्या पब्लिक आईपी से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर? नहीं, व्हाई टू डू दैट विद पब्लिक आईपी? सर्वर डोंट नो हु इज माय क्लाइंट, client don't know who are my servers. They know one virtual IP. They will hit that virtual IP. F5 will take the connection. It will convert the destination and send it to real servers. तो सर्वर्स जो मेरे होंगे वो प्राइवेट आईपी पे रहेंगे। ओके, ठीक है? यस ठीक है। कोई और डाउट? तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? लेक्चर 1 और 2 मैं बोलूंगा अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी बेनिफिट्स F5 के रहते हैं और कुछ डिप्लॉयमेंट मोड में सोच के आया था कि आज मैं बता दूंगा, बट डिस्कशन थोड़ा सा मैंने अच्छे से किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बेटर तरीके से करूंगा तो जो कंफ्यूजन्स हैं आपके वो डाउट क्लियर होने चाहिए, राइट? तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अच्छे से,